They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that, with His help, the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or, in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. May God bless the brave men and women of America's armed forces. May God bless the United States of America. May God bless you all. Thank you. From American President Donald Trump, even as these strikes have been launched on Iran by America and Israel together, very clearly saying, Gauri,
that for the people of Iran, this moment of reckoning is here. This is your chance to seize your freedom. We are striking at the Iranian regime. Maral Gholampour, correspondent of NDTV, is live with us from Tehran, the entire NDTV team. But let's just dissect what has been said. Just hold on for half a second, because I think what I'd like to just repeat for our viewers for half a second is the key message of Donald Trump over there was right at the end. He stole the Iranian Revolutionary Guard. Immunity or death, lay down your arms right now, number one. Number two, to the people of Iran, take over your government. Number three, I, as President of the United States, am giving you what you want, something that will never take place in generations. So we now know what the motive of these attacks was. It was a decapitation strike, possibly a strike meant to bring down the Iranian regime. This is a regime change operation. Yeah. That's Time how I to would seize actually your characterize destiny. this. Very Shiv, would you agree? significant what the American president said. Time to seize your destiny. That's the message to the people of Iran. This is a moment of action. Don't let it your initial thoughts, Shiv, your initial thoughts on this. This is a regime change operation. Yes. It's nothing else but that. He's made it absolutely clear. He's said that we will not stop until this regime is destroyed and its capacity to strike back is completely obliterated. He's literally ended his speech with a call to action to the people of Iran, saying, this is your chance to seize your destiny and take over the government. I want to know what Maral thinks right now. Maral is our colleague. She's in Iran right now, in Tehran. Maral, you are Iranian. You're an Iranian citizen. We want to know what you think of what President Trump has just said. Well, I was really and shocked because for the past few weeks, I'm sure you have already covered those stories coming out of Iran that about 40,000 people or more have been killed during the protests. And at that time, President Donald Trump, he sent us a message through social media, and he said, help is on the way, go and take over the government institutions, and the help didn't come for some reason. And people in Iran, they got slaughtered, and it has been really heavy and really a sense of being vindicated among Iranians for that scenario that happened. And now this is happening. What I can think of really makes me also worried, but at the same time, probably hopeful, because it can be a real opportunity for the opposition and some Iranians who are unhappy with the situation to change the situation and change the regime. But on the other hand, there is going to be a bloodbath. So we really need to wait and see. But what I got confirmed news is that about 7 missiles have been landed in the area that the house of the Supreme Leader is, and also the attacks that have been happened in other cities. Apparently, they have been on some government buildings in Iran, in Tehran, also in the south of Tehran. Some ministry buildings, they have been attacked. So it seems to be at the moment a very contained attack, but we will see how it's going to develop, because unless they are going to attack the military forces, the IRGC buildings, and decapitate them, as you said, I don't think that Iranian people will have a good chance. But we shall see what's going to happen. I think the one thing that's more than sure that soon the internet in Iran will be cut off, and we should get ready for that. At the moment, some even phone lines, some cell phones are disconnected as well. Okay, so there's a problem of connectivity there, but there are just two very important things that we must tell our viewers. In 1979, Shah of Iran made way for the Khamenei to come in. And now you have Donald Trump saying very clearly that he is now backing a regime change. There have been, about 32,000 protesters, as far as Donald Trump is concerned, who were killed by the Iranian regime. He, in fact, also categorically told Khamenei that if at all even a single protester is executed, then he will take commensurate action. Now, in the wake of all of that,
Now you have Donald Trump being absolutely clear this is a regime change operation. Does that mean Raza Pahlavi is going to come? Does that mean that there will be a transition towards another government? All those are big questions. But what it also means is that this is not a one-off operation. What Donald Trump is hinting at is a complete transition and a regime change that he wants. Two big updates coming in from Iran, where you have the head of Iran Security Committee saying US and Israel have started on a path which is no longer in your control. Reports from within Iran also saying that the president is safe in the attack that has taken place, in the operation that has taken place so far. The president has been unharmed. And this part that we are stressing again and again here on NDTV, the fact that this is a regime change operation, right at the end of his speech, the last three paras spoken by Donald Trump, extremely significant, and he addressed them directly, Vishnu and Shiv and Gauri, to the people of Iran, where he says, finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home, it's very dangerous outside, bombs will be dropping everywhere, but when we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Vishnu. But Padmaja, if I can just come in for half a second, what you mentioned is so critical because that's what this is all about. And the reason we want to focus a little bit about this is because there was never any idea, there was never a sense of why America would necessarily be doing this. If they have now reached the conclusion that they can push for regime change, then it comes despite any observable movement by American ground forces. They believe that airstrikes alone, possibly decapitation strikes, can result in a regime change. This by itself is, gives you an idea of their thinking. But this is a high stakes and a very dangerous move. Never in military history, to the best of my understanding, has something as large as this sort of decapitation strike taken place by the use of air power alone. No boots on the ground, just air power. That becomes extremely, extremely complicated. Padmaja. In fact, there is more reactions coming in. The exiled Iranian Raza Pahlavi, who Gauri was just talking about, Gauri, has also now reacted, saying that Iranians should take their country back. My dear compatriots, moments of destiny lie ahead of us. The aid that the President of the United States promised to the brave people of Iran has now arrived. This is a humanitarian intervention and its target is the Islamic Republic, its repressive apparatus and its machinery of slaughter, not the country and the great nation of Iran. You have sworn an oath to protect Iran and the Iranian people, not the Islamic Republic and its leaders. Your duty is to defend its people. So now a multi-pronged, basically call to the people of Iran that this is your moment. You are getting the assistance of the people of the United States, the government of the United States, and Israel seize the moment. Indeed, that is what it's now going to be. It also means that, you're talking about a politico-military operation. That is what it is. The military aspect, as Vishnu was clearly pointing out, how it can pan out. But the ultimate objective really is now for a political transition to take place. And that has been the commentary that has come from Donald Trump's administration the last 8 weeks. Not just a couple of weeks, but last 8 weeks, ever since Iranians came out on the streets in mid of December protesting economic issues, but then it soon became much bigger than that. And now you have even, Raza Pahlavi talking about it. You had Donald Trump's entire 8-minute message being absolutely clear. A call to action, as was very clear, that he wants Iranians to seize this opportunity, and he says it's a generational opportunity. And I think that's the single biggest aspect, Shiv, where he said this is a once in a generation opportunity. Seize this moment. You've not had America back you in the past. It is doing so today. No other president like me has backed you up. Seize this opportunity. So that is what this is now going to be, a complete political transition that America sees in Iran. You're absolutely right. And I think the context for all of this is... Sorry, Shiv, go ahead, Yeah. No, go ahead, Vishnu. These pictures on your screen, which we've got numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, this is really significant because this shows the KC-135 air-to-air, aerial refueling tanker for air operations by either the Israelis or the Americans to take place at the scale at which we might now expect over the next several days. Without this, you can't fight a war. These enable American bombers and particularly fighters
it gives them the range to actually refuel mid-air so that they can carry on with their strike operations and with what will be air superiority operations over Iranian airspace, as we saw the Israelis being able to achieve a year back. These are images from Israel, as I understand it, and these are it's Ben Gurion International Airport, where a lot of these aircraft have been positioned. Shiv. Very, very significant, Vishnu, and I'm glad that NDTV is able to decode these images in real time, because they are super crucial to what we're actually going to see next. So Vishnu talking about those mid-air refuelers is a critical element in how these offensive actions are actually going to play out. Gauri, to your point about the regime change and the call to destiny, and calling upon the people of Iran to seize what is in front of them. Remember that the. Okay, I think I've just got a call from our producer that Aditya has joined in, so I think we need to go to Aditya. Aditya, do you have something for us? Sorry, Well, yes, the Ben Gurion airport has been completely shut. The security is asking people to leave immediately. Air India has also cancelled their flight now. And it's important to mention here, Shiv, that the Air India aircraft is stranded now at the Tel Aviv's Ben Gurion airport. So whatever imminent strike will happen first perhaps near the Ben Gurion airport, because that's where the important and strategic American and Israeli aircrafts are parked, apart from other locations where there are iron domes and other important equipment that have been kept. There are iron dome batteries in different locations all across. But here there is a crisis that is unfolding. People are almost, the entire population is indoors right now. There's nobody on the roads here in Israel. They're possibly looking at a strike from Israel in the next 2 to 3 hours, from Iran in the next 2 to 3 hours. Shiv. NDTV is the only channel that is live from within Israel at this critical moment. We're getting you every aspect of this developing situation. Quick updates also, and you've got several statements coming in, Aditya, from Israel as well. Hospitals are operating in emergency mode. The patients are being transferred to shelters. Iran has already said that there will be consequences. What are the kind of preparations now underway to prepare for that? Well, certainly Iran is looking at a huge retaliation, Padmaja. You're right. There are several statements that have come in from the Iranian regime suggesting a huge retaliation in the next few hours. But there are massive preparations that have been underway, because remember, Israel and US have been preparing for this moment for perhaps weeks now, if not just last 1 month. There have been several important aircrafts as well as other things that have been taken care of by the Americans and the Israelis. At the airport right now, right behind me, I don't know, whatever you can see, there are multiple, at least 10 American aircrafts that I can see possibly that are parked at the Ben Gurion airport, and there are many more in other air bases all across Israel. So they're preparing for this retaliation. Of course, Homefront Command has also issued a notification asking people to leave, but it's Shabbat today. Shabbat clearly means, as per the Jewish religion, that people have to be indoors starting Friday 2 to 4 p.m. and till Saturday 6 p.m. For the next 2 days, there's a state of emergency that has been announced here by Israel Katz, who is the defense minister, and there are regular announcements being made at the airport that no flights will now take off or land at the Ben Gurion airport here in Israel. It's a very, very fluid situation, and NDTV continues to report live. Only Indian media network continues to broadcast from Israel as we try to see what kind of a retaliation will there be and how Israel prepares to strike back. Because earlier it was being said that this is merely a preemptive strike, but the scale and the magnitude of the attack clearly suggests that this is much more massive. Donald Trump's statement clearly also indicates, as Shiv mentioned, the main objective seems to be regime change, and this is also a message to the local population out there in Iran to come out on the streets and take back control. That's what Donald Trump clearly suggested, that we can do so much, but it is the Iranians who will have to now take back their government and hold democracy accountable. In fact, I think we should play out again what Donald Trump said, because the importance of that, the significance of that, the call to the Iranian people cannot be underscored enough. But a quick update as well of what we are learning right now. Iranian media is reporting that blasts have taken place in Isfahan, Qom, Karaj,
Kermanshah, and as the strikes are ongoing, these are the couple of locations that have been identified. What is the significance, Gauri, of these locations and of the timing? Why today? It also, as far as some of these locations are concerned, I'm just going to add one more bit in terms of in Tehran itself, there are reports indicating crucial ministries have actually been bombed, and that's Ministry of Intelligence, Ministry of Defense, Atomic Energy Organization of Iran, and a military complex as well. So that is the scale and extent at which very important sites have actually been identified and struck by Israel. Aditya is absolutely right when he says these are not just ordinary preemptive strikes. These have a very clear planning and a message there. And I believe now, Padmaja, that bite that we are talking about, that sound bite, that message from Donald Trump is ready. Let's play that out to understand what exactly is it that the U.S. operations are aiming to achieve here. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels and international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that... Okay. Let's get in Vishnu as well for more on this. Vishnu has a point to make. Go ahead, Vishnu, please. Guys, what I see this to be is a scenario which is a worst case scenario developing. The fact that Padmaja actually named 5 cities, including Tehran, which have now been struck. Yeah. So when Shiv and I were talking about this 1 hour back, or so, it was only Tehran that we had news on. And we were then thinking that perhaps this was a message to the Iranian regime that, look, be serious about the talks, otherwise we might do more. But the fact that they've struck 5 cities over here right now, they've struck major military centers, intelligence centers, etc., including strikes on close to the residence of Ali Khamenei, indicates what Trump has gone on to specify. And what has he said? Immunity or death for the IRGC, that's the Iranian Revolutionary Guard, the strongest part of their military. Lay down your arms,
to the people of Iran at a time when we've seen unprecedented protests over there, take over your government. This president, in other words, Trump, telling the people of Iran, this president is giving you what you want. With this having taken place, I would suggest that this is now an existential crisis for the Iranian regime, hence a worst case scenario where it is quite likely that we will see a major showdown which would involve ballistic missiles. Big story also is, finally, this operation has a name. Israel has named its operation against Iran Roar of the Lion. Israeli media is reporting that this name was decided upon by Prime Minister Benjamin Netanyahu. The IDF initially had a different internal name for the strikes, but that is what it is. In June 2025, the last IDF operation was called the Rising Lion, and now this is Operation Roar of the Lion. The coordinated strikes on Iran by United States and Israel, Gauri and Shiv, is Operation Roar of the Lion. And US named it Midnight Hammer when they struck with the B-2 bombers. So I want to know if there is a follow-up military action that US is now looking to build on, which of course will be named something else. We of course are waiting for those details to emerge. As things stand right now is there are three very important things we know. One is there are multiple strikes. It is at multiple cities. Isfahan is actually where the central nuclear facility of Iran is based. It was also one of the cities that was massively attacked last year in June. The uranium enrichment there is about 60%. And Intel reports had suggested it could go up as high as 90%, and which is when the Midnight Hammer actually took place, that operation that US had come out with. The second part is, as I said, we still don't know what will be the response from Iran. And I think that's the single important aspect where I want to bring in Shiv. No official word has come from Iran till now. There have been Iranian media outlets that have been saying and giving us details, but no official word from Iran till now. That's correct. And Gauri, two very critical points to look out for. In the last exchange of missiles between Israel and Iran, Israel had very specifically said that it had, completely damaged or put out of action many of the missile sites of Iran. And if you remember, Iran had very clearly hit back by saying that not only are its missile sites alive and well in different parts of the country, but that the attacks on Israel were actually proof that those missile sites were viable, were able to launch attacks, and many of them continue to exist even now. Remember, between last year and this year, between Operation Midnight Hammer and Operation Roar of the Lion, very interesting name. I'm not surprised at all that it was Benjamin Netanyahu that's come out with his name. That's totally in keeping with the kind of imagery that he wants for Israel's combat operations. This is something that remains to be seen as to how Iran actually plans to hit back. Iran's Air Force has been, as we know, pretty much put out of action in airstrikes. Many of its air bases have already been hit. We saw, a telling image of a MiG-29 in the air. We do know that the Iranian Air Force has, a handful of MiG-29. So a MiG-29 in the air, if that image is actually verified, Padmaja and Gauri, would suggest that some kind of a response has already begun. The fighters have been put out into the air as some kind of a preemptive action, or at least some kind of a show of strength. But I don't see any information so far. It's difficult to judge just based on video, but I don't see any indication so far of any kind of air defense network being activated. Usually when air defenses are activated, you will see a lot more action, as it were, in the sky. Now you've got 5 cities that have been hit. No missile attacks have been, reported, witnessed. No videos have emerged of any kind of attacks from Iran's side. And as you rightly pointed out, no official word has come out. I want to interrupt you for just a second, because the IDF has just put out information. The handle of the Israel Defense Forces has just a second ago put out information saying a short while ago the IDF identified missiles launched from Iran towards Israel. Defensive systems are operating to intercept the threat in the past few minutes. The Home Front Command has sent a precautionary directive directly to mobile phones in the relevant area. So just a second ago, here is what the IDF has said, that we have identified missiles launched from Iran towards Israel. Defensive systems are operating to intercept the threat. Shiv. So it's begun. I mean, just as we were talking about it, Padmaja,
the IDF is confirming that they've been able to detect Iranian missiles being launched from their silos in different parts of the country and heading towards Iran. This is playbook action. Iran just about 18 to 19 minutes ago had said a crushing response is imminent, and now they've got their missiles in the air. Now, one has to understand exchanges of this kind very, very carefully. The choice of targets that have been hit by Israel at this point of time, and presumably after Trump's speech, it's pretty clear that some of those missiles were also American. They may have come in from the sea. They may have been cruise missiles, as we saw in some of those videos. Now, the Iranian response has begun. It's probably going to be only a few minutes before we actually see video footage of those attacks, because missiles take, a few minutes, a handful of minutes to actually make their journey over into Israel. Israel's air defense network, unlike Iran's, Padmaja and Gauri, is one of the most state-of-the-art in the world. So I think even though it's daylight, we will have footage now of air interceptions of some of those incoming projectiles, missiles, ballistic missiles. The last exchange that happened also saw the use of hypersonic weapons, Gauri, as you reported, on fault lines as well, which means that this is going to be an escalation of the kind that will be even more than what we saw the last time. And the fact that this is existential, as Vishnu pointed out, that this is about regime change, it's about decapitation, Trump leaving nothing to the imagination as far as what he wants as the outcome of this operation, means that this is a very cornered and wounded Iran that has just begun its response. So two things I want to ask, and which is what our viewers should also know. I want to give a quick update. A couple of things that we are getting to know from Iran, and largely, like you said, attributed to the media there, because officially there has been no reaction so far. Again, they have reiterated that the president and the Khamenei are both in perfect health. They are in full health. The president was targeted in strikes. The ceremonial home of the Ayatollah was also targeted, but he was not there at that time. So he is safe. He has been whisked away. He is probably underground. That's point number one. The second, the US Embassy in Bahrain has issued a shelter-in-place order for all of its personnel. Missile fire detected from Iran. Israelis who receive alerts should go into safe rooms. That's the directive that has been issued within Israel. And sirens are now sounding across North Israel amid an Iranian ballistic missile attack. This is what the media in Israel, and like we were describing to you, it has begun, and the response has also now begun. Even as we were discussing it, the sirens have started sounding across the north of Israel. Got it? Indeed. And this is exactly how it played last year. It was only on the 12th day of the war between Israel and Iran that one had the B-2 bombers when the Operation Midnight Hammer was launched by US. There was a 12-day war which ended with the B-2 bombers striking those critical nuclear facilities in Iran. So are we looking at a prolonged phase here as well? And secondly, unlike last year, there is a very heavy deployment of the US in the region. And Shiv, I think that's a very important aspect of how US sees this military op from here on, because this is the single largest military deployment since the Iraq invasion in 2003. And that, I think, is going to be a very defining aspect of how Donald Trump's administration views America's military operation from here on. He's already said he wants a regime change. There's already a very heavy military deployment in the region already. There are, aircraft carriers have been moved in that region. And now how US responds to this is really going to be the defining aspect of ending this from here on. Gauri, we have to be very clear about one thing. One single carrier battle group is more than sufficient. It carries more than enough firepower, and weapons, including weapons of mass destruction, to completely obliterate large parts of Iran. So we've got the Trump administration sending 2 carrier battle groups, including the Gerald Ford carrier battle group, one in the Mediterranean and one in the Persian Gulf at this point of time, which means you have Iran facing American carrier battle groups, which are the sort of the pinnacle of military projection and strength of American power, on 2 flanks of Iran as we speak. And what this basically means is, and I can, I'm willing to put my money where my mouth is, Gauri and Padmaja, and say that at least some of the strikes that we've seen, captured in these videos in Tehran and elsewhere, some of these strikes have to have been
cruise missiles from one of these carrier battle groups. They couldn't have only been from Israel. They must have been some from the carrier battle groups as well. That's the reason why you've seen Trump weighing in and sort of taking ownership of Operation Roar of the Lion so wholly. But I think at this point of time, the retaliation is going to be the key area of focus. Okay. Remember that, and we'll have a map on our screens in just a short while. Vedika is going to be plugging in a bit as well. There is no shortage of American military asset power in this region. Should the balloon go up even further, should things escalate even further, and it's very unlikely that they will beyond a point, because Iran has a large conventional military, but even its reserves are going to be difficult to actually assess at this point of time. America has Iran completely surrounded, whether it is Qatar, whether it is Bahrain, whether it is Kuwait, whether it is Iraq itself, whether it is allied units within Syria, whether it is obviously in Israel, whether it is the Persian Gulf, the Mediterranean, Central Europe. Iran is completely surrounded. And remember, the Trump administration has also got friendly accommodation from Pakistan, which is a large neighbor of Iran. So don't miss that piece in what kind of combat we're about to see in case it comes to that point. All right, let me also bring in Anjana Shankar, who joins us live from Abu Dhabi. Anjana, how long do you see this going on now that we are already seeing a response from Iran? The latest that we are hearing is that missile fire has been detected, at least in the north of Israel. Thank you for having me. See, this is something which we have been expecting for weeks, if not months, and the military build-up, the threat, the diplomatic talks on one side. I think what is different now, when you compare to June, is on both sides there were diplomatic talks happening. If in June last year, if you remember, Iran was on the negotiating table and people were talking about peace, and there is a peaceful solution for this nuclear standoff. And that is when Israel attacked and then later US joined. And I think it is the same playbook that is happening now. The third round of negotiations got over. And for this time, yesterday, the Oman foreign minister, he spoke on CBS News and said, now there is light at the end of the tunnel. That's what everybody was hoping. But I think what is different now, and which we have to look out for, why this is a very dangerous confrontation at this time, is both sides got enough time to prepare for a long, sustained conflict. As Shiv said, we've seen that in the last few weeks how the US built up an armada of fighter jets and carrier ships were already trigger ready. But Trump kept talking about, I want a peace, this is what I prefer. Anjana, just stay with me for a quick moment. I apologize for interrupting you. I have a piece of breaking information coming in. Group Captain Augustine Vinod, an Indian Air Force veteran who was in the air nearby when flights began being diverted from Iranian and Israeli airspace, is live with me right now. Group Captain Vinod, tell us what happened. You're saying you were in the air nearby when these diversions began taking place. What did you see? What happened? At exactly 0637 UTC is when the closure NOTAM was issued. And I'm sure that the NOTAM is right now live on the websites of the Indian NOTAM website as well. The closure happened extremely suddenly, and aeroplanes which were transiting from west to east, especially from east to west, transiting over Iranian airspace, were asked to go via Afghanistan and go north hook. If not, then probably land at the closest base. So some of them diverted, and some of them who didn't have adequate fuel probably had to either land in Pakistan or in India. But that said, a couple of points quickly, taking a leaf shift from what you said. The long drawn-out war possibility looks like a remote possibility. What is of importance for us to understand is this 90% enrichment, did it reach 100% A? B, with the kind of delivery mechanism which adequately demonstrated by Iran, if any one small, including tactical nuclear weapon, flies towards Israel,
Israel is done for good for a long time to come, and I hope that doesn't happen. But that still remains. Conventional attack is like extremely, extremely likely. And like you said, from the carrier battle group, for the sake of viewers, I'm saying a carrier battle group is the carrier-borne ship as well as the 20 to 30 to 40 ships go together, like a pack. In that pack, you have a couple of, this is the first time, the couple of guided weapon frigates were also included. Earlier in the carrier battle group, you didn't note, post-Second Gulf War, there was no guided weapon munition frigates included in the CBG. This time there were two guided weapon frigates included, and those were the ones, in my opinion, fired the first shot. The ones across Hormuz, and I've written about it also. Hormuz holds a very important gateway, and if you notice, no US ship is entering Hormuz except a submarine which is going to Bahrain. So Hormuz, securing Hormuz, Strait of Hormuz becomes absolutely important for any further. I'm going to come back to you, Group Captain Vinod. Once you've, once you're in a place where you can join us live, I'm going to patch you back in. But I just want to remind our viewers, and we've got, the country's finest conflict reporting team live here, both in Israel. Aditya is on the ground there. In Iran, we have Maral, my colleague, who's live with me from Iran, with the only network that is reporting live from both Israel and Iran at this point of time. Very experienced war reporters and conflict crew in the studio. Myself, Vishnu, Padmaja, Vedika and Gauri are fronting this story, and I promise you that we will bring you only authentic information. There are sirens blaring in Haifa. That's the image you see on the bottom half of your screen right now. The other half is what's happening in Israel. Netanyahu, the Prime Minister of Israel, has just issued his first statement on Operation Roar of the Lion and has confirmed what NDTV told you first, that this is a joint operation, a joint offensive strike by both Israel and the United States. That had become pretty much clear once Trump had spoken. But Operation Roar of the Lion in full force. Listen into these pictures coming in from Haifa in Israel. Reporting that so far there are no reports of injuries following Iran's ballistic missile attack on North Israel. At least 2 missiles were fired, with one reportedly striking an open area. The IDF also says it has detected another launch of ballistic missiles from Iran. Sirens are expected to sound in the coming minutes as well. So that's what the information that we are getting constantly from both sides. No reports of injuries following Iran's ballistic missile attack on North Israel. At least 2 missiles were fired and one reportedly has struck an open area. And these sirens that you hear going off are from Haifa. So early in the morning, where India time, we had the Operation Roar of the Lion being launched by Israel and America together. Benjamin Netanyahu, in fact, has also put out the first statement on this operation. So first, and the manner in which it was done, Gauri and Shiv, first you had Donald Trump making a statement saying this is a regime change operation, saying this is a moment of destiny for the people of Iran and they should seize this moment. Yes. And now the first response from Israel as well. Let's get in Ollie Barrett as well. He's joining us for more on this. Ollie is joining us from London for a quick update about how well all NATO allies of US are seeing this. There were talks taking place. They were taking place in Geneva. They were taking place elsewhere. Oman was the one mediating through, and now you have US and Israel launching these strikes. Ollie, what's the word coming in from some of NATO allies of the US?
Well, I think for now, NATO allies of the US here in Europe are really working out exactly what is taking place before they issue too many detailed responses. But we have had some responses coming in already from some interesting people who are qualified to talk on this, such as Grant Shapps, for example, the former UK Defence Secretary, held a number of roles in the Conservative administrations before Labour got into power. He says this: Trump is right to attack Iran's evil regime and their many proxies, but Grant Shapps says, I find it deeply troubling that the UK may have failed to allow the US to use our bases and assets to contribute to the destruction of Iran's ballistic and nuclear missile program. That follows reports that here in the UK, the Prime Minister Keir Starmer and his administration had potentially been resisting American requests to use bases such as Diego Garcia, perhaps RAF Fairford here in the UK, to be involved in a potential attack on Iran. So we will, that will certainly be factored into any response that we see from the UK, or indeed questions that are asked of the UK government when they respond to what is happening. The UK had been saying that it wanted to see diplomacy succeed in this regard, and that was a similar refrain that we were hearing from other European countries as well. We have some words from Carl. Just a second, I want to tell this to our viewers, and you know, Shiv, this is something that we've been speaking about as well. Diego Garcia, its relevance, its significance for Trump's scheme of things. He wanted to use that base to attack Iran, something that Keir Starmer said, no, it's not happening. The fact that that attack has taken place, the fact that Diego Garcia has now split the US-UK alliance down to the middle, is now going to be the other aspect of how this is going to play out diplomatically as well. It's going to play. It's already playing out diplomatically, as a matter of fact. You know, ever since the whole Mauritius thing came into Trump's line of sight. It's not like it's something new, but when something lands on Trump's table, then it becomes a live diplomatic issue in Trump's world. So the Diego Garcia issue has been a festering kind of issue between the US and the United Kingdom for a long time. But Trump obviously has taken a much more strident view, and it's become a point of contention. In fact, let me bring Ollie back in, Shiv. Sorry to interrupt you, because Ollie, the first statement that we're talking about coming from Benjamin Netanyahu, where again he has underscored what President Trump said. The time has come for all segments of the Iranian people, Persians, Kurds, Azeris, Baluchis, Awazis, to throw off the yoke of tyranny and bring about a free and peace-loving Iran. I appeal to you, citizens of Israel, to listen to the instructions of the Home Front Command. So basically, now both countries coming together and saying, we've given you the backing that you needed, that you have asked for all of this while. Now it's up to the people of Iran to take things into their own hands. The messaging is absolutely clear, Ollie. I think so, and that's one of the reasons that the framing of the European response will take a little bit of while to work out, in the sense that it is clear from what Donald Trump is saying, as you quite rightly say, that he is seeing this as a moment of regime change, and that will therefore factor into how European countries view what is happening, but also how they view the potential fallout in Iran, but also the wider region as well. There will be all sorts of fears about contagion in the region. From a UK perspective, of course, they had already evacuated embassy staff from Iran. They had already told people not to travel to Israel and Palestine unless it was absolutely necessary. So the travel advice from the UK had changed in the days and hours leading up to what is now unfolding. But I think you're quite right to point to the fact that Donald Trump making it very clear that regime change is part of the ambition here, is something that's going to be factored into the response that comes from his NATO allies. All right, in fact, more news coming in. An Iranian missile has reportedly hit areas inside occupied Palestine. That is the latest that we are hearing. What do you make of the kind of response that we see so far? Israel has said, Ollie, that no damage has been done so far. But now, in addition to the north of Israel, sirens are being sounded in the central part of Israel as well. That's the very latest that we are hearing. Yeah, and
Certainly some European diplomats had feared that Donald Trump had effectively backed himself into something of a corner here by threatening military action, seeing the build-up of all these military assets, and if he didn't get what he wanted from negotiations, that military action of some sort that even perhaps some of his own administration weren't particularly keen on was going to be something that Donald Trump effectively had to carry out. And so that's why European countries were so on alert for this to take place, because they viewed it as a very real possibility indeed. Going back to some of the comments that we're hearing online, for example, Carl Bildt, the former Swedish Prime Minister, says this is a war of choice. He says, and he points to the fact that Donald Trump had previously already claimed that Iran's nuclear program had been obliterated by the last round of military strikes. So that's one question that European allies may have as well. He says, Carl Bildt, the only aim could be regime change, and he says sustained acts will bring chaos and destruction. So that's the way in which some European diplomats are viewing what is unfolding. יימשך ככל הדרוש. במשך 47 שנים קרא משטר הרשע באיראן מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא רמס את אזרחי ארצו. הוא הטיל מורא על עמי האזור. הוא פרס רשת טרור מסועפת בעולם כולו. הוא השקיע משאבים עצומים לפתח פצצות אטום ועשרות אלפי טילים שנועדו, כפי שהוא הגדיר את זה, למחוק את ישראל ממפת העולם. הוא חימש גם את שלוחות הטרור סביבנו, בעזה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, ביהודה ושומרון. והוא הקיז את דמנו. אבל אם מישהו היה צריך הוכחה נוספת, לגבי טבעו הרצחני של משטר... Basically, it's the first statement from Benjamin Netanyahu where he said, my brothers and sisters, citizens of Israel, just an hour ago, Israel and the USA launched an operation to remove the existential threat posed by the terror regime in Iran. I thank our great friend, President Donald Trump, for his historic leadership. For 47 years, the Ayatollah regime has been shouting, death to Israel, death to America. It has spilled our blood, murdered many Americans, and massacred its own people. This murderous terror regime must not be armed with nuclear weapons that would allow it to threaten all humanity. He then goes on to say, our joint action will create the conditions for the brave people of Iran to take their fate into their own hands. The time has come for all parts of the Iranian people to cast off the yoke of tyranny and bring about a free and peace-loving Iran. That is the statement which has been released now by the office of Benjamin Netanyahu. The leader of opposition had spoken in the morning that all of Israel stands as one in the face of aggression by Iran. What's happening right now in Tel Aviv? Let's go straight across, in fact, to the report sent by the only journalist from India on the ground currently in Israel, Aditya Rajkot. Well, yes, the Ben Gurion airport has been completely shut. The security is asking people to leave immediately. Air India has also cancelled their flight now. And it's important to mention here that the Air India aircraft is stranded now at the Tel Aviv's Ben Gurion airport. So whatever imminent strike will happen first perhaps near the Ben Gurion airport, because that's where the important and strategic American and Israeli aircrafts are parked, apart from other locations where there are, iron domes and other, important equipment that have been kept. There are iron dome batteries in different locations all across. But here, there is a crisis that is unfolding. People are almost, the entire population is indoors right now. There's nobody on the roads here in Israel. They're possibly looking at a strike from Israel in the next 2 to 3 hours, from Iran in the next 2 to 3 hours. All right, so the situation is fast developing. Iran has now fired missiles at north and central Israel. Israelis in the area have been told to go to safe rooms. Trump has already declared major combat against Iran, and the ultimate goal is to topple the current regime there. Ollie continues to be live with us from London. Help us understand, how do you step back from something like this? Clearly now the time for diplomacy, for any kind of negotiation, is over. Again, entreaties are being made to the people of Iran to throw away the current regime. What if that doesn't happen? What if there isn't a spontaneous civilian uprising? Ollie.
Yeah, and the Americans, it will be hoped by their European allies, have thought all of that through, but there will certainly be concerns about unintended consequences of all of this. I mean, just as one example, what happens over the border in Iraq, for example. There are Iranian-backed militia and groups in that country. What will we see in terms of regional overspill? That will certainly be one of the real concerns for allies of the United States at this point, but also European countries, of course, have citizens in the region that they will be very worried about. They will be having to advise on an almost hourly basis in the hours and potentially days to come, because it is all so unpredictable exactly what happens inside Iran, but also exactly what happens in the countries that surround it and in the wider region. And what exactly is, what are the US warships that are around Iran at this time? The significance of that, we've been speaking about that for some time now. To tell you further about that, let's in fact cut across to Gauri, who will help us understand what is the kind of deployment right now. In terms of the entire region, what needs to be now understood is that unlike last year, unlike the 12-day war that took place last year, there is heavy deployment by US this time. In fact, this is the single biggest deployment since the US invasion of Iraq in 2003. And when we put that out, that is when we explain to our viewers exactly the extent to which US has been able to put its resources in place. There are now more than one aircraft carrier that is in place here in the entire region. And also remember, there are also multiple air bases that US has here, and in the backdrop of that, the heavy deployment that is there in place, that changes the entire military calculations, the tactical calculations and strategies that America is looking at this time around as compared to last time. And I think putting that out is going to be extremely significant to tell our viewers. We've got now the Department of War saying that America has called this Operation Epic Fury. So Israel calling it Roar of the Lion. The Department of War saying this is Operation Epic Fury. Okay, so there is now a name as far as what the Americans see this military operation is. As I said, last time it was Midnight Hammer. This time, of course, they've also named it, and that explains how they are viewing this situation. When you talk about a regime change, and I think that's important, but when you talk about a regime change, you're not talking about a single day, single strike military op. It could be longer. It may be multiple, and I think that's the single important distinction that needs to be maintained. And we're going to put that out on our screens in just a bit, Padmaja. But there is more breaking news that's coming in that you want to take, which is about those multiple... Absolutely. Missile alerts have been activated across Israel. Incoming missiles have been detected. Footage is emerging that indicates North Israel's air defense system are battling the onslaught of Iranian strikes. Constant updates now. So in the morning, we had all of these images coming in from within Iran, where you had 4 to 5 different locations that were struck as a part of Operation Roar of the Lion. And now the response from Iran, constantly we are hearing these air raid sirens going off in Haifa, in Galilee, in places which are in central Israel, which are in the north of Israel. And sirens have also been sounded in the US naval base in Bahrain as a retaliatory attack by Iran is suspected there. Missile alerts, like we just told you, have been activated across Israel as missiles are detected there. Some footage emerging that has indicated North Israel's air defense system battling that onslaught of Iranian strikes. Anjana also continues to be live with us. What do you make of these fresh images, the targets that have been chosen? Anjana. See, what we are seeing now, as your colleagues have discussed, there's a lot of contradictions in the story that have been playing out in last few weeks, and I think Trump has finally decided, he seized the moment that this is either now or never. And what I was saying earlier was, unlike the earlier June conflict, Iran had enough time to prepare, and they have prepared, and we have seen how there was a military naval exercise and they have shown that they are capable of, and they will block the Strait of Hormuz if
push comes to shove. And one thing that I think through these images that we are seeing now, that immediately there is a retaliation from Iran within minutes, within less than an hour, which is clearly showing that Iran is ready to retaliate. All right, and these images, if we can just pull up this map for a second, Iran's response has started. The cities, and if you could comment on the importance of this, Tel Aviv, Yafo, Haifa, Irbid, Gaza, Beersheba, all of these places can be seen in red. You got Galilee, Corey. Indeed, you have several of those strikes that are taking place right now. And while we come back to the larger story where Trump did talk about call to action, it is still unclear, and we have no, fresh updates coming in right now in terms of whether Iranians have actually taken that Donald Trump's call to action or not. But what we show right now to you is exactly the places that have been struck by Israel today. It was termed as preemptive strikes, but as you can see, it is far more than that. Multiple cities where you have seen it is taking place in Tehran, where the Iranian intelligence ministry, the Iranian defense ministry, and there is in fact a military complex also that has been attacked in Tehran. In addition, there is Qom, there is Karaj and Kermanshah. In addition to this, there is also the Isfahan city that has been attacked. Again, central Iran, very important because that is where the nuclear facility is armed and located, and 60% enrichment has already taken place of uranium in Isfahan, the reason why the attacks took place last year. Let me now tell you exactly the kind of mobilization that US has had in this region. Middle East is a place where US does have very large presence. Whether you take the Fifth Fleet in Bahrain, whether you take Qatar Air Base, it has a very large presence. In addition to that, Donald Trump has actually mobilized massive amount of additional resources. So if it were to look at cornering Iran, then there from the Mediterranean Sea, there is the Gerald Ford, that is the aircraft carrier that has been mobilized. In addition, there is the Roosevelt, and then there is Durbert Black as well coming in from the Red Sea. On the other end, from the Persian Gulf, there is USS McFaul, and the other aircraft carrier, that's Abraham Lincoln, that is going to be all the way from Arabian Sea. So if you were to talk about the military might, the mobilization as far as America is concerned, they actually have Iran covered from several areas. Do not forget, you have Frank Peterson and Michael Murphy as well coming in from Arabian Sea. So Arabian Sea, Persian Gulf, Mediterranean Sea, all the way till Red Sea. So if US were to look at complete mobilization, I think this is the picture that it emerges. All right. In fact, just to bring our viewers up to speed with what we are learning right now, there are sirens being heard across Israel amid that ballistic missile attack. This is the report coming in from the media in Israel. A single missile from Iran has been intercepted by air defenses. No injuries so far. Fresh sirens being heard in the north. Sirens heard in Tel Aviv as well and across central Israel amid that missile attack. And naturally, all of Israel has been told to be near bomb shelters, to be cautious, no injuries. And that's important to note. So far, no injuries. But what remains important in all of this, that so far we have got no official confirmation or statement from Iran at all. We've heard Donald Trump speak. We've heard the leader of opposition in Israel speak. We've heard the IDF responding. They are claiming that significant damage has been done. But so far, Shiv, we've heard nothing at all from Iran. Clearly, the missile retaliation has begun, Padmaja, like you rightly pointed out. I'm getting at least 3 inputs from open source intelligence at this point of time that Israeli air defenses have been able to, knock out Iranian missiles in 3 places. There are 2 places where Iranian missiles have hit in some open areas, which is very much like the last time. Remember, the last time missiles were exchanged, Iran had said that it was deliberately firing missiles into open areas so as not to cause civilian casualties. But at that time, as things escalated, Israeli cities were also hit and there were some casualties there. At this point of time, the imbalance as far as military power is going to be hugely stark. It's not even worth comparing because Iran, while it does have
a reasonably good conventional capability in terms of missiles, in terms of long-range rockets, also drones and loitering munitions. Padmaja, it is no match against Israel alone, and it is most definitely no match against Israel supported by the United States, which it always is. And if you've got two carrier battle groups, and let me just describe a carrier battle group. A carrier battle group is an aircraft carrier which itself has, a fleet of F-18 fighter aircraft, F-35 fighter aircraft, which are capable of launching long-range missiles. These carrier battle groups also have ships which have cruise missiles and long-range weapons. So you've got floating airfields, you've got the Israeli military, you've got cruise missiles, you've got submarines in the Mediterranean as well as the Persian Gulf, armed with long-range Tomahawk cruise missiles, which have been used in the past. So Iran, if Iran is going toe-to-toe with both these countries as far as a military confrontation is concerned, it will come very, very quickly to an end. Iran, remember, does not have nuclear weapons, and that's what this entire issue has been sort of pinned upon, that Israel cannot allow Iran to have nuclear weapons. But at this point of time, it looks like things are only going to escalate further. No information yet, one final point, Padmaja, of any drones being used so far, but I'm expecting that will also happen. Also remember that Iran has proxies in different places, including Lebanon, including Yemen, and Syria as well. So whether they get pulled into this fight also remains to be seen at this point. A quick word, Shiv, as with everything in our country, whether it happens in Iran, whether it happens in Israel, whether it happens in Australia, domestic politics kicks in, and already the reactions, the political reactions to what is happening even as we speak have started. The Congress party is saying Modi's friend Benjamin Netanyahu has launched an attack on India's old friend Iran. This comes barely 2 days after Modi returned, after all the grandstanding about stopping the Russia-Ukraine war. Why did Modi not use his Israel trip to de-escalate tensions between Israel and Iran? Or worse, does he endorse this war? Jairam Ramesh also saying 2 days after Mr. Modi celebrated his visit to Israel, Israel and the US have begun their joint assault on Iran. This was fully expected given their military build-up in the last few months. Mr. Modi chose to go to Israel. Very, very hot button issue, by the way, because if you remember, even as the build-up, Gauri, was taking place, there was a lot of reservation expressed about India taking a stand, or seemingly taking a stand, by the Prime Minister visiting Israel, and whether this threatens the age-old friendship that we have with Iran. And indeed, in such a volatile situation, the kind of political reactions that have come in, of course, one may say that should there be more caution in coming out with these statements at this particular time remains to be seen. But more news that's coming in right now is that the Iranian axis of resistance that operates in that entire network, particularly the Hezbollahs in Lebanon, have now vowed that they will be attacking. In addition to that, the Houthis have said that they will be attacking in the Red Sea. Houthis do have long-range attack capabilities, something that they demonstrated last year. And so in the wake of that, there is an expectation that this entire region is going to be more volatile as well. In fact, let's get in an update from Maral as well. Maral Garampur, who is in Tehran, giving us a sense of how things are looking right now as they continue to remain extremely volatile, and there's an expectation of these hostilities to in fact only escalate. Maral. Yes. Fortunately for now, we don't hear any more explosions. It's not really clear if those explosions were just some limited attacks on particular buildings and organizations, or if they're going to expand to more areas in the coming hours. But we are basically ready for everything and anything. It's really difficult to say what's going to happen next for the Iranian people, but we've been preparing for this day for at least past few weeks. Everyone has been gathering foods and necessary items to keep them for at least a week or 2 weeks of war in the case it's going to happen. But now that the attacks have started in the bright daylight, we're just waiting to see if it's going to
expand more, or we can just continue our daily lives. But unfortunately, I haven't found time to just go on the news and check the news yet. You guys over there probably have the better sense of everything happening, because everything just happened very quickly. I was just at the market. I saw a jet passing through the sky, and everyone was looking at the sky, not really shocked because we somehow were prepared for it. But everyone is waiting to see where the bomb's gonna land, when it's gonna hit. So at the moment, currently, we don't really have the news about the exact location or the name of the buildings, but the idea is that, as they have previously mentioned, it is going to be probably locations related to IRGC, to the Basij, probably to the heads of the state, the formal state, which we call Pasteur Street. Pasteur Street is where the house. Well, actually, I was just checking to see if I can show you the explosion from my rooftop, but unfortunately, you cannot see it from here. I'm located in the north of Tehran. But what's happening? People right now in Tehran are evacuating the buildings and locations that are close to IRGC buildings and also government buildings. So basically, people are just going to their homes, taking shelter in their homes, because at the moment there are no allocated places for Iranians. It hasn't been announced by the government to take shelter in. All right, so the viewers who are just joining us right now, the big story is that Operation Roar of the Lion has been launched by Israel against Iran. The idea is very simple. You have a regime change operation underway. It has been made amply clear by the President of the United States. You have Benjamin Netanyahu who spoke, and basically the message was unequivocal. We have given you the firepower. It is a repressive regime. You have wanted to overthrow it. The people now need to rise up and throw off the yoke of this regime. And joining issue as well was Reza Pahlavi, where he exhorted the people of Iran, cutting across communities, asking them that for far too long you have been oppressed. Now you are getting the kind of international support that hadn't been given so far. As the President of the United States said, this is your moment in destiny. Seize it. Let's listen in to what Reza Pahlavi said. هم میهنان عزیزم، لحظاتی سرنوشت ساز پیش روی ماست. کمکی که رئیس جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است و هدف آن جمهوری اسلامی دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن است، نه کشور و ملت بزرگ ایران. All right, so they're basically saying, my dear compatriots, in fact, let's just quickly translate for you what is being said over there. He says, moments of destiny lie ahead of us. The aid that the President of the US promised to the brave people of Iran has now arrived. This is a humanitarian intervention, and its target is the Islamic Republic, its repressive apparatus and its machinery of slaughter, not the country and the great nation of Iran. But even with the arrival of this aid, the final victory will still be forged by our hands. It is we, the people of Iran, who will finish the job in this final battle. The time to return to the streets is near. Now that the Islamic Republic is collapsing, my message to the country's military, police and security forces is clear. You have sworn an oath to protect Iran and the Iranian public, not the Islamic Republic and its people. Your duty is to defend the people, not a regime that has taken our homeland hostage through repression and crime. Join the people, help bring about a stable and secure transition. Otherwise, you will go down with Khamenei's sinking ship and his regime. And my message to the President of the United States, President Trump, is this: that the noble people of Iran, despite the savage repression and massacres of this regime, stood firm with courage for nearly 2 months. But, Gauri, that begs the question, is
issuing these statements from exile. But if there is a regime change operation, will he then subsequently take on a role there? What happens to Iran after that? Is Reza Pahlavi going to be the next figure in authority? You know, Padmaja, Reza Pahlavi became the face of those protests which rocked Iran for about 2 long months. Hundreds of people were in fact attacked, and when it happened, it seemed like Reza Pahlavi was the face of the transition. He continues to be in exile, but it didn't happen because there were many sections within the American polity who felt that is it still good to back Reza Pahlavi, or should we identify a new person who could really essentially be the new Iran post the transition? That's the reason why Reza Pahlavi has been important. But is he really that change agent? That's the larger question. And you know, everyone's talking about a transition, and I want to bring you in on that, Anjana. But before that, the fresh statement that has been issued by the Israeli Defense Forces, they've said the public is requested to continue to follow the instructions of the Home Front Command. The public is requested to stay in protected places until official notice. The aerial defense array is currently identifying and intercepting threats. Everyone, Anjana Shankar, is talking about a transition, but transition to what? Anjana, can you hear me? All right, we'll try and go across to Anjana in just a second. We also have Rachel Lester, former IDF spokesperson's unit soldier. Rachel, thanks very much for speaking to us. First, can you tell us about what you see right now? What is the latest information that you're getting? We are getting news over here of how in the north and center of Israel, the alarms have gone off, the sirens have gone off, and missiles are being intercepted. What can you tell us? Hi, thanks for having me on. I just want to clarify that I'm a former IDF spokesperson's unit soldier, and I'm happy to be talking to you today. So yeah, we woke up this morning to massive sirens on our phones from the Homefront Command app, and we are seeing videos and photos coming out of Iran with smoke and explosions, the ones that you have on the screen at the moment. So far, I've had to run to the shelter once. There have been sirens sounding across Israel this morning, and we are all just holding tight, waiting to hear what's going to happen next. Which brings me to ask Rachel that unlike last year, this time there is a lot of preparation that has gone in, and it has also given a lot of time for both sides to prepare, for Iran to also prepare for what lies ahead. So in your assessment, what do you think will be the next phase of this? What do you think will be the retaliation that Iran is planning? I think that we'll see something similar to what we saw in June of last year, where we have several days in a row of Iran raining missiles down on Israel. Iran has already stated that they have no red lines, that they are trying to target as many civilians as possible. And we are likely to see casualties like we saw in June of last year. I think that we are likely to see the U.S. and Israel, as you have said, they have been preparing for this for quite a while, and the U.S. has built up a very significant strength on right off the coast of the Hormuz Strait. And I think that we're going to see a lot of damage done to Iran's nuclear capabilities. And I think that everything is going to depend on how the Iranian people respond to this lifeline. Do you anticipate that this is going to be long drawn? Because the president of the state of Israel has also now spoken, saying this is a dramatic and historic step, and I thank the President of the United States and Prime Minister Benjamin Netanyahu for this decision, with the hope that it will bring about a historic change for us and for the entire Middle East. But the fact that he tells the citizens of Israel, challenging days are ahead of us, but we are a strong nation. Do you anticipate a long drawn conflict? I do think that we'll see something similar to last year when we had the 12 days of fighting. I do think that this is a now or never moment for the Middle East, and that
The US and Israel have really one chance to topple the Iranian regime and to free the people of Iran. And I think that it will probably last more than a few days. But I think that the people of Israel are willing to wait however long is necessary to topple the Iranian regime and to bring freedom to the brave people of Iran. Some reports indicate about 30 to 75 missiles were coming out of Iran towards Israel. So the next phase is not going to be people coming out on the streets and just responding so easily to Raza Pahlavi and Donald Trump's call for a regime change. What will follow is these set of long-range missiles, and Iran does have a very large pile of ballistic missiles as well, and they will fire those towards Israel. So that is what the next phase could be. I do think that we'll see that, yeah. I think that Israel is prepared for anything. There are bomb shelters set up in every area of the country, more than you can imagine, in every home, in every apartment, and in public spaces across the country. And I think that we saw what we needed to be ready for in June of last year. And I think the country took significant steps to prepare the home front. And I think that no matter what Iran sends our way, I think we'll be able to handle it. All right. In fact, the first statement has also come in from Khamenei, where he's saying there will be significant costs to pay. There will be, a pushback. There will be a retaliation, and Israel will have to suffer the consequences. Rachel. Yes, I think it is in character for Khamenei to threaten the lives of Israeli civilians who have nothing to do with this conflict. I think that he is a brutal dictator who wants to just see as much damage done to Israel as possible, and he doesn't care who is involved and who is not. But I think that the people of Israel are ready to withstand the threat, and I think that we know what we're fighting for. We're fighting to free the brave people of Iran from a tyrannical regime, and Khamenei doesn't scare me. Rachel, which brings me to ask you the one question that, it's not just Israel versus Iran. It is also Iran's axis of resistance. When you talk about the Hezbollahs, when you talk about the Houthis, they also get activated. And there are reports indicating that they have already activated. Israel may have sent out some strikes in Lebanon already against Hezbollah. But both Houthis and Hezbollah have responded, saying that they are going to fight. And again, it's going to be a multi-pronged war. The situation is still developing. I can't speak to what's going on the other fronts. I know that so far Lebanon has not retaliated. I can't speak to Hamas and the Houthis. So the best I can say is that we can just follow the news very closely and wait to find out what's going to happen and take all necessary precautions to stay near shelters, in shelters, and try as best we can to stay calm because Israel knows how to defend itself, and it will. An Iranian missile has been intercepted over Qatar as well. The Interior Ministry has urged its citizens to remain calm after an attack by a criminal enemy, and very significantly, they have said that all US-Israel assets in the region are a legitimate target. Just help us understand what could be, Gauri, before I bring in Rachel again. When Iran says that all assets of Israel and US in the region are now legitimate targets, what are these targets that they could be indicating? US actually has a very large base that operates out of Qatar, one of its largest bases there. Then there is the naval... And that's where a missile has just been intercepted. In that airspace, yes. Yeah. And then there are massive naval assets also that US has in and around the entire Middle East region. So what you're talking about here is when Iranian reports indicate that any of these assets could be fair game, then it just means that it could be the Houthis, it could be the Hezbollahs, it could be the Hamas, no matter how limited it may be in its existence than what it was before the October 2023 assault. All of this, in addition to Iran, will come out and attack any of those air bases, any of those massive naval capabilities that US has, and in addition has deployed in that entire region, whether it's naval or in fact even your entire bases, Qatar being one of the largest bases that US has in that And if an American base is attacked, we are only going to see this conflict escalate manyfold. Then it is not going to be confined only to what's happening between US, Israel and Iran. And that Operation Epic Fury is then going to actually see Donald Trump unleash
all of those military options that are on the table. They're still on the table. And then other countries will also be drawn in. It could be, even though we are still not sure as to whether several of these other countries would like to directly be involved in this and entire so far, region. none of them have actually responded. It's been going on for over 2 hours now, and we haven't seen any heads of state from any of the NATO countries respond. And the reason for that also is because, I'll tell you why, because, these strikes happened just a day after those talks were taking place. You had US and Iran talking about it, being mediated through Oman, and just about 12 hours back, you had the Omani foreign minister in Washington briefing JD Vance, talking about what could be the next course of action. What followed was then these strikes that happened. Okay, so let me give a quick update which has come in from the Israeli Air Force, Gauri, and a statement has just been released by the IDF spokesperson announcing that the IDF and US Army have launched a joint, extensive and powerful operation to strike the Iranian terror regime and remove existential threats to the state of Israel. Over the long term, the blow included the targeting of dozens of military sites and was carried out as part of a broad, coordinated and joint offensive against the regime, which has not abandoned its plan to destroy Israel. In recent months, and despite a severe blow it suffered in Operation With a Lion, the IDF identified that the regime continued its attempts to fortify, protect and conceal its nuclear programs, alongside the restoration of its missile production process. In the months preceding the offensive, joint and meticulous planning was carried out between the IDF and the US Army, which has enabled the execution of a broad offensive in synchronization and maximum coordination between the armies. So they're actually officially now saying that we had a coordinated strike. Military sites have been struck, and this was a broad, coordinated and joint offensive against Iran. And all of these targets have a certain messaging, and we can get Rachel in on just that. Even though it may be a ceremonial residence of the Supreme Leader, it has a message. There is the Defense Ministry, there is the Ministry of Intel, then there is the Atomic Energy Complex. All of them, there is a certain messaging attached to it, and that's why they have been identified and picked. And across central Iran, you see cities that have been picked have a message there, including Isfahan, where of course you have the nuclear weapons facility of Iran, which Iran has all along maintained is only for civilian nuclear purposes. But the intel that US and Israel had was that it could be upwards of 60%. You only need 80% of enrichment of uranium to actually make it into a bomb. And in fact, if we still have Rachel with us, we can ask her just on that, the significance of the specific targets that were identified where Israel struck Iran today. Hi, I do have to go in a second, but I just want to say that I think the targets that we have struck so far indicate that Israel and the US are taking out Iran's nuclear capabilities, and they're targeting key leaders of the nuclear operations. And I think that we're seeing a very strategic, targeted operation, as opposed to what Khamenei has promised to bring down on Israel, which is targeting just regular civilian areas and civilians. All right, that of course was Rachel Lester, former IDF spokesperson's unit soldier, speaking to us about how things are unfolding right now. Even as the latest update that we have is that Iran has hit back. So the retaliatory strikes that we've been talking about on the broadcast, Padmaja, they have begun. Iran is striking back. Donald Trump may be saying about, regime change, everybody should come on the streets. That isn't happening now. What is happening right now are those 30 to 75 missiles being fired by Iran coming towards Israel. I want to just point out that Rachel possibly had to leave because she herself would have to go to a bomb shelter. The sirens are going off across now, on a map of Israel, you see red everywhere now, from the north to the center to south. But it has to be said that over time, I think you get so used to conflict that you're still very calm, even if you've got the sirens going off outside. There is a very real possibility of a missile strike, and people quietly then take shelter. In fact, we've got a report also from inside a bomb shelter in one of the cities in Israel. We'll play that out in just a second. Let's also listen in. And for the viewers who are just trying to get, a sense of how things stand as of right now, over the last about 2.5, 3 hours, what we've seen is the beginning of a coordinated strike
by Israel and the United States of America on Iran. Now, officially, it has been acknowledged by both sides that this is a regime change operation. This was in the works for a while. It has been codenamed by both sides differently. Israel has called it Operation Roar of the Lion. America has called it Operation Epic Fury. And work for it had been ongoing for quite some time. And now the Israeli Air Force has said that there are significant targets, which is the ceremonial residence of the Ayatollah has been struck. You've got nuclear sites. They're saying that Iran was again working on a nuclear weapon, on missiles, and that is why this could not be allowed. It was a very real threat to Israel, and it was thwarted. And finally, after this threat apparently being neutralized, according to the US and Israel, now the onus is on the people of Iran. They're saying you have been under a repressive regime for long. Now it is up to you to overthrow it. You are getting our backing in the region. Interesting, though, that even as Israel and the United States have been explicit about what their objectives are, what their methods are, and what their MO is going to be in the next few days, any of their allies so far haven't taken a stand. Let's listen in, Gauri, to what the President of the United States, and it's important also to remember that the first reaction, the first confirmation came from Donald Trump, and it's after that that you had Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel, issuing a statement. People of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. More news coming in, and in fact a very important set of update coming in that loud explosions have now been heard in Bahrain as well. This is not just only about a single country. You can see this now spreading across the region. It has now spread to Bahrain, where loud explosions are being heard, even as there are updates coming in about strikes also taking place in Lebanon as well. So the entire region on the edge, Padmaja, even as Donald Trump and Prime Minister Netanyahu have categorically said that they are going to back this till there is a regime change. And Iranian side have said that there are no red lines. In fact, the word that's coming from Iran is that there are no red lines when it comes to regime's response. And they are now telling Israel to prepare for what is coming. In the wake of that, you can see this volatility, this current tension spreading to Bahrain as well. Absolutely, and it's home to the headquarters of the US Naval Forces Central Command and the US Fifth Fleet. So you had Iran saying a while ago that anything in the region that belongs to US and Israel is now going to be a legitimate target. It's going to be fair game, and now multiple explosions being reported from across Bahrain. And I believe Anjana Shankar, journalist joining us live from Abu Dhabi, and there as well, Anjana, you are hearing the sirens go off. Hi, see, I am based in Abu Dhabi, and I cannot confirm anything without there is any official word on what is happening. But it is true. I was just standing close to my balcony, and I suddenly heard there was like a few big bangs, and I could feel it on my glass window. And a few people did send me some videos saying, you know, they did feel something, but we don't know exactly. The only confirmation that we now know is that there were blasts heard in Bahrain, where there is the US Fifth Fleet and their headquarters is there. And you know, if we go back to what Iran has been consistently saying during this weeks of diplomacy, that if there is a confrontation, they will strike, and they will not spare the US bases in the Gulf countries, that it will be a legitimate target. So I think we have to wait and see whether that is exactly what we are seeing now, that they are targeting
the US bases in the region. The whole region is on edge. And as you know, in West Asia, there are millions of Indian expatriates living there. Any kind of escalation that happens in this region will have a direct impact on millions of Indians and their families. Indeed, and that's a very important aspect that I want to bring out as well, because, you know, when you talk about this entire region, there's a very large presence of the Indian community. When it comes to Iran, there has been an advisory that has been issued. The government has also started those helpline numbers where people can call and expect some help to come in. But Anjana, walk us through what is it that the entire region stands to get impacted from the Indian community point of view. In Abu Dhabi also there's a very large Indian community, likewise also in Iran, in Iraq, parts of it in Lebanon as well. So the entire region actually houses a very large number of Indians. Yeah, that is the point I'm making. But before that, I just want to point out, in case if you haven't seen it, there is a warning issued by the US mission to UAE. It's a security alert asking the US embassy officials and also the US citizens that they recommend all Americans in the UAE to do the same, that is to shelter in place. So we have to put that in context. I don't know when was the last time that the US mission in UAE has sent an alert like that, which is a clear indication that there is an escalation and the region is on edge. Coming back to the question of Indian expatriates, we have seen that anytime there is some kind of conflict or an escalation in the region, whether it is in Israel, whether it is in Iraq, whether it is in Yemen, there are Indian expatriates, and we have a lot of investment interests here, the families, people-to-people connection. It's not like we can quickly airlift a few thousand people the way we have done it in other conflicts, but we are talking about hundreds and thousands of people, like millions, more than 3 million Indians in the UAE itself, big business houses, corporates. So we have a skin in the game when it comes to any kind of escalation in the region. So definitely the whole situation is it has driven a lot of people to anxiety, and I'm already getting messages from Indian expatriates asking what is the situation, whether they should think about taking some concrete action to get out. Bahrain, just a couple of updates from open source intelligence and what is being reported by the respective media in Israel and Iran. Smoke apparently was seen rising from Bahrain's Jufair area, which houses the US naval support activity and the main US base, the main US Navy base in the Persian Gulf. So exactly like was being anticipated earlier, that you have the US naval base there, and at least right now, that picture that you're seeing, smoke seen rising there from that Jufair area, which is what is being reported right now by the media in Israel and Iran. It's the permanent host of the US Navy's 5th Fleet. And Anjana, even in the UAE, there is a small, but there is a direct military presence of US there as well. There is the Al Dhafra Air Base, if I may remember correctly. So that, of course, there is a direct US military asset and base in UAE as well, which is why, of course, there are now concerns mounting exactly where you are. That is right. And, I just mentioned about the US Embassy's alert. And now what is coming in is there is a statement from the UAE Ministry of Interior, which says, in the light of regional developments, the Ministry of Interior affirms the adoption of all precautionary measures to ensure the security and safety of all. So this is a message from the ministry. We don't have any confirmation on what exactly happened, as you said, because this is very much in the heart of this conflict, this region, but I think we are looking at a serious escalation, and the local authorities are asking people to take precautions. Indeed. So yes, there are loud explosions that have been heard in Bahrain. And Anjana, one thing I want to ask you is that it's not just Iran and Israel that have actually closed their their airspace, isn't it? Now there are multiple countries that have shut their airspace in the region.
Yeah, the multiple countries have shut airspaces, and we also hear that several airlines are cancelling their flights. So I am closely tracking those developments. But with this current escalation, I think any kind of movement in the airspace in the region will be considered as highly risky for commercial airlines. So we are not just talking about military escalation, but this is the beginning of how such an escalation is going to have a direct impact on people and their lives. The Dubai and Abu Dhabi is one of the busiest or two of the busiest airports in the region, and with these flight disruption, there will be a lot of lives, business engagements, investment interests. A lot of it will be directly impacted, and we are seeing the beginning of that. All right, so the statement has come in from the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran that says our sacred homeland and beloved nation has once again been subjected to a cowardly military aggression by the United States and the Zionist regime. This morning, the US and the Zionist regime flagrantly violated Iran's territorial integrity and national sovereignty and targeted a number of objectives and defensive infrastructure as well as non-military facilities in various cities of our country. The renewed military aggression by these two countries has taken place under circumstances in which Iran and the US were engaged in a diplomatic process, and that really is something that they keep underlining, that even as a diplomatic process was underway, this has been done. It is being portrayed as some kind of betrayal, and which is why all options now, Gauri, are on the table. And like we've been saying, they've said, look, we had come to the table, we were willing to talk to you, those talks were actually underway, and then you go and do this in the midst of a diplomatic engagement, which is why now even US military deployment that is there in the area is going to be a fair target as far as Iran is concerned. Correct. And the reason for that also is that because there was such a divergent view with regard to whether or not there is any possibility of diplomacy winning, simply because, the US said all along that, look, we have intel that you are developing a nuclear weapon. We need to stop that. But we also want you to stop and ensure that you do not have your pile of ballistic missiles. Iran said that, okay, we are willing to talk about our nuclear weapons program if you think so. But we have no interest whatsoever in the ballistic missiles, because that we are going to keep, and it's a no-go area. Because the view was so divergent, that is why multiple talks had taken place. All of them had collapsed. There was no breakthrough whatsoever, which is why, of course, this was a military operation that was on the table and finally exercised by US and Israel. And in fact, to bring Anjana back in on this, I want to point out another part of this statement from the Iranian Foreign Ministry, where they say that this aerial attack by US and their allies constitute a violation of Article 2.4 of the Charter of the United Nations and an armed aggression against the Islamic Republic of Iran. And we consider it the grave responsibility of the UN and UN Security Council to take immediate action to address the breach of international peace and security resulting from this overt military aggression. So now the effort is to try and start telling countries to take a position, to take a stand. And Iran here clearly saying that this is a breach and the UN must take a position on it. Anjana. Is it for me? Yes, Anjana, that's for you. Yeah, see, now I think we have reached a point where, you can't go back. We've already crossed the river of Rubicon, as they say, because there was a chance for diplomacy. That is what was happening. And now I think despite all the talk, all the time and energy spent on getting a deal, even with the hope that there is a deal which is very close to de-escalating this nuclear standoff, US and Israel have gone ahead and, and now we see a full-scale blown-out escalation now. So I think the question would be now that if Iran is approaching UN, whether the UN or other forces in the Gulf countries or other countries. Okay. All right, I think there's a connectivity issue, because let's not forget, even in UAE, because there have been some blasts that have been reported,
which is why they are also on high alert. And that input that is coming in right now that you see on your screens, where Bahrain, of course, is seeing several blasts taking place. It houses the permanent fleet, the fifth fleet of the US there. Bahrain and Qatar are where you have large American presence, military presence, which is spread out across several other areas as well in that entire region. So clearly, Padmaja, when you talk about the situation right now, when you talk about Iran's response, one thing is clear: there is now going to be heightened sense of hostilities that may continue for some time before we see any of this leading to a longer permanent resolution. Absolutely, and Bahrain, in fact, has said that the headquarters of the Navy's Fifth Fleet, the US Navy's Fifth Fleet, has been targeted by a missile attack. UAE has closed its airspace as the Israel-United States have conducted strikes on Iran. In addition to that, here's what open source intelligence is saying, that Iranian missiles have reportedly targeted the Ali al-Salem air base in Kuwait and the Kuwaiti national security agencies. So a lot of information there, but the target is absolutely clear, Gauri, that US military deployments, US military targets anywhere in the vicinity of Iran. And in fact, you also have an Iranian official being quoted by the media there to say that energy facilities are not off the table. Iran has announced that all US bases in the Middle East have become legitimate targets for retaliation, and Iran will actively target them. You've got energy facilities, you've got US naval bases. All of these are going to be fair targets, simply because when Iran was willing to engage at that time, in the middle of that diplomatic exchange, this unprovoked aggression, that's what Iran's foreign ministry has called this, an unprovoked aggression was unleashed on them by the US and Israel together, and now there will be consequences. Indeed. And US has been talking about some sort of a military op ever since that Iranian protest started in mid of December. So to that extent, US has been saying, and in fact, Donald Trump has actually got support from several Republican senators as well, including Lindsey Graham, who've said that, this is something that should have been taken, and now it has been done. So in fact, we also have Ollie Barrett joining us for more on this. Ollie, you are in London. Before I get into the aspect about, why isn't that you see word coming in from some of the NATO allies, I want to understand from you the extent, the scale at which these strikes have taken place indicate a fair amount of planning between the US and Israel. It also indicates that US kept out all of its NATO allies who probably were betting on diplomacy instead of, strikes leading to resolution. All right, Barzin Wagmar, who joins us from London, Center for Iranian Studies. Barzin, let me start by asking you, how do you see this unfolding right now? Iran has said it's going to respond back, and it says that it's going to hit back with what Israel never thought is going to come its way. Well, that's typical Iranian bluster and rhetoric for you, so nothing new there. But what they have done and fulfilled their word is this scattergun approach by roping in all other GCC members into the fight. And this time they would do it, we had predicted in Iranian studies. And the attack on Bahrain's Mina Salman and Jufair, Eastern Manama, is undergoing as we speak, but also in Kuwait and Al Udeid, Qatar and elsewhere will occur too, for the simple reason that it believes, as a desperate regime, that in attacking all of this, it minimizes impact on the home front, that somehow it would distract and take its best shot by roping in others and making them pay the price, including the US and its allies. Having said that, of course, Iran is paying more than a heavy price since unconfirmed reports now mention what has happened in the last few hours, that the Interior Ministry has been hit and has been relocated from Fatemi Square in central downtown Tehran. Khamenei's Supreme Leader complex, the Beit-e-Rahbari in North Tehran, has been severely hit. Not that he would have been there in any case, because he's been subterranean for quite a while. The Intelligence Ministry has been hit. And also the Iranian official news agency IRNA, along with Tasnim news agency and others, have been hacked in the last few hours.
putting out pro-reformist, anti-regime propaganda. But I suppose that will be showed over in a few hours' time. And of course, attacks have taken place southeast of Tehran at Parchin in the suburbs, where of course the military ballistic complex is located and where testing of mounting nuclear warheads has been undergoing and has been on for quite a while. Which brings us to the question of the ballistic missiles, because Iran has refused to talk about it, maintaining that these so-called talks in Geneva and elsewhere, and which was supposed to now resume on Monday in Vienna, were only about nuclear enrichment and of curtailing. But that has never been good enough for President Trump, and quite rightly so, because Iran has been fudging and fidgeting for all this time, and he has been patient with them, more than patient, thinking that they can procrastinate, but that's not good enough, and clearly it has come home to roost for them. Bazin, the media in Israel is reporting that several senior Iranian figures have been targeted in these strikes, and they're saying there are indications of direct hits. Can you tell us something about this? Have there been some casualties among the leadership? Major General Ali Shadmani, who is the head of the Khatam al-Anbiya headquarters in Tehran, the commander in question. The Khatam al-Anbiya is a nodal agency which oversees liaison work between the Iranian tri-services, the traditional forces, and the Pasdarane Enkalav, the Revolutionary Guards. So it's a nodal in-house clearing agency, the Khatam al-Anbiya, and he has been taken out, it is allegedly reported. But also, going back to President Trump's claim of help on its way for the Iranian population, plus his recent address, unconfirmed reports also mention that the head of the Iranian judiciary, the dreaded and much hated figure Ghulam Hossein Ejei, has been eliminated too this morning. That's very significant. If Ghulam Hossein has indeed been eliminated, that's extremely significant, because he was the one who was actually ordering those massive executions. And Gauri, not just the executions, which he gave a full carte blanche for, but it was on his orders, and that of Ali Larijani, who has now taken a position, as you know, from the Supreme National Security Council, in pulling out wounded protesters from their hospital wards and dragging them out, as medical faculty have attested. They've been taken out for either execution or for imprisonment. And he's a dreaded figure, and you can be sure that Iranians will be loading his departure, and nobody will be shedding a tear on that. All right, just to clarify for our viewers that in Abu Dhabi right now, there are no sirens going off. It is only an alert that has been issued. But across the images that you see right now, in fact, are from Bahrain, where Iran has launched an all-out attack. But I think the really big story that we are breaking over here, what Burzeen Bagmar just told us, the fact that two very senior figures in the leadership in Iran, right now there is no direct confirmation, but local media or local open source intelligence is suggesting that these two senior figures, one from the judiciary, other who was coordinating between the tri-services, could have been taken out in those strikes by America and Israel early in the morning. I think we also have Aditya Rajpal joining us live now from within Israel. Network extremely patchy there. But where are you, Aditya, and what can you tell us about what's happening? Madhuja, I'm currently inside a bomb shelter. This is in Tel Aviv. Even as we can hear, loud explosions. I can give you a glimpse of people, who are stranded here right behind me. These are ordinary people here in Tel Aviv who were marking Shabbat and did not expect these explosions to take place. But even as an attack has happened from Iran against Bahrain and Kuwait, the Fifth Fleet of the US Navy has been attacked in Bahrain. There are explosions that I can hear even today, right now. There are explosions that are taking place, right now, above the sky right now. These are missiles that are being intercepted, and the Iron Dome is working its own magic. And there are no casualties or any explosions that have been that have happened on the ground right now. But what I can tell you is that the situation is very, very fluid. All across Tel Aviv, it almost looks like a ghost town right now, because people are inside. It's Shabbat, as well as there are emergency warnings. Since morning, there have been three different explosions, that have been marked here on the sky, even as the Iron Dome intercepts the missiles. And there have been three alerts that have been issued by the Home Front Command
here in Israel, asking people to be vigilant and near bomb shelters. So every time there's an alarm, people are rushing inside the bomb shelters all across Israel, from northern to central to southern Israel, but particularly in central Israel, where Tel Aviv is. The Ben Gurion airport is completely shut. There are no operations currently underway. The Indian flight that was on way to Tel Aviv was, sent back to Bombay. But currently, even as I speak, the Iranian retaliation against the US and Israeli attacks is currently underway. It's likely that because senior government, officials were targeted and several ministries and government buildings were targeted in Tehran officials, there could be heavy casualties that the Iranians could be facing. But Aditya, which also then brings me to ask that Iran has said that they are going to hit back already about 30 to 50. In fact, some are saying, some reports are indicating 75 missiles have been hit by Iran. You tell us, what's the situation right now on ground? That's right, Gauri, you are right in analyzing that 75 to 80 missiles have been sent out from Iran. This is not just towards Israel, but also towards Bahrain and Kuwait. There are some reports that over the skyline of UAE also, some of the missiles have been intercepted. But no untoward incident as of now has happened in UAE. What we can tell our viewers is that the situation is very, very fluid. The Americans and the Israeli Air Force and Army are very much prepared in Israel and several other bases all across the Middle East to counter such attacks. While earlier it was being said that these are preemptive strikes, but it's unlikely that this is preemptive. This is a full-scale war that we are expecting that is happening, unfortunately. There are several areas, more than 5 locations in Iran that have been targeted, multiple government buildings that have been targeted in Iran. And Donald Trump also came out with a very strong statement that this is certainly a call for a regime change. And he's asking the people, common Iranians, to come out on the streets and take back control of the government. Whether that will happen or not, we'll see in the next few hours. But currently, situation very, very volatile. As I can tell you, in bomb shelters all across Israel, people have taken shelter, even as missiles are currently underway and being intercepted. All right, the images that you see right now on your television screens, viewers, are from Bahrain, where military targets of America have been struck by Iran. Right now, NDTV is the only channel which is getting you the coverage from all sides. The view from Iran, the view from Israel. Aditya Rajkal, the only Indian journalist who is right now present inside Israel. This picture is of a plume of smoke rising from one of the targets that Iran says it has struck in Bahrain. Of course, significant American naval assets present in the entire region, and already the Foreign Ministry of Iran has said that this is going to be fair game. We were the victim of an unprovoked aggression by Israel and America, and now we are going to retaliate. Every American asset in the region is going to be on our radar, and these pictures are from Bahrain. Aditya right now, in fact, is in a bomb shelter because we are learning that sirens continue to sound in Jerusalem area across the north of Israel. Blasts are heard, and the IDF is currently working to intercept any of the missiles that are coming in their direction. But so far, and that is significant, so far there are no reports of any injuries or any casualties anywhere from across Israel. Aditya. Well, that's right. What I can tell you right now, the video might have just gone because I'm reading from a message that I've received from one of the sources. And he says that Iran has now planned attack in 5 different locations. One is the US 5th Fleet Naval Base in Bahrain that we are reporting on. The second is the Al Salem Air Base in Kuwait. The third is the Al Udeid Air Base in Qatar. And then, of course, the Al Darafa Air Base in the United Emirates. So there are 5 locations that we are talking about right now where Iranians are targeting. Not all 5 locations is where the blasts have been heard till now. There are 2 locations in Bahrain and Kuwait where blasts have been heard, but Qatar and UAE are also on the radar of the Iranians. That's what we are being told. And perhaps there could be an imminent attack because these are the locations where the US air bases are currently. And there's a strong deployment of the US Navy, the US Air Force, and of course the US Army in these locations. So we are looking at a full-scale kind of a conflict that is developing at this stage. Earlier, it was being said that this was a preemptive strikes to convey a strong message to Iran, even as the dialogue was underway. Remember, we had a dialogue take place yesterday in Geneva where no commitments were made by Iran, as per Donald Trump. And now we are expecting dialogue to take place in Vienna,
where the technical details in Austria would have been discussed. But before that comes this full-scale kind of an attack where the nuclear arsenals and, of course, the missile technology and, of course, the government buildings are the main target of the Americans and the Israelis in Iran. The government here in Israel is very much prepared. That's what they're saying. They've been preparing for this day since weeks together. While the message from Donald Trump is that they're looking at a regime change, but will that be possible? Because the regime in Iran is also in a very, very strong position. They have pledged retaliation, which is underway right now. On your screens, there are visuals coming in from Bahrain, but there could be possibly visuals coming in from Kuwait and Qatar also, where possibly there could be, US bases under attack by the Iranians. Well, we haven't seen the most lethal attack from US yet. These are just a first wave of attacks that are taking place, but a more brutal, a more lethal wave of attacks could possibly come in the next few hours. Even as NDTV continues to report from Israel, I'm inside a bomb shelter, staying safe because of the missiles that are coming underway. There are explosions taking place right above the sky where I am right now in Tel Aviv, but situation very, very fluid, very dramatic out here. People are not taking precaution. People are taking precautions and not, staying outdoors here in Tel Aviv. Aditya, while we are talking about the big picture, you are, inside a bomb shelter on a day like today, Shabbat. What it's like to be an Israeli on a day like today, inside a bomb shelter, looking at probably a long-drawn conflict. Have you been able to speak to anybody behind you? What are they saying about what's happening right now? Well, I'll try and speak to someone out here. Avi, if you can join me for 2 minutes. I have a friend, Avi, here inside a bomb shelter. Just to explain, briefly, Avi, what is it for a common Israeli to be inside a bomb shelter? How difficult is the situation? You're used to it, perhaps for years together since your childhood. But what is going through your mind right now? It's not just because what you said, practice, but it's not for childhood. It's like only recent times. Yeah. We did not have bombings towards Tel Aviv. I'm used to that. Mm-hmm. Yeah. What goes through your mind now that there are attacks against Iran and Iran is launching these missiles? What would a common Israeli, you or a common Israeli, want? My opinion is that we shouldn't have joined on the first, like with the Americans, on the first strike. Okay. I mean, then retaliate, that's fine. But I'm not sure it's wise for us just to jump in at the start, because it brings upon us this, like, to the shelter. So look at the other repercussions. I don't know, they're being blamed for, instigating wars. All right, fair enough. So Avi is giving his opinion about the current war scenario that is underway. That's one of the views that is coming in from an ordinary Israeli stuck inside a bomb shelter. And of course, this is significantly important because there are thousands and thousands of Israelis currently who are stranded inside bomb shelters, waiting for the next command to come in from the Israeli government, the Home Front Command, to see what the situation is. Many people, of course, do not want war. They do not want bloodshed. They do not want provocation. But this is the times that we are living in. This is, of course, unpredictable right now. And there has been a complete geopolitical mess over the recent years with the Russia-Ukraine war and the Israel-Hamas conflict. And now a new kind of a conflict which has been going on for years and decades together between Iran and Israel, which has taken a new shape clearly in the recent months with clear warnings from the US. But here at the NDTV, we continue to report from the bomb shelter here in Tel Aviv, where thousands of people are stranded inside bomb shelters waiting for what will happen next. Remember, shops, restaurants, government offices, everything is shut right now because of the Shabbat, but also because of the current situation out here. The airport is completely frozen. It's not operational. All operations at the Ben Gurion airport have been suspended. And the visuals on your screens are from Bahrain, the strikes that have happened in retaliation by Iran. Will this continue over the next few days is something that we'll have to witness and wait and watch. But with the words that came in from the Israeli government and particularly from US President Donald Trump, it's almost clear that this seems to be a long battle
and US will not stop until there is a regime change, because there were expectations from the Iranian people who were protesting, and Trump had raised their expectations dramatically. So clearly, I heard a new explosion that just happened, seconds ago here. That is perhaps, missiles being intercepted even today, even right now. So it is a very fluid situation, Padmaja and Gauri. It's remarkable the kind of equanimity with which people evacuate to a bomb shelter, unlike what one would imagine, because it's just become a part of your life. People saying, I'm used to it, I've seen this since childhood. It's just a part of something that we are used to for a while now. Qatar's defense ministry, in the meantime, has said that it has successfully intercepted all the missiles targeting the country. The Israeli media is reporting damage to a house in north of the country, but no injuries reported so far. Shivarur, plugging back into the broadcast, it's a fast developing and fluid situation, but neither side letting up the pressure. Shiv. That's right. There are videos dropping every 5-6 minutes depicting what appears to be a 360-degree retaliatory operation by Iran at this point of time. Padmaja and Gauri, in fact, we have Anjana Shankar, who is a journalist and a war reporter in her own right, joining us live from Abu Dhabi, where some explosions were heard. There was some confusion a little earlier about some sirens, but some advisories and warning messages have in fact gone out. Abu Dhabi is in the United Arab Emirates, a place where lakhs of Indians live. Anjana, can you tell us what's going on there? Because it looks like Abu Dhabi, which has the Al Dhafra base, which houses a lot of American assets, as well as Qatar, as well as Bahrain, they are targets at this point of time. Yeah, thank you, Shiv. First of all, I want to make a clarification that, because we don't want to fearmonger people, there is no official confirmation of anything that has happened in Abu Dhabi. There are no alarms, sirens that went off like what we've seen in Bahrain, and there are clear videos and confirmations coming out of what is happening in Bahrain. So there is Al Dhafra Air Base, where the US military base is in Abu Dhabi. And as I mentioned in the earlier hit, is that, I did hear, and I'm getting messages from people. I can see social media tweets of people talking about, there was a bang that they heard from their balconies. They felt it, but we are not sure what happened. And, unless there is an official confirmation or clarity, at this moment to talk about it is misinformation. So I don't want to do that. But there are precautions and messages of alerts coming out of organizations, and UAE Ministry of Interior has put out a tweet as of now asking people to take care and that the country is in safe hands. So that's a message that is playing out on the UAE social media scene now, telling people that everything is under control, the country is in safe hands, there is no need to panic. There's a lot of reassurances being given to people, which I think is very important, especially, as I said, there is a vast Indian expatriate population living in the UAE, nearly 3 million people, and also in the region. And, if I can pull out the latest tweet I saw from the Civil Aviation Authority, saying that the UAE airspace has been, the General Civil Aviation Authority, temporary and partial closure of the UAE's airspace as an exceptional precautionary measure aimed at ensuring safety of flights and crew. So that is the latest that we have from Abu Dhabi. Okay. So just to make sure for your audience that there is no reports of blasts or whatsoever from Abu Dhabi. No, that's a very important clarification that's come in from Anjana, and on NDTV we take that very seriously, because we don't want to put out any information that may be misinterpreted or misused at this point of time. Very clearly, no explosions confirmed of any kind in Abu Dhabi, making that clear here, but they have been in Bahrain for sure, and you're seeing some of those images right now, as well as Qatar. I've got some information coming in, and I've just been speaking to my contacts in the American system, who've shared with us some information about the nature of the weapons being used. Padmaja and Gauri, I just want to take our viewers through that list of weapons, because as we look at these images of the attacks taking place, and welcoming Brahma Chelani also into our coverage, and I'll go to him in just a moment. Just for context, you're looking at this steady stream of images of explosions, of projectiles hitting buildings, and large plumes of smokes and fireballs. Some of the weapons we can confirm
are being used at this point of time, and they've been captured on camera as well, are Tomahawk long-range cruise missiles. The Israelis have their F-35 stealth fighters in the air. F-15 strike fighters are very likely conducting some of those longer-range airstrikes. Air-launched cruise missiles like the Delilah and the Rampage are incidentally also being used. Just as a side note, the Rampage is an Israeli weapon that India used during Operation Sindoor as well. Spice precision-guided bombs, bunker buster penetrator bombs called the GBU-28, and armed long-range strike drones are being used from the Israeli and the American side, also from off the coast in the Persian Gulf. The Iranians are striking back. It is not known just yet. There is less information about the weapons that are being used by Iran right now, but the Shahab-3 medium-range ballistic missiles, Imad precision-guided ballistic missiles, and a whole bunch of Shahid 136 and Shahid 238 attack drones are apparently being used in the retaliation at this point of time. Dr. Brahma Chelani is with us. Dr. Chelani, your opening comments on what we're seeing playing out in real time right now. This has become a proper exchange of missiles at this point of time. We're looking at it, update practically every 4 or 5 minutes. You're right. Any operation and Trump's publicly defined his political goal is to change in a. Dr. Chelani, can you hear me? I think you may be on mute, sir. Just go ahead and unmute yourself if you can. Okay, I think there's a bit of a network issue there. We're going to try and connect with Brahma Chelani in just a bit. But Shiv, while you were talking about some of the weapons and the kind of weaponry that has been used, may have been used, what does this imply, from a preparatory point of view, from their vision to take this from here, a point of view? Because that really essentially sums up the picture, the big picture. Look, the escalation matrix from here on, Gauri, is a very clear one. And the fact that there is an enormous military imbalance between Israel and the United States on the one side and Iran on the other. And remember, Iran, should this escalate to a much greater extent, there are all kinds of permutations that get involved. You've got Russia. Don't forget that Russia stands firmly behind Iran in what's going on right now, even though there have been some noises this way and that Gauri, you've been reporting quite closely. But this is going to be a limited exchange. This is not going to spiral completely out of control. Iran is the key in that. Iran is aware of that. Iran knows better than anybody else that preparations, since you use that word, for this kind of strike have been going on for the longest time. Israel's entire military is basically predicated on offensive and defensive action centered around Iran. The United States deployments in the Persian Gulf and the Mediterranean are about Iran. They're not about any other country, frankly. And therefore, Iran has been fully aware, not dimly, but fully aware of the offensive power that both these countries can bring to bear if it is really going to be a shooting match. There is not going to be any doubt about who the winner of that is going to be. But at this point of time, the outcome, the actual outcome, which has been enunciated by Donald Trump, is what hangs in the air and shapes this entire conflict. He has made it absolutely 100% clear, even if we are to discount some of Trump's mannerisms and the way he says things, he says that the outcome of this is going to be regime change. He's called upon the people of Iran to basically say, look, take care of yourselves, stand back, get into shelters. We're going to level this place. We're going to remove your leadership. And then we're going to call you out of your bunkers and ask you to take over the government. In a very crude manner, that's what Trump has asked the Iranian people to do. How that's going to play out on the ground is what's on our screens right now. Indeed. And let's rope in Burzin Wagmar also on just that aspect about Trump's call for ordinary Iranians to come out on the streets. They've been doing so for some time now, but Trump wants that, you got to come the whole hog, ensure that there is a regime change. Will that call, that clarion call that Donald Trump has made, will that actually happen? Do you see that happening right now? How do you see this likely to pan out from here? We will have to see if it happens on the streets of Tehran in the coming hours or days.
Exactly last Saturday, Gauri, campuses reopened for the new academic semester, as you remember, and protests with clockwork regularity started on campus. And we saw that happening on Tehran's 3 campuses, including the notable varsities like Sharif University Technology, Azad University, and the Tusi University. Also last Saturday, Iran test-fired a seabed missile. And this while talks were ostensibly going on with the US. So that tells you where one stands with the regime and why President Trump is completely put off. Regardless of what Omani Foreign Minister Badr al-Busaidi mentioned to CBS Evening News in this long drawn-out interview last evening, that there is light at the end of the tunnel, I discounted it because obviously it added up to precious little in terms of actual details of enrichment, of dispatchal, of fully capping, so on and so forth, and no discussion of the ballistic missile complex program at all, which Iran steadfastly refuses to entertain, but which is part of the package that Washington has proposed for discussions. So the question is, we will see if the people are emboldened enough to come out. But if it's proved that Ghulam Hussain Ejei of the judiciary has been taken out, that will be something of an impetus to the protesters to see a much vilified, hated figure taken out. And it only once again confirms to ordinary Iranians in Iran, never mind those in the diaspora, that this is a paper tiger regime, that it can barely survive. The fact that its radar complexes have been fully exposed with these incoming aircrafts and these early morning strikes, to think that they never got around to doing anything in terms of repair or damage control after the 12-day June war from last year. Okay. And speaking of missiles and radar installations, fixed radar installations that have been taken out, I can also inform that the Financial Times 2 or 3 days ago revealed a leaked report that Iran has purchased 500 million euros worth of handheld, shoulder, infrared guided missiles from Russia. That's very important. That's very important, Barzeen. I'm going to ask you to hold that thought. And I want to get in, Shiv, on just that aspect. What we were talking, Shiv, about, the Russia-Iran military collaboration. And as Barzeen is saying, that there has been a purchase that has taken place in the last fortnight. So you could see this escalating, becoming not just about US, Israel on one end and Iran on the other, but spreading to the other countries as well. And remember, those supply chains that Barzeen is talking about, they've been significantly squeezed for obvious reasons in the last few months and years progressively. So the fact that Iran has been able to get its hands on significant amounts of defensive armament, for instance, the infrared shoulder-fired air defense systems of a short-range variety, are the kinds that the Iranians would presumably be able to use against, aircraft and low-flying helicopters, perhaps even drones, expecting, there to be some kind of a swarm attack, means that Iran is all in as far as a defensive posture is concerned. Iran, remember, has large stockpiles of ballistic missiles. Exactly how large these stockpiles are, how many waves of ballistic missile attacks it can actually execute against Iran has been the subject of conjecture for a long time, especially if you consider that Israel has claimed to have destroyed some of these missile depots and manufacturing sites in the last 2 exchanges. But the fact that Iran continues to have some measure of this supply chain that Barzeen mentions very correctly means that Iran obviously has been wargaming this for a very long time. They don't see this as a is this or if this is going to happen. It's always been about a when this is going to happen. And that's what we're seeing play out right now. I don't know, for instance, whether any of these airstrikes, whether any of these missile attacks, have been challenged at any level. It doesn't look like it. I wonder what Barzeen thinks. It doesn't look like Iran's air defenses have worked at all, Barzeen. What does that say to you? It hasn't, because it's abysmally destroyed, as it were, but not completely. Having said that, Gauri, I wanted to just finish my thought before Shiv's intervention. The said leaked report of the
export deal from Moscow to Tehran will see the tranches of these Weber unit missiles delivered between 2027 and 2029. They've not yet started. It was only inked sometime before Christmas in Moscow, and the FT has obtained a leaked report of the same, which I reported to you. Point number one. Point number two, having said that, we did see during the days after the riots broke out after 28th December onwards, that certain tranches of Illusion 76 transporters, the ones, the Gajraj, which even the IAF uses, Shiv, as you know, were making sorties between Russia and Tehran by Puya Air, which is, of course, just a front organization for one of the Pasdaran, the Revolutionary Guards. And they have been bringing in some equipment. Not that we've been privy to what has been coming in, but videos do attest to this, that they would not have necessarily been these Weber units because, of course, Russia itself is reeling from an arms shortage with the Ukraine war. So I don't think they would be able to completely supply everything to them at the spur of a moment with their backs to the wall as they are currently in Iran. But some supplies are taking place. But it is slightly distinct from what I just mentioned of this scoop that the FT carried, that this arsenal is supposed to be delivered. And you quite rightly mentioned, Shiv, because if fixed radar installations are destroyed, which clearly Israel has been taking down like 9 pins, the Iranians are going to have recourse to these portable rapid action force units that can fan out anywhere with these missiles on their shoulders to take out low-flying aircrafts and other drones as such. So that is what they've signed up for, but they haven't yet received them, so to speak. You know, Burzine, even as all of these visuals, very dramatic from across the Middle East with Iran, very clear that they're going to target every single American base in the region. Interesting reports coming in from within Israel, because now a TV report from there says that strikes have achieved a high success in targeting Iran's president and senior commanders. So while a lot of focus will be on these very dramatic visuals coming from, from Bahrain, from other places, the fact is that Israeli media now reporting that when it comes to targeting Iran's president and senior commanders, they have achieved significant success. Yes, and quite rightly so, because their homework is second to none. It is absolutely peerless. And why would that be so? One must pause and ask too. It is because of excellent ground intelligence from Tehran itself that is being fed to the Israelis by disgruntled Iranian local elements. Who are obviously fed up with the discredited regime. It is one thing to talk about Israeli stunning military success, but never forget the human intelligence aspect. And Israel, to a certain extent, can fulfill that, but it is only possible due to Iranian collaboration on ground. We saw that during the 12-day war. We see it again here with these multiple drone strikes back in June that were launched and were all over the city. And Tehran's police inspector general was telling citizens not to, pander to such rumors and this, that, and the other last June. And we see it this time too. And Gauri, if I may, although Anjana rightly mentioned about no air warnings in Abu Dhabi, Al Dhafra base, which is 20 miles south of Abu Dhabi, there has been some alleged attacks according to certain Persian news channels which I've been following, like Shafaq Monitor and others. They say that there has been allegedly, I repeat, allegedly an attack at Al Dhafra base, which of course it should be known to your viewership, because that's where the ill-fated Indian Airlines also landed the Christmas Day hijacking back in December 1999 before making its way to Kandahar. I just thought I'd throw that in too. Okay. Shiv, all right, before I get in Shiv, let's get in Anjana as well for more updates on this. And as Burzine is saying that there are some local media outlets that seem to be indicating that there could be some possible strikes that could have taken place at the airbase that we were mentioning earlier. Anjana. Yeah, so we have an official confirmation from the Ministry of Defense in Abu Dhabi that there was a Iranian ballistic missile attack on Abu Dhabi, which was dealt with by the UAE air defenses.
and it says a number of missiles were successfully intercepted. So I guess that was the blast that I heard and a lot of residents heard and spoke about earlier. And the UAE authorities also say that they also dealt with the fall of a shrapnel on a residential area in the city of Abu Dhabi, which resulted in some material damage and the death of a person of Asian nationality. So first casualty in the UAE. He's an Asian national, according to government authorities. And they also confirmed that the security situation is under control. So I think that is an official confirmation that we were waiting for. At least a half an hour ago, there was 2 rounds of the similar blasts and explosions that we heard. And there are pictures and videos doing the rounds on social media. But now we have a confirmation that there is at least 1 casualty and a barrage of missile attacks on Abu Dhabi. And Shiva, I want to bring you in on just that aspect. You know, till now we've been talking about strikes, but the human toll of any war is now beginning to finally be seen. First casualty that Anjana is talking about, we have now reported. It's confirmed. And we don't even know what the casualties are in Iran and Israel yet. Yes. The attacks began in Iran. There is no information just yet about what the casualty numbers are in Iran. In Israel, in any of the other places. So this is, Anjana is literally reporting the first casualty in this entire exchange so far. I just want to remind all of our viewers, Gauri, that NDTV is reporting this unfolding situation from all of the key points. We're the only network with a reporter, Indian network with a reporter on the ground in Iran and in Israel. We've got Anjana in Abu Dhabi. We'll have a reporter up in Bahrain in a very short while from now. I'm told we've got our correspondent from Qatar plugging in shortly as well. So this is a 360-degree view as to the best of our abilities of a situation that is clearly in escalation. Each picture coming in is escalating. We've also got the best voices, including Burzine, Dr. Brahmachalani and others who are helping us and our viewers decode what appears to be a familiar situation, but one that seems to have a tinge of inevitability in terms of what that outcome is going to be. We've seen what's been happening on the streets of Iran for the last few weeks. You had Trump just quantify the number of deaths in Iran as tens of thousands. We don't know what that figure is, but the people of Iran right now have basically gotten a message from Trump. They've gotten a message from Netanyahu. What's going to happen in Iran is I think, key to what we're reporting right now. We don't know yet where the leadership of Iran is. They've issued very traditional boilerplate statements saying Iran is not going to sit around. There will be a crushing response, etc., etc. Nothing new about that. We can confirm that the Khamenei has been taken to a hideout or a safe house or a bunker of kinds. There's been an attack on a ceremonial residence of the Khamenei, as Maral was telling us a little earlier. Unfortunately, we've lost that link with her because there's a complete internet shutdown in Tehran at this point of time. But the leadership of Iran, is this escalating or has it already become a decapitation strike? We don't know just yet, and I don't want to conjecture just yet, but all the contours that Trump and Netanyahu have given us about, Roaring Lion and Epic Fury, basically sounds like that's exactly what they're aiming for this time. It doesn't look like it's going to stop before they achieve that. I'm just wondering what that red line is going to be. All right. In fact, as we focus on all of these visuals coming in from across the Middle East, from Israel, from Iran, the latest updates, and in fact, we'll bring in Aditya Raj Kaul now. IDF has begun large-scale reinforcement of troop presence at borders. It has boosted, the presence of IAF, Navy, home front search. Blasts have been reported, says Israeli media, in Riyadh. An airstrike has hit an Iraqi base which was hosting pro-Iran militia. And all of these are reports coming in from within Israel. But let's actually get a sense of what is happening there on the ground, because Aditya is right there. It seems, at least for the time being, it is slightly calmer than earlier. The sirens have stopped and you're out of the bomb shelter. Aditya. Well, this happens during conflict. There are moments when, it's calm, but you never know. Sirens could be blazing again. Since morning, there have been 3 different times when sirens got blazing. People ran off to the bomb shelters. And even as NDTV continues to bring in exclusive reportage here from Israel and from Iran and the larger Middle East, it is a very, very significantly
dramatic situation that is developing. It is very, very fluid right now. I'm now being told that US President Donald Trump will be addressing the nation again in a few hours from now to update about the latest developments, because this is nearing a long-term format, because earlier we were reporting since morning these could be preemptive strikes, but what we have witnessed since is that 5 different locations in Iran under target, including several ministry buildings and very senior security establishments. We do not, of course, know, as Shiv was pointing out, the fate of the leadership of Iran at this point in time. There could be some casualties, possibly, yes, high casualties because of the kind of the magnitude of the attack that happened. As of now, here in Israel, there hasn't been any kind of damage that has been reported as such. There are multiple missiles that did come in, but the Iron Dome did its work. It intercepted most of those missiles above the sky. I heard those explosions while I was at the bomb shelter here. The airport, as I said, is completely shut. People are inside their homes because this is Shabbat as well, and they are not outside. I'm standing right now in one of the neighborhoods of Tel Aviv, where people are completely inside. They are, focused on news channels here in Israel, as well as the Homefront Command app, because they are keeping us updated about the latest developments that are coming in. But it is a huge regional conflict that we are looking at, which is being witnessed right now. What I can also tell you, Padmaja, Shiv and Gauri, is that multiple air bases have come under attack. There are no official confirmations from Iranian side right now, but apart from Bahrain and Kuwait, we are hearing reports of Qatar and UAE also under attack. We are waiting for official confirmations on that front, but all these are US bases, basically, in these countries, and the US bases have come under attack. Whether there has been any damage on ground or not, again, no official confirmation on that. I'm being told that Netanyahu, the Israeli Prime Minister, is keeping a very, very close watch along with the IDF chief and the Mossad chief about the latest developments that are coming in. But we are likely to see more action in the next few hours. In fact, Aditya, that update has in fact come. Go ahead, Shiv. That's what we're talking about. Aditya, I just had one question. Iran's missiles that have either landed or been intercepted over Israel have been in open areas. Are you hearing any reports from the ground in Israel of any targeting of cities? The last exchange that happened when the escalation took place towards the evening, cities were targeted as well, including where you are right now, Aditya. Well, as always, Shiv, and you've been here on ground, the first target always becomes central Israel, which is Tel Aviv, which is hub of the economic action in many ways. And the Ben Gurion airport, where not just the civilian aircrafts, but also the military aircrafts are parked, also becomes a target. Well, there was a huge thick smoke that I witnessed right outside the Ben Gurion airport. We thought that it could be a missile or a rocket that could have landed up there, but it was a fire. So there is no missile that has touched on ground as of now. There are multiple explosions. I can't put a number to it, but there are multiple explosions that have been seen on the sky right above me, or meters away from me. And these are basically Iron Dome and other, anti-air defense mechanism that is under play out here. But many of these missiles have also been intercepted in several different countries, from UAE to Bahrain to Kuwait and other locations as well. Whether there's been damage out there, because we did see visuals coming in from Bahrain out there, and there have been alerts that have been issued, and there are a fresh wave of strikes that are happening from the Israeli side right now against Iran. In fact, Iran has attacked US base in Abu Dhabi. UAE has released a statement saying it's a blatant attack by Iranian ballistic missiles. Iranian missiles successfully have been intercepted successfully, and these visuals first broken to you on NDTV. These explosions reported not just in the UAE but Kuwait and Bahrain as well. The military operation against Iran has spilled over into a much wider region, and these dramatic pictures coming in from Bahrain, from UAE and from Kuwait. All right, so the very latest, in fact, that we are getting to you. Let's continue to stay with Aditya over there. And very important piece of information that Donald Trump is likely to address his country again. One, where he basically said that this was a regime change operation. Aditya, what is likely to be the content? What are you hearing about? Why, within a couple of hours, he has decided to make another address to the nation? Well, we'll have to wait and watch what exactly is at play, because there is a message that Donald Trump has sent out through the military action and the strikes to
to the common people in Iran that seize this moment. This is the moment for you. Do you want democracy to be restored? Then you will have to certainly physically snatch that democracy away, and we can only aid in this entire process. But will that happen? Because there's a significant population that also is behind Ayatollah Khamenei, Pezeshkian, and several other Iranian leaders right now. We do not know the status of the top leadership, but we do know that they are all in hideouts right now, keeping safe away from these attacks that are happening in Tehran. It is certainly a regime change operation that Israel and Iran have been planning for a very long time. But I've been speaking to Israeli diplomats as well as intelligence who tell me that it's not easy. They do not expect instantly an Iranian takeover to take place because there's no substitute out here. Yes. There is Reza Pahlavi, but he is not out there. And there's no democratic substitute right now who can take the leadership or who has mass following right now in Iran. So it's not going to be physically, diplomatically, politically, or militarily easy for the US or Israel to just click a button and have perhaps a regime change out there. There has to be a successive military, operation. Absolutely, and when you talk about a change to what? What follows that change? If the current regime is to be dislodged, what comes after? Zamir Jafri, scholar at the Al Mustafa University, is also joining us live now. Thank you very much, Mr. Jafri, for speaking to us. How do you see this panning out over the next few hours? Donald Trump has told people of Iran the hour of your freedom is at hand. What happens after that hour of freedom? Are you with me? Yes. Are you talking to me? Yes, Mr. Jafri. Okay. Thank you very much for having me on the show. Your voice was not very clear, but what I understood was America is trying to bring about democracy in Iran. Wow. It makes me laugh. 34 million people came on 11th of February to support an Islamic government. Okay. And somebody sitting outside in other side of the world thinks that they know Iran more than what the Iranians know. And those 34 million people who came on the road were not Iranians, they were aliens. Secondly, they want to bring about democracy in Iran, but they want to establish a terrorist in Syria as the head of the state. And they want all the kings in the Middle East and the West Asia to rule the country where there is no democracy. All these lies and all these propaganda, till when are we going to repeat the Western propaganda like copy-paste things? First of all, let me start with the first thing is this is an attack on Iran, which proves again the world is a jungle Raj. There is no international law. According to all international law, according to United Nations, this is an act of terror. This is an act of war against a sovereign nation. This is the second time that Iran was in conversation. Iran was negotiating. The foreign minister of Oman was yesterday in United States. In the Face the Nation, one of the shows in United States of America, he clearly stated that Iran has agreed to maximum demands of America and Iran is ready to negotiate. Let's give it time. And he knew that this barbarism is going to take place. So let's break it down. What does people of Iran want? They want an Iranian government. It's not a regime. There is a regime in United States which is against the Supreme Court of United States, which is taking unilateral actions, which is taking Maduro from Venezuela. All right. There's jungle Raj and a regime in United States. In Iran, there is a government, there is a democratic government, there is a president, there are votes, there is election. This is all Western propaganda. Yesterday, India Today released a news in which their reporters came. I invite the NDTV reporters to come to Tehran as well. Okay. Come and walk on the street, speak to people. What kind of propaganda is this? What is regime change? What is this regime change drama? Okay. What is regime change? Okay, but Mr. Jafri, what do you anticipate some kind of reaction from the people of Iran? Because every statement up till now has been addressed to the people of Iran saying this is the kind of support that you had sought from the world all of this while. You did not get it, but now it is in your hands to seize your destiny. Well, there is something called daydreaming, and America has been daydreaming this since last 40 years. Iran has progressed in 40 years. Iran is now in a capacity that Iran can strike back.
This whole Western, there was a report on Al Jazeera which stated there were 40 million bought on Twitter and X, which were being used to project as if the Iranian people are against the Iranian government. This is an official news on X. So all these social media revolution are sitting outside in a cozy AC room and thinking that Iran is about to collapse. Tehran has collapsed, Mashhad has collapsed. This is all nonsense which is going on in the Western propaganda, multi-million propaganda. Mr. Jaffrey, which are trying to portray Iran is about to collapse. It's absolute nonsense. No, we haven't said any of that. Yes. We have been objectively asking, and we continue to report objectively about how the situation is unfolding. The question was about what happens next post. Now, one of the panelists recently said this. Okay, it's about regime change and the people of Iran. Yes, okay. I was responding to them. My question to you, sir, is that there is a strike that has been launched by Israel. It is backed by US completely. And it seems like both sides are prepared to take this forward and for it to prolong for more than just a couple of days. I want to understand from you the impact this will have on Iran because of the disproportionate scale and disproportionate and complete inequality in terms of how the US and Israeli military assets exist and with regard to Iran. I would like to just add one point, and that point is very simple. That during the 12 days war, the same question was there. Iran in that 12-day war proved two things. One is Iran's missiles can penetrate the air inside Israel and any point in West Asia. One. Two, Iranian missiles have pinpoint accuracy. And Iran had only used Khorramshahr in the last 2 days of the war, which is and they have not even used Sijil, which is one of the latest ballistic missile and hypersonic missiles that they have. So it's not that America can attack, Israel can attack, and Iran cannot respond. Those days are gone. Ayatollah Khamenei has clearly stated, "Mizani ni khori." If you think you can hit and run away, hit illegally, criminally, and run away, those days are gone. Iran can respond back. Iran has clearly said that this will be a regional war. Ayatollah Khamenei clearly stated this will be a regional war. And on day one, within hours, Iran responded by attacking six air bases in 6 different countries inside American bases in the West Asia. What does it prove? It proves that Iran has the power to respond. Okay. And Iran is not going to back down or not going to capitulate or not going to submit to these imperialist and colonialist power. I, as an Indian, I expect all Indians to stand up against this colonialist and imperialist mindset. These were the people who ruled us for 150 years. We as a country were 23% of the world economy. They looted us, and when they went, they left us with 3% of the world economy. Okay. They are the people who are trying to put tariffs on us. We as Indians, we need to stand up based on principles. But Mr. Jaffrey, Iran has said that UN needs to step in, the UNSC needs to take cognizance of what they have called an unprovoked and unilateral attack. But I haven't so far seen anyone actually speak up and respond to that. In fact, we have Anthony Albanese, who is, I think, one of the first few world leaders who has responded to this. And he said Australia stands with the brave people of Iran in their struggle against oppression. For decades, the Iranian regime has been a destabilizing force through its ballistic missile and nuclear programs, support for armed proxies, and brutal acts of violence and intimidation. Iran directed at least 2 attacks on Australian soil in 2024. These appalling acts target Australia's Jewish community, were intended to create fear, divide our society, and so on and so forth. Why is Iran then not getting the support that you say everyone across the world, including India, should be giving them? Well, we live in a jungle, Raj, and what happened when Maduro was captured, Greenland is being attacked, all the countries of the Europe, they were sitting like the classroom students, and the principal United States was dictating to them what happened when they were trying to attack all the... So is there any doubt
that we live in a jungle Raj? Is there any doubt in anybody's mind? Is there any doubt that there is no international law, there is no United Nation? Okay. So there is only one way in which we say jiski lathi uski bhais. That is the kind of world that we live in. Okay. And Imam Ali alayhi salam says a very beautiful quote. He says the world is like a jungle in which the bigger animal is trying to eat the smaller animal till the time All you right, remain a Mr. smaller Jafri. animal, somebody is out to hunt you All out. right. But to use your, to stretch your analogy a little further, agar jiski lathi uski bhais, that at this time, what will be decisive to determine who actually wields the bigger and the stronger lathi? Military might. Whose military might is going to outlast this? For the time being, thanks very much, Zamir Jafri, for having... I just want to add one more point. All right, just 10 seconds, please. Just one more point I want to add. Yes, one more point. Look, Iran is a country which believes in the ideology of Imam Hussein. We are Shia Muslims. We are taught never oppress anybody and never accept any oppression. We believe dying on the knee is much, dying on standing high, your head high is much better than kneeling down to an oppressor. Iran is ready. All right, we're going to take a very quick break at this point, but this ongoing coverage on the biggest story of 2026, don't go anywhere. The most incisive analysis, updates right here on NDTV. Back in a minute. Introducing Motorola's signature. एक्शन बोलती है ना, मैंने बिल्डिंग से जंप मारा। फिल्म वालों को प्रोटेक्शन मिलता है यार। ये क्रिकेट नहीं है। बाउंसर लगा ना, गेम ओवर। डोंट वरी। अपनों का भरोसा आप और आपके लिए एक्सिस मैक्स लाइफ के टर्म प्लान्स का भरोसा। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। भरोसा तुम हो। एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस को खत्म करे कम से कम समय में और पेट को रखे कूल लंबे समय तक। प्रोटैंस। Eat happily, live happily. When technology connects with compassion and policy is driven by innovation, development becomes inclusive. Guided by this vision of Chief Minister Yogi Adityanath, 2,000 crore rupees has been allocated for the UP AI mission, which will be spent gradually over the next 3 years. It is a major step towards building a robust, state-led AI ecosystem. आज भारत ने AI की जिम्मेदारी से मजबूती के साथ अपनाई है और उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका के साथ भारत है। An AI hub is being developed in Lucknow, where AI-based startups are receiving investment and incubation support. At the same time, programs such as AI Pragya are being conducted to train youth in AI, machine learning and data science. In Uttar Pradesh, the use of AI in e-governance is making government services more transparent and efficient. Through these efforts, Uttar Pradesh is rapidly moving toward a technology-driven economy. नहीं भाई, कोई कूल बैंक बताओ ना जिसके लिए हर कस्टमर इम्पोर्टेंट हो। SBI कूलेस्ट है। What? किसान से NRI तक, Gen A से Gen Z तक, SBI सबके लिए है। Very good. SBI, the banker to every Indian. Truly. एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस को खत्म करे कम से कम समय में और पेट को रखे कूल लंबे समय तक। प्रोटैंस। Eat happily, live happily. कितनी सड़कें, कितने पुल, कितने बांध, कितनी नदियां, कितना आसमान, कितने शहर, कितने गांव, कितना बड़ा अपना देश अपनी गोद में लेके जा रही है ये जो अपनी गाड़ी है, इस पे भारत आगे बढ़ता है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, बेटर ऑलवेज।
anniversary yesterday. So Arundhati and I were in. Yeah. Light bug na Mahesh. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अरे ऐक ना क्या हो रहा है उल्टा नहीं सर उनको गेस्ट को वो चाहिए पीछे वाला बैकग्राउंड चाहिए जहाँ पे सर बैठे ना देखो जहाँ पे ये बैठे ना ये गेस्ट है सर क्योंकि गेस्ट को वो दिखाना है सर with his bowling and his fielding. It seems like the rubber, the green is going his way as we
You know, that's not a problem. Hello. Thank you. Hello. Yeah. नहीं नहीं, ये मेरा फोन है यार, ये इस पे नहीं है लाइन. टॉक बैक कहाँ है? You can put it over there. I'll have it. Yeah, thank you. But is that what she's sort of said, that there may be a change in plans or something like that, or? Well, she's in a briefing currently, so she just went into the briefing about 15 minutes ago. I expect that will go on for at least another 10 minutes, and then I should have an answer. No, because, you know, do tell her that. You know. हाँ पाहिजे आता फोन माझा चार्जिंगला लावतो सर ये सर टॉकबैक नंबर यही है विष्णु आनंद सर देखिए तभी उनको पास फ़ोन था. ये सर देखिए देखो मैं फ्रेम में हूँ सर, ये मैडम के पास मैं फ्रेम में हूँ. हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइक चेक. हेलो माइक चेक हे हे हे. हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6. सर इसका ज़रा सेंसिटिविटी कम कर दीजिए सर. ये सर आ रही है सर, आपकी आ रही नॉइज़ की तरह सर ज़्यादा. क्योंकि अब हवा का भी सर सर हवा पेन है सर. हेलो माइक सर, ऑडियो लेवल कम कर दिए सर. ओके ओके सर. सर ऑडियो लेवल कम कर दिए सर. हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हेलो 1 2 3 6 7 8 9 10. हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैं हूँ मैं सर के पास ही हूँ. हेलो माइक चेक 1 2 3. हेलो 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 माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हेलो चेक चेक. हेलो 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 चेक चेक 1 2 3 4 5 6. यस ओके. विष्णु का चेक करना होगा. क्या बोलता है? To have some memory of the day. Everything's such a blur. Thank you. You know, sometimes we do all these visits and I didn't even think about that later. Maybe I'd mention that I read something, but I have good visits. I have good visits. But is there a possibility of her cutting short her visit? तो क्या लेवल यहाँ से लेवल बढ़ गया सर आनंद सर. Nothing. अभी देखो ये मेरा हाँ. हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6. हाँ अभी सर का क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. विशु सर बोल रहे वाइट में. हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. लाउड एंड क्लियर. Loud and clear. Loud and clear. ओके. आप इसी नंबर पे पैच करना सर. ओके ओके ओके.
Yeah, I can. Yeah, I can. No, not yet, not yet. She's not yet come. Can you tell me about the time constraints on your side? Is there a time where you absolutely would have to leave? Well, I have to get back to anchor all of this. So, but this is very much our priority. I mean, I've been traveling from 3 in the morning for this. I was in the middle of Ranthambore forest. Oh my goodness. Yeah, on my anniversary, which I cut short. Aye. So flew in from Jaipur, and so I want to do the interview. Be very keen on that. Yeah. I will stress that to her staff. Do mention that I'm a 2-time Carlton graduate, so if that helps. Oh, Carlton. Both my degrees. Okay. I also did my master's degree At Carlton. Yeah, first degree at McGill. Small world. It is. Yeah, there's a small delay. The guest will be here soon, hopefully.
मेरा यूनिट प्रोटेक्ट डाउन है देखना जरा Not yet. I'm trying to get one. हा कुठला स्प्रे आहे हा कुठला आहे ये सर को 2 नंबर पे लगाया हूँ हा बोल सर को 2 नंबर पे खोटी को हा बोल 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 वारा भरपूर आहे ठीक है और दूसरा ये देख ये दिखा what? ये इंडोर ही दिखता रे She's sorry? She's preoccupied. I told she won't be able to do it. Can we reschedule it or what is the thing? Not today. Not today. What about tomorrow? I don't think tomorrow. We can look, but I would have to speak again. Iran in Delhi? Sorry? In Delhi? In Delhi, again, I don't know what will come now, but we can certainly continue to Delhi, yeah, we will try to press, but Delhi is a very tight schedule. So there's only one day. Yeah. If there is a possibility tomorrow, will you let me know? Well,
मास्टर वाइट कैमरा है ना, वाइट कैमरा सेफ्टी के लिए। हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो माइक चेक माइक। हाँ एक ही माइक आपको। हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8। हेलो माइक चेक, माइक चेक। क्या है सर इसमें प्रॉब्लम? एक मिनट सर, रोल नंबर। आप देखिए सर। हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइक चेक। ये गेस्ट है सर। हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइक चेक, माइक चेक। हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइक चेक। हेलो माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक 1 2। क्या बात? ये देखिए सर। हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो माइक चेक, माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो माइक चेक, माइक चेक। समझे नहीं सर, क्या बोले आप सर? एक मिनट सर। हाँ सर, ये ऑडियो एक एक चैनल पे कि मिक्स पे? एक एक चैनल है ये डिजिटल DSL कैमरा है सर। ये 5D है सर, DSL की कैमरा सर। एक ही में दो आएंगे। हाँ ये सर खाली बस बोल रहा हूँ सर, आपसे आपसे ही बात कर रहा हूँ सर मैं। हेलो माइक चेक। और सर जो मास्टर वाला कैमरा है वो खाली बस अपना कैमरा है, न्यूज़ वाला कैमरा। बाकी दोनों कैमरे 5D है सर। सॉरी। ये सर लगाया सर। हेलो माइक 4 5 6 7 8 9 10। माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो माइक चेक, माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
खबर है कि ईरान के सेना प्रमुख कमांडर इन चीफ आमिर हतामी इजराइल के हवाई हमले में मारे गए हैं। ऐसे में इसे छोटा हमला नहीं माना जा सकता। खबर ये भी आई है कि इजराइल अमेरिका के हमले में ईरान के परमाणु मुख्यालय को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इन सब के बीच ईरान के प्रमुख अयातुल्लाह खामेनेई को सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया गया है। खबर है कि उन सभी अहम जिम्मेदार लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है जो खामेनेई की युद्ध नीति के राजदार और खास हैं। मतलब शुरुआत में जिन हमलों को छोटा माना जा रहा था वो युद्ध की भीषण चिंगारी को भड़काते दिख रहे हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 ऐसे तमाम हमले हुए। ये सब इतना अचानक हुआ कि खामेनेई के लोग और ईरान की सेना कुछ समझ ही नहीं पाई। शांत शहर में अचानक अफरा तफरी मच गई। टॉमहॉक मिसाइल से लेकर घातक ड्रोन ने तेहरान से लेकर ईरान के 30 से ज्यादा इलाकों का चैन छीन लिया। इस हमले में भारी बर्बादी हुई है, जिनमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, F-15 रैम स्ट्राइकर फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल डेलिला और रैम्पेज, स्पाइस प्रेसिशन गाइडेड बम, JDAM प्रेसिशन म्यूनिशन, बंकर बस्टर GBU-28 क्लास बम, आर्म्ड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन जैसे हथियार शामिल हैं। इस हमले में भारी बर्बादी हुई है, जिसमें तेहरान के अलावा करमानशाह, कोम, लोरिस्तान, कराज और तबरीज जैसे शहर भी शामिल हैं, जहां हमले हुए हैं। इन सब के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री सामने आए। उन्होंने ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव अटैक की पुष्टि की, यानी एहतियातन सैन्य कार्रवाई की बात कही। लेकिन क्यों? आखिर अभी यह हमला क्यों किया गया? इजराइल ने ईरान पर अभी हमला क्यों किया, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अंतिम दौर में चल रही थी? उसका दावा किया जा रहा था कि बातचीत सफल हो सकती है। फिर ऐसे में हमला क्या माहौल को और ज्यादा खराब नहीं कर देगा? अटकलें लग रही थी कि कहीं अमेरिका ने ही तो ईरान पर इजराइल को हमला करने के लिए नहीं कहा, कहीं अमेरिका से बातचीत फेल तो नहीं हो गई। इन सवालों के बीच खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ही हमला कराया है, क्योंकि बातचीत सफल नहीं रही। ईरान मान नहीं रहा, वो परमाणु बम बनाने पर अड़ा हुआ है और अमेरिकियों की रक्षा से हम समझौता नहीं कर सकते। They can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. ट्रंप ने ईरान एयर स्ट्राइक पर बयान जारी किया और कहा कि इस कदम में तमाम अमेरिकी भी मारे जा सकते हैं, हमारे लोग भी हताहत हो सकते हैं, लेकिन हम क्रूर ईरानी शासन के खतरे को खत्म कर देंगे। The lives of courageous American heroes may be lost and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future. And it is a noble mission. सुना आपने, ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान को आगे नहीं बढ़ने देंगे, खत्म कर देंगे। वो कह रहे हैं कि बातचीत फेल हो गई है। इसके कुछ ही देर बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी कैमरे के सामने आए। לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת, מבצע שאגת הארי. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן. तो अब क्या मान लिया जाए कि मिडिल ईस्ट अब जंगी बारूद के जाल में उलझ चुका है? क्या दुनिया अब एक और महायुद्ध का दंश झेलने वाली है? आदित्य राज कौल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो देखा आपने किस तरह से विस्तारित से लड़ाई का अब हो रहा है। अब एक और अपडेट आपको दे देते हैं जो बड़ी जानकारी मिलकर आ रही है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर भी कई मिसाइल दागे गए हैं और वो मिसाइल जाकर गिरे भी हैं। हाइफा में तबाही की तस्वीर सामने आई है। देखिए आप किस तरह से इमारत, कई मंजिल की इमारत थी जिसकी छतें टूट गई हैं और यहां पर मिसाइल का असर देखने को मिला है।
तो ये बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, ईरान ने हाइफा पर दागी कई मिसाइलें, उनमें से कुछ मिसाइलें गिरी हैं और ये बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑन एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हाइफा इजराइल के अंदर, ये नुकसान की तस्वीरें। और इजराइल आप सभी दर्शकों को इस वक्त लिए चलेंगे क्योंकि आदित्य राज कौल, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी, उनकी मौजूदगी इजराइल में ही है, जो आप सभी दर्शकों तक रिपोर्ट भेज रहे हैं लगातार। आदित्य, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, हाइफा में तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, क्या इसको लेकर पूरी इंफॉर्मेशन दर्शकों को पहुंचाएं, जानकारी दीजिए आदित्य। जी बिल्कुल, ये जानकारी सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया पर आ रही है कि हाइफा में जो है हमला हुआ है, एक तरफ से कुछ बातें जो हैं क्षतिग्रस्त है पूरी तरीके से। आप पहले दृश्य एनडीटीवी इंडिया पर देख सकते हैं कि कैसे पूरी तरीके से ये क्षति हुई है, पूरी तरीके से ये बिल्डिंग पूरी तरीके से अटैक हुई है। आप देख सकते हैं बीचों बीच इसके हमला हुआ है। क्या इसमें कुछ लोग इंजर्ड भी हैं, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ इमारतें जरूर अटैक के मद्देनजर इस पे हमला हुआ है। आपको याद होगा जब 12 दिन का युद्ध हुआ था तब भी हाइफा के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, उसमें भी एक विचलित करने वाले दृश्य वहां से आए थे। इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट है हाइफा पोर्ट पे और ये कंसर्निंग डेवलपमेंट होगी इंडिया के लिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री भी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर आए थे। जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था इजराइल को समर्थन का आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन अब जो है स्थिति गंभीर मुद्रा में आदित्य, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें इस इमारत की छत में छेद हो गया है, यहाँ पर मिसाइल गिरी है जाहिर तौर पर। 125 मिसाइल बताया जा रहा है दागी गई इजराइल की तरफ। यहाँ पर किसी की जान तो नहीं गई है, और ये कितनी मिसाइलें गिरी हैं इजराइल के अंदर? देखिए, पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि करीबन 80 मिसाइलें दागी गई हैं, उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 125 130 तक बढ़ गया। लेकिन जिस तरीके से ईरान लगातार जो है मिसाइलें दाग रहा है इजराइल के खिलाफ, इसमें लग रहा है कि आगे और नंबर्स में तब्दीली आएगी, क्योंकि लगातार करीबन 4 से 5 बार हमने वेव्स देखी अलग अलग ईरान की तरफ से मिसाइल इजराइल की तरफ भी आते हुए, और मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर अमेरिका के बेस है वहां पर जो है क्षति पहुंची है। हमने देखा है कि कुवैत से लेकर बहरीन तक, यूएई से लेकर सऊदी तक अलग अलग दृश्य वहां को मिलने हैं। और अभी मैं यहाँ पर इजराइल की बात कहूं तो टेल अवीव में मैं मौजूद हूँ, ये सेंट्रल पार्ट है इजराइल का। यहाँ पर बिल्कुल ही शांति है। शांति इस प्रकार है कि लोग शबात मना रहे हैं और अंदर हैं घरों में, लेकिन जब भी सायरन आते हैं तो वो बॉम्ब शेल्टर्स में घुस जाते हैं। और ये स्थिति इन्होंने कई सालों से देखी है, लेकिन अभी हाल ही में ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, इससे स्थिति और ज्यादा गंभीर बढ़ रही है और आने वाले घंटों में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है, क्योंकि ईरान थमने नहीं वाला। ईरान की तरफ से चेतावनियां बरकरार हैं और इजराइल भी एक फ्रेश वेव ऑफ अटैक्स जो है अमेरिका के साथ मिलकर ईरान में कर रहा है। बिल्कुल आदित्य, जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका रुख करते हैं। लगातार बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और देखिए हम थोड़ी देर पहले जो ब्रेकिंग न्यूज आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि खामनेई की आवाज पर बड़ा अटैक हुआ और सैटेलाइट इमेज एनडीटीवी के पास मौजूद है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं कि क्या खामनेई की उपस्थिति वहां पर थी, मौजूदगी थी या नहीं। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि खामनेई वहां पर नहीं थे। ये सोर्सेस की तरफ से ये स्पष्ट अभी फिलहाल नहीं है कि वो थे कि नहीं। लेकिन देखिए, ये तस्वीर आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये खामनेई का आवाज है। लाल घेरे के अंदर जो काले धुएं का आप गुब्बार देख रहे हैं, यहां पर अटैक है, ये मिसाइल गिरा और ये आवाज से बताया जा रहा है खामनेई का ही, लेकिन वो वहां पर थे कि नहीं, ये फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे। प्रभु दयाल साहब के पास एक बार हम चलेंगे, उनको भी ज्वाइन करते हैं। प्रभु दयाल साहब, हमने ये तस्वीर दिखाई, सैटेलाइट इमेज आई है, अटैक होता है, लेकिन साथ साथ हाइफा से भी जो तस्वीर आई है 125 से 30 के आसपास मिसाइल्स अटैक किए गए और वहां पर बिल्डिंग जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। खास मेरा सवाल ये कि अभी देखिए त्योहारों का मौसम है, खासकर मिडिल ईस्ट की पूरी बात करें, मुस्लिम्स की बात करें, रमजान चल रहा है, लेकिन उधर इजराइल में भी त्योहार का टाइम है, लेकिन ये जो टाइमिंग है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपके चैनल पे सुबह ही ये कहा था कि ये सोचना कि एक लिमिटेड स्ट्राइक है ऐसा गलत। ये ऐसी स्ट्राइक है जो इजराइल ने सुबह की और जब सुबह 3 मिसाइल गिराई गई तो इससे सही अनुमान ये लगाया जा रहा था कि अब ये युद्ध बढ़ेगा, इसमें एस्कलेशन होगा और वैसा ही हुआ। इजराइल ने भी और मिसाइलें दागी और ईरान ने भी जवाबी मिसाइल दागी और अमेरिका ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि इजराइल के अटैक जो हुए हैं वो अमेरिका के पूरे कोलैबोरेशन से हुए। अब देखिए, बहुत आशाएं लगा जा रही थी कि जो ये बातचीत हो रही है, इनडायरेक्ट टॉक्स अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में न्यूक्लियर इश्यूज को लेके, इससे बहुत उम्मीदें थी। लेकिन देखिए, ये सब एक दिखावा था।
ये बातचीत जो थी वो ऐसे समय हो रही थी जब ईरान के ऊपर मिलिट्री प्रेशर बहुत बढ़ाया जा रहा था जी। और एक तरफ तो अमेरिका बात कर रहा था, दूसरी तरफ एक तो उन्होंने बिल्कुल प्रभुदयाल साहब, यही एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ बातचीत चल रही थी और उसी दौरान इस तरह का हमला यहां पर होना, इसका क्या मतलब है और ये लड़ाई खिंचेगी या रुकेगी? इसका अंदेशा इस बात से लग सकता है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने यहां पर बताया है कि उसने इजरायली और यूएस बेस पर हमले किए हैं और ईरानी सेना ने यहां पर कहा कि दुश्मन के हारने तक जारी रहेगा जवाबी हमला। ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है और कहा गया इस क्षेत्र के यूएस बेस संसाधन निशाने पर हैं। फिर से आपको ये बड़ी खबर पहुंचा दे, देखिए ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है और उसने इजरायली और यूएस बेस पर टारगेट किया है। ईरानी सेना ने कहा है कि दुश्मन के हारने तक ये जारी रहेगा जवाबी अटैक। मतलब इधर से भी आप मंसूबा समझ लीजिए कि हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान का ये साफ तौर पर कहना है कि दुश्मन के हारने तक ये अटैक जवाबी पलटवार। बिल्कुल उसी तरह की भाषा है आशुतोष, जिस तरह का तनाव में ईरान और अमेरिका के बीच देख रहे थे एक दूसरे को चेतावनी के तौर पर। शुभदा हमारे साथ है। शुभदा, इस भाषा से तो बिल्कुल नहीं लगता यहाँ पर कि जल्दी ये मामला यहाँ पर थमने वाला है। अब जैसे फैलाव इसका हो रहा है, आपको लगता है कि विस्तार की तरफ ये लड़ाई जा रही है? बिल्कुल ये विस्तार की तरफ लड़ाई जा रही है, क्योंकि पिछले साल भी 12 दिन का जब वॉर हुआ था तो इसी तरीके से सीज फायर नेगोशिएशंस हो रहे थे, यूरेनियम एनरिचमेंट के नेगोशिएशंस हो रहे थे और इजराइल ने अटैक कर दिया था। इस बार भी यही हुआ है। पूरे जीसीसी देशों में सिर्फ एक ओमान के ऊपर ईरान ने अटैक नहीं किया है। इसके अलावा जो है जहां पे सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी तो वो इजराइल में भी होंगी, ईरान में भी होंगी। अमेरिकन जो हैं जो 19 बेसिस में हैं ऑल अराउंड ईरान, उन पे भी होगी। हुथीज ने रेड सी को बंद कर दिया है, बाबल मंदिर को कंट्रोल कर दिया है। रशिया ने इसको स्ट्रांगली कंडेम किया है, चाइना कुछ समय ले रहा है। बाकी इराकी मिलिशियाज और फिर हुथीज और हमास ने इसको कंडेम किया है। मुद्दा यह है कि अब आने वाली पीढ़ी में क्या होने वाला है, आने वाले समय में, कि जैसा ईरान ने बोला था कि जो जीसीसी कंट्रीज है जिनकी ऑयल रिफाइनरीज हैं उस पे वो अटैक कर सकता है। हो सकता है कि ऐसा हो, और ये भी हो सकता है कि क्योंकि हमारे इंडियंस 3 से 10 हजार इंडियंस ईरान में हैं, 1 लाख से ज्यादा इंडियंस इजराइल में हैं, तो बिल्कुल शुभदा जी आप जुड़े रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, देखिए जो अटैक हो रहा है उसमें अब किस तरह से आम नागरिक और स्टूडेंट्स भी निशाने पर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान के मिनाब में स्कूल पर जो हमला हुआ है वहां से जुड़ी ये जानकारी आ रही है कि कुछ छात्र मारे गए हैं। उनकी संख्या लगभग 35 के आसपास बताई जा रही है। ये देखिए आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, ईरान के मिनाब में स्कूल पर हमला हुआ और उसमें कुछ छात्र मारे गए हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 35 के आसपास छात्र हैं। अभी ये शुरुआती इंफॉर्मेशन जी 35 ईरानी छात्राओं के मारे जाने की खबर है। बिल्कुल देखिए 30 ठिकानों पर ये बताया जा रहा है कि ये टारगेट हुए थे, स्ट्राइक किया गया था। उसमें से एक जगह ये भी थी जहां पर 35 ईरानी छात्राओं की मौत हो गई है, उनके मृत्यु की खबर आ रही है। लोग इकट्ठा आप यहाँ पर देख रहे हैं, तस्वीर आप देखिए, पीछे वो इमारत है जिससे धुआं निकलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। कितनी जिंदगियां देखिए काल के गाल में समा गई और ये अटैक, युद्ध ऐसा ही होता है और युद्ध अपने साथ यही लेकर आता है। ये देखिए चीख पुकार मातम की तस्वीरें, ईरान की तस्वीरें, ईरान का ये मिनाब है और यहां पर एक स्कूल और इस पर होता है अटैक। 35 ईरानी छात्राओं के मारे जाने की खबर आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले से, जो अभी तक दावा किया गया है। नंबर्स, डेथ टोल्स कैसे बढ़ रहे हैं। अभी तक 24 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी और अब तो यहीं से एक ही स्कूल से 35 छात्राओं के मारे जाने की खबर आ गई। इसका मतलब कि कितना ये अभी कितनी संख्या बढ़ेगी ये इंपॉर्टेंट है। प्रभुदयाल जी, जब ये जानकारी, बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम ये 35 शुरू में कुछ ही मिनट्स पहले की बात है, 24 हमने अभी नंबर्स दिए थे और ये 35 छात्राएं तो एक ही जगह मार दी गई हैं, यानी कि ये नंबर्स बहुत ज्यादा अभी बढ़ने जा रहे हैं। देखिए जब लड़ाई छिड़ती है तो कैजुअलिटीज तो बढ़ती हैं और दोनों साइड्स ने पूरी तैयारी की है कि अपने लोगों को वो श्रम अच्छी तरह से बचा के रखें, शेल्टर्स में रखें, लेकिन कैजुअलिटीज तो होनी लाजमी है और वैसे ही हो रहा है, क्योंकि जब ये स्ट्राइक्स हुए तो कई सिविलियन एरियाज में हुए। आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि कितनी इमारतें तहस नहस हो रही हैं और सिविलियन कैजुअलिटीज तो होंगी ही। तो मेरे विचार में जितना लंबा ये चलेगा उतनी ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी और कोशिश ये करनी चाहिए दुनिया को कि ये रोका जाए, क्योंकि देखिए इसके अलावा अफगानिस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हो गई तो हमारे तो पूरे ईस्ट में लड़ाई है और पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होगा। और देखिए ऑयल सप्लाईज जो मिडिल ईस्ट से आती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से,
बिल्कुल प्रभुदयाल जी, ये एक बड़ा कंसर्न है। इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे कि आप देखिए इसका वैश्विक स्तर पर कैसा असर पड़ेगा अगर ये तनाव जल्दी नहीं थमता है। लेकिन आसार फिलहाल लग नहीं रहे कि जल्दी कुछ यहां पर थमेगा, क्योंकि अमेरिका की मदद से इजराइल अटैक के बाद ये माना गया कि ईरान भी पलटवार करेगा, और हुआ भी वैसा ही। जिन जगहों से ईरान पर अमेरिका समर्थित हमला हुआ, ईरान ने उन सभी जगहों को टारगेट करते हुए 30 से ज्यादा जगहों पर हमला किया है। देखिए, और उसके समर्थन में यमन से हूती और लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी इजराइल और अमेरिकी बेस पर अटैक शुरू कर दिए। यानी सुबह सुबह उठी हमले की चिंगारी अब महायुद्ध का बैटल ग्राउंड तैयार करती हुई दिखती है। देखिए जरा पूरी। It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. That this terrorist regime can never have a nuclear weapon. चलते ईरान ने भी उठा ली अलगार। खामिनेई के हुंकार, शुरू तुमने किया, खत्म अब हम करेंगे। ईरान पर इजराइल से लेकर अमेरिकी बेस पर हमला। मिडिल ईस्ट में भड़क गई है युद्ध की भीषण चिंगारी। मिडिल ईस्ट में आसमान से लेकर समंदर और जमीन तक सब तरफ हाहाकार मच गया है। ईरान से बदले के लिए अमेरिका की मदद से इजराइल ने ऑपरेशन रोर ऑफ लायन चलाया। उसी ऑपरेशन से उपजे धमाके ईरान को अभी दहला रहे हैं। जवाब में ईरान ने भी कमर कस ली है। ईरान ने बदले के लिए, पलटवार के लिए ऑपरेशन खैबर पर कब्जा लॉन्च कर दिया। खामेनेई ने साफ कर दिया है, युद्ध इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया है, लेकिन खत्म अब ईरान करेगा। और उसी प्रण, उसी शपथ के बाद ईरान की मिसाइलों ने इजराइल से लेकर अमेरिकी बेस पर हमला शुरू कर दिया। आपके टीवी स्क्रीन पर ये वही जगह हैं जिनमें सबसे ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर गिराई गई। उनमें भी 4 प्रमुख शहर ईरानी मिसाइलों के निशाने पर रहे। जिनमें तेल अवीव, हाइफा और गलीली शामिल हैं। ये उन्हीं जगहों की तस्वीरें हैं जहां जहां ईरान ने हमला किया। इस हमले में इजराइल को खासा नुकसान हुआ है। इजराइल की तमाम इमारतें खाक में मिल गई हैं। हालात ऐसे हैं कि इजराइल ने अपने नागरिकों को घरों के अंदर ही रहने के निर्देश दिए हैं। जाहिर है, इजराइल ने वार किया है तो उसने पहले ही उसकी तैयारी कर ली थी। जैसा कि हमारे संवाददाता आदित्यराज कौल ने तेल अवीव से हमें जानकारी दी थी, वहाँ पहले से स्कूल और कॉलेज दफ्तर बंद हो चुके हैं ताकि नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाया जा सके। आप पीछे देख सकते हैं पूरी तरीके से सायरन है। ये 5वीं बार है सुबह से कि सायरन आ रहा है। इसका मतलब है कि ईरान की तरफ से 5वीं बार मिसाइलें जो है दागी जा रही हैं। अभी हमने देखा कि कई मिसाइलें यहाँ पर आई इजराइल की तरफ और उनको इंटरसेप्ट किया गया। और कई ऐसे देशों में मिडिल ईस्ट में, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो और कतर हो, वहां पर भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला कि कई जगह जो है विस्फोट भी हुए, इंटरसेप्ट भी हुआ, लेकिन एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तब्दील हो रहा है। तो जिसे शुरुआत में महज हमला माना जा रहा था, वो अब भीषण युद्ध में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। चिंगारी कहां जाकर बुझेगी या भड़केगी, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। तेल अवीव से आदित्यराज कौल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर जो हालात बने हुए हैं उसमें यह जानकारी मिलकर आ रही है कि ईरानी मिसाइल को कतर ने तबाह किया है। आपको बता दें, कतर में भी अमेरिकी बेस पर टारगेट किया था ईरान ने, और इसको कतर ने यहां पर बीच में ही गिरा दिया है। कतर एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को मार गिराया है और ईरानी मिसाइल गिराने की तस्वीरें अब सामने आई हैं। देखिए, बड़ी खबर है ये, फर्स्ट ऑन एनडीटीवी एक्सक्लूसिव। किस तरह से ये तस्वीर आप सभी के सामने रख रहे हैं। देखिए, कतर का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, एक्टिव हो चुका है। थोड़ा हम सुनवा देते हैं शोर से। तो एक ईरानी मिसाइल को कतर ने तबाह कर दिया है, कुवैत एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है और ईरानी मिसाइल गिराने की तस्वीर सामने आई है। कुवैत का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। इसी के साथ ये तस्वीर उसी की तस्दीक करते हुए एनडीटीवी, फर्स्ट ऑन एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर है आप सभी दर्शकों को भी। देखिए, कुवैत में
में जहां पर अमेरिकी ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने, उसको टारगेट किया था ईरान ने और इस मिसाइल को कुवैत के डिफेंस सिस्टम ने यहां पर मार गिराया है। यानी जो नजदीकी मुल्क है ईरान के, वहां पर उनका डिफेंस सिस्टम भी अब एक्टिव हो गया है इस हालात को देखते हुए, जहां पर चारों दिशाओं में आप कह सकते हैं कि ईरान ने मिसाइलें यहां पर दागी हैं। तो ताजा स्थिति यह है कि तनाव बिल्कुल अपने चरम पर है और यहां पर एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं। प्रभुदयाल हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभुदयाल जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास, जहां पर पूरे दुनिया में जितना तेल जो एक्सपोर्ट होता है या ट्रेवल करता है 40% इसी रास्ते से होकर गुजरता है। आपको लगता है कि पूरी दुनिया पर वैश्विक स्तर पर एक बड़ा असर ऑयल की कीमतों को लेकर पड़ सकता है इस तनाव का? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए ही और दुनिया के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि लगभग 40% तेल उसके थ्रू आता है जो कि दुनिया को सप्लाई होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ओमान, ये बहुत बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं और कतर एक दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एनर्जी सप्लाईज पे कितना असर होगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है अमेरिका और ईरान की जंग में। इसके अलावा देखिए, हमारा तो बहुत ट्रेड इसके थ्रू पास करता है। जो यूएई है वो हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके अलावा बाकी सब गल्फ कंट्रीज को भी हमारे यहां से एक्सपोर्ट जाते हैं और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टेंशन होता है तो ये सप्लाईज बंद हो जाते हैं, क्योंकि जहाज तो नहीं जाएंगे अगर वहां लड़ाई, तो हमारे ट्रेड पे भी बहुत इफेक्ट होगा और उसके अलावा दुनिया के ट्रेड पे, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंट्रीज हैं। फिर देखिए, एक बहुत बड़ी बात ये कि अगर ये जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फैलती है तो ओमान, बहरीन, यूएई, कुवैत, इन सब कंट्रीज को अपने ये लपेट में ले सकती है। ऐसा ही हो रहा है। देखिए, कुवैत में एक मिसाइल गई, कुवैत ने जैसा आपने स्क्रीन पे दिखाया है गिरा दिया। जी प्रभुदयाल जी बने रहिएगा सर, फौरन आपका रुख करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ नरेश कौशिक जी भी आ चुके हैं, पूर्व एडिटर हैं बीबीसी से। लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट को रख देते हैं दर्शकों के बीच, क्योंकि इन सब के बीच ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया है उससे मिडिल ईस्ट का इलाका रीजनल वॉर में तब्दील हो चुका है। एक पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद से इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और तस्वीरों को भी और ब्रेकिंग न्यूज को भी आपके सामने रखेंगे। इजराइल ने चिंगारी भड़काई, अब ईरान ने पूरी आग ही लगा दी। जिस चिंगारी को महज ईरान और इजराइल के बीच की आग समझा जा रहा था, ईरान ने प्री प्लान तैयारी की और उसे रीजनल वॉर में बदल दिया। उसी की जीती जागती तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये हमले जो ईरान ने अमेरिकी बेस पर किए हैं, वो अमेरिकी बेस जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही बना रखे हैं, ईरान ने उन पर ड्रोन्स और मिसाइल के मुंह खोल दिए हैं। ईरान ने जिन अमेरिकी बेस पर हमला किया उनमें बहरीन, तेहरान, कुवैत, कतर, अबू धाबी और जॉर्डन शामिल हैं। इन बेस पर ईरान ने किस कदर अपना क्रोध बरपाया है, अब उसकी तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। जॉर्डन से लेकर बहरीन और दूसरी जगहों पर इसी तरह धमाकों से आसमान से लेकर जमीन तक सब कांप रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को पहले ही सावधान किया था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो उसके बेस को छोड़ेगा नहीं। मिडिल ईस्ट और आसपास अमेरिका के 18 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं। ऐसे में ईरान उन पर हमला करके अमेरिका को सीधा सख्त संदेश दे रहा है। एनडीटीवी पर आप समझ लीजिए कि वो कौन कौन से अमेरिकी बेस हैं जो ईरान के निशाने पर हैं। तैनाती अमेरिकी फोर्सेस की है, वहां पर टारगेट किया गया है। कुवैत, जहां पर कहा जाता है 10,000 के करीब अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं, वो जगह टारगेट की गई है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई को यहां पर टारगेट किया गया है और यमन और इराक, ये बताया जा रहा है कि ये भी यहां पर निशाने पर है। रण भीषण दिख रहा है और इससे सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल प्रभावित नहीं होंगे, पूरी दुनिया परेशानी की जद में आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
लगातार आशुतोष जो जानकारियां आ रही हैं वो बिल्कुल इस ओर इशारा कर रही हैं कि तनाव यहां पर अभी बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि ईरान ने अब तक 125 मिसाइलें दागी हैं इजराइल की तरफ, जिसमें से एक गिरी थी हाइफा में, जो हमने आपको दिखाया था, जहां पर छत टूट गई थी इमारत की। तो ये लगातार बड़ी खबर आ रही है। देखिए, हर एक बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के साथ, क्योंकि ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं गवाही दे रही हैं, तस्दीक कर रही हैं, इजराइल पर अब तक लगभग 125 से 30 मिसाइल्स दागी जा चुकी है और उनमें से कुछ नुकसान पहुंचा चुके हैं। जैसे ये हाइफा की तस्वीर, हाइफा में इस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, काले धुएं का गुबार, आसमान को चूमते हुए लहरें उठती हुई, ये आप देख पा रहे हैं। इजराइल और ईरान में क्या हो रहा है ये भी आपको हमने दिखाया। नुकसान काफी ज्यादा वहां पर हो चुका है, क्योंकि 35 छात्राओं के मारे जाने की वहां पर खबर आई। एक स्कूल पर एक मिसाइल गिरा इजराइल की तरफ से जो दागा गया था, लेकिन अब पलटवार करने में देरी नहीं कर रहा है ईरान, लेकिन दोनों तरफ से नुकसान की बड़ी खबर। और इस वक्त हमारे साथ नरेश कौशिक जी भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। एक छोटा सा रिएक्शन हम सर से ले लेते हैं और साथ ही आपको इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं। सर, ये जो आप माहौल देख रहे हैं, लगातार तनातनी, अब सिर्फ इसको ना कहें क्योंकि अब तो ये पूरा भीषण जंग ही है, यहां से आगे अब कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमला ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने जो मिलकर किया है, ये बहुत ही गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले साल की तुलना में ये बहुत व्यापक है। पिछले साल तो उन्होंने सिर्फ मिलिट्री के ठिकानों पर हमले किए थे, सिर्फ वहाँ पर इंटेलिजेंस के ठिकानों पर हमले किए थे या न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन ये जो हमले हैं ये राजनीतिक ठिकानों पर भी हैं। ईरान के बहुत सारे शहरों पर हैं, जो शहर पिछले हमलों में इजराइल ने जिन पर बमबारी नहीं की थी वहां भी अब हो रहे हैं। लेकिन नरेश जी, ये हुआ क्यों, ये इसको समझने की कोशिश हम भी कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ। एक तरफ बातचीत चल रही थी अमेरिका के साथ ईरान की, और उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बातचीत के पेज पर पहुंचने, बातचीत के स्टेज से एकदम से युद्ध के हालात यहां पर क्यों बन गए? क्या इसकी वजह आपको लगती है? कि मुझे इसकी वजह सीधे सीधे ट्रंप का ये निर्णय है कि उन्हें ईरान को सबक सिखाना है। इजराइल के जो नेता हैं नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी बरसों से, बल्कि मैं कहूँगा दशकों से ये घोषित नीति रही है कि ईरान में रिजीम चेंज हो, वहाँ का तख्ता पलट हो, वहाँ ये जो इस्लामिक रिजीम है इसको यहाँ से हटाया जाए। और इसके लिए वो अमेरिका के बहुत सारे राष्ट्रपतियों को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अमेरिका के इस राष्ट्रपति ट्रंप को मनाने में कामयाब हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने ये बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन हम प्रभुदयाल जी से ले लेते हैं, लेकिन सर ये हमें समझना पड़ेगा, प्रभुदयाल जी, क्या ये सिर्फ एक वर्चस्व की लड़ाई मानते हैं आप इसे? ये सिर्फ एक वर्चस्व की लड़ाई, या फिर इसमें अर्थ है, इसमें तेल है, इसमें बहुत कुछ है? केवल सिर्फ वर्चस्व के लिए ये लड़ाई आपको लगती है कि मुनासिब है? जी प्रभुदयाल जी, मेरा सवाल आपसे। जी, जरा आवाज ठीक से नहीं आई, जरा रिपीट कर दें। हाँ, नरेश जी कह रहे थे कि ये एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई है, तो मेरा सवाल ये है, मुझे ये जानना है कि क्या ये सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई के लिए इतनी बड़ी भीषण जंग हो रही है, या फिर इसके पीछे तेल का खेल भी है, बहुत कुछ। लेकिन दर्शकों तक एक बड़ी खबर इस वक्त हम पहुंचा दें, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बहरीन में ईरानी हमले की तस्वीर सामने आ गई है इस वक्त की, ये बिग ब्रेकिंग, बहरीन में ईरानी हमले की तस्वीर सामने आई। थोड़ी देर में आपके सामने भी वो तस्वीर हम रखेंगे। ये देखें, ये अटैक की, ये जो मिसाइल गिरा है ताबिश। बिल्कुल, देखिए, बहरीन, कुवैत, कतर, ये तमाम जो पड़ोसी मुल्क हैं आप कह सकते हैं ईरान के, उन जगह पर अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया ईरान की तरफ से, और अब उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब बहरीन में ईरानी मिसाइल वहां पर जाकर गिरा। जाहिर तौर पर अमेरिकी यहां पर टारगेट पर थे, लेकिन किसी और देश में अगर आपकी मिसाइल जाकर गिरती है तो वो उस देश की संप्रभुता पर भी एक सवाल यहां पर खड़ा होता है। और इसी तरह जो तमाम मुल्क हैं वो अब अपनी रक्षा में जो बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ ही आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। प्रभुदयाल जी, अब सवाल ये है कि ये लड़ाई कहां पर जाएगी, और उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस मुल्क के साथ कौन यहां पर खड़ा है। अगर इजराइल के साथ अमेरिका है तो ईरान के साथ कौन है? आपको लगता है कि कुछ समर्थन ईरान जुटा पाएगा इस लड़ाई में? देखिए, ईरान के साथ कोई कंट्री नहीं है, ईरान अकेला लड़ रहा है। उसकी प्रॉक्सीज हैं, लेकिन वो भी बहुत हद तक वीकन हो गई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ट्रंप साहब का जो इरादा है वो रिजीम चेंज का। लेकिन व्लादिमीर पुतिन और रशिया को लेकर क्या कहेंगे सर? रशिया ने तो अभी युद्धाभ्यास भी किया था 2-4 दिन पहले ही, बहुत ज्यादा वक्त तो हुआ नहीं। दिखावा। अच्छा,
क्या आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, आपको पूरा देश सुन रहा है सर। क्योंकि कभी मुझे लगता है कि आप नहीं सुन पा रहे हैं तो कुछ अच्छा, हम ठीक है, यहाँ तकनीकी रूप से कुछ सही कराते हैं, मे भी आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी। अच्छा, मैं कह लूं अपनी बात? जी जी, बात पूरी करिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं कह लूं, जो मैं बात कंप्लीट कर लूं। जी जी, आपको सुन पा रहे हैं, आप बात पूरी कीजिए। देखिए, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कल ये कहा कि टॉक्स अच्छी गई हैं, ईरान जो है कई शर्तों पे राजी हो गया है, न्यूक्लियर स्टॉकपाइल नहीं रखेगा। लेकिन ट्रंप ने क्या कहा उसी के जवाब में? ट्रंप ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, ये जो बातचीत हुई है और ईरान के रिजीम जो है उसको तो बदलना ही होगा। तो बार बार ट्रंप ये कहते आ रहे हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन होता था क्योंकि वो कहते थे कि हाँ बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन कोई इस बात में शंका नहीं होनी चाहिए कि वो रिजीम चेंज चाहते हैं। ठीक है, देखिए बड़ी वजह है। बिल्कुल प्रभु सर, बने रहिएगा, तुरंत आपका हम फौरन रुक करेंगे। लगातार दर्शकों तक ब्रेकिंग न्यूज भी पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। तो एक एक जो तस्वीर आ रही है एनडीटीवी पर आप सभी दर्शकों तक एक्सक्लूसिव और फर्स्ट, और एनडीटीवी आप सभी तक हम रख रहे हैं। स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। नरेश जी, एक छोटा सा सवाल, आप ही की बात को हम पूरी तरह से सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा एक तरह से वर्चस्व, लेकिन मेरा प्रश्न इसमें यह है सर कि सिर्फ वर्चस्व है या फिर तेल का खेल भी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है इस बीच। बिल्कुल, बड़ा अपडेट आपको दे दें। तेल अवीव के होलोन बस अड्डे में भी आग लग गई है। यहाँ पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद बस अड्डे में आग लगी है। हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, करीब 125 मिसाइल ईरान की तरफ से यहाँ पर दागी गई हैं इसराइल पर। और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहले हाइफा की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब ये तेल अवीव की तस्वीर है जहाँ पर होलोन बस अड्डा है, यहाँ जाकर ईरान की एक मिसाइल गिरी है। तो क्या इसराइल का डिफेंस सिस्टम यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है इन मिसाइलों को? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि इसराइल जाना जाता है पूरी दुनिया में अपने डिफेंस सिस्टम के लिए, और जिस तरह का नुकसान अब यहाँ पर हो रहा है वो इन तस्वीरों के जरिए यहाँ पर जाहिर हो रहा है। नरेश जी, ये जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, इसमें हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये कहाँ पर जाकर हालात रुकेंगे, इसमें आपको यहाँ पर किस तरह की स्थिति अब लग रही है? क्योंकि अब देखिए नुकसान इजराइल में भी हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि पिछले बार की तुलना में इस बार ईरान रिएक्ट ज़्यादा कर रहा है। पहली बार उन्होंने दुनिया के जो और जगह पर, मिडिल ईस्ट में जो और जगह इनके जो बेसिस हैं अमेरिका के, उन पर निशाना साधा है। मिसाइलें लगातार जारी हैं, दागी जा रही हैं, और यानी पहली बार ईरान जो है पूरी तरह से तैयार होकर सामने आया है और इसका नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए, अभी तो वहाँ शाम हुई है, अभी रात बाकी है। रात को मुझे लगता है कि ज़्यादा ये लड़ाई बढ़ेगी। ट्रंप ने अमेरिका के टाइम 1 बजे रात को ही शुरू किया था, ईरान में तो 9:30 बजे थे, तो अभी तक ये दिन में हो रहा है। अभी आप रात का इंतजार कीजिए, जब ये एस्केलेशन होगा, जो कि ईरान के पास में नाइट वॉरफेयर के ज़्यादा इंतजाम होंगे यहाँ पर। अच्छा नरेश जी, एक सवाल और, क्योंकि आपसे इससे पहले जो आप बता रहे थे यहाँ पर कि आपने कहा कि अमेरिका ने एक रिस्क ले लिया यहाँ पर इन्वॉल्व होकर, ऐसा आपको क्यों लगता है? अमेरिका और इजराइल की क्षमता अगर ईरान से आप तुलना करेंगे तो वो कहीं ज्यादा है, तो ये रिस्क कैसे है अमेरिका के लिए? देखिए, रिस्क ये कई तरह से है। पहली बात तो ये है कि ट्रंप ने अभी तक जहां भी मिलिट्री इंटरवेंशन किया है वहां वो कामयाब हुए हैं, और लेकिन जहां जहां भी उन्होंने किया है वो बहुत ही सतही जैसा था, इस तरह का बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आपको याद होगा कि ट्रंप जो सत्ता में आए हैं वो ये वायदा करके आए हैं कि वो दुनिया में अमेरिका की लड़ाइयां खत्म करना चाहते हैं, यानी नो मोर वॉर्स। लेकिन इन्होंने ये जो मिडिल ईस्ट में खास तौर से जो इन्होंने जो बड़ी लड़ाई छेड़ी है, ये उन्होंने बहुत बड़ा खतरा लिया है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये देश के और विदेश के कानूनों को, अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी तोड़ा है और राष्ट्रीय कानून को भी तोड़ा है। तो इसके लिए उनको अमेरिका के भीतर भी कोई बहुत समर्थन नहीं है इसको लेकर। अच्छा, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में हुडा जरीवाला भी आ गई हैं, फॉर्मर एंकर हैं सऊदीया चैनल में और भारतीय मूल की हैं, सऊदीया में ही जन्म हुआ मुझे लगता है आपका। ठीक है, आपके पास आएंगे और आपसे रिएक्शन लेंगे, लेकिन दर्शकों तक एक रिपोर्ट जल्दी से पहुंचा देते हैं, क्योंकि देखिए ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ही अटैक किया और इससे वहां फंसे भारतीयों की परेशानी काफी बढ़ चुकी है। ईरान में भारतीय जो छात्र हैं मदद की अपील भी की है, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर आ रही है ताबिश, ये फिर से बड़ी खबर लगातार ईरान पर यूएस इजराइल हमले पर भड़क गया है रूस।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या रूस इस मामले में यहां पर शामिल होगा। हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्या इस लड़ाई का विस्तार होगा, और विस्तार होने के लिए यह जरूरी है कि ईरान को कोई समर्थन मिले। अब क्या रशिया यहां पर इसमें दखल देगा, ये एक बड़ा सवाल है। रूस भड़कता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नरेश जी, क्या रूस आपको लगता है कि सीधे तौर पर एक बार हुदा जी को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए? हुदा जी, हम कब से वेट भी कर रहे थे और हमने कई सवाल भी इसको लेकर पूछे थे, प्रभुदयाल जी से भी पूछे, अभी पूछा बल्कि, कि क्या रूस इस पर कोई एक्शन लेगा, एंट्री करेगा, या सिर्फ दिखावा है? रूस की भूमिका को लेकर अभी क्या, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज तो उसी से जुड़ी हम दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो रमजान के पाक बाबरकत महीने में इजराइल ने इतनी घटिया हरकत करी है, एक के बाद एक मुसलमान मुल्कों को वो टारगेट कर रहा है। उसको लग रहा है कि वो बच के निकल जाएगा, उसको लग रहा है कि नाउजुबिल्लाह अपने आप को शायद खुदा ही मान बैठा है इजराइल, जो एक के बाद एक अपने पापा में कह सकती हूँ यूएस के साथ एक के बाद एक मुसलमान मुल्कों को टारगेट कर रहा है। वो ईरान को कमजोर समझ के बैठ चुका है, बहरीन के ऊपर, कतर के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर, सीरिया के ऊपर, और कितने सारे ये जितने जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं या जितने इनके एक्शंस हो रहे हैं, जो अनहोली एक्शंस इन दिस होली मंथ हो रहे हैं, उसका जवाब यकीनन दे। बैकग्राउंड क्या है, क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली इजराइल को लगता है कि वो अपने जितने वॉर क्राइम्स है वो उसके अनचेक्ड हो जाते हैं। उसको लगता है कि यूएस उसके बैक पे एक प्रोटेक्टिव फोर्स की तरह बैठा हुआ है। उसको लगता है कि वो कोई भी तरह का जेनोसाइड परफॉर्म करे फलस्तीनियों के साथ। ये जो हम पिछले 2 साल से जो जेनोसाइड विटनेस कर रहे हैं, एक ग्लोबल लेवल पे विटनेस कर रहे हैं, ये बाय द वे 2 साल का नहीं है, ये 70 साल से ज्यादा पुराना किस्सा है। लोग अभी बहरहाल जागृत हो रहे हैं, और अब उसको लगता है एप्स्टीन फाइल्स के आने के बाद कहीं ना कहीं दुनिया की और मजीद आंखें खुली, पता चला कि किस तरीके से इजराइल दुनिया पे कहीं ना कहीं अपना कमांड पकड़ा हुआ था, किस तरह से वो देश के लीडर्स तक को एज पपेट्स कहीं ना कहीं उसके स्ट्रिंग्स वो ऑपरेट करता है। तो ऑब्वियसली इन सारे मुल्कों में ईरान एक ऐसा दरेगम बेखौफ मुल्क है जिसमें खामेनेई आप मानती हैं कि इसमें जो अटैक हो रहा है, मिसाइल्स गिर रही हैं, लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है, तो इसमें एब्सेंट फाइल का भी रोल है? यकीनन है। और एप्स्टीन फाइल्स बाय द वे आपको क्या लगता है, पूरी की पूरी हमारे सामने उसकी सच्चाई आई है? काफी ऐसी चीजें जो अब तक जो ट्रुथ है अब तक हमारे साथ विथ होल्ड किया गया होगा। ऑब्वियसली कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे सामने नहीं है। और राइट नाउ जहां आपने रशिया का सवाल पूछा था, ऑब्वियसली रशिया क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन द ग्लोबल सिनारियो एक बहुत बड़ा प्लेयर है। रशिया का स्टेक बहुत सारे तो आपको लगता है रशिया सीधा मतलब एंटर करेगा, इसमें खुलकर सामने आएगा, ईरान का साथ निभाएगा? हो सकता है इमीडिएटली ऑन द स्पॉट नहीं आए, लेकिन अगर रशिया को लगता है कि उसकी कहीं ना कहीं एयर स्पेस थ्रेटन हो रही है, अगर रशिया को लगता है कि कहीं ना कहीं मैं टारगेट पे आ रहा हूं या मेरे जो इंटरेस्ट है वो टारगेट पे आ रहा है, ऑब्वियसली रशिया भी इसमें दखल अंदाजी करेगा, चाइना इसका हिस्सा बनेगा। रिएक्शन नरेश जी से ले लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि असहमत नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि रूस रिएक्ट करेगा, और ना ही वो रिएक्ट करने की स्थिति में है। वो यूक्रेन में इतना उलझा हुआ है कि उसके पास ना तो इतनी अब ताकत बची है, ना ही उसका जो ध्येय है वो इस लड़ाई में किसी भी तरह से परोक्ष रूप से भी कूदने का है। यही बात मैं चीन के बारे में भी कह सकता हूं। चीन सिर्फ अपना रवैया देखता है, अपना हित देखता है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ये मुसलमान के हिसाब से सोच रहे हैं। ट्रंप ने तो जहां भी उनको दिखता है कि वो मार सकते हैं वो मार देते हैं, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया। वेनेजुएला के बाद उनको लगता था कि वो ईरान में करेंगे, उनकी फौज ने यह कहा कि नहीं, हम इसके लिए तैयार नहीं है, ईरान ऐसा मुल्क नहीं है, इजराइल वेनेजुएला नहीं है, इसके लिए हमें पूरी तैयारी चाहिए। और उसके बाद कई हफ्तों की, मैं समझता हूं 6-7 हफ्तों की तैयारी के बाद ये उन्होंने जोखिम उठाया है। बिल्कुल नरेश जी, आप देखिए ट्रंप यहां पर क्या चाहते हैं, यहां पर रशिया इन्वॉल्व होता है नहीं होता है, कहां पर लड़ाई जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमारी फिक्र हमारे लोगों को लेकर है, जो भारतीय मूल के लोग या भारतीय लोग वहां पर रहते हैं। और ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो हमला किया है, इससे वहां पर से भारतीयों की परेशानी काफी बढ़ गई है। बिल्कुल, देखिए ईरान में भारतीय छात्रों ने मदद की अपील की है, लेकिन अभी क्या एक्शन हो रहा है, क्या वहां पर हलचल है, इसके लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आप सभी दर्शकों के लिए नजर डालें। तनाव के हालात पैदा हो गए। इस बीच ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है, लेकिन ईरान में कुछ भारतीय छात्र फंस गए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर मदद मांगी है।
उन्होंने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से जल्द वहां से सुरक्षित निकालने की अपील की। छात्रों का कहना है कि हम बता भी नहीं सकते कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। Hi everyone, I'm an Indian student and currently I'm in Tehran. The situation here feels really worst and uncertain. We really don't know what's gonna happen next. We're really grateful that the Government of India and the Ministry of External Affairs are in discussion for our safety. But in the times like these, speed matters a lot. I'm not even able to say these things because the airstrikes are happening and it's getting really worse for us. We just request for the quicker and clear evacuation as soon as possible. Please do not wait for the situation to get worse. Just help us. Just get us out of here as soon as possible. ईरान पर हमले के बीच तेहरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। साथ ही सभी भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने को भी कहा गया है। भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। जरूरत पड़ने पर स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर वो लोग कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 989128109115। दूसरा नंबर 989128109109 और तीसरा नंबर है 989128109102। इसके अलावा 989932179359 पर भी कॉल कर सकते हैं। भारतीय दूतावास ने इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक भी इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 97254752071 और 97254242838। लोग स्क्रीन पर नजर आ रही ईमेल एड्रेस पर मेल भी कर सकते हैं। भारत सरकार ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें निकालने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है, लेकिन वहां फंसे हुए भारतीय लगातार हो रहे हमलों से डरे हुए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। भीषण शुरू हो चुकी है और ये देखिए किस तरह से अब प्रतिशोध में फंस गई है दुनिया। अब 6-7 मुल्क तो इसमें आ गए हैं। अब कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या करवा दिया, लेकिन ये जो बदला है पलटवार ईरान भी ले रहा है, क्योंकि अभी तक तो नुकसान की खबरें ईरान से आ रही थी, जहां पर 35 छात्राओं के मारे जाने की खबर आई। बहुत सारे लोग सैकड़ों की संख्या में घायल हुए हैं और जैसे जैसे वक्त बीतेगा और भी नुकसान की खबरें आती रहेंगी। लेकिन ईरान ने जो जवाबी पलटवार किया है, वहां पर हाइफा में भी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई। एक और हमने अभी तस्वीर दिखाई, वहां पर दर्जनों की संख्या में बस जो है वो जलते हुए नजर। एक और बड़ा अपडेट यहां पर आशु दे देते हैं। दुबई जा रहा विमान वापस लौटा है। आप जानते हैं कि तमाम एयर स्पेस इन देशों के बंद कर दिए गए हैं और ऐसे में एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान थी, दुबई में लैंडिंग की इजाजत इसको नहीं मिली है, क्योंकि ईरान की तरफ से UAE, कतर, कुवैत यहां पर स्ट्राइक किए गए हैं, यहां पर मिसाइल दागे गए हैं। ऐसे में ये जो पूरा रीजन है, यहां पर हवाई यात्रा जो है वो इफेक्ट हो रही है और ये दुबई जाता हुआ विमान, इसको वापस यहां पर बुला लिया गया है। दुबई में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई है। तो ये असर है जो स्ट्राइक का इस पूरे के पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट इस वक्त भारी तनाव में है और यहां पर विस्तार होता हुआ स्ट्राइक का दिख रहा है। नरेश जी, ये जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, अब रशिया की हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि रशिया इसमें दाखिल होगा, लेकिन ईरान के लिए आपको लगता है कि बहुत जरूरी है, अगर किसी और का समर्थन नहीं मिलता है तो उनके लिए सामना कर पाना इजराइल और अमेरिका का एक बड़ी चुनौती हो जाए। देखिए, चुनौती तो बड़ी है, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार था। आपने देखा होगा कि पिछले साल भर में बहुत ज्यादा ईरान के जो प्रॉक्सीज थे वो इजराइल के द्वारा बहुत ही डिग्रेड किए जा चुके हैं, अगर पूरी तरह से ख़त्म नहीं किए जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि ईरान जो है काफ़ी हद तक इसमें अकेला है। यहाँ तक कि ईरान ने जो खाड़ी के और देशों से संबंध सुधारने की जो कोशिश की थी, उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला था और बड़ी ताकत तो कोई उनका समर्थन नहीं करेगी। तो सबसे बड़ी जो समस्या है ईरान की, कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ सकते, क्योंकि सबको अमेरिका से डर लगता है। अमेरिका के सारे बेसिस इन देशों में हैं और यही आपको हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए
कि ये जो अब लड़ाई है ये 2-4 दिन का खेल नहीं है। ट्रंप ने ये सोचा होगा कि 2-4 दिन में खत्म करके चले जाएंगे, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार था। जो पिछले साल जब हमले किए थे इजराइल ने ईरान पर, और उसके बाद जो ट्रंप ने जो वहाँ के न्यूक्लियर ठिकानों पर जो हमले किए थे, उसके बाद से ईरान ने अपने जो मिसाइल के जो मिसाइल कार्यक्रम है उसको भी आगे बढ़ाया, और अपने जो है और जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं यानी कि ड्रोन्स वगैरह भी और ज़्यादा बना लिए हैं। और इसके अलावा उन्होंने अपने रिजीम के जो बड़े नेता हैं उनको छिपाने का भी एक बड़ी खबर आ रही है जी, बिल्कुल रोकना रहेंगे और तुरंत वापस आएंगे। इजरायली सेना ने जारी कर दिया है वीडियो, ये इस वक्त बिग ब्रेकिंग। देखिए इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो, ये सैटेलाइट इमेज है फर्स्ट ऑन NDTV। आप सभी दर्शकों को एक्सक्लूसिव तौर पर हम दिखा रहे हैं, ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। पश्चिमी ईरान में हमले की तस्वीर, ये सैटेलाइट इमेज है। देखिए ये जोरदार ब्लास्ट, भीषण ब्लास्ट की तस्वीरें, ये चूंकि सैटेलाइट इमेज है। देखिए जरा, ये ईरान पर अटैक हुआ और इसका वीडियो जारी किया गया है। इजरायली सेना ने, IDF ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह वीडियो जारी किया है, जरा सुनवाइए। और लगातार आप सभी तक ये बड़ी खबर तो हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन खबर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इजरायली सेना ने यानी IDF, इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया जहां पर ईरान पर जो अटैक हुआ उसका ये वीडियो है। पश्चिमी ईरान में हमला हुआ और उसी की ये तस्वीरें हैं, आप सभी को दिखा रहे हैं। ईरान पर जो भीषण अटैक किया है इजराइल ने, IDF ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने, ये वीडियो जारी कर दिया गया है, उसी की तस्वीर। थोड़ी देर पहले भी हमने आपको तस्वीर एक दिखाई थी जहां पर आयतुल्लाह खामनेई के आवास पर अटैक किया गया था, लेकिन खामनेई वहां पर थे या नहीं ये कुछ क्लियर नहीं हुआ, लेकिन सोर्सेस बता रहे हैं कि वो सेफ हाउस में उनको बाहर कर दिया गया था। ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज महायुद्ध पर NDTV की महा कवरेज लगातार जारी है, लेकिन लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं। हमारे साथ गेस्ट भी हैं यहां पर मौजूद, और इसी वक्त हमारे साथ मीनाक्षी भी हमारे सहयोगी स्टूडियो में आ चुके हैं। मीनाक्षी। बिल्कुल आशुतोष, और देखिए इस वक्त सवाल जो है, अमूमन जो हमारे रेगुलर शोज होते हैं सवाल इंडिया का समय है, लेकिन आज इंडिया का सवाल नहीं, आज पूरे विश्व का सवाल है। और क्या विश्व युद्ध के मुहाने पर हम खड़े हैं, और उससे बड़ी बात है कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट की परिस्थितियां जो इस समय दिखाई दे रही हैं बड़ी चिंताजनक है। इस वक्त बड़ी खबर आपको एक बार अपडेट कर दें, युद्ध पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का स्टेटमेंट आया है, ईरान युद्ध तुरंत रोके, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और UN सिक्योरिटी काउंसिल की भी इमरजेंसी बैठक की बात उन्होंने की है, डिमांड किया है। युद्ध पर फ्रांस के राष्ट्रपति का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब यहां से देखिए, जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि दुनिया के जो बाकी देश हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कौन किसके साथ खड़ा दिखाई देगा, और वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिका में ट्रंप साहब के आने के बाद से जिस तरह के वर्ल्ड ऑर्डर पर बातें होती रहती है, उन सब के बीच ये बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर बयान हो जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने रिएक्ट किया है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे ईरान ने भी अपील की है। हालांकि ईरान की तरफ से 2 दिन पहले भी चिट्ठी लिखी गई थी UN को, अब आज फिर जो है ईरान की तरफ से ये अपील की गई कि UN इस पर हस्तक्षेप करे। हालांकि ये सब बयान जो आप देख रहे हैं इनका डिप्लोमेटिक महत्व है, इनका कूटनीतिक महत्व है, क्योंकि हकीकत की जमीन पर क्या होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यूं तो फिर जिस तरह के स्ट्राइक्स हुए ये भी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये हुआ है। तो इसीलिए नरेश कौशिक जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, फ्रांस के राष्ट्रपति जब ये कह रहे हैं कि फौरन युद्ध रोके ईरान और UN की अहम बैठक, आपातकाल बैठक बुलाई जाए, ये सिर्फ बयानबाजी हो रही है या वाकई गंभीर भी है इसके लिए? देखिए इसके पीछे का आप मतलब देखिए, उन्होंने ईरान को कहा है युद्ध रोकने को, जबकि ईरान ने तो युद्ध शुरू नहीं किया। इस पर ईरान पर तो हमला हुआ है इजराइल और अमेरिका का, तो ईरान कैसे रोक सकता है? ईरान ने तो शुरू किया नहीं। ये बात जरूर है कि ईरान ने जवाब में मिसाइल दागे हैं, उस पर जवाबी कार्रवाई ईरान कर रहा है, लेकिन ये तो कहना मुझे लगता है हिपोक्रेसी है फ्रांस की या किसी भी पश्चिमी देश की कि ईरान इसको रोके। ईरान कैसे रोक सकता है? और रही बात संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक की, ये बैठक की मांग तो स्वयं ईरान ने की है इससे पहले। तो संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता आज कहां टिकी है, क्रेडिबिलिटी कहां टिकी है? ऐसा लग रहा है कि आप टूथलेस हैं, बैकबोन नहीं है आपके पास। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो ट्रंप ने जो इंटरनेशनल ऑर्डर को जिस तरह से तहस नहस किया है, जिस तरह से उथल पुथल किया है, उसके बाद तो लगता ही नहीं है कि कोई ऑर्डर बचा है, क्योंकि जो ट्रंप चाहते हैं वही होता है। लेकिन अब तक जो उन्होंने किया
उसमें वो कामयाब हुए। अब इस पर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो ईरान में अपना उद्देश्य हासिल कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा है कि इमीडिएट जो है हमें खतरा था अमेरिका को ईरान से, जो एकदम ऐसा तो कोई खतरे का कोई हमें तो कोई उन्होंने संकेत दिखा नहीं, ना ही उन्होंने कोई उदाहरण पेश किया, ना ही को हमने कोई उसी तरह का कोई उदाहरण उन्होंने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ईरान तो इस तरह से इन्होंने क्यों किया। ठीक है सर, बस एक सेकंड रुकूंगी, अभी सीधे दोहा का रुख करेंगे। वहां से हमारे साथ इंडियन स्टूडेंट हैं फरहान, वो जुड़ गए हैं। फरहान, अभी आप दोहा में है, क्या स्थिति है वहां पर, क्या फेस कर रहे हैं अभी आप लोग? यहाँ पे करंटली स्थिति ये है कि गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप जहाँ भी हैं अपने स्थान पे रहें, बाहर जाने से बचें। और यहाँ पे सभी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं सबने ये एडवाइजरी जारी कर दी है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पे रहें और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन यहाँ पे मॉल्स एंड एवरीथिंग दे हैव क्लोज्ड, सो राइट नाउ वी आर एट आवर प्लेस ओनली। आपको जो एडवाइजरी दी गई है उसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है? और उसमें एडवाइजरी में यही गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि अभी सीरियस कंडीशन है एंड एज पर गवर्नमेंट व्हेन दे विल लेट अस नो व्हेन द सिचुएशन इज इन कंट्रोल, बट राइट नाउ दिस इज द एडवाइजरी व्हिच दे हैव गिवन अस। अच्छा, खबरें किस तरह की आप तक फरहान पहुंच रही हैं? क्योंकि देखिए ग्लोबली तो अब इस खबर को अलग अलग तरह से देखा जा रहा है, लेकिन जो लोग जहां तहां फंसे हैं, पॉइंट ऑफ कंसर्न, चिंता आप लोगों के मन में भी है अपनी सेफ्टी को लेकर इस वक्त? यस श्योर, और हमारी तरफ से भी है। और अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना हम लोग को थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही है, लाइक जो सुन पा रहे हैं आसपास से कि इंटरसेप्ट कर दी गई है जो भी मिसाइल थी। और राइट नाउ वी आर इन अ बिल्डिंग, तो उसमें थोड़ा शेकनेस भी लग रही है कि बिल्डिंग थोड़ी शेक हो रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यस वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट कंफर्मेशन दैट थिंग्स आर इन अंडर कंट्रोल। ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर सभी खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। हुदा जरीवाला, अभी देखिए मिडिल ईस्ट किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शंस में दिखना तो शुरू हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अभी तक जो बात ये चल रही थी कि ईरान ने जो स्ट्राइक किए हैं, इजराइल ने जो स्ट्राइक किए हैं, ये स्ट्राइक अभी इस लिहाज से किए गए हैं कि परिस्थितियों को आप बातचीत की टेबल पर लाएं, लेकिन क्या अब ये फुल फ्लेज युद्ध में तब्दील हो चुका है? इजराइल कब बातचीत करने पे भरोसा रखता है? इजराइल का तो सीधा का सीधा टारगेट या तो ईरान होता है, आयतुल्लाह खामेनेई साहब हैं, या फिर कोई भी वो मुस्लिम ममालिक जो प्रॉस्पर कर रहा है। वेनेजुएला में जो हुआ उसके पीछे ट्रंप फेस जरूर होगा, बट पीछे पूरा का पूरा इजराइल था। हमने देखा किस तरह से ऑयल इजराइल के लिए रीराउट कराया गया। ये जितने ममालिक की आप बात कर रहे हैं, मैं खुद सऊदी अरेबिया की बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, पूरी उम्र मैंने सऊदी अरेबिया में निकाली है। वहां के आसपास के इतराफ के जितने मुल्क हैं, ये सारे सुकून परस्त मुल्क हैं, ना किसी से वॉर करना चाहते, ना किसी के साथ कोई भी इस तरह की वॉर एक्टिविटी में इंगेज होना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल को चैन ही नहीं आ रहा है। अरे रमजान का पाक बाबरकत महीना चल रहा है, वहां पे आप ईरान पे अटैक स्टार्ट करते हो, एक के बाद एक मिडिल ईस्ट कंट्रीज को टारगेट करते हो, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया। क्योंकि ग्राउंड से देखिए कुछ और तस्वीरें हमारे पास आ रही है, जरा बताइएगा तस्वीरें कहां से मिल रही है हमको? ब्लास्ट वहां पर दिखाई दे रहा है, अफरा तफरी में लोग भाग रहे हैं वहां से। कतर की तस्वीरें हैं, कतर से ये तस्वीरें मिल रही हैं इस वक्त। आप देखिए जैसे ही वहां पर धमाका हुआ तो उस समय ग्राउंड पर क्या स्थिति थी, आप देखिए लोगों के बीच अफरा तफरी, बेचैनी, घबराहट, और उस दहशत के आलम में वो वहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त जो फर्स्ट विजुअल्स आप एनडीटीवी पर देख रहे हैं, लोगों के चेहरे ये बता रहे हैं कि देखिए युद्ध की विभीषिका क्या होती है। युद्ध लड़ती सेनाएं हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आम जनता पर होता है। Oh my. साइड पे हो जाओ, साइड पे भागो। गुड सर, हम बजट वाले शो में मिले थे सर, आज आप डिफरेंट लग रहे हैं सर। साइड पे हो जाओ, साइड पे भागो।
तस्वीरें देखिए आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, कतर से ये तस्वीरें मिल रही हैं और ये लाइव वीडियो आप देखिए, मिसाइल गिरने का लाइव वीडियो। जैसे ही वहां पर धमाका हुआ और उसके बाद वहां पर लोगों के बीच जो अफरा तफरी, जो डर और दहशत थी, वो ये बताने के लिए काफी है कि अभी तो कुछ घंटे बीते हैं जब ये हमले की शुरुआत हुई है, लेकिन अब यहाँ से अगले 2-3 दिन में परिस्थितियां किस दिशा में जाती हैं, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। सर, आपसे भी मेरा यहाँ पर अब सवाल है। देखिए, ये तस्वीरें जब हम देख रहे हैं, ये धमाका किस तरह का हुआ है? धन्यवाद। जय हिंद सानू वरुणा। देखिए, कोलेटरल डैमेजेस तो होंगे। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई है इजराइल की तरफ से और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का जवाब ईरान ने 8 देशों को उलझा कर किया। तो ये बहुत अजीब सी घटना है। पिछले बार की लड़ाई और इस बार की लड़ाई में आप देखें तो पिछले बार ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई हुई थी। लास्ट डे कतार पे उन्होंने अटैक किया और उसी दिन लड़ाई बंद हो गई। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार डायरेक्ट अटैक, सीधा प्रेम्प्टिव, उन्होंने 30 स्ट्राइक्स किए, खामनेई को डायरेक्ट टारगेट बनाया और उसके बाद सीधा उन्होंने कहा, ट्रंप ने वार्निंग देके कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें रिजीम चेंज करने के लिए आए हैं। इस बार यूरेनियम इनरिचमेंट या मिसाइल टेक्नोलॉजी को खत्म करना अपने आप हो जाएगा अगर तुम नहीं रहोगे। तो पहल की पहलवी को वहां बिठाना है, वेस्टर्न रिजीम को वहां लाना है और एक तरह से एक नया जो साम्राज्य बनाना है। तो इस बार उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है जो पूरी की पूरी नेवल फायर पावर, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, 40,000 सेना और पूरी की पूरी तैयारी। ठीक है, इसके पूरे आयाम हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो है पूरे दिन भर की तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। ईरान से भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक वोरा जी भी जुड़ गए। लेकिन आज दिन भर में अब तक क्या क्या हुआ, इसका एक रिकैप आपके सामने रखते हैं। इजराइल और अमेरिका ने एक साथ मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान पर जो हमला किया, उससे महायुद्ध की चिंगारी धधक चुकी है। अमेरिका की तरफ से हमला होने के चंद मिनट बाद ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। इसके बाद एक ऐसी तस्वीरें आने लगी जो दिल दहलाने वाली हैं। जमीन से लेकर हवा और समंदर तक पूरा इलाका युद्ध की आग में झुलस रहा है। जंग जिस तरह से भड़की है, उससे मिडिल ईस्ट एक बड़े सैन्य संघर्ष के मुहाने पर आकर खड़ा हुआ है। देखते ही देखते युद्ध की ये चिंगारी कब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी, कोई नहीं जानता। जंग की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे एक एक करके आपको दिखा दें। अमेरिका की तरफ से हुए हमले के बाद ईरान ने दूसरे देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए कई देशों पर ईरान ने बमबारी की। ये तस्वीरें देखिए जो बहरीन की है। यहाँ ईरान के हमले के बाद कैसे काले धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठ रहा है। ब्लास्ट के बाद पूरा मलबा आसमान की तरफ उड़ गया। बहरीन में ईरान के हमले का दूसरा वीडियो भी सामने आया। यहाँ सड़क से जा रहे एक कार चालक ने वीडियो को शूट किया है। इसमें देख सकते हैं कि कैसे हमले के बाद पूरा इलाका धुआं-धुआं हो जाता है। ये ईरान की तस्वीर है। दावा किया गया कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के घर को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे और एक बड़े इलाके में भीषण आग लग गई। मलबे सड़क पर बिखर गए। हमलों के बीच अमेरिका ने ईरान के परचीन बेस को निशाना बनाया। तस्वीरों से लगता है कि बेस रिहायशी इलाके में था जिसे टारगेट पर हमला किया गया। हमले के बाद आग की तस्वीर दिखती है और देखते ही देखते पूरे इलाके में धुआं फैल जाता है। ईरान ने अमेरिकी नेवी को टारगेट करते हुए 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर को मिसाइल से निशाना बनाया। देख सकते हैं कि कैसे समंदर से सटे एक इमारत में जबरदस्त धमाका होता है। ब्लास्ट की जोरदार आवाज भी आती है और काला धुआं पूरे इलाके में फैल जाता है। ईरान से एक वीडियो सामने आया जिसमें कई मिसाइलें इरबिल की तरफ जा रही हैं। हालांकि इसमें मिसाइलें ठीक से नहीं दिख रही हैं,
लेकिन आवाज बहुत ही खतरनाक है। कार से एक शख्स ने इस वीडियो को शूट किया है। ताबड़तोड़ हमलों के बीच तेहरान से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे तेहरान के आसमान में फाइटर जेट्स लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ये खतरनाक तस्वीर देखिए, एक के बाद एक कई क्रूज मिसाइलें ईरान की तरफ बढ़ रही हैं। इजराइल और अमेरिका की तरफ से ये मिसाइलें दागी गई हैं। तस्वीरें देखकर लगता है कि महज चंद सेकंड्स में सैकड़ों मिसाइल से हमले किए गए हैं। इस बीच एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें इजराइल के एयरफोर्स ईरानी ठिकानों पर बमबारी के लिए उड़ान भर रहे हैं। रात के अंधेरे में इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट उड़ान भरते दिख रहे हैं। इस बीच ईरान की मीडिया ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे हमले के बाद एक छोटा इलाका पूरी तरह खंडहर बन चुका है। आग लगी है और धुआं भी उठ रहा है। मलबे का ढेर पड़ा है और कई लोग राहत और बचाव के काम में जुटे। बहरहाल दोनों तरफ ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तस्वीरें गवाह हैं कि भीषण जंग में दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। और कई तस्वीरें सामने आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये आपको अभी तक का घटनाक्रम हमने दिखाया, लेकिन चिंता की बात ये है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर में आप सोचें कि अगले कुछ घंटों में या 1-2 दिन में ये परिस्थितियां संभल जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये अब कुछ समय ले सकता है और ऐसे में जो ऑर्डर यहां बदल रहा है उसका क्या होगा, इस पर बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच इजराइल के हमले पर ईरान का दावा है। ईरान ने क्या कहा है दावे में? साउथ ईरान में इजराइल ने अटैक किया है। तो ईरानी मीडिया की तरफ से जो खबरें वो आपको बता रहे हैं 51 छात्राओं की मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। 60 छात्राएं जख्मी हुई हैं। फीमेल स्टूडेंट्स जिनको इस हमले में नुकसान पहुंचा है, स्कूल को इजराइल ने निशाना बनाया। कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे खबर। अब इजराइल के हमले पर ये ईरान का दावा है जिसमें एक बड़ा नंबर बताया जा रहा है और ये वाकई इस समय ये खबर चिंता पैदा कर रही है कि आखिर अब यहां से आगे ये परिस्थितियां किस तरफ जाने वाली हैं। लेकिन ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा यहां पर किया गया है। इस पर और अपडेट हम लेंगे। हमारे साथ इस वक्त आकिफ जैदी साहब जुड़ गए हैं ईरान से सीधे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है फीमेल स्टूडेंट्स को लेकर। सर, अगर इस पर आप और डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकें। जैदी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं उस शहर में नहीं हूँ जहाँ पर ये मुजरिमाना हमला हुआ है, लेकिन यहाँ की मीडिया में उसकी कवरेज मैं देख रहा हूँ। एक प्राइमरी स्कूल, एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर डायरेक्ट हिट किया गया है बंदर अब्बास के नजदीक, और वहां पर एक तादाद बच्चियां हैं वो मारी गई हैं, शहीद हुई हैं। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। देखिए, ये याद रखिए कि ये मुकाबला एक्चुअली में चल रहा है इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सेस और एप्स्टीन कम्युनिटी, एप्स्टीन क्लास के बीच में। एप्स्टीन क्लास जो है बच्चों के साथ क्या करती है, अपनी पार्टीज में क्या करती है, गज्जा में बच्चों के साथ क्या करती है। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि यहाँ पर अगर बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपकी कवरेज में और मैं जो अभी देख रहा था और दूसरी भी कवरेज में इस वक्त जंग की वजह से खौफ, दहशत, इस सब का जिक्र बिल्कुल सही है। जंग बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है और इसमें जाने जाती हैं, कई बेगुनाहों की भी जाने जाती हैं, बहुत बुरी चीज है। और यकीनन इस इलाके में खौफ और दहशत भी फैला हुआ है। लेकिन ईरान के अंदर खौफ और दहशत से ज्यादा इस वक्त एक मजबूत इरादा पाया जाता है यहाँ की पब्लिक में कि हमने कोई कोताही नहीं की, हमने हर तरीके से मसले को हल करने की कोशिश की। ईरान की पब्लिक कहती है हम तो डिस्कस कर रहे हैं, हम तो नेगोशिएशन कर रहे हैं। हम पर दोबारा जो है एक बदमाशी की गई हमारे साथ, और अब दोबारा इस बदमाशी के नतीजे में ईरान की पब्लिक हो चाहे ईरान की हुकूमत हो, उसका इरादा ये है कि वेस्ट एशिया में जो पावर का आर्किटेक्चर है, जो सिस्टम है, उसको एक डिसाइसिव और फैसलाकुन तरीके से ऐसा बदला जाए
कि अब दोबारा इस किस्म की बदमाशी करने की जुर्रत अमेरिका और इसराइल न कर सके। इसलिए इस बार ये जंग वाइड स्प्रेड है, इस बार ये जंग कुछ लंबे अरसे तक चलेगी और तभी इसमें सीज़फायर की उम्मीद की जा सकती है कि जब अमेरिका इसराइल एप्स्टीन कम्युनिटी, एप्स्टीन क्लास की कमर है वो तोड़ दी जाएगी, कम से कम एरिया में। अगरचे अभी बहुत दहशत और खौफ है ईरान के बाहर इस पूरी, लेकिन कुछ ही दिन में ये रिलीफ और सेलिब्रेशन तब्दील होगा जब यहाँ से अमेरिकन और कम्युनिज्म खत्म होगा। मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग उस डिसाइसिव पॉइंट में, टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री में अब पहुंच गए। जी जी, नरेश कौशिक जी, मैं एक छोटा सा रिएक्शन सर इस पर जाऊंगी। ईरान के भीतर जो ये आत्मविश्वास है इस वक्त कि अमेरिका हमको डरा नहीं सकता या इजराइल हमको खत्म नहीं कर सकता, ये आत्मविश्वास, इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, जब भी किसी देश पर हमला होता है तो वहाँ के लोग एक हो जाते हैं, वही यहाँ हो रहा है। बावजूद इसके कि ईरान के युवकों में काफ़ी असंतोष रहा है। आप देखिए, कोई 6 हफ्ते पहले ही वहाँ पर कितने बड़े प्रदर्शन हुए थे। ईरान के नेता अयतुल्ला खामेनेई ने ये स्वीकार किया था कि हज़ारों की तादाद में लोग मरे हैं और पुलिस की गोली से मरे हैं। इसके बावजूद जो है लोगों में, देखिए दहशत तो है, लोगों में गुस्सा भी होगा, लेकिन एक वर्ग होगा जो चाहता होगा कि ये रिजीम चला जाए, क्योंकि इस रिजीम को लेकर काफ़ी बहुत सारे लोगों में असंतोष है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब कोई विदेशी ताकत हमला करती है तो फिर राष्ट्रीय हित का मामला, राष्ट्रीय एकता का मामला सामने आ जाता है, तो वो अब इसकी संभावना है। और मुझे लगता है इजराइल का रिजीम इसी पर विश्वास कर रहा होगा, यही सोच रहा होगा कि अब पूरा देश एक हो जाए। इस बार देखिए, इस बीच इजराइल की तरफ से भी जो दावा है उसमें ये कहा गया है कि खामेनेई साहब जो हैं उनके घर को और जहां वो रह रहे थे उनको भी निशाना बनाया गया। तो टॉप लीडरशिप को इजराइल ने कैसे निशाना बनाया, क्योंकि बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं कि हमारा प्रिसाइज उद्देश्य ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। देखिए, ये भी हमें समझना चाहिए। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं उस पर, उसके बाद लौटते हैं उस पर। ईरान पर मिसाइलें गिरी, खामेनेई अंडरग्राउंड हो गए। खामेनेई के घर पर मिसाइलों का हमला। खलीफा का इंतकाम, नहीं झुकेगा ईरान। जैसे ही इजराइल की मिसाइलों ने ईरान को टारगेट किया, उसी के बाद खबरें आने लगी कि खामेनेई का सिस्टम क्रैश होने लगा है। खामेनेई के वफादारों की मौत की खबरें इजरायली मीडिया की सुर्खियां बनने लगी। सबसे पहला नाम था ईरान आर्मी चीफ आमिर हतामी का। दावा किया गया कि इजराइल और अमेरिकी हमले में हतामी की मौत हो चुकी है। खबर तो ये भी आई कि हवाई हमले में ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ और खामेनेई के सलाहकार अली शामखानी की मौत हो गई। हालांकि इस बार भी इजराइल का टारगेट खामेनेई था, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि इजरायली हमले से पहले ही खामेनेई ने तेहरान छोड़ दिया, वो किसी सेफ लोकेशन की तरफ चले गए। इस बीच खामेनेई के पुराने बयान फ्लोट होने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को भी कभी कभी ऐसा करारा झटका लग सकता है कि जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी ना रह पाए। वो बार बार कहते हैं कि हमने ईरान की ओर युद्धपोत भेजे हैं। ठीक है, बेशक युद्धपोत एक खतरनाक हथियार की तरह काम करता है, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उससे भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार हैं जो उस युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं कि खामेनेई के ऑफिस के बेहद करीब धमाके हुए थे। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ये साफ नहीं है कि खामेनेई किसी बड़ी अनहोनी से बच पाए या नहीं, लेकिन जहां तक ईरानी मीडिया का दावा है तो पता चला कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अभी सुरक्षित है, लेकिन खामेनेई के बारे में सस्पेंस बढ़ा हुआ है। वैसे 2 दिन पहले ही पेजेश्कियान ने कहा था कि हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर समझौता कर रहे हैं। बात जब तक आगे बढ़ती, हमला हो गया था। अमेरिकी समझते हैं कि मैं एक राजनेता हूँ और उनकी तरह झूठ बोलता हूँ, लेकिन समाज का एक धार्मिक नेता झूठ नहीं बोल सकता। जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, मतलब हम नहीं बनाएंगे। हम बनाना भी चाहे तो हम नहीं बनाएंगे, हमें इसकी इजाजत भी नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर हथियार वाली बात नहीं की। हालांकि रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमला शुरू होते ही सर्वोच्च नेता को तेहरान से हटाकर किसी सेफ जगह पर भेज दिया गया। युद्ध की सिचुएशन में शीर्ष नेताओं को अक्सर तेहरान के बाहर बने अंडरग्राउंड बंकर्स या पहाड़ी इलाकों में ले जाया जाता है। अब सवाल है खामेनेई कहाँ हो सकते हैं, तो इसे लेकर फिलहाल कोई क्लियर डिटेल नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है
ईरान ने अमोल्च यानी मध्य ईरान के दुर्गम पहाड़ों के नीचे विशाल मिसाइल सिटीज और बंकर बना रखे हैं। कोम में भी एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, लेकिन इजराइल की मिसाइलें यहाँ भी गिरी। कहा जाता है कि ईरान के पास परमाणु हमले को झेलने में सक्षम डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, जो सतह से सैकड़ों फीट नीचे और यहीं से हमला कर रही हैं। अगर अमेरिका अपने 12 युद्धपोत भी यहाँ तैनात कर दे तो भी वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अमेरिका को जरूर हराया जाएगा और फिर वो आक्रामक रुख अपना नहीं सकेगा। इसलिए अमेरिका को अपने अंदरूनी मामले में दखल देना चाहिए। अमेरिका को अपने सैनिकों के बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका के कनाडा और यूरोप से संबंध बिगड़ चुके हैं। उनके साथ युद्ध जैसी स्थिति है। अमेरिका खत्म हो चुका है। पिछली बार खबर आई थी कि खामनेई रूस भाग सकते हैं, लेकिन सवाल है क्या इस बार ऐसा मुमकिन है? क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उससे लगता है कि अमेरिका अब खामनेई को सत्ता से हटाकर या फिर उनका खात्मा करके ही दम लेंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खामनेई के लिए देश छोड़कर भागने का मतलब इस्लामिक क्रांति का अंत होगा और जनता के सामने पूरी तरह सरेंडर वाली मुद्रा। इसलिए फिलहाल यही लगता है कि खामनेई ट्रंप के सामने झुकने वाले नहीं, और ईरान कह चुका है कि अगर खामनेई का खात्मा होता है तो उनकी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी तैयार है। और इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है और इस हमले के बाद जो वहां पर स्थिति दिखाई दे रही है, इस स्थिति को देखकर इस वक्त यही कहा जा सकता है कि जो खाड़ी के देश हैं वहां पर जो एक तनाव और जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हो गई है, ये पूरी दुनिया के लिए किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं कही जा सकती। और आप देखिए इस वक्त तस्वीरें भी आपके सामने। ओह माय गॉड, मुसैयारा या शबाब, मुसैयारा मुसैयारा, اضرب 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 Look at that, anything here? Oh my God, बिल्कुल मेरे रूम के सामने। मुसैयारा या शबाब, मुसैयारा, या अल्लाह खैर, मुसैयारा, اضرب 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 اضرب। साइड पे हो जाओ, साइड पे भागो। और इस बीच एक और अपडेट आपको बता रहे हैं, इजराइल के हमले पर ईरान का जो दावा, हमले में जिन छात्राओं की मृत्यु हुई है ये नंबर बढ़ गया है। 53 छात्राओं की मौत की खबर आ रही है। ये देखिए बेहद तकलीफदेह खबर, जहां पर जो अब सिविलियन कैजुअल्टीज हैं उसकी जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें 60 छात्राओं को घायल बताया जा रहा है और 53 छात्राओं की मौत की खबर आ रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। एक स्कूल है जिसको निशाना बनाया गया था और उसकी वजह से वहां पर जो कैजुअल्टीज हुई हैं ये बेहद तकलीफदेह नंबर। न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी के पांडे जुड़ रहे हैं। सर देखिए अब जो स्थिति है, सारे एक्सपर्ट्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये पूरी सिचुएशन अब समय लगेगा इसको संभलने में, लेकिन एक परिस्थिति जो हम इजराइल और अमेरिका के लिहाज से देखें, जो लैंड डिस्टेंस है वो बहुत करीब नहीं है। इसका मतलब जो हमले होंगे, जो लड़ाई होगी वो हवाई ही होगी प्राइमरली, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पर क्लियर है। इस लिहाज से आप इस युद्ध को कितना लंबा खिंचता हुआ देख रहे हैं सर? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप दूरी जो डिस्टेंस है इजराइल और ईरान के बीच में वो इतना है कि जो ग्राउंड फोर्स लैंड फोर्सेस हैं उनको बहुत समय लगेगा और समय की पास रिसोर्सेज बहुत चाहिए आपको। सोचिए सारा असला लेना, ट्रूप्स को ले जाना, लॉजिस्टिक सपोर्ट, देन जो टैंक्स और बाकी सपोर्टिंग सर्विसेज, गन्स, ये सब। तो लेकिन सबसे आज का वॉरफेयर जो है थोड़ा बदल चुका है। पहली लड़ाई जो है वो एरियल मीडियम में ही हो रही है और कोशिश किया जाता है कि जो भी एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड है उनको पहले इंपेयर किया जाए, उनको इस रूप में ला दिया जाए कि वो काम न कर सकें, और इसके लिए ज़रूरत होती है साइबर वॉरफेयर की और सारे जो है स्पूफिंग के और बाकी तरीके से हैं। उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय। सर आपको रोक रही हूँ, दुबई में धमाकों की आवाज़ सुनी गई है, 3 जगह पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। तो देखिए ये जो दायरा बढ़ रहा है ना इम्पैक्ट का, वो हम अलग अलग तरह से आपको यहाँ पर इस वक्त दिखा भी दे रहे हैं। दुबई में भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। ईरान के मिनाब से हमने आपको गर्ल्स स्कूल पर हमले की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन इस बीच अब दुबई से भी देखिए ये अपडेट है। तो ईरान ने जो ये जवाब दिया है, ये किस तरह से एक रीजनल युद्ध में अब ये परिस्थिति बदल गई है वो अब साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस अब इस पर
तात्काल बैठक लगाए, बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था जिसमें वो ईरान को ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध रोके। तो ये जो डिप्लोमेटिकली अब जो शब्द भी आपको वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से प्रयोग में दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत कुछ कहता है आज के वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर। सर अपनी बात कंप्लीट करिए आप, फिर मैं अगले मेहमान के पास जाऊंगी। डीके पांडे सर। तो महत्वपूर्ण ये है कि किस प्रकार से इस चीज को आप एस्केलेट करते हैं। आपने पहले इजराइल ने 30 टारगेट पहले चुने। कौन से टारगेट थे ये? मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप, साथ में लॉन्च पैड्स और न्यूक्लियर फैसिलिटी सिस्टम्स को। अब उसके प्रत्युत्तर 300 से अधिक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया इजराइल पर। लेकिन महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो 7 बेसिस हैं, 7 देश हैं जिसमें कि यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, इस सब पर जो कुवैत पर सब पर अटैक किया गया। ये बहुत ही क्लियरली मैसेजिंग है ईरान की कि आप जो है अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप उनके बेसिस हैं। मैं बता दूं कि मिडिल ईस्ट में 19 यूएस एयर बेसिस हैं जगह जगह विभिन्न स्थानों में, तो उनको सब पर अटैक करने का उद्देश्य है। लेकिन आप कितना लंबा खींच पाएंगे इस कहानी को, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, और इसके लिए जरूरी होगा आपको असला, बारूद और ये। ठीक है, लौटती हूँ सर। कैप्टन श्याम कुमार, देखिए यहाँ पर दुबई जैसे शहर पर हमले होने का मतलब क्या है? जहां पर हमला हुआ है, धमाके की आवाज सुनी गई है, और एक जगह नहीं 3 जगह धमाके की आवाज सुनी गई है। दुबई को तो इनफैक्ट आज की तारीख में हम एक ग्लोबल प्लेस मानते हैं, जहां पर दुनिया भर से लोग आके रह रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, वहां पर एक अलग तरह से व्यवस्था चल रही है। दुबई में हमले के मायने क्या है? मीनाक्षी देखिए, सबसे पहले तो हम समझें कि पिछली बार जो युद्ध हुआ था 12 दिन का और इस बार के युद्ध में क्या फर्क है। फर्क ये है कि पिछली बार इजराइल और ईरान लड़ते रहे, मिसाइल्स की अटैक होती रही, जमीर की लड़ाई थी, अस्तित्व की लड़ाई थी, वो अभी भी है क्योंकि दोनों लोकेशन में बहुत दूर हैं, तो वो वेस्टर्न फ्लैंक में अटैक हुआ। इस बार का जो अटैक है, जैसे ही खामेनी के ऊपर अटैक किया गया, सीधा ईरान ने 8 देशों को पूरी तरह से युद्ध में झोंक दिया, सॉवरेनिटी को चैलेंज किया, अस्तित्व को चैलेंज किया। हालांकि पिछले 1 सालों से अमेरिका ने इन सभी देशों को अपने पहलू में ले रखा है। उनको समझा दिया गया है कि हमारे 40,000 सैनिक, हमारा बहरीन का नेवल बेस और 19 एयर बेस वहीं रहेंगे। 1 साल में उन्हें हटाया नहीं है उन्होंने, और उनको साथ में रखा है। इसके बाद आप समझिए कि इसका मतलब ये रिस्क हुआ और उसके बाद अटैक हो रही है। इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो चाहता है कि डाइवर्जन देना, पूरे विश्व को प्रभावित करना और ऑयल को प्रभावित। इस पॉइंट पर सर यहाँ पे हुदा जरीवाला भी रिस्पॉन्ड करना चाहती है। मैम मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त ईरान ने पलटवार में मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस को नष्ट कर दिया, और अमेरिका के लिए युद्धपोत वो महाबली जिसके बूते यूएस किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने की ताकत रखता है, और इसकी तस्वीर आज भी दिखाई दी। तो ये जो जमीनी हकीकत है उस पर ये रिपोर्ट देखिए। धमाका नंबर 1, धमाका नंबर 2, धमाका नंबर 3, और न जाने कितने धमाकों की दहशत से ईरान थर्रा रहा है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई भी एक्शन में दिखे और पलटवार कर अमेरिका को भी बता दिया कि ईरान को हल्के में लेना अमेरिका और इजराइल की भूल है। अमेरिका और ईरान की दूरी 11,000 किलोमीटर से लेकर 12,500 किलोमीटर तक है, और अमेरिका के पास मिनटमैन, ट्राइडेंट जैसी लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, जिनका इस्तेमाल कर यूएस ने ईरान को दहला दिया। जबकि ईरान के पास भी खुर्रम, शहर 4, फतेह 2 और सज्जील 2 जैसी खतरनाक मिसाइलें हैं, जिसकी मदद से ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को तबाह किया है। ईरान की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है खुर्रम शहर 4। ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 8 की रफ्तार से उड़ती है। इसके बाद फतेह 2 है, जिसे ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। 1400 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल इतनी तेज है कि मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम माने जाते हैं। सज्जील 2 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके अलावा शहाब 3 ईरान की सबसे पुरानी लेकिन सबसे भरोसेमंद मिसाइल मानी जाती है। इसकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर के बीच है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अब जरा समझिए कि ईरान ने अमेरिका के किस किस बेस को निशाना बनाया।
कतर में अल उदैद एयरबेस है जहां 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। बहरीन में अमेरिका की नौसेना के जवान मौजूद हैं जो अमेरिका की 5वीं फ्लीट का हिस्सा है। कुवैत में अमेरिका ने कैंप अफ्रीजान और अली अल सलेम एयरबेस बनाए हुए हैं। यूएई में अमेरिका का अल दाफरा एयरबेस एक्टिव है। इसके अलावा इराक में आइन अल असद और अरबिल एयरबेस हैं, जबकि सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस के जरिए अमेरिका ऑपरेट करता है। जॉर्डन में भी अमेरिका के मुवफ़्फ़ाक अल साल्तिर एयरबेस है। अमेरिका और ईरान दोनों में से कोई देश कम नहीं पड़ना चाहता। अमेरिका ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहता, तो ईरान भी अमेरिका की दादागिरी का मिसाइल अटैक से जवाब दे रहा है। जो भी हो, इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में मंजर अब और खतरनाक हो सकते हैं, जो दुनिया को डराने वाला बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच आपको युद्ध से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग खबर बता दें। यूएई में भी एक नागरिक की मौत की खबर आ रही है। ईरान के हमले में एक नागरिक की मौत की खबर आ रही है। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, बड़ी तकलीफदेह खबर है ये, जहां पर जो ये सिविलियंस की मौत की अब खबरें निकल कर आ रही हैं। ये अभी शुरुआत है। लॉस कितना हुआ है, कितनी हानि है, इसको अभी गिनने में भी ये समय लगेगा। आप समझिए इसका असर कितना बड़ा है, इसको समझने में समय लगेगा। लेकिन जहां जहां से इनपुट्स हमारे पास पहुंच रहे हैं वो आपको हम अपडेट इस वक्त कर रहे हैं। हुदा दरीवाला, थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आपने रमजान का जिक्र किया, लेकिन देखिए डिप्लोमेसी की दुनिया में एक शब्द है कि इस तरह की टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखते हैं। अगर हम बॉर्डर्स की, भारत में भी बॉर्डर्स की बात करें, होली दिवाली के अवसरों पर मिठाइयां एक्सचेंज होती हैं बॉर्डर्स पर, लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं कि रमजान के वक्त पर पाकिस्तान तक अफगानिस्तान पर अटैक कर देता है, हमले की स्थिति में आ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये सब बातें मिटा दी गई हैं। ये इंसानियत वाले जो वैल्यूज है, अब इनका कोई मोल नहीं रह गया है। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रमज़ान में हम पीस की बात करते हैं, सुकून की बात करते हैं, भाईचारा, एकता की बात करते हैं, लेकिन उसी रमज़ान में अगर यूएस, अगर इजराइल एक एक करके मुसलमान ममालिकों को परेशान करेगा, टारगेट करेगा, ईरान पे इजराइल के अटैक का क्या मतलब बनता है? वो खुद वहां से माफी मांगता हुआ गया था। आपको याद होगा कि इजरायली सिटीजन्स आ गए थे कि वे आर सॉरी ईरान करते हुए, डर गए थे वहां पे। लेकिन अब रमजान के महीने में आप आयतुल्लाह खमेनी साहब को अटैक करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप डरते हो उससे, क्योंकि आप जानते हो कि वो एक ऐसा मुसलमान ममालिक का नेता है जो आपसे नहीं डरता और आपको नाको चने चबवा सकता है। आप उसको अभी भी टारगेट आपका आयतुल्लाह साहब ही थे। अगर ईरान रिटेलिएशन में यूएस बेसिस, यूएस नेवल बेस वगैरह, ये तमाम बेसिस अगर अटैक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ईरान को पूरा का पूरा हक है अपनी बचाव करने का और अपने लिए स्पीक आउट करने का। यूएस इजराइल का साथ क्यों दे रहा है? लेकिन खमेनी साहब के साथ ही तो वहां की जनता ने जो उनके खिलाफ विद्रोह किया, सड़क पर निकलकर, खबरें क्या निकल कर आई? मेरे ख्याल से कौशिक सर आप बताइएगा, बीबीसी ने ही रिपोर्ट किया है कि 7,000 लोग मारे गए, जबकि ऑफिशियल ईरान ने जो डेटा बताया वो 3,000 लोगों का बताया। 7,000 लोगों का मारे जाना सर। यूएस हर किसी के ममालिक में क्यों, हर अफेयर्स में, पॉलिटिकल अफेयर्स में, उनके पर्सनल अफेयर्स में क्यों कांगड़ आता है? होता कौन है यूएस बोलने वाला? ईरान एक मुस्लिम मुल्क है, ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है। आप किस तरह से? चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के जनरल सरदार जब्बारी का ये बड़ा बयान आया है। आपको बता दें, ईरान ने सिर्फ स्टॉक वाली मिसाइल्स दागी हैं, जल्द अनदेखे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, यहां पर ये बड़ा अपडेट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम ईरान का परमाणु प्रोग्राम नहीं चलने देंगे, ये हमारे लिए खतरा है, दुनिया के लिए खतरा है, इजराइल इसे अपने लिए खतरा बताता है, तो अनदेखे हथियार, इस शब्दावली का क्या अर्थ है, इसे हम डिकोड करेंगे अपने गेस्ट के साथ। लेकिन पहले आपको बयान सुनवाते हैं। برای اینکه سالها با شما بجنگیم از پیشرفته ترین बिल्कुल मेरे रूम के सामने اول جنگ هرچی ته انبارداری می‌کنیم اما در ادامه قوی ترین موشک هامون رو خواهیم زد. اون چیزی که تو الان साइड पे हो जाओ, साइड पे به قول ما ایرانی‌ها تو آتش آوردیم اونها رو هم این روزا رو خواهیم زد. बड़ा बयान है यहाँ पर। और कैप्टन श्याम कुमार, मैं आपसे इस पर जवाब चाहूंगी सर। अनदेखे हथियार का इस्तेमाल करेंगे, क्या मतलब है सर इस बात का? देखिए, कोरम शहर हो, फतेह हो, शाहिद हो, इनके जो मिसाइल्स हैं 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसका खुलेआम प्रदर्शन उन्होंने पिछली वॉर में किया था।
अब वो कह रहे हैं, मैंने ये कहा है कि ये सिग्नेचर अटैक है, ये ईरान की तरफ से जो अटैक है इसने इजराइल को कम मारा है और 8 कंट्रीज को उलझा दिया है। तो ये कहने का मतलब ये सिग्नेचर अटैक है, बहुत भीषण अटैक नहीं है, ये एक तरह से प्रोवोकिंग है। मेरा मानना है कि ये प्रोवोकिंग अटैक है जो 8 कंट्रीज को इन्वॉल्व करके एक मुस्लिम और ज्यूज का वो एक आवरण इसको देना चाहता है ताकि वो उलझ सके, अकेला नहीं लड़ सकता। ठीक है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, क्या मतलब है सर इसका कि अभी सिर्फ स्टॉक वाली मिसाइल्स ही यूज हुई हैं, अनदेखे हथियार यूज करेंगे, हम प्रयोग करेंगे, क्या मतलब है सर इस बात? देखिए, अनदेखे से सीधा मतलब यह है कि जो ऑलरेडी ओपन डोमेन में इंफॉर्मेशन है उनके मिसाइल्स के बारे में, उसके अलावा ताकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और उसकी तरफ इशारा है। लेकिन आप जो समझ रही हैं और बाकी दर्शक भी समझ रहे होंगे कि उसका इशारा न्यूक्लियर वेपन से है। निश्चित रूप से बीच में हमने खबर में सुनी कि किस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं, चाइना और कोरिया की मदद से रशिया का भी इस पर सहयोग रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर सकें। तो मुझे लगता है कि अनदेखी का मतलब यहाँ पर यही है कि वो शायद परमाणु हथियारों का प्रयोग भी कर सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ती है तो। कौशिक सर जी, मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार अभी है। अगर होता तो अभी तक अमेरिका उसे नष्ट कर चुका होता। ये बात सही है कि वो कोशिश करता रहा है और कोशिश करेगा, इसके बाद तो और कोशिश करेगा बचने के बाद जब भी ये लड़ाई खत्म होती है, क्योंकि इसका तो असर उल्टा ही होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अनदेखे हथियार की बात हो रही है वो कुछ ऐसे हथियार हैं जो उन्होंने हाल ही में विकसित किए हैं, मिसाइल जो विकसित किए हैं वो उस तरह के हथियारों का ईरान के पास क्या 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल्स वाकई हैं? देखिए, वो उसने ये दावे बहुत हैं, दावा किया है। देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। यानी जब लड़ाई होती है तो सच बोलना सबसे पहले जो संबंधित पार्टियां वो करती हैं। हमने कुछ देर पहले एक सैटेलाइट वीडियो देखा था जो कि इजराइल ने जारी किया था। अब वो कितना सही है कितना गलत है हमें नहीं मालूम, अभी तो लड़ाई के कुछ ही घंटे शुरू हुए हैं। इसी तरह से ईरान ने बहुत सारे बयान दिए हैं। हमें उन बयानों को, जिसे कहते हैं ना पिंच ऑफ सोल्ट, उससे लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ये बहुत सारी चीज़ें प्रोपेगेंडा के लिए भी लड़ाई के दौरान होती हैं। असल में क्या है हमें नहीं मालूम अभी। एंड ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि यूएस का कोई काम नहीं बनता है हर किसी मुल्क में वो टांग अड़ाए। एट द एंड ऑफ द डे ईरान की लड़ाई यूएस के साथ है, ईरान की लड़ाई इजराइल के साथ है। ये जितना कोलैटरल डैमेज हो रहा है, जो कि यकीनन गौर फिक्र करने वाला है, हम वॉर को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ईरान अपनी बचावी कार्रवाई करेगा कि नहीं। और ईरान अगर इस तरह से यूएस बेसिस को अटैक कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है कि इन लोगों की ये जो हरकतें हैं, ये जो इनकी तानाशाही है, ये जो मुसलमान मुमालिकों पे, चाहे वो सीरिया हो चाहे लीबिया हो, किस तरीके से यूएस टाइम एंड अगेन टारगेट करता रहा है और बर्बाद करता रहा है मुसलमान मुमालिक को। तो नाउ इनफ इज इनफ। ईरान का ये लाउड एंड क्लियर मैसेज पूरी दुनिया को जा रहा है थ्रू अटैक्स ऑफ दीज यूएस नेवल बेसिस एंड अदर बेसिस इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। लेट्स नॉट फॉरगेट इजराइल दुनिया को रूल नहीं करता है। वो बहुत बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हो गई, अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर बात हो गई, लेकिन आज जब वो बयान देने के लिए आए तो उन्होंने 2-3 बातें जो हाईलाइट की। उसमें पहला बिंदु था आतंकवाद, दूसरा बिंदु था कि हम परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देंगे ईरान को क्योंकि ये दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है, और तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने ईरान की जनता को की कि ये आपका मोमेंट ऑफ फ्रीडम है क्योंकि डेथ टू अमेरिका जैसी बातें, डिस्ट्रॉय अमेरिका जैसी बातें ईरान की तरफ से की गई हैं, तो हम इसका जवाब दे रहे हैं। एक छोटा हिस्सा उनके बयान का आपको सुनवाते हैं। We sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be
totally, again, obliterated. People of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। तो ये जो शब्दावली प्रयोग की है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो आपने सुनी, लेकिन इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान के मिसाइल मार गिराए हैं। इजराइल ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। तो अब देखिए दोनों तरफ से जो नैरेटिव्स आ रहे हैं और जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो मीडिया के हवाले से आए, जो स्थानीय मीडिया है, या फिर जो लोकल्स हैं वहाँ पे स्थानीय लोग जो वीडियोस रिलीज कर रहे हैं सोशल मीडिया के दौर में, कम से कम ये ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस इस तरह से कम हो गए हैं कि तस्वीरें और खबरें निकल कर आ रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ घट जाएगा और उसकी सूचना पूरी दुनिया को एक दिन बाद मिलेगी। फौरन विद इन मिनट्स जो है वो सूचना सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। लेकिन इजराइल ने हमले का वीडियो भी जारी किया। इसका ऑडियो मैं आपको सुनवाती हूँ। कौशिक सर, देखिए अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट हमने सुनाया जो उन्होंने सवेरे पहले स्ट्राइक के बाद दिया, लेकिन यू लव हिम, यू हेट हिम, यू कैन नॉट इग्नोर हिम, ये बड़ा क्लियर कट है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक किरदार हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका का चरित्र तो यही रहा है ना, जिसका जिक्र यहाँ पर मैडम जरीवाला भी कर रही हैं बार बार। अमेरिका का चरित्र कब बदला है? चाहे डोनाल्ड ट्रंप रहे हो, उनसे पहले बुश रहे हो, यही हकीकत रही है। जो अमेरिका को नापसंद है वहां पर हमला या फिर सैन्य अभियान से पीछे नहीं हटेंगे वो। देखिए, ट्रंप जो है माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस उसके प्रतिबिंब है। और इस समय दुनिया में ट्रंप साहब से क्यों जोड़ रहे हैं? ये तो अमेरिका का ही चरित्र है ना। नहीं, अमेरिका ने इस तरह से नहीं किया जो कि ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। ट्रंप से पहले के राष्ट्रपतियों ने अपने देश की जनता को, अपनी कांग्रेस को, अपनी विपक्ष को वो एक उसमें लेते थे, विश्वास में लेते थे, उसके बाद ये काम करते थे। इन्होंने तो किसी से नहीं पूछा। अमेरिका के भीतर भी लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं कि ये क्यों लड़ाई छेड़ी है, इसका जो है आपका वॉर एम क्या है, इस समय लड़ाई छेड़ने की क्या जरूरत थी। ऐसे समय जबकि आप ईरान के साथ आप बात कर रहे थे और ओमान जो कि आपका मध्यस्थ था, उसने ये कहा था कि इसमें प्रोग्रेस हो रही है, ऐसे समय आपने ये क्यों किया? तो इसकी एक वजह ये हो सकती है कि ट्रंप जो हैं नेतन्याहू को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उनका अभी वो काफ़ी अलोकप्रिय हो चुके हैं गाजा के बाद से। वहाँ पर बहुत सारे इजरायली लोग भी उनका विरोध करते रहे हैं और उन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार। जी ठीक है सर, एक बड़ा अपडेट आ गया है। ट्रंप साहब ने अपना संबोधन रद्द कर दिया है। आज देश को संबोधित नहीं करेंगे ट्रंप। हालांकि इससे पहले एक स्टेटमेंट हमने आपको सुनवाया, लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में एक्सियोस मीडिया के हवाले से खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, ट्रंप ने अपना अगला संबोधन रद्द कर दिया है। इससे पहले जो उनके बयान की टोनैलिटी थी, जो उनके बयान का एग्रेशन था, जो उनके बयान के कूटनीतिक मायने थे, वो आपने सुने। ईरान की जनता को मैसेज दे दिया, ईरान की सत्ता को मैसेज दे दिया, पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया। लेकिन अब उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट होना था वो महत्वपूर्ण हो जाता, क्योंकि ये देखना था कि ईरान का जो जवाब आया है और जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के इंस्टॉलेशंस और एसेट्स को खाड़ी देशों में निशाना बनाया है, उसके बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी। खैर इंतजार रहेगा इसका। लेकिन इजराइल के हमले पर ईरान का दावा, देखिए जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि अब दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, छात्राओं की मौत की संख्या
बढ़ गई है। बड़ी अफसोसनाक ये खबर, लेकिन ये नंबर बढ़कर 53 से 57 हो गया है। 57 डेथ टोल और 60 छात्राओं के घायल होने की भी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये एक स्कूल था जिसे इजराइल ने निशाना बनाया था। और श्याम सर, आपको ऐसा इस बात पे हैरानी होती है क्योंकि पहले बड़ा क्लैरिटी से ये कहा जा रहा था कि इजराइल अमेरिका जो भी स्ट्राइक कर रहे हैं वो जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, सत्ता से जुड़े जो प्रतिष्ठान है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर स्कूल भी उसकी जद में आ गया। इसको आप कोलैटरल डैमेज के रूप में देख रहे हैं या इसी को निशाना बनाया गया? थोड़ी सी पीछे ले जाऊंगा बात को। 7 अक्टूबर को जो हुआ, देखिए मिडिल ईस्ट, अक्टूबर सीरियसली 20,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए। कितने लोग वहां पे, मीडिया, जर्नलिस्ट, हॉस्पिटल्स। आप अपने समय में बोलें तो अच्छा रहेगा, फिलहाल मुझे बोलने दें। ठीक है, मैं कह रहा था कि डिफेंड मत करिएगा बस। मैं ये कहना, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था कि मिडिल ईस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट है। मुसलमान आज का बहुत ही संतुलित है, अच्छे लोग हैं और बहुत ज्यादा लोग भारत के वहां बसते हैं। हम दिल से उनको मोहब्बत करते हैं। इजराइल पैलेस्टाइन के साथ जो कर रहा था, एक अच्छा सा I2 U2 बन गया। हाफा से लेकर मिडिल ईस्ट तक जा रहे थे, हम लॉजिस्टिक चेन बना रहे थे, भारत का संबंध अच्छा चल रहा था। 7 अक्टूबर को कुछ हो गया। मैं गलती किसी की नहीं कह रहा हूं, मैं गलती किसी की नहीं कह रहा हूं, मेरी बात समझते दे रहे हैं आप। फलस्तीनियों के बच्चों की आप जेनोसाइड को कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं। फिलहाल मेरी दिस इज रॉन्ग। मुझे आपसे पूरी दुनिया मुझे आपसे मुखातिब नहीं होना, मैं अपनी बात कहने दूं। फलस्तीन के साथ आप अपनी टर्म में बात करें मैम, प्लीज। आप इजराइल को डिफेंड कर रहे हैं, आप अपनी टर्म में बात, इजराइल को डिफेंड आप अपनी टर्म में बात, ठीक है, वन बाय वन आप अपनी टर्म में बात करिएगा, आप मेरी बात करिएगा। तो मेरा कहना, जो भी हुआ मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, मैं कह रहा हूं जो हुआ उसके कारण। आप 7 अक्टूबर का नाम ले रहे हैं, 7 अक्टूबर से बहुत पहले का ये मैं कह तो रहा हूं, सुन तो लीजिए मेरी बात। पैलेस्टाइन के साथ उसका जो भी चल रहा था, जो भी नहीं चल रहा है, जेनोसाइड। Tell it what it is, as it is. It is a genocide. ठीक है। एक सेकंड, मैं आप दोनों को एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, आप कहाँ किस पॉइंट, हाँ हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, आप किस पॉइंट से खड़े होकर आप दुनिया की किस परिस्थिति को देख रहे हैं, उसके हिसाब से नजरिए बदलते हैं। हर नजरिए का सम्मान है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें आपको। दुबई में कुछ और धमाके हुए हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। दुबई में कुछ और धमाकों की रिपोर्ट है, AFP न्यूज एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। तो दुबई, जिसे हम एक ग्लोबल विलेज, एक ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल स्पॉट के रूप में आज की तारीख में देखते हैं, जहां पर दुनिया भर से जाकर लोग बसते हैं, वहां से भी। और ये तस्वीरें भी देखिए, हालांकि ये तस्वीरें कतर में मिसाइल अटैक की हैं, लेकिन दुबई में हमले होने का, कौशिक सर, क्या मायने हैं आपके लिए? देखिए, इससे ये लग रहा है कि जो लड़ाई उन्होंने, ईरान ने हमले तो किए हैं, वहाँ जो एयर बेसिस हैं उन पर किए हैं, लेकिन हमेशा कोई भी लड़ाई में कोई भी हमला बिल्कुल निशाने पर ठीक नहीं बैठता। तो इसमें हो सकता है कि कुछ मिसाइल इधर उधर भटक के सिविलियन इलाकों में गिरे हों और वहाँ पर ये हुआ हो, क्योंकि ईरान के मिसाइल इतने अच्छे नहीं हैं कि वो बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट वो करें। ग्रुप कैप्टन पांडे, ईरान क्या अब बिल्कुल जो एक ऑपरेशन रिवेंज, एक रिवेंज वाला जो जिस मोड में ईरान दिखाई दे रहा है, क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि ईरान ने ये स्वीकार कर लिया है कि अब या तो इस पार या उस पार, या आर पार की लड़ाई है अब ईरान के लिए, कम से कम उनके एग्जिस्टेंस की लड़ाई है? थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा कहना, क्योंकि अभी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, किस तरफ जाएंगी, क्या दिशा लेंगी, ये वक्त के साथ डेवलप होगा। लेकिन जहाँ तक बात है मिसाइलों की, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जितनी भी, देखिए, प्रिसीजन और अभी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स, म्यूनिशंस का जमाना है, यानी कि जो भी आप लॉन्च करते हैं एग्जैक्ट जाता है। हमने ऑपरेशन सिंधु में बताया किस प्रकार से प्रिसीजन मेजर अटैक हुए, बालाकोट में बताया, साथ में गल्फ वॉर में भी जो है अमेरिका ने करके दिखाया था। तो ये निश्चित रूप से सत्य है कि कोई भी अटैक करते हैं तो 95% प्रिसीजन होता है, 3 से 5% संभावना होती है कि कोलैटरल डैमेज हो। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है कि अगर साइबर अटैक के द्वारा आप उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसी दिशा में मिसाइलें रास्ता भी भटक सकती हैं। और इस वक्त हम दुबई जो एयरपोर्ट है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुबई में देखिए इस वक्त क्या हालात हैं। 3 से 4 जगह धमाके की खबर हमने आपको बताई, लेकिन ये फर्स्ट विजुअल्स इस वक्त आपको NDTV पर हम दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ दुबई की बात नहीं है, जो जो हिस्से प्रभावित हैं दुनिया के, वहाँ पर अभी एयरपोर्ट्स पर या ऐसी जगह जहाँ से ट्रैवल होने हैं, खासतौर पर हवाई ट्रैवल,
वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि हवाई ट्रैवल के जरिए जब आप एक सीमा को दूसरी सीमा को पार करते हैं तो वहाँ पर ये स्थिति यात्रियों के फंसे होने की, और वैसे भी जैसे ही युद्ध को लेकर अब मीडिया में रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं, तो परिजन चिंतित हैं। जो लोग जहाँ फंसे, हर किसी की प्राथमिकता इस वक्त ये है कि वो सेफ एरिया में पहुँचे या जहाँ पर भी उनका जीवन सुरक्षित है वहाँ पहुँचे। और देखिए, यही युद्ध की विभीषिका का मानवीय पहलू है। मैं बार बार इस बात को हाईलाइट कर रही हूँ कि युद्ध हथियारों से लड़े जाते हैं, सेनाएं लड़ती हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, कूटनीति होती है, लेकिन कीमत चुकाने वाले आम लोग होते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, आम लोग होते हैं जो उसकी कीमत चुकाते हैं। किसी एक जगह पर युद्ध होता है, जीवन 5 साल पीछे चला जाता है, आपकी भविष्य की योजनाएं ठप पड़ जाती हैं, आपके जीवन के बड़े फैसले अटक जाते हैं। अमूमन इस विषय पर सबसे कम बात हो पाती है, ये विडंबना है। लेकिन अब आप देखिए, ये मानवीय पहलू अब आपको अलग अलग जगहों से दिखाई देगा। ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट का दूसरा हिस्सा आप देखिए, आपको जगह जगह लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अफरा तफरी में उस तरफ भागे होंगे, कुछ लोगों का प्लान्ड ट्रिप होगा, कुछ लोग जैसे हमने आपको दिखाया, कई इंडियन पैसेंजर्स थे जो दोहा में फंसे हैं, जिनकी फ़्लाइट थी वहाँ से, जिन्हें वहाँ से एक्सटेंडेड फ्लाइट लेके कहीं और जाना था। लेकिन अब इन स्थानों पर फंसे हुए लोगों का नंबर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हवाई स्ट्राइक्स के बाद एयर रूट्स प्रभावित हुए हैं, फ्लाइंग जोन्स प्रभावित हुए हैं, और उसका इम्पैक्ट अब एयरपोर्ट्स पर पड़ना शुरू होगा। अगले 4-5 घंटों में ये तस्वीर और ज़्यादा आपको भीषण होती हुई दिखाई देगी। लेकिन बड़ा अफसोस होता है ये देखकर, ये आपको इन्फॉर्म करते हुए कि अब आपको युद्ध के जो मानवीय लॉस है, मानवीय क्षति है, चाहे ईरान में स्कूल के 57 छात्राओं की मृत्यु हो, चाहे एयरपोर्ट पर लोगों का फंसा होना हो, या अभी जहां कहीं से भी और सिविलियन कैजुअल्टीज़ की खबर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जर्नलिस्ट को ये खबर देते हुए अच्छा महसूस होता होगा, लेकिन ये तथ्य है, इस वक्त ये फैक्ट है। लोगों की ये परेशानियां इस वक्त स्क्रीन के जरिए आपके सामने हैं। हमारे सहयोगी आदित्य राज कॉल इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दुबई एयरपोर्ट की, जिन्हें देखकर ये समझ आ रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, यहाँ से आगे परिस्थितियाँ किस दिशा में जाएंगी। ईरान कुछ दावा कर रहा है, इजराइल कुछ दावा कर रहा है, लेकिन आप जब स्पॉट पर हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट्स अभी आपके पास पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं मीनाक्षी कि बिल्कुल जो एयरपोर्ट्स है मिडल ईस्ट में, सबकी हालत ऐसी ही हो गई है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिया है, चाहे वो इजराइल हो या यूएई हो या ईरान हो। और इन एयरपोर्टों पे, क्योंकि ये एयरपोर्ट सिर्फ वहाँ के लोग ही नहीं लेते, कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसा कि आपने ठीक कहा, बहुत लोग पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, चाहे वो दुबई का एयरपोर्ट हो यूएई में, चाहे अबू धाबी हो, या फिर हम यहाँ पर बेन गुरियन एयरपोर्ट की बात करें टेल अवीव में, पूरी तरीके से जो कनेक्टिविटी है लोगों की अस्त व्यस्त हो गई है, खराब हो गई है, और लोग पूरी तरीके से अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब एयरपोर्ट जो है सामान्य रूप से चले। क्या वो आज होगा, कल होगा, या कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? ये तो तभी फैसला होगा जब इजराइल और अमेरिका ये बता पाएं कि आगे की राह वो क्या अपनाएंगे। क्या ईरान के खिलाफ जो हमले हैं वो चलते रहेंगे? क्योंकि आज हमने देखा कि करीबन 6 बार जो है सायरन यहाँ पर इजराइल में बजा, और वहां पर 6 बार ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई। ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कि इंटरसेप्ट की गई, आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया। लेकिन जो हालत अभी बनी हुई है पूरे इस इलाके में, वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट में। चलिए, इस बीच एक और नई तस्वीर आ रही है। आदित्य, आपको रोक रही हूँ, यहाँ पर नई तस्वीर आ रही है, और ये एरियल व्यू दिख रहा है अभी आपको इन तस्वीरों में, जहाँ पर बड़ी ऊंचाई से आप देखिए नीचे आपको जब धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव कितना बड़ा है। दूर तक धुएं का, काले धुएं का गुबार है, और हालांकि पूरा जो ये क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा इमारतें तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि ये हवाई शॉट है, मतलब एरियल शॉट है ये, तो उस लिहाज से आप समझिए कि इस जगह की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस तरह का यहाँ पर हमला हुआ। लेकिन जो जानकारी मेरे पास पहुँच रही है, हवाई जहाज़ से ये वीडियो लिया गया है। कोई पैसेंजर जो फ्लाइंग जोन में रहे हैं, उन्होंने वहाँ से ये विजुअल लिया है, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी आप देखेंगे तो बहुत ऊंचाई से लिया गया ये विजुअल है। एनडीटीवी पर पहली तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जी सर, आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं इस पर? बैटल डैमेज असेसमेंट, एक वॉर, ये जो टैक्टिक्स होती है उसमें एक ऐसा बैटल डैमेज असेसमेंट होती है, पीछे के एयरक्राफ्ट होते हैं। इस केस में अब हम ड्रोन यूज करते हैं, तो एक बेडिए ड्रोन होता है जो सर्वेलेंस करता रहता है सारी फोटोग्राफ्स, क्योंकि आपको पता है आपको वीडियो जारी करनी है और उसकी
आपको उसकी लिवरेज लेनी है मीडिया में जाके कि क्या हुआ वहां पे। नहीं सर, लेकिन अब एक चिंता की बात यहाँ पर ये भी है कि दुबई एयरपोर्ट की हमने जो तस्वीरें देखी हैं, अब अगर ये जो दुबई में 3 से 4 जगह धमाके हो गए तो एयरपोर्ट कब तक एक्टिव रहेगा, इस पर भी सवाल है। अब देखिए, FIR फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, मैं पायलट हूं, कैरियर बोर्ड पायलट रहा हूं, FIR जितने भी हैं सारे के सारे क्लोज कर दिए गए हैं। आपको याद होगा गलती से भी 655 ईरान का एक जो एयरक्राफ्ट था वो गल्फ वॉर में एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर ने गलती से मार दिया, सारे के सारे 326 पैसेंजर मारे गए थे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में माइनिंग की थी ईरान ने और उनका शिप डिस्ट्रॉय कर दिया था अमेरिका का। ईरान के सारे फ्लीट को अमेरिका ने निस्तनाबूद कर दिया था। 1988 की बात करूं, 2003 की बात करूं, आज का जो जमावड़ा है बहुत बड़ा जमावड़ा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जेराल्ड फोर्ड मेडिटेरियन में बैठा है, अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में बैठा है, रशियन डिस्ट्रॉयर्स वहां पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, यमन अभी चुप है लेकिन हजबुल्लाह ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये जो लड़ाई शुरू, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, आज डिबेट वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि देखिए ये युद्ध की स्थिति है और युद्ध में चाहे नुकसान इस तरफ का उस तरफ का हो, वो बाद में तय किया जा सकता है कौन कितना बड़ा जिम्मेदार, कौन कितना बड़ा गुनहगार। लेकिन आज अभी मैं इंफॉर्मेशन पे पहले फोकस करूंगी, क्योंकि मुझे अपने दर्शकों को, अपने देश को इंफॉर्मेशन पहले शेयर करनी है। आदित्य का रुख सीधे कर लेते हैं। आदित्य हमें लगातार तेल अवीव से रिपोर्ट भी कर रहे हैं। आदित्य, ये जो विजुअल इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किसी यात्री ने शूट किया है और उसके जरिए स्क्रीन पर है, लेकिन दुबई को लेकर जो खबरें हैं, देखिए अगर वहां पर एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ जमा है, जहां तहां यात्री फंसे हैं, तो कब वहां का भी एयर स्पेस टोटली बंद हो जाए, फ्लाइट्स बिल्कुल बंद हो जाए, तो जो जहां है वो वहां फंसा रह जाएगा। और ये इसलिए ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि अगर किसी भारतीय को भी कहीं से इवैक्यूएट कराना है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आदित्य अगले 1 से 2 दिन में। जी, आवाज ठीक से क्लियर नहीं थी, लेकिन जो सवाल आप पूछ रही हैं, एक पैसेंजर ने ये वीडियो लिया है, बिल्कुल ये दिखाता है कि किस तरीके का एक्सटेंट ऑफ डैमेज हुआ है। और बिल्कुल लोग जो पूरी तरीके से अभी फंसे हुए हैं, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, चाहे वो यूएई में हो या इजराइल में हो या कई ऐसे जो हम मिडल ईस्ट में कंट्रीज देख रहे हैं जो इस चपेट में हैं अभी पूरी तरीके से। हजारों की तादाद में लोग जो हैं, खासकर यूएई में, क्योंकि यूएई एक ऐसा हब है जहां से कनेक्टिंग फ्लाइट्स बहुत ज्यादा ली जाती हैं, वो पूरी तरीके से ऐसे फंसे हुए हैं। उनको पता नहीं कि अब ये जो जंग अभी चल रही है, जो अमेरिका के अटैक्स के बाद शुरू हुई, ये क्या मोड़ लेगी, क्या ये एक लॉन्ग टर्म वॉर की सिचुएशन होगी, क्या ईरान इसका मुकाबला कर पाएगा और क्या अन्य देश भी इसके चपेट में आएंगे। अभी तक हमने देखा कि अमेरिका के जो बेस हैं अलग अलग जगह पे, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, यूएई हो या कतर हो, वहां पर ये अटैक्स हुए, लेकिन कई ऐसे रिहायशी इलाके भी हैं जो इसकी चपेट में आए हैं और कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। और अगर ये हुआ और कई ऐसे देशों के लोग भी मारे गए ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक में, तो क्या वो देश भी जो अभी तक स्टेटमेंट्स इशू करते आए हैं इसमें शामिल होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और उसके बाद ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट आदित्य एक अपडेट और दीजिएगा, आदित्य एक अपडेट और दीजिएगा यूएस से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन होना था वो रद्द हो गया है। इसे किस नजरिए से देखा जाए? अभी टाइम ले रहे हैं थोड़ा, और क्या कहना है, क्या कम्युनिकेट करना है वर्ल्ड को? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब सबसे पहले सामने आए, उन्होंने कहा कि वो अटैक जरूर कर रहे हैं क्योंकि नेगोशिएशन में ईरान ने कोई भी एश्योरेंस नहीं दी है, और वो साफ रूप पे ईरान के लोगों को जो है ये खबर दे रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं कि आप सामने आइए, आप जो है सरकार को जो है अपने कब्जे में लीजिए और हम तो अटैक करते रहेंगे, क्योंकि आखिरकार डेमोक्रेसी अगर रिस्टोर करनी है तो लोगों को ही सामने आना पड़ेगा। वो डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू नहीं आ सकते। क्या ये संभव हो पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी कड़ी में अब डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस टू द नेशन करेंगे। अगले कुछ घंटों में ये एड्रेस टू द नेशन होगा, जानकारी देंगे कि क्यों उन्होंने ऐसा एक कदम उठाया, क्या मजबूरियां थी और आगे का रुख क्या रहेगा। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते आए थे कि अग्रीमेंट होगा, बातचीत होगी, और वो इस पक्ष में नहीं है कि अटैक हो, लेकिन उसी बीच जेनेवा टॉक्स के बाद ये हमला कर दिया गया और ईरान अब रिटेलिएशन कर रहा है। तो बार बार ये देखने को मिल रहा है कि 1 या 2 चरण में जो है ईरान के खिलाफ ये आज सुबह अटैक हुए अमेरिका और इजराइल की तरफ से, और अब ईरान अलग अलग देशों में जो अमेरिका के बेस है वहां पर अटैक कर रहा है, और हो सकता है कि ये अगले कुछ दिनों में और जारी रहे। जी आदित्य, आप बने रहिए, हमें अपडेट्स देते रहिए, आपके पास मैं फिर लौटूंगी। लेकिन जो इस वक्त घटना स्थल पर जितनी भी स्थितियां बनी हुई हैं अलग अलग मोर्चों पर, एनडीटीवी इंडिया पर आप सबसे बड़ा कवरेज अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के साथ पूरा इसको आपके लिए हम डिकोड कर रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमले की जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीर एक यात्री ने शूट की है और उस दौरान आप देखिए धुएं का गुबार कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन इस वक्त जो 4 बड़े अपडेट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं इसका इंतजार है। ईरान में एक गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ जहां से 57 छात्राओं की मौत की खबर है। दुबई एयरपोर्ट की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर जबरदस्त इस वक्त क्राउड जमा है, लेकिन उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि आगे होने क्या वाला है। इजराइल और अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला। तेहरान में खामेनेई के दफ्तर समेत 30 जगहों पर बरसाए गए बम। इजराइल का दावा, हमले में ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी की मौत। इजराइल ने ईरान के मिनाब में एक गर्ल्स स्कूल को बनाया निशाना। हमले में 57 छात्राओं की मौत, 60 से ज्यादा घायल। हमले के बाद भी ईरान ने मिसाइलों की बौछार की। इजराइल के साथ साथ कुवैत, यूएई, बहरीन और सऊदी समेत कई देशों में अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना। ईरानी जनरल सरदार जब्बारी की बड़ी धमकी, कहा जल्द अनदेखे हथियार का करेंगे इस्तेमाल। इजरायली हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा खामेनेई के शासन को खत्म करना हमारा लक्ष्य। नेतन्याहू बोले ईरान पर हमला कई दिन तक जारी रहेगा। अजमेर से प्रधानमंत्री मोदी ने गर्भाशय कैंसर के खिलाफ मुफ्त टीका अभियान की शुरुआत की। गुजरात के साड़ंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन। कहा देश आज हार्डवेयर बनाने के लिए भी पहचाना जा रहा है। तो ये महाखबरें लगातार जारी है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं इस वक्त आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिसकी आशंका लंबे वक्त से जताई जा रही थी। ईरान की दहलीज पर खड़े अमेरिका के जंगी जहाज और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने एक साथ भीषण हमला बोल दिया है। हर एक तस्वीर, हर एक बड़ी खबर आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए ये हमला इतना भयानक था, भीषण था कि सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि कई सारे एक साथ शहर दहल उठे। इनमें वो शहर भी था जहां ईरान का न्यूक्लियर ठिकाना भी मौजूद है। जल्दी से एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सुबह 9:30 बजते ही तेहरान में तबाही मच गई। चारों ओर धमाकों की आवाज, क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की गर्जना और चीख पुकार। हमला होते ही ईरान की राजधानी में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अमेरिका और इजराइल की साझा स्ट्राइक का मकसद साफ है, खामेनेई हुकूमत को उखाड़ फेंकना और ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करना। अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी ने समंदर और आसमान से ईरान पर प्रहार किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के साथ तबरीज, इस्फहान, बुशहर और केरमान शाह में भी धमाके हुए। इस्फहान ईरान का बेहद अहम मिलिट्री ठिकाना है जहां न्यूक्लियर प्लांट, एयरफोर्स और मिसाइल बेस भी मौजूद है। ईरान के राष्ट्रपति आवास और खुफिया एजेंसियों के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का ये सबसे भीषण हमला बोल दिया है। तबाही की भयानक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और देखिए इस भी सवाल उठ रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई हैं कहां? उन्हें लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जल्दी से रिपोर्ट। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील न करना ईरान को आज बहुत भारी पड़ा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों को खंडहर में बदल डाला।
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के दफ्तर के आसपास भी बम गिरे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अयातुल्लाह अली खामेनेई तेहरान में नहीं है और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने उन्हें एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बंकर जमीन से करीब 90 से 100 मीटर नीचे है और ये सीधे बम धमाकों और मिसाइल हमलों को भी झेल सकता है। ये सिर्फ बंकर नहीं बल्कि आपस में जुड़ी सुरंगों और सुविधाओं का एक पूरा नेटवर्क है। खामेनेई तो बंकर में चले गए। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ अमीर हतामी इस हमले में मारे जा चुके हैं। हालांकि इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है। और अभी देखिए बड़ी खबर आ गई है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने बातचीत की है। यूएई प्रेसिडेंट शेख जायद से बात हुई है। युद्ध के हालात पर यह वार्ता हुई है। बड़ी खबर इस वक्त बिल्कुल और बहुत महत्वपूर्ण है अगर बातचीत यहाँ पर शुरू होती है, क्योंकि पिछले कुछ घंटे से हम देख रहे हैं लगातार हमलों का ही दौर जारी है। ऐसे में यूएई न्यूज एजेंसी ने इस मामले की इस जानकारी की पुष्टि की है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने यहाँ पर बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। यूएई प्रेसिडेंट शेख जायद से उनकी यहाँ पर बात हुई है और यूएई के न्यूज एजेंसी ने इसकी पुष्टि कर दी है। सऊदी क्राउन प्रिंस से बातचीत। ईरान के सत्ता केंद्र पर भीषण मिलिट्री प्रहार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और ईरान के बदलाव की घोषणा कर डाली। देखिए साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पिछले 47 साल से डेथ टू अमेरिका का नारा लड़ रहे खामेनेई हुकूमत का अंत सुनिश्चित है। रिपोर्ट। शनिवार की सुबह ईरान पर कयामत बनकर टूट पड़ी। तबाही मचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और कहा कि इस हमले का मकसद ईरान की खतरनाक सरकार से अमेरिका, मिलिट्री बेस और दोस्त देशों को बचाना था। साथ ही उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं मिल पाएगा। We will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. ट्रंप ने ईरान की फौज, पुलिस और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को भी अल्टीमेटम दे दिया। The armed forces and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. ट्रंप ने ईरान की जनता से कहा कि आजादी का वक्त आ गया है। हमारा मिशन पूरा हो जाए तो ईरानी जनता सरकार पर कब्जा कर ले। ये पीढ़ियों का मौका है। और इस बीच बड़ी खबर, जी हां बड़ी खबर यह भी है कि ईरान ने हाइफा पर मिसाइलें दाग दी हैं। हमले में खंडर बन गया एक मकान, छत को तोड़ते हुए घुस गई मिसाइलें। बिल्कुल और देखिए जो ईरान का डिफेंस सिस्टम है उसको भी यहाँ पर भेद दिया है इस ईरान ने। ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है इजराइल के डिफेंस सिस्टम को। इजराइल ने इसको लेकर एक वीडियो जारी किया है कितना नुकसान वहां पर हुआ। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर, तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर ये कि इजराइल ने जारी किया तबाही का वीडियो। ईरान ने हाइफा पर दागी है, एक के बाद कई मिसाइलें, ये देखिए तस्वीर आ चुकी हैं। ईरानी हमले में खंडर में तब्दील हो गया ये मकान। आप समझिए इजराइल का डिफेंस जो फोर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो काफी कारगर मजबूत माना जाता है, लेकिन फिर भी ईरानी मिसाइलों ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया है उसी की तस्दीक करती ये तस्वीर। इजराइल और अमेरिका के हमलों का ईरान ने भी करारा जवाब दिया है। लगातार उसकी तरफ से भी जवाबी हमले किए गए। बिल्कुल, पलटवार करने में देरी नहीं लगा रहा ईरान। देखिए ईरान ने मिसाइल हमलों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेस को तबाह किया है, जिसकी तस्वीरें भी आई हैं। यहां पर जो बेस यहां पर टारगेट किए गए ईरान की तरफ से वो जरा आप जान लीजिए। कतर के अल उदैद एयर बेस को यहां पर टारगेट किया ईरान ने। और देखिए बहरीन के नेवल सपोर्ट एक्टिविटी, कुवैत के कैंप आरिफ जान और अली अल सलेम एयरबेस भी इसमें शामिल है। इसके अलावा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा एयरबेस को भी टारगेट किया गया है। आपको ये भी बता दें इराक में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है और जॉर्डन के मुआफाक अल सल्ती एयरबेस पर ईरान ने अटैक कर दिया, दावा बोल दिया है। ये तमाम जो मुल्क हैं ये ईरान के बहुत नजदीक हैं और इन जगहों पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने थे जिनको टारगेट ईरान यहां पर कर रहा है। तो लगातार एक तस्वीर, एक ब्रेकिंग न्यूज एनडीटीवी इंडिया आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए तेहरान की जमीन फटने लगी है और आसमान से लगातार मौत बरस रही है। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आप सभी दर्शकों तक रख दें, क्योंकि ईरान ने जारी किया है वीडियो हमले का।
तबिश बिल्कुल, और इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे इजराइल यूएस बेस पर ये हमले किए गए हैं, एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई हैं कई नजदीकी मुल्क ईरान के, जिसमें अमेरिका के एयर बेस थे, जिसमें यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, यहाँ पर जो हमले किए गए उसके वीडियो बाकायदा ईरान यहाँ पर जारी कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे उसकी मिसाइलें अमेरिकी बेस को टारगेट कर रही हैं। ये तस्वीर आ गई है फास्ट ऑन एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तौर पर आप सभी दर्शकों के बीच। ये देखिए हमले की तस्वीर, इजराइल यूएस बेस पर हमले का ये वीडियो। ये अपने आप में बता रहा है कि जंग कितनी भीषण होती चली जा रही है और ये जो सायरन की गूंज है हर एक देश में जो इसके जद में है वहां सुनाई दे रही है और आगे भी सुनी जाएगी, क्योंकि आसार यही हैं और आशंका यही है। ये तस्वीर देखिए पहले एम्बियंस। ये मिसाइलें दागी ईरान की जमीन से जा रही हैं, लेकिन जहां पर भी ये गिर रही हैं उस मुल्क को इस लड़ाई में, इस तनाव में ये शामिल कर ले रही हैं। अब देखिए आप, तेहरान की जमीन फटने लगी है और आसमान से लगातार मौत बरस रही है। आज की सुबह कोई साधारण सुबह यहां पर नहीं थी, बल्कि ये महायुद्ध का आगाज है। बिल्कुल, देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी जरूरत महसूस होती रहेगी, यानी लड़ाई लंबी चलेगी, यही संकेत है। रिपोर्ट देखिए। तेहरान की सड़कों से लेकर सैन्य ठिकानों और खामेनेई के दफ्तर तक आज बारूद बरस रहा है। इजराइल और अमेरिका के इस ऑपरेशन ने दुनिया में खलबली मचा दी। हमलों के बीच इजराइल के पीएम सामने आए और कहा, ऑपरेशन लॉयन रोर का मकसद ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करना है। בחודשים האחרונים הרודנים באיראן זוממים לבנות מחדש את יכולות הגרעין והטילים שלהם ולהטמין אותם מתחת לאדמה, ושם לא נוכל לפגוע בהם. ट्रंप के बाद नेतन्याहू ने भी ईरान की जनता के लिए जो कहा, उससे साफ है कि ईरान की इस्लामिक हुकूमत के दिन गिनती के बचे हैं। זאת ההזדמנות שלכם להקים איראן חדשה וחופשית. קחו את גורלכם בידיכם. नेतन्याहू ने साफ किया कि ऑपरेशन पिछली किसी भी कार्रवाई के मुकाबले में बहुत ज्यादा विनाशकारी साबित होगा। देखिए 28 फरवरी 2026 की वो तारीख इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज हो गई है जब ये हमले यहां पर शुरू किए गए हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल ताबिश, बड़ी खबर आ रही है। देखिए अबू धाबी का नया वीडियो भी सामने आ चुका है, जहां सायरन बजने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। सड़क पर भागते हुए नजर आ रहे हैं लोग। अभी आपको वीडियो भी दिखाएंगे। सायरन बजने के बाद अफरा तफरी, ये बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर, जहां अबू धाबी की तस्वीर, वहां की सड़कों पर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इन तमाम देशों में अब लोगों को इस बात की चिंता है कि कहीं इनका देश भी इस युद्ध में घिर तो नहीं जाएगा, क्योंकि इन तमाम देशों में ईरानी मिसाइल पहुंचे हैं। और ये देखिए आप किस तरह लोग यहाँ पर फिक्रमंद हैं और भगदड़ सी, अफरा तफरी सी सड़कों पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जो लोग आम जिंदगी जी रहे थे, जो सड़क नॉर्मल वहां पर नजर आती थी, लेकिन अब नॉर्मल नहीं रही। देखिए कैसे भगदड़ मच गई है। ये तस्वीर उसको तस्दीक करते हुए नजर आती है, क्योंकि अबू धाबी ये जगह और नया वीडियो यहां से सामने आया जहां सायरन बजने के बाद अफरा तफरी मच गई। सड़क पर भागते हुए नजर आ रहे हैं लोग, इसमें महिलाएं, बच्चे सब शामिल हैं। ये तस्वीर सुनवाते हैं, दिखाते हैं। देखिए 28 फरवरी 2026 की तारीख, मतलब आज की तारीख इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज हो गई। हमलों से ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बहरीन में ईरान ने सीधे अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी हैं। इस हमले से बहरीन सरकार भी भड़क उठी है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान बौखला गया। और गुस्से में उसने अपनी तोपों का मुंह पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों की ओर कर दिया। आसमान को चीरती हुई ईरान की मिसाइलें बहरीन में अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर काल बनकर गिरी। हमले से तिल मिलाए ईरान ने सीधे अमेरिका की समुद्री ताकत के केंद्र पर वार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी को भारी नुकसान पहुंचा। बहरीन में जोरदार धमाके और धुएं के विशाल गुबार की तस्वीरें ईरान की मिसाइलों से हुई तबाही की गवाही दे रही हैं। बहरीन की सरकार ने इसे विश्वासघाती हमला करार देते हुए देश की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है।
ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया के वजूद की लड़ाई बन चुकी है। एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। कुवैत में ईरान का भीषण हमला देखने को मिला है और कुवैत ने यहां पर जो मिसाइल है उसकी तरफ दागी गई थी उसको मार गिराया है। ईरानी मिसाइल पैट्रियट एयर डिफेंस से मार गिराया गया। मिसाइल हमले का वीडियो भी सामने आ गया जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार सुनवाइए। आप एनडीटीवी इंडिया के साथ बने रहिए। हर युद्ध की खबर और तस्वीर आप सभी दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। देखिए, अमेरिका की कार्रवाई से बौखलाए ईरान ने सिर्फ बहरीन को ही नहीं बल्कि सभी अरब देशों को डहलाकर रख दिया है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस युद्ध का दायरा बड़ा हो सकता है। चाहे अबू धाबी हो या फिर कतर, रियाद हो या फिर जॉर्डन, हर जगह ईरान की मिसाइलें जा पहुंची हैं। जल्दी से एक रिपोर्ट। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का गुस्सा पूरे अरब वर्ल्ड पर टूट पड़ा है। सिर्फ बहरीन ही नहीं, ईरान ने उन अरब देशों पर भी हमले किए जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। सबसे भीषण प्रहार हुआ है संयुक्त अरब अमीरात पर, जहां आबू धाबी का अल धफरा एयरबेस भारी धमाकों से दहल उठा। ये वही बेस है जिसे अमेरिकी और यूएई की वायुसेना इस्तेमाल करती है। तबाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के आसमान में भारी धमाकों की गूंज सुनाई दी। कुवैत के आरिफजान कैंप और अहमद अल जाबेर एयरबेस से लेकर जॉर्डन के मुवफ्फक साल्टी बेस तक हर तरफ सिर्फ सायरन और बारूद का धुआं है। इराक के इरबिल में भी अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। ईरान ने खुलेआम चुनौती दी है कि इस क्षेत्र में मौजूद हर अमेरिकी सैन्य ठिकाना अब उनके सीधे निशाने पर है। पूरा पश्चिमी एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है। उधर सऊदी में भी अमेरिकी बेस पर अटैक हो गया है। जी हमले का लाइव वीडियो सामने आ गया है। हमले के बाद भीषण आग लग गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल, और देखिए सऊदी में भी जो अमेरिकी ठिकाने थे इस पूरे रीजन में ईरान के नजदीक जहां पर भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उसको टारगेट किया जा रहा है। और ये देखिए आप सऊदी में जहां पर मिसाइल जाकर गिरी ईरान की, वहां पर भीषण आग लगी है और भारी तबाही का मंजर दिखते हैं। और ये लपटों का दायरा देखिए, बहुत बड़े दायरे में ये धमाका हुआ है और उसकी गूंज सुनाई दी है। निश्चित तौर पर देखिए नुकसान की आशंका तो है इन तस्वीरों को देखते हुए। हमले के बाद भीषण आग लग गई। सऊदी की तस्वीर जहां अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है और ईरानी मिसाइल यहां पर गिरी है। और नतीजा क्या रहा, ये तस्वीरें। अब इन देशों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आशुतोष अपनी राय यहाँ पर जाहिर करना, क्योंकि आमतौर पर तनाव से दूर रहने वाले तमाम मुल्क हैं। लेकिन अब इनके यहाँ आकर मिसाइलें गिर रही हैं तो जाहिर तौर पर किसी तरह की प्रतिक्रिया तो उनको देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। तो देखा आपने, बहरीन से कतर तक बदले की आग में जल रहा है ईरान। खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डे उसके निशाने पर हैं और उस पर वो टूट पड़ा है। और देखिए कतर की राजधानी दोहा की अगर बात कर लें तो दोहा के बीचों बीच एक मिसाइल आकर गिरती है और उसे देख इलाके में भगदड़ के हालात बन गए हैं। क्या कहती हैं तस्वीरें, रिपोर्ट देखिए। कतर की चमचमाती सड़कों पर अचानक मौत का साया मंडराने लगा। ओह माय गॉड, बिल्कुल मेरे रूम के सामने। लोगों की नजरें जैसे ही आसमान की ओर गई, वहां मिसाइल नीचे आते देख पूरे इलाके में खलबली मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। ओह माय गॉड। ईरान के इस जोरदार मिसाइल धमाके से पूरा कतर दहल गया। गनीमत रही कि तुरंत मिसाइल देख भाग खड़े हुए ये लोग बाल बाल बच गए। यह मिसाइल जहां गिरी वहां से थोड़ी ही दूर अमेरिका का मिलिट्री बेस है। और इस बीच देखिए दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में गर्ल्स स्कूल पर इजरायली मिसाइल गिरती है और हमले में आपको बता दें कि 50 से ज्यादा मौतों की खबर है जिसमें छात्राएं शामिल हैं। बड़ा नुकसान यहां पर हो गया है। 50 से ज्यादा छात्राएं यहां पर घायल हुई हैं और हमले के बाद चीख पुकार का मंजर यहां पर था। जंग अफसोस का सबब बनती है, मौत के मंजर पेश करती है। मिनाब में भी तस्वीर जुदा नहीं थी। मजबूत इमारत का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। बच्चों की चीखें गूंज रही थी।
कई घायलों की हालत गंभीर थी, तुरंत अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी, लेकिन चुनौतियां और भी थी। मलबों में कई जिंदगियां फंसी थी, उन्हें तुरंत रेस्क्यू किया जाना था। सैकड़ों का मजमा था, घबराए हुए लोग इधर उधर भटक रहे थे, इमरजेंसी टीम का इंतजार था। ये बच्चे सुबह नींद से उठाए गए होंगे, माँ बाप ने टिफिन और बोतल देकर स्कूल रवाना किया होगा, कुछ घंटों बाद लौटने का इंतजार रहा होगा। किसने सोचा था कि 50 मासूम कफन में लिपटकर वापस आएंगे। अगली खबर आपको बताते हैं, इजराइल हो या फिर ईरान, दोनों तरफ से जबरदस्त हमले यहां पर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सायरन की आवाज भी आप सुन सकते हैं। बड़ी खबर लगातार आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इजराइल के हमले का भी नया वीडियो एक आ गया है। ड्रोन से हमले कर रही है इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF। ये इस वक्त अपडेट, ड्रोन से ग्रेनेड बरसा रहा है इजराइल। बिल्कुल, आप देखिए तमाम तरह की जो युद्ध की चीजें हैं वो इस्तेमाल यहाँ पर हो रही हैं। मिसाइलें इस्तेमाल हुई और अब ये ड्रोन इस्तेमाल यहाँ पर हो रहे हैं। ड्रोन के जरिए बम यहाँ पर गिराए जा रहे हैं, ग्रेनेड यहाँ पर गिराए जा रहे हैं और अलग अलग जगहों को यहाँ पर ईरान में टारगेट किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो NDTV पर आप देख रहे हैं, कैसे इसराइल के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, अभी तक देखिए ईरान की तरफ से मिसाइलें बरस रही थी, लेकिन अब ड्रोन का भी इस्तेमाल कर लिया है इजराइल ने और ड्रोन के जरिए बम बरसा रहा है इजराइल। और जो मिसाइल इसके लिए अगर चलाया जाएगा तो मान लीजिए कि 2 रुपए के सामान के लिए 2000 आपने खर्च कर दिए। बिल्कुल, ये क्योंकि देखिए जान माल का नुकसान कोई मुल्क नहीं चाहता है कि उसका यहाँ पर हो, और जिस तरह की लड़ाई यहाँ पर हो रही है ये लगता है कि बहुत भीषण यहाँ पर युद्ध हो जाएगा। और ऐसे में ड्रोन का इस्तेमाल करता हुआ इजराइल यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि किस तरह की जो एम्यूनिशन है वो यहाँ पर इस्तेमाल होती है इसराइल में, वो यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि मिसाइल की क्षमता इन तमाम मुल्कों की बहुत आला तरीन है, बहुत जबरदस्त क्षमता ये देश रखते हैं और इसी का असर है कि आसपास आप देख रहे हैं मिसाइल के जरिए बड़े हमले किए जा रहे हैं। लेकिन मिसाइल में मारक क्षमता तो ईरान की है, लेकिन ईरान की थोड़ी ताकत वहां कमजोर हो जाती है एयर डिफेंस सिस्टम में, क्योंकि ना के बराबर आप समझ लीजिए अगर इजराइल की तुलना हम कर लें ईरान से, तो इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम उनका मजबूत है। हालांकि ईरान ने भी उसको भेदा है और कई तस्वीरें जो हाइफा से आई या इजराइल से वो हमने दिखाई। इजराइल हो या फिर ईरान, दोनों तरफ से जबरदस्त अटैक कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ और इसकी लगातार तस्वीरें आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में ये आपको जानना चाहिए कि इजराइल और ईरान की सैन्य ताकत कितनी है। बिल्कुल, देखिए अगर नजर डालिए ईरान की अगर हम बात करें तो सक्रिय सैनिकों की तादाद 6,10,000 है, जबकि इजराइल के पास सक्रिय सैनिकों की तादाद 1,70,000 है, कहीं ज्यादा ईरान से। और ईरान के पास रिजर्व सैनिक आप देखेंगे तो 3,50,000 है, तो इजराइल के पास रिजर्व सैनिक 4,64,000 के आसपास माने जाते हैं। वहीं अर्धसैनिक बल ईरान के पास 3,50,000 है, तो इजराइल के पास अर्धसैनिक बलों की तादाद मात्र 35,000 है। यानी ईरान के पास कुल सैन्य बल 11,80,000 है, तो इजराइल के पास 6,70,000 के आसपास सैन्य बल मौजूद है। लेकिन लड़ाई यहां पर आशुतोष जमीन में शायद नहीं होगी, ये हवाई रास्ते से ड्रोन और मिसाइल और हवाई जहाज के जरिए यहां पर युद्ध होगा। लेकिन देखिए सैनिकों की संख्या में ईरान का पलड़ा तो भारी है, लेकिन इजराइल की सेना अधिक प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत है। ये हम यहां पर क्यों कह रहे हैं ये भी हम यहां पर आपको बताएंगे आगे, क्योंकि ईरान के पास जितने भी हवाई जहाज है, विमान है, वो 70 के दशक के हैं, यानी तकनीकी रूप से बहुत पुराने हैं। और इजराइल के पास अत्याधुनिक हथियार और विमान हैं जो लड़ाई में इस्तेमाल हो सकते हैं। उधर इजराइल ने ईरान में बहुत बड़ा हमला बोला है और उसके जवाब में ईरान ने भी उस पर मिसाइलें बरसाई हैं। देखिए ऐसे हालात में इजराइल की सरकार और सेना अलर्ट मोड पर है, सतर्क है और देश में इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया है। जल्दी से रिपोर्ट आपके सामने रखते देखिए। बेशक युद्ध का आगाज इजराइल ने किया, लेकिन उसे ईरानी हमलों के और तेज होने का डर भी सता रहा है। ऐसे में अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इजराइल में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। इसके तहत कई तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। बहुत जरूरी होने पर ही लोगों को घरों से निकलने की इजाजत है। सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं। सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। नागरिक उड़ानों के लिए एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लोगों को बंकरों और दूसरी सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। अस्पतालों में भी इमरजेंसी प्रोटोकॉल जारी है। गंभीर मरीजों को अंडरग्राउंड सुविधाओं में रखा गया है। अगले कुछ दिनों में यह तय हो जाएगा कि इस लड़ाई को कितने आगे जाना है। फिलहाल बम और मिसाइल दोनों ओर से बरस रहे हैं।
इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, ईरान के जनरल सरदार जब्बारी का बड़ा बयान सामने आया। ईरान ने सिर्फ स्टॉक वाली मिसाइलें अभी तो दागी हैं, जल्द अनदेखे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो दुनिया देखेगी। बिल्कुल, अब ये क्या अनदेखे हथियार हैं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। क्या न्यूक्लियर बम की तरफ इशारा कर रहा है ईरान यहाँ पर? ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा। उधर आप देखिए, एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और थोड़ी देर पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव से एक रिपोर्ट आई थी, वो अब आपको हम यहां पर दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए, खतरे के बीच खबर निकाल कर लाना आसान बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हमारे साथी हिम्मत और हौसले के साथ अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं ताकि जो भी तस्वीर और खबर है आप सभी दर्शकों के बीच हम रख सके। रिपोर्ट देखिए। तेल अवीव में यहाँ पर लोग तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, लेकिन मैं अब बॉम्ब शेल्टर की तरफ कदम कर रहा हूँ। आप पीछे देख सकते हैं पूरी तरीके से सायरन है। ये 5वीं बार है सुबह से कि सायरन आ रहा है। इसका मतलब है कि ईरान की तरफ से 5वीं बार मिसाइलें जो है दागी जा रही हैं। अभी हमने देखा कि कई मिसाइलें यहाँ पर आई इजराइल की तरफ और उनको इंटरसेप्ट किया गया। और कई ऐसे देशों में, मिडिल ईस्ट में, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो और कतर हो, वहाँ पर भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला कि कई जगह जो है विस्फोट भी हुए, इंटरसेप्ट भी हुआ, लेकिन एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तब्दील हो रहा है। ये पीछे से आप देख सकते हैं, एक नेबरहुड में हूँ मैं तेल अवीव में, जहाँ पर कि ये सायरन हो रहे हैं 5वीं बार और मैं बॉम्ब शेल्टर की तरफ जा रहा हूँ। सायरन अभी चल रहे हैं और लोग धीरे धीरे जो है बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं और ये प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। एनडीटीवी इंडिया के लिए आदित्य राजकौल, तेल अवीव, इजराइल से। तो इजराइल के अंदर क्या चल रहा है, ये खबर हमने आप सभी तक पहुंचा दी। और इस वक्त दुबई से अभी की बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि दुबई से सारी फ्लाइट्स कैंसिल बताई जा रही हैं, क्योंकि तमाम एयर स्पेस जो है वो बंद किए जा रहे हैं और दुबई में भी एहतियाती तौर पर जो फ्लाइट है उनको वापस लौटाया गया। दुबई एयरपोर्ट से ये कंफर्म किया गया कि यात्रियों के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई है, क्योंकि स्थिति लगातार तनावपूर्ण है इस क्षेत्र में। बिल्कुल, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। दुबई से सारी फ्लाइट्स कैंसिल। हालात को देखते हुए दुबई एयरपोर्ट ने कंफर्म कर दिया है, ये भी आपको खबर पहुंचा दें। और जब फ्लाइट कैंसिल हुई है तो आप देखिए यात्रियों का क्या हाल है। यहाँ पर भरे हुए हैं एयरपोर्ट उन यात्रियों से जो अपने घर के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए वहां पर मौजूद थे। उधर ईरान ने इजराइल ठिकानों पर भी हमले तेज कर दिए हैं और ईरान की जवाबी कार्रवाई तेल अवीव तक हुई है, हाइफा तक भी। बिल्कुल, मिसाइल हमले में तेल अवीव को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट। ईरान की मिसाइल ने इजराइल की व्यापारिक राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाया। और होलोन बस डिपो को तबाह कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद होलोन बस अड्डे में खड़ी दर्जनों बसें जलकर राख हो गईं। चश्मदीदों के मुताबिक और इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दें, क्योंकि भारत की एंट्री ये हुई है कि युद्ध पर भारत ने चिंता जाहिर की है। यात्रियों के लिए जारी की है एडवाइजरी। यात्रियों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है भारत की तरफ से। सुरक्षित ठिकानों में रहने की अपील की जा रही है और मिडिल ईस्ट में तनाव पर भारत ने अपनी चिंता जाहिर की है, क्योंकि बड़ी तादाद में भारतीय भी इन तमाम मुल्कों में रहते हैं, अलग अलग वजहों से, नौकरी के लिए, काम के सिलसिले में, पढ़ाई के लिए, और उनको अब यहाँ पर एडवाइजरी भारत की तरफ से जारी की गई है कि आप सुरक्षित जगहों पर रहिए। देखिए, अब जरा दोनों देशों की हवाई ताकत के मामले में अपनी अलग अलग क्षमता है, क्या कहती हैं रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स, बताइए ताबिश। ये बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि इस मामले में इजराइल का पलड़ा ईरान से काफी भारी नजर आता है। जैसे इजराइल के पास कुल 612 लड़ाकू विमान है, जबकि ईरान के पास 551 लड़ाकू विमान मौजूद। अगर फाइटर जेट की हम बात करें तो इजराइल के पास 241 फाइटर प्लेन है, जिसमें F-35I अडीर, F-15, F-16 तक प्लेन जो है उसके बेड़े में शामिल है। और वही ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जिसमें F-14, टॉमकैट, मिग-29, सुखोई 24 शामिल है। लेकिन ये तमाम विमान काफी पुराने हैं आशुतोष, और इसलिए तकनीकी लिहाज से इजराइल को बढ़त यहां पर मानी जाती है इस क्षेत्र में। उधर इजराइल के पास आप देखिए 48 हमलावर हेलीकॉप्टर भी मौजूद है, और ईरान के पास हमलावर हेलीकॉप्टर सिर्फ 13 हैं, यानी कि आसमानी अगर हम ताकत की बात करें तो इजराइल काफी उन्नत और काफी ज्यादा है। लेकिन ईरान की वायुसेना तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई है, जैसे कि हमने आपको बताया, क्योंकि ज्यादातर जो विमान है वो 1970 के दशक के हैं, और जो इजराइल के पास विमान है वो बहुत आधुनिक तकनीक के हैं। जाहिर तौर पर अमेरिका उनका एक बड़ा अलाई है और तकनीक के मामले में बहुत आगे है ईरान से।
अब देखिए जरा, अमेरिका की मदद से इजराइल के हमले के बाद ईरान ने वो पलटवार किया जिसका डर पूरी दुनिया को था। ईरान ने एक साथ 125 मिसाइलें दागकर इजराइल को दलाने की भरपूर कोशिश की। ईरान की मिसाइलों में कितना दम है जिन्होंने इजरायली शहरों को खंडर बनाने की कोशिश की है, और क्या इजराइल का आयरन डोम इन घातक मिसाइलों को रोक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। भीषण बमबारी की ये तस्वीरें इजराइल के उन शहरों की हैं जिन्हें ईरान ने अपने वादे के मुताबिक पलटवार कर दहलाने की कोशिश की। ईरान ने इजरायली शहरों पर एक साथ 125 मिसाइलें दाग दी। पूरा आसमान मिसाइलों की रोशनी में नहा गया, लेकिन इजराइल भी तैयार था। ईरान की 125 मिसाइलों में से केवल 35 ही इजरायली हवाई क्षेत्र में दाखिल हो सकी। बाकी को आयरन डोम और इजरायली डिफेंस सिस्टम ने बीच आसमान में ही राख कर दिया, और लोहे की इस चादर ने हाइफा जैसे शहरों को बड़ी तबाही से बचा लिया। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बावजूद इजराइल को काफी नुकसान हुआ। जो मिसाइलें डिफेंस को चकमा देकर गिरी, उन्होंने कई इमारतों को खाक में मिला दिया। ईरान ने इजराइल को दहलाने के लिए खुर्रम शहर 4 और फतेह 2 जैसी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ये वो मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही मीलों की दूरी तय कर भारी तबाही मचाने की ताकत रखती हैं। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस को चुनौती तो दी है, लेकिन अब दुनिया की नजरें इजराइल के अगले कदम पर हैं कि कहीं ये मिसाइल अटैक तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है। यही सवाल है जो सबकी फिक्र को बढ़ा रहा है कि ये जो तनाव है कहीं तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं हो जाएगी। इराक से इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इराक में ईरान का बड़ा हमला हुआ है और इराक ने इस हमले को, इस मिसाइलों को यहां पर मार गिराया है। देखिए, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम से ढेर की गई ये मिसाइलें हैं। पैट्रियट एयर डिफेंस से मिसाइलें ध्वस्त। मतलब थोड़ी देर पहले आपको हम जो बार बार बता रहे थे, हमारे एक्सपर्ट भी जो जुड़े थे कि इराक पर ईरान ने अटैक नहीं किया, लेकिन ये देखिए खंडन हो चुका है। ये तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं। तो इराक से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां इराक में ईरान का बड़ा अटैक हो गया है। इराक ने इस बीच दावा किया है कि ईरानी जो मिसाइलें हैं उसको मार गिराई गई हैं और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम से ढेर की गई हैं मिसाइलें। लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आसमान में मिसाइलें तैरती हुई दिख रही हैं। अब कुछ जगहों पर डिफेंस सिस्टम इनको डिटेक्ट कर पा रहा है तो उनको मार गिराया जा रहा है। कुछ जगह पर ये मिसाइलें जाकर अमेरिकी ठिकानों से टकराई हैं जहां पर आपने देखा है भीषण आग लगती हुई नजर आई। देखिए, अमेरिका और ईरान का तनाव अब सिर्फ जुबानी जंग नहीं है, बल्कि मिसाइल हमलों में तब्दील हो चुका है। मिडिल ईस्ट से उठ रही बारूद की गंध ने दुनिया भर के बाजारों की नींद उड़ा दी है। दोनों देशों के बीच ये लड़ाई लंबी चली तो कच्चे तेल की आग पूरी दुनिया को झुलसा देगी। इस टकराव का क्या अंजाम होगा, आपको इसके असर, संभावित असर के बारे में बताते हैं। आसमान में गूंजती मिसाइलें, धू-धू कर जलते ठिकाने, दहशत और खौफ का ये मंजर मिडिल ईस्ट का है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका है तो दूसरी तरफ जिद पर अड़ा ईरान। दोनों तरफ से हो रहे हमलों ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। आसमान से बरसती ये मिसाइलें गवाही दे रही हैं कि हालात अब काबू से बाहर हैं। लेकिन इस युद्ध का असली केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से दुनिया के कुल तेल निर्यात का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। अगर ईरान ने ये रास्ता रोका तो सप्लाई चेन टूटने का सीधा मतलब है महंगा पेट्रोल, महंगा माल ढुलाई और आसमान छूती महंगाई। ट्रंप की मिसाइलें ईरान में गिर रही हैं, लेकिन इसका दर्द पूरी दुनिया के शेयर बाजारों को होने वाला है। मिडिल ईस्ट की ये आग सिर्फ इमारतों को नहीं, बल्कि दुनिया भर के निवेशकों के भरोसे को भी राख कर रही है। न्यूयॉर्क से लेकर मुंबई तक, दलाल स्ट्रीट से वॉल स्ट्रीट तक, हर जगह खलबली मच सकती है। उधर आपको बता दें, देखिए जॉर्डन पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया है। ईरान के हमले पर जॉर्डन का पलटवार भी हुआ है। यहां पर ईरान की 2 मिसाइलें नागरिक ठिकानों पर जाकर गिरी हैं और ईरान ने यहां पर यह हमला किया था और इसका असर देखिए आप किस तरह से यहां पर दिख रहा है। यह आग लगती हुई यहां पर नजर आएगी आपको भी। जॉर्डन तक यहां पर ईरानी मिसाइलें पहुंची। बिल्कुल, एक एक तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। ये जॉर्डन से तस्वीर, जॉर्डन पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया और ईरान के हमले पर जॉर्डन का भी पलटवार हुआ, जहां जॉर्डन ने मार गिराई ईरान की 2 मिसाइलें और नागरिक ठिकानों पर ईरान ने यह अटैक किया था। युद्ध दोनों ओर से अपने अपने खास हथियारों का इस्तेमाल इस युद्ध में किया जा रहा है। ईरान, इजराइल के साथ अगर देखिए तो अमेरिका है जो कि अपनी पूरी ताकत इस लड़ाई में लगा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपने मिसाइल से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट लगातार बना रहा है।
अगर अमेरिका इजराइल की बात हम करें तो यहां पर देखिए किसके पास कितनी ताकत है मिसाइल के मामले में। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें यहां पर अमेरिका के पास मौजूद है। F-35I अधीर स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद है। F-151 रैन स्ट्राइक फाइटर जेट भी मौजूद है, दिखा भी रहे हैं आपको। बिल्कुल, इसके अलावा देखिए आप एयर लॉन्च स्टैंड क्रूज मिसाइलें भी इनके पास है जिसका इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। स्पाइक गाइडेड बम है जिनका इस्तेमाल हो रहा है, जे डैम बम इनको कहा जाता है। बंकर बस्टर बम है, हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। वहीं ईरान शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद, 2000 किलोमीटर तक की रेंज होती है इस मिसाइल की। इसके अलावा एमाद बैलिस्टिक मिसाइल, गदर बैलिस्टिक मिसाइल, इन तमाम मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है जिससे हमले उन तमाम जगहों पर हो रहे हैं जहां पर अमेरिका के ठिकाने हैं। दोनों के बीच क्या कंपेयर, ये सब कुछ जो इस्तेमाल हुआ है हमने आपको बता दिया। लेकिन अब सवाल ये, एक बड़ी खबर ये कि अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान का बड़ा अटैक हो गया है। कतर की राजधानी दोहा में भी अटैक हुआ। यहां पर हमले के बाद आग लगी है और भीषण आग का मंजर यहां पर देखने को मिला है। काले धुएं का गुबार उठा, हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल यहां पर हो गया। तस्वीरें जरा आप देखिए। बिल्कुल देखिए, दोहा में, दोहा की तस्वीरें हैं। दोहा में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरानी अटैक, उसके बाद से क्या कहती है तस्वीर आपके सामने। काले धुएं का गुब्बार आसमान में उठती हुई नजर आ रही है। लगातार बड़ी खबर पर नजर है, आप बने रहे एनडीटीवी इंडिया के साथ। एक एक तस्वीर, एक एक रिपोर्ट, दुनिया भर में जहां भी युद्ध या मिसाइल्स गिर रहे हैं वो आपको हम पहुंचा रहे हैं। और यहां पर देखिए इन हालातों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि लड़ाई कहां तक जाएगी, कोई बातचीत होगी, कोई हल इसका होगा या नहीं होगा। ऐसे में एक और अपडेट आपको देते हैं, ईरान और इराक के बीच बातचीत शुरू होने की खबर आ रही है। यूएस इजराइल के हमले के बीच ये बातचीत की जानकारी निकल कर आई है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत की फोन पर और ईरान इराक के बीच ये वार्ता हुई है। लेकिन वार्ता क्या रंग लाएगी देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तो इराक बचा हुआ था, इराक पर भी ईरान ने अटैक कर दिया है, मिसाइल तो गिरी हैं। कतर में अमेरिकी बेस पर ईरानी हमला हुआ है। कतर के अल उदैद यूएस बेस पर यह अटैक किया गया ईरान की तरफ से। कुवैत में भी अल सलेम यूएस बेस पर हमला हुआ है और यूएई में भी अमेरिकी बेस को ईरान ने टारगेट किया है। तो हम बता रहे हैं आपको, लगातार जो नजदीकी मुल्क हैं ईरान के, वहां पर जहां पर भी अमेरिकी बेस है उसको ईरान टारगेट कर रहा है। बिल्कुल देखिए, यूएई के अल धाबरा यूएस एयर बेस पर भी अटैक हुआ। बहरीन में भी यूएस बेस पर ईरानी हमला हुआ। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने दाग दी है मिसाइलें। जॉर्डन में भी अमेरिकी बेस पर हमला किया है ईरान ने। उधर एक और अपडेट आपको दे दें, यूएन सुरक्षा परिषद से ईरान ने अपील यहां पर कर दी है। यूएन सुरक्षा परिषद की तुरंत बैठक बुलाई जाए, ये ईरान यहां पर चाहता है। ईरान पर हमला रोकने के लिए कदम उठाए यूनाइटेड नेशन। ईरान के विदेश मंत्रालय का यह बयान है और ईरानी सेना मजबूती से देश की रक्षा करेगी, ईरान ये भी कह रहा है साथ में। अब देखिए यूएन की बैठक होती है नहीं होती है, यूएन का इस पर क्या रुख होता है ये यहां पर देखना होगा। लेकिन ईरान अब यूएन पहुंच गया है इस मामले को लेकर कि वहां पर आपात बैठक बुलाई जानी चाहिए, जिस तरह का हमला ईरान के ऊपर यहां पर किया गया है। और वहीं देखिए अब इजराइल की बात, क्योंकि तेल अवीव पर फिर से ईरानी अटैक हुआ है। तेल अवीव पर ईरानी हमले काफी तेज हो चुके हैं। तेल अवीव के कई ठिकानों पर हमले की जानकारी सामने आ रही है। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल गिरने की खबर आ रही है और यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आयरन डोम से रक्षा करता है इजराइल अपनी जगहों की, अपने ठिकानों की। और ऐसे में वहां पर इस मिसाइल का गिरना, क्या ईरान ने इजराइल के रक्षा आयरन डोम को, रक्षा कवच को भेद दिया है, यह बड़ा सवाल है। तो ईरान पर इजराइल, अमेरिका के हमले और ईरानी ऑयल फील्ड्स पर हमले की आशंका से बढ़ती अनिश्चितता का सीधा असर पश्चिमी एशिया में भारत के आर्थिक हितों पर भी पड़ना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि कैसे हम इससे प्रभावित हो सकते हैं। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होना शुरू हो गया है, वहीं भारतीय बासमती चावल का सबसे बड़ा बाजार ईरान में अनिश्चितता बढ़ने से एक्सपोर्टर्स तनाव में। रिपोर्ट दिखा देते हैं इससे जुड़ी हुई। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध से भारत के बासमती चावल उद्योग पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के अनुसार पश्चिम एशिया में अस्थिरता का सीधा असर भारतीय निर्यात पर पड़ सकता है। भारत के कुल बासमती चावल निर्यात का 25% हिस्सा ईरान को जाता है। करीब 20% निर्यात इराक को किया जाता है। ईरान और इराक मिलाकर भारत से 2 मिलियन टन से अधिक बासमती चावल आयात करते हैं। इस निर्यात का कुल मूल्य $2 अरब से ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो भुगतान प्रणाली, शिपिंग रूट और बीमा लागत पर असर पड़ेगा, जिससे निर्यात बाधित हो सकता है। सिर्फ बासमती ही नहीं, भारत से ईरान को होने वाला चाय निर्यात भी प्रभावित होने की आशंका है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने करीब 700 करोड़ रुपए की चाय ईरान को निर्यात की थी।
ऐसे में पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारतीय कृषि निर्यात क्षेत्र के लिए बड़ी चिंता बन सकता है। एक और बड़ा अपडेट आपको देते हैं। ईरान के तबरीज शहर में इजराइल के हमले की खबर है और ईरान के मिसाइल लॉन्चर को यहां पर निशाना बनाया गया है, यानी ईरान के जो मजबूत जगह हैं अब उनको भी इजराइल टारगेट कर रहा है। तो मिसाइल से मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया गया है। वीडियो में उठता दिखा धुएं का गुब्बार। ये तेल अवीव के कई ठिकानों पर अटैक। ईरान भी पलटवार कर रहा है, देर नहीं कर रहा है। देखिए बहरीन में यूएस मिलिट्री बेस पर यह अटैक, तस्वीरें देखिए। और ये भी आपको बता दें, अमेरिका के हमले का एक नया वीडियो, ईरान के तबरीज शहर का वीडियो आया है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर अटैक की तस्वीरें आ गई हैं। अब देखिए यहां पर कितना नुकसान इससे हुआ है, क्योंकि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। तबाही का मंजर है मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ इजराइल, अमेरिका या ईरान के बीच तक यहां पर सीमित नहीं रह गई है। तमाम मुल्कों को ईरान ने इसमें शामिल कर लिया। एक बार सुनवाते हैं, सुनवाइए। जोरदार विस्फोट, बड़ा धमाका बड़े एरिया में। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तौर पर ये तस्वीरें हम आप सभी के बीच रख रहे हैं। एक बार सुनिए। तो युद्ध की घड़ी है, कब कहां बम गिर जाए, मिसाइल गिर जाए, किसी को नहीं मालूम। सब अपनी किस्मत से ही बचेंगे, लेकिन युद्ध हमेशा से नुकसान ही लेकर आता है। लेकिन अभी लगातार मिसाइल्स गिर रहे हैं, कभी जॉर्डन में, कभी ईरान में, कभी इजराइल में। हर जगह की तस्वीरें एनडीटीवी इंडिया आप सभी तक पहुंचा रहा है। ये देखिए, हमलों से दहल गया ईरान, कई शहर उसके, और इजराइल भी, जॉर्डन भी, कतर भी, सब इसमें जख्मी। अब बड़ी फिक्र उन लोगों के लिए है जिनकी रिहाइश यहाँ पर है। तमाम भारतीय भी इन जगहों पर रहते हैं, अलग अलग वजहों से उनका जाना होता है। ऐसे में बहुत बड़ी चिंता की बात यह हो गई है जैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अब एक बड़ी खबर आ रही है न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से। एक बड़ी खबर है, वो भी दर्शकों के बीच रख दें। ये नीचे हम चला भी रहे हैं, पट्टी दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर पहले देखिए। ये बड़ी खबर, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ की मौत हुई है। रॉयटर्स एजेंसी की तरफ से यह खबर आई है, ईरान के रक्षा मंत्री की हमले में मौत। ये देखिए, ये बहुत बड़ी खबर। इजराइल हमले में मारे गए हैं ईरान के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर, बिग न्यूज, बिग ब्रेकिंग न्यूज। ईरान के रक्षा मंत्री की हमले में मारे जाने की खबर आ रही है। रॉयटर्स एजेंसी ने ये उनके हवाले से खबर है। देखिए, न्यूज एजेंसी नहीं दी, लेकिन बड़ी बात है कि डिफेंस मिनिस्टर मारे गए इस अटैक में। ईरान के रक्षा मंत्री के हमले में मारे जाने की खबर आ रही है सामने। ये बहुत बड़ी अपने आप में न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है, ये बिग ब्रेकिंग। बिल्कुल जाहिर तौर पर अब आ गई है। ये देखिए आप, ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ईरान के, उनके यहाँ पर मारे जाने की खबर है। ईरानी डिफेंस मिनिस्टर आमिर नसीरजादे की मौत यहाँ पर होने की खबर आ रही है। अब ये बड़ा नुकसान यहाँ पर ईरान को हो गया है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये युद्ध जो है किस तरह की शक्ल यहाँ पर ले रहा है। जाहिर तौर पर ईरान की प्रतिक्रिया का यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा कि क्या ईरान का इस पर कहना है। रक्षा मंत्री की मौत होने की खबर है इजराइल की तरफ से हमले में। हाँ, और ये देखिए, जब सेनापति कहा जाता है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, इन्हीं के जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पर रहती है उस देश के रक्षा से जुड़ी हर एक अटैक की या किसी भी हमले की। लेकिन इस इजराइल के अटैक में आईडीएफ ने जो मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर कहिए या ड्रोन से अटैक किया, अभी थोड़ी देर में पुष्टि भी हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इजराइल के हमले में ईरान के रक्षा मंत्री मारे गए हैं, ये जानकारियां ही हैं। सुबह आर्मी चीफ की मौत की खबर आई थी आशुतोष, और ये बड़ा डेवलपमेंट है कि इजरायली हमले में जो ईरान के रक्षा मंत्री हैं अमीर नसीरजादे और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर मोहम्मद पकपोर की मौत होने की खबर यहां पर आ रही है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि इन तमाम जानकारियों पर, इस नुकसान पर ईरान किस तरीके से रिएक्ट करता है, उनकी क्या प्रतिक्रिया यहां पर आती है। लेकिन बड़ा नुकसान निश्चित तौर पर ईरान को यहां पर हो गया। बहुत बड़ा झटका है ईरान के लिए, ये बहुत बड़ा झटका है कि उनके जो कमांडर इन चीफ हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इस अटैक में मारे गए हैं।
इजरायली हमले में मारे गए रक्षा मंत्री। अब ईरान इसमें आग बबूला और भी ज्यादा होगा, लेकिन इजराइल के लिए एक कह सकते हैं कि बड़ी जीत, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर को मार गिराया गया है इस अटैक में। अमेरिका इजराइल ने जो यह अटैक शुरू किया, इसमें ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि उनके डिफेंस मिनिस्टर इस अटैक में मारे गए हैं। यह तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, यही है डिफेंस मिनिस्टर, ईरान के रक्षा मंत्री, और हमला हुआ, हमले में ये रक्षा मंत्री मारे गए हैं। तो हमलों से दहल गया ईरान और उसके कई शहर, और साथ ही साथ रक्षा मंत्री मारे गए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है अमेरिका ने इस हमले को, और इसके जरिए ईरान के अलग अलग जगहों पर, ठिकानों पर टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया। और उसमें एक तो स्कूल के ऊपर जहां पर मिसाइल जाकर गिरा था, वहां पर कई सारे जो छात्र थे उनकी मौत होने की खबर आई थी। और अब ये बड़ी खबर यहां पर देखिए आप, आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री, दो बड़े नाम, ईरान के दो महत्वपूर्ण पद पे मौजूद लोग जिनकी यहां पर इस हमले में मौत हो गई है। यानी कि आप लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन आपने खो दिया अपने रक्षा मंत्री को और कमांडर इन चीफ को। दोनों की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। ये जो अटैक हो रहा है, विशाल विवेक फोन लाइन पर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विशाल, ये बहुत बड़ा झटका ईरान के लिए, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ दोनों इस अटैक में मारे गए हैं। बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, और ये दोनों ही जो है ईरानियन रिजीम के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। अगर आप बोल सकते हैं कि जो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल लोग होंगे ईरान में, उनमें से एक नासिरजादे हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनके बाद ही जो फॉरेन मिनिस्टर की बात आती है, अब्बास आराक्ची, उन्होंने भी अभी जस्ट स्टेटमेंट दिया है कि जो ये अटैक्स हो रहे हैं वो सही नहीं है, और उन्होंने इंटरवेंशन के लिए बोला है। बट ये जो डिफेंस मिनिस्टर की मौत की खबर आ रही है, ये रिपोर्ट्स आ रही है अभी रॉयटर्स के हवाले से। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई ईरानियन साइड से, तो उसका हमें वेट करना होगा। लेकिन रॉयटर्स ने जो रिपोर्ट डाला है वो ज्यादातर सही होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर की जो मौत है, अभी तक तो सबसे बड़ी क्षति यही होगी ईरान के लिए। विशाल, कुछ खबर आ रही है कि कहां पर लोकेशन, क्या तेहरान में अटैक हुआ, ड्रोन से हुआ, मिसाइल गिरा, कैसे हुआ, कुछ भी अगर इनपुट्स मिले हो आपके पास? देखिए, डिफेंस मिनिस्टर हैं तो ये तेहरान में ही होंगे, और सबसे ज्यादा जो क्षति हुई है वो तेहरान के ऊपर ही हुई है। ऑलमोस्ट हर जगह बॉम्ब गिरा है तेहरान में। और जो है इसमें F-22 विमान से लेकर के F-35 कुछ भी यूज हो सकते हैं, ड्रोन्स भी हो सकते हैं जो आपने सही बताया, क्योंकि कम से कम 100 यूएस के ही सिर्फ मिलिट्री जो है एयरक्राफ्ट पूरे रीजन में फैले हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा मिलिट्री जत्था था ऑलमोस्ट पिछले 10 साल में यूएस का, जो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड था। तो इस वजह से इसमें ड्रोन भी हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, F-22 जो कि सबसे एडवांस है इस वक्त। जी हाँ, विशाल ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आयतुल्लाह खमेनेई कहाँ है, इस बात को लेकर अभी भी जानकारी नहीं है, स्पष्ट नहीं है चीजें। और दूसरा, दो बड़े नाम जिनको यहाँ पर मौत होने की खबर आ रही है, तो यहाँ पर कौन नेतृत्व कर रहा है ईरान में, कौन बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों में अली लरीजानी का नाम आ रहा था, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं ईरान के। वो चला रहे थे, आप समझ लो, पूरा देश, क्योंकि खामेनेई जो है वो हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रख रखा है। तो अली लरीजानी का ही नाम आ रहा था कि वही चला रहे हैं। और जो प्रेसिडेंट है पेजेश्कियान, उनको तो ऑलमोस्ट साइडलाइन कर दिया गया था, तो उनके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं। तो उनका जो यूएस के अटैक होंगे वो लरीजानी के ऊपर भी टारगेटेड हो सकते हैं। तो उनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है, उसका वेट करना होगा हमें। और विशाल, सबसे बड़ी बात है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है, बल्कि ना के बराबर कह लीजिए अगर हम कंपेयर कर ले इजराइल से तो। और हमने देखा कि इजराइल हमेशा सटीक एक लक्ष्य अपना चुनता है, टारगेट करता है, चाहे हमने वो गाजा में भी देखा था, जिस पर निशाना लगाना चाहा उसका खात्मा किया। और यहां पर और भी जो जानकारी है, थोड़ा दर्शकों के बीच रख दीजिए। जी हाँ, जो ईरान का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो मोस्टली अटैक पर ही है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हजारों की संख्या में, जिसका उन्होंने काफी बार यूज किया है। पिछले 10-12 दिन वाले वॉर में भी जो पिछले साल हुआ था, उसमें भी उन्होंने काफी डैमेज पहुंचाया था इजराइल को अपने बैलिस्टिक मिसाइल से। लेकिन जो आपने सही बताया, इजराइल का जो आयरन डोम है वो सबसे ज्यादा डेवलप है पूरे वर्ल्ड का, तो वो ईरान के मिसाइल्स को ज्यादातर रोक लेता है। लेकिन जो भेज देते हैं वो काफी बड़े मिसाइल थे, तो उनसे इजराइल को भी डैमेज हुआ था पिछले बार, जैसा आपको याद होगा। और छोटा सा अपडेट आप यहाँ पर दीजिए, क्योंकि सुबह से शाम यहाँ पर हो गई है, हमले लगातार जारी हैं, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख तक के नाम आ रहे हैं। कितनी मौतें हो चुकी हैं ईरान में? देखिए, अलग अलग रिपोर्ट आ रहे हैं। कुछ घंटे पहले तक आ रहे थे कि कम से कम
40 से 50 लोगों के मरने की खबर है तेहरान में, और करीब 100 से 150 लोगों की हताहत होने की खबर है, इंजर्ड होने की खबर है। तो पुष्टि होना बहुत मुश्किल है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है क्योंकि वहाँ जो इंटरनेट है वो ईरानियन रेजिम इंटरनेट बंद कर देता है और वहाँ पे फॉरेन जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं करते हैं अंदर। वो तो वहाँ से ठीक है विशाल, नजर बनाकर रखिएगा और अभी जानकारी आपसे अपडेट लेने के लिए आपका रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दो तस्वीरें आपके बीच रख रहे हैं, एक है रक्षा मंत्री थे और एक कमांडर इन चीफ। अब दोनों नहीं रहे क्योंकि अटैक में ये मारे गए हैं। हालांकि अभी इंटरनल ईरान की तरफ से पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इसको कंफर्म किया। तबिश जाहिर तौर पर बड़ा नुकसान है। अब निगाहें ईरान की प्रतिक्रिया पर यहाँ पर रहेंगी, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक और जगह पर जहां पर तनाव बना हुआ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उसकी अब बात करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात के बीच मिडिल ईस्ट बारूद से दहल रहा है और इजराइल ने ईरान में ड्रोन और मिसाइल से घातक हमले किए हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर कई शहरों पर इजराइल ने सुबह 8:30 बजे बमबारी शुरू कर दी। उनके सेना प्रमुख समेत 24 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 24 को बल्कि अपडेट कर दीजिए, 50 से ज्यादा। और ऐसे में मिडिल ईस्ट में उठी चिंगारी से महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुनिया का एक बड़ा हिस्सा और जलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है और ट्रंप ने खुलकर उसकी जिम्मेदारी ली है, वो युद्ध की आशंका को और भड़का रहा है। और दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के हमले को लेकर पहले से ही पूर्ण युद्ध की तैयारी करके बैठा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ऐसे में मिडिल ईस्ट में उपजे इस घमासान पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पूछा जा रहा है कि क्या महायुद्ध शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। चंद सेकंड में तेहरान धुआं धुआं हो गया। बम धमाकों से कांपने लगा समूचा तेहरान। सायरन की गूंज समूचे ईरान को हिला रही है। मिसाइल और ड्रोन हमलों ने तेहरान से लेकर ईरान के तमाम शहरों में हड़कंप मचा रखा है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इन हमलों में बाल बाल बच गए अयातुल्ला खामेनेई और ईरान के राष्ट्रपति। बस समझिए चूक गया इजराइल का अमेरिका वाला निशाना, वरना जिस तरह से हमला हुआ उसमें निशाने पर आने वाला पूरा हिस्सा ही साफ हो गया। यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, सायरन्स हुए, लोग भागे, एयरपोर्ट के अंदर अफरा तफरी मच गई। लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान पे जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए हैं इजराइल ने, इजराइल काट्स जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है और कहा है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, अलर्टनेस है। हो सकता है कि ईरान इसके बदले में रॉकेट और मिसाइल दागे। लेकिन पहली बार एक्सक्लूसिव एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपको बताऊं, एनडीटीवी इंडिया एकमात्र चैनल है जो इजराइल से रिपोर्ट कर रहा है। मैं आपको अगर दिखाऊं, मेरे पीछे अमेरिका के जो विमान है, जो एयरफोर्स की विमान है, वो आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने से इनकी तैयारी यहाँ पर चल रही थी। कुछ विमान तो जरूर रहते हैं क्योंकि इजराइल और अमेरिका जो है पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, बहुत क्लोज मित्रता है ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच। लेकिन अभी जिस तरीके की स्थिति बन रही है, 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी। चाहे हम रिफ्यूलर्स की बात करें, स्टेल्थ फाइटर्स की बात करें, पूरे तरीके से यहाँ पर जो है तैनाती की गई और तैनाती छोटे मात्रा में नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में की गई। हम आपको धमाकों से दहलते ईरान के धमाके दिखाएं, उससे पहले समझ लीजिए असली बात कि खामेनेई और राष्ट्रपति पेजेश्कियान के अलर्टनेस ने दोनों की जिंदगी बचा ली। क्योंकि खबर आई है कि अयातुल्ला खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान दोनों के ही दफ्तर पर इजराइल ने भीषण हमला किया। लेकिन दोनों को पहले से इस तरह के हमलों की आशंका थी शायद, और इसीलिए वो दोनों पहले ही वहां से निकल गए। लेकिन इजराइल का एक निशाना बिल्कुल टारगेट पर सही बताया जा रहा है। खबर है कि ईरान के सेना प्रमुख कमांडर इन चीफ आमिर हतामी इजराइल के हवाई हमले में मारे गए हैं। ऐसे में इसे छोटा हमला नहीं माना जा सकता। खबर यह भी आई है कि इजराइल अमेरिका के हमले में ईरान के परमाणु मुख्यालय को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इन सब के बीच ईरान के प्रमुख अयातुल्ला खामेनेई को
सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया गया है। खबर है कि उन सभी अहम जिम्मेदार लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है जो खामेनेई की युद्ध नीति के राजदार और खास हैं। मतलब शुरुआत में जिन हमलों को छोटा माना जा रहा था वो युद्ध की भीषण चिंगारी को भड़काते दिख रहे हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 ऐसे तमाम हमले हुए। ये सब इतना अचानक हुआ कि खामेनेई के लोग और ईरान की सेना कुछ समझ ही नहीं पाई। शाम शहर में अचानक अफरा तफरी मच गई। टॉमहॉक मिसाइल से लेकर घातक ड्रोन ने तेहरान से लेकर ईरान के 30 से ज्यादा इलाकों का चैन छीन लिया। इस हमले में भारी बर्बादी हुई, जिनमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, F-15 रैम स्ट्राइकर फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल डेलिला और रैमपेज, स्पाइस प्रेसिशन गाइडेड बम, JDAM प्रेसिशन म्यूनिशन, बंकर बस्टर GBU-28 क्लास बम, आर्म्ड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन जैसे हथियार शामिल हैं। इस हमले में भारी बर्बादी हुई, जिसमें तेहरान के अलावा करमानशाह, कोम, लोरिस्तान, कराज और तबरीज जैसे शहर भी शामिल हैं, जहां हमले हुए हैं। इन सब के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री सामने आए। उन्होंने ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव अटैक की पुष्टि की, यानी एहतियातन सैन्य कार्रवाई की बात कही। लेकिन क्यों? आखिर अभी यह हमला क्यों किया गया? इजराइल ने ईरान पर अभी हमला क्यों किया, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अंतिम दौर में चल रही थी? उसका दावा किया जा रहा था कि बातचीत सफल हो सकती है। फिर ऐसे में हमला क्या माहौल को और ज्यादा खराब नहीं कर देगा? अटकलें लग रही थी कि कहीं अमेरिका ने ही तो ईरान पर इजराइल को हमला करने के लिए नहीं कहा, कहीं अमेरिका से बातचीत फेल तो नहीं हो गई। इन सवालों के बीच खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ही हमला कराया है, क्योंकि बातचीत सफल नहीं रही। ईरान मान नहीं रहा, वो परमाणु बम बनाने पर अड़ा हुआ है और अमेरिकियों की रक्षा से हम समझौता नहीं कर सकते। They can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. ट्रंप ने ईरान एयर स्ट्राइक पर बयान जारी किया और कहा कि इस कदम में तमाम अमेरिकी भी मारे जा सकते हैं, हमारे लोग भी हताहत हो सकते हैं, लेकिन हम क्रूर ईरानी शासन के खतरे को खत्म कर देंगे। The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission. सुना आपने? ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान को आगे नहीं बढ़ने देंगे, खत्म कर देंगे। वो कह रहे हैं कि बातचीत फेल हो गई है। इसके कुछ ही देर बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी कैमरे के सामने आए। לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת, מבצע שאגת הארי. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן. तो अब क्या मान लिया जाए कि मिडिल ईस्ट अब जंगी बारूद के जाल में उलझ चुका है? क्या दुनिया अब एक और महायुद्ध का दंश झेलने वाली है? आदित्य राज कौल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध से पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के मारे जाने की खबर। हमले के बाद ईरान ने किए ताबड़तोड़ हमले। ईरान ने इजरायल के साथ साथ कुवैत, यूएई, बहरीन और सऊदी समेत कई देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी जनरल सरदार जब्बारी की बड़ी धमकी, कहा जल्द ही अनदेखे हथियारों का करेंगे इस्तेमाल।
इजरायल ने ईरान के मिनाब में गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाया। हमले में 57 छात्राओं की मौत और 60 से ज्यादा घायल। पश्चिमी एशिया में ईरान ने मचाया हाहाकार। दुबई, अबू धाबी, रियाद और दोहा समेत कई शहरों पर किए मिसाइल हमले। दुबई से निकलने के लिए दोनों एयरपोर्ट्स पर जबरदस्त भीड़। इजरायली हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, खामेनेई के शासन को खत्म करना हमारा लक्ष्य। नेतन्याहू बोले, ईरान पर हमला कई दिनों तक जारी रहेगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, युद्ध के बीच ईरान के रक्षा मंत्री की हमले में मौत की पुष्टि हुई है। सेना प्रमुख आमिर हातमी की भी मौत। ईरान के सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री दोनों मारे गए हैं। इस वक्त इस खबर की पुष्टि की जा रही है कि ईरान के सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री दोनों मारे गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आई है। रॉयटर्स ने ये खबर दी है कि ईरान के सेना प्रमुख आमिर हातमी की मौत हुई है और साथ ही ईरान के रक्षा मंत्री की इस हमले में मौत हो गई है। ईरान और इजरायल के बीच जो ये महायुद्ध छिड़ा है, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर इस महायुद्ध के बीच ये आ रही है कि ईरान के रक्षा मंत्री की इस हमले में मौत हो गई है और सेना प्रमुख हातमी भी मारे गए हैं। रॉयटर्स के हवाले से यह खबर आ रही है। तो आपको इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज दे दें, अमेरिका के साथ साथ इजरायल दोनों मिलकर इस वक्त ईरान के साथ इस युद्ध में भिड़े हैं, जिसका असर इस पूरे क्षेत्र में देखा जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं ये दो तस्वीरें। इन दो तस्वीरों में आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री नसीरजादे और दूसरी तरफ सेना प्रमुख हातमी। खबर है रॉयटर्स के जरिए से कि इन दोनों की इस हमले में, इस युद्ध में, महायुद्ध में मौत हो गई है। इसकी पुष्टि की जा रही है। युद्ध में तबाही मची हुई है, तस्वीरों की गवाही सामने आ रही है और एक बड़ा सवाल अभी खामेनेई पर बना हुआ है। लेकिन इस बीच इस बात की पुष्टि हो रही है कि ईरान के सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री दोनों की इस हमले में मौत हो गई है। रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आई है और ये युद्ध जो है वो और ज्यादा बड़ा होगा, फैलेगा, ऐसी आशंका इस वक्त बनी हुई है। लगातार ईरान की तरफ से भी हमले जारी हैं और पश्चिमी एशिया में जहां जहां पर अमेरिकी बेसेस हैं, नेवल बेसेस भी हैं, वो वहां पर हमला किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं तस्वीरों में अब कि किस तरह से इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारी अब वर्ल्ड वॉर की आग तक पहुंच चुकी है। इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया, जिसकी आशंका पूरी दुनिया को पहले से थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। हमले के बाद ही ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है, जिसने अमेरिका से लेकर इजरायल तक में एक हड़कंप मचा दिया है। और अब हालात ऐसे हैं कि आसमान से बारूद बरस रहा है और जमीन पर आग के बड़े बड़े गोले नजर आ रहे हैं। अमेरिका के अजेय माने जाने वाले युद्धपोत और ईरान की घातक मिसाइल अब आमने सामने हैं। आखिर इस तबाही का अंत कहां होगा? कहां रुकेगा ये युद्ध? क्या ये खंडहर बनते शहर तीसरे विश्व युद्ध की गवाही दे रहे हैं? इजराइल और अमेरिका ने एक साथ मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान पर जो हमला किया, उससे महायुद्ध की चिंगारी धधक चुकी है।
अमेरिका की तरफ से हमला होने के चंद मिनट बाद ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। इसके बाद एक ऐसी तस्वीरें आने लगी जो दिल दहलाने वाली हैं। जमीन से लेकर हवा और समंदर तक पूरा इलाका युद्ध की आग में झुलस रहा है। जंग जिस तरह से भड़की है उससे मिडिल ईस्ट एक बड़े सैन्य संघर्ष के मुहाने पर आकर खड़ा हुआ है। देखते ही देखते युद्ध की ये चिंगारी कब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी कोई नहीं जानता। जंग की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे एक एक करके आपको दिखा दें। अमेरिका की तरफ से हुए हमले के बाद ईरान ने दूसरे देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए कई देशों पर ईरान ने बमबारी की। ये तस्वीरें देखिए जो बहरीन की हैं। यहाँ ईरान के हमले के बाद कैसे काले धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठ रहा है। ब्लास्ट के बाद पूरा मलबा आसमान की तरफ उड़ गया। बहरीन में ईरान के हमले का दूसरा वीडियो भी सामने आया। यहाँ सड़क से जा रहे एक कार चालक ने वीडियो को शूट किया है। इसमें देख सकते हैं कि कैसे हमले के बाद पूरा इलाका धुआं-धुआं हो जाता है। ये ईरान की तस्वीर है। दावा किया गया कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के घर को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे और एक बड़े इलाके में भीषण आग लग गई। मलबे सड़क पर बिखर गए। हमलों के बीच अमेरिका ने ईरान के परचीन बेस को निशाना बनाया। तस्वीरों से लगता है कि बेस रिहायशी इलाके में था जिसे टारगेट पर हमला किया गया। हमले के बाद आग की तस्वीर दिखती है और देखते ही देखते पूरे इलाके में धुआं फैल जाता है। ईरान ने अमेरिकी नेवी को टारगेट करते हुए 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर को मिसाइल से निशाना बनाया। देख सकते हैं कि कैसे समंदर से सटे एक इमारत में जबरदस्त धमाका होता है। ब्लास्ट की जोरदार आवाज भी आती है और काला धुआं पूरे इलाके में फैल जाता है। ईरान से एक वीडियो सामने आया जिसमें कई मिसाइलें इरबिल की तरफ जा रही हैं। हालांकि इसमें मिसाइलें ठीक से नहीं दिख रही हैं, लेकिन आवाज बहुत ही खतरनाक है। कार से एक शख्स ने इस वीडियो को शूट किया है। ताबड़तोड़ हमलों के बीच तेहरान से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे तेहरान के आसमान में फाइटर जेट्स लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ये खतरनाक तस्वीर देखिए, एक के बाद एक कई क्रूज मिसाइलें ईरान की तरफ बढ़ रही हैं। इजराइल और अमेरिका की तरफ से ये मिसाइलें दागी गई हैं। तस्वीरें देखकर लगता है कि महज चंद सेकंड्स में सैकड़ों मिसाइल से हमले किए गए हैं। इस बीच एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें इजराइल के एयरफोर्स ईरानी ठिकानों पर बमबारी के लिए उड़ान भर रहे हैं। रात के अंधेरे में इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट उड़ान भरते दिख रहे हैं। इस बीच ईरान की मीडिया ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे हमले के बाद एक छोटा इलाका पूरी तरह खंडहर बन चुका है। आग लगी है और धुआं भी उठ रहा है। मलबे का ढेर पड़ा है और कई लोग राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। बहरहाल दोनों तरफ ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तस्वीरें गवाह हैं कि भीषण जंग में दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। और कई तस्वीरें सामने आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ है दिन भर। तस्वीरों के पहले आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो महायुद्ध है उस बीच तबाही की तस्वीरें दोनों तरफ से आ रही हैं। बात चाहे ईरान की हो, ईरान के शहरों की हो, तेहरान की हो या फिर दूसरी जगहों की। जैसे कुछ तस्वीरें हम आपको दुबई की दिखा रहे हैं। दुबई जो सबसे सेफ कहा जाता है दुनिया भर में, सबसे सेफ, वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज, वहां पर एयरपोर्ट की ये हालत है कि लोग वहां से निकलने के लिए परेशान हैं। अमेरिका की मदद से इजरायली अटैक के बाद माना गया कि ईरान भी पलटवार करेगा और हुआ भी वैसा ही। जिन जगहों से ईरान पर अमेरिका समर्थित हमला हुआ, ईरान ने उन सभी जगहों को टारगेट करते हुए 30 से ज्यादा जगहों पर हमला किया और उसके समर्थन में यमन से, हूती और लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी इजरायल और अमेरिका के बेस पर हमले शुरू कर दिए हैं। यानी कि सुबह सुबह उठी हमले की चिंगारी अब महायुद्ध का बैटल ग्राउंड तैयार करती दिख रही है। It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. That this terrorist regime can never have a nuclear weapon. चलते ईरान ने भी उठा ली यलगार। खामिनेई की हुंकार, शुरू तुमने किया, खत्म अब हम करेंगे। ईरान पर इजराइल से लेकर अमेरिकी बेस पर हमला। मिडिल ईस्ट में भड़क गई है युद्ध की भीषण चिंगारी। मिडिल ईस्ट में आसमान से लेकर समंदर और जमीन तक सब तरफ हाहाकार मच गया है। ईरान से बदले के लिए अमेरिका की मदद से इजराइल ने ऑपरेशन रोर ऑफ लॉयन चलाया। उसी ऑपरेशन से उपजे धमाके ईरान को अभी दहला रहे हैं। जवाब में ईरान ने भी कमर कस ली है। ईरान ने बदले के लिए, पलटवार के लिए ऑपरेशन खैबर पर कब्जा लॉन्च कर दिया। खामेनेई ने साफ कर दिया है, युद्ध इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया है, लेकिन खत्म अब ईरान करेगा। और उसी प्रण, उसी शपथ के बाद ईरान की मिसाइलों ने इजराइल से लेकर अमेरिकी बेस पर हमला शुरू कर दिया। आपके टीवी स्क्रीन पर ये वही जगह हैं जिनमें सबसे ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर गिराई गई। उनमें भी 4 प्रमुख शहर ईरानी मिसाइलों के निशाने पर रहे। जिनमें तेल अवीव, हाइफा और गलीली शामिल हैं। ये उन्हीं जगहों की तस्वीरें हैं जहां जहां ईरान ने हमला किया। इस हमले में इजराइल को खासा नुकसान हुआ है। इजराइल की तमाम इमारतें खाक में मिल गई हैं। हालात ऐसे हैं कि इजराइल ने अपने नागरिकों को घरों के अंदर ही रहने के निर्देश दिए हैं। जाहिर है, इजराइल ने वार किया है तो उसने पहले ही उसकी तैयारी कर ली थी। जैसा कि हमारे संवाददाता आदित्यराज कौल ने तेल अवीव से हमें जानकारी दी थी, वहाँ पहले से स्कूल और कॉलेज दफ्तर बंद हो चुके हैं ताकि नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाया जा सके। आप पीछे देख सकते हैं पूरी तरीके से सायरन है। ये 5वीं बार है सुबह से कि सायरन आ रहा है। इसका मतलब है कि ईरान की तरफ से 5वीं बार मिसाइलें जो है दागी जा रही हैं। अभी हमने देखा कि कई मिसाइलें यहाँ पर आई इजराइल की तरफ और उनको इंटरसेप्ट किया गया। और कई ऐसे देशों में, मिडिल ईस्ट में, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो और कतर हो, वहाँ पर भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला कि कई जगह जो है विस्फोट भी हुए, इंटरसेप्ट भी हुआ, लेकिन एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तब्दील हो रहा है। तो जिसे शुरुआत में महज हमला माना जा रहा था, वो अब भीषण युद्ध में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। चिंगारी कहां जाकर बुझेगी या भड़केगी, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। तेल अवीव से आदित्यराज कौल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो तेल अवीव से आदित्यराज कौल दिखा रहे थे वहां का हाल। अब इस बीच एक बड़ी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज की ईरान के रक्षा मंत्री की हमले में मौत हो गई है और साथ ही सेना प्रमुख आमिर हातमी की भी मौत हुई है। ईरान के सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री दोनों ही इजरायली हमले में मारे गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर आई है कि ईरान के रक्षा मंत्री और ईरान के सेना प्रमुख दोनों की इस हमले में मौत हो गई है।
लगातार चीजें बदल रही हैं, बहुत तेजी से युद्ध के हालात पलट रहे हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा देश शामिल होते जा रहे हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल संजय मेस्टन, डिफेंस एनालिस्ट अश्मिंदर सिंह बहल, पूर्व ऑफिसर एयरफोर्स, हुदा जरीवाला, वरिष्ठ पत्रकार, और शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी अश्मिंदर सिंह बहल, ये अभी ब्रेकिंग न्यूज थी कि रक्षा मंत्री मारे गए हैं, वहां पर मेजर जनरल मारे गए हैं। इससे साफ है कि मकसद क्या था। मकसद तख्ता पलट है, जो लाइन पूरी है, मिलिट्री लीडरशिप हो या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पे हमला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, पहले जब ट्रंप की बातचीत भी चल रही थी तो उसके जो मेन मुद्दे थे वो था कि मैं न्यूक्लियर वेपन इनके पास नहीं होने दूंगा। उस पे तो ज़्यादातर गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे एग्रीमेंट हो ही गया था। और दूसरी बात आ रही थी कि उसकी एनरिचमेंट पे, तो कहीं ना कहीं ईरान भी तैयार था कि एनरिचमेंट को कम करने के लिए। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ थी? उन्होंने ऐसे कंडीशंस रखे जिसकी वजह से कोई भी एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता था। कहते हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं रखोगे 300 किलोमीटर से ऊपर, कौन सा देश है अपने डिफेंस के लिए मिसाइल सिस्टम नहीं रखेगा? तो कहीं ना कहीं ट्रंप का इरादा कुछ और था। और जैसे ये युद्ध शुरू हुआ, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि ये जो आतंकी या ये जो हार्डकोर एलिमेंट है, जो ये सत्ता है, इसको उखाड़ फेंकना हमारा मेन एम है, ताकि फ्रीडम। एक चीज कहना चाहूंगा कि जो ये ईरान ने ये पहले से ही प्लान करके रखा था, एक सक्सेशन प्लानिंग, कि अगर इनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो मैं आऊंगी इसके ऊपर कि किस तरह से सक्सेशन प्लानिंग पहले से ही रेडी थी और कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर या फिर ईरान के मिलिट्री जनरल मारे जाते हैं तो। लेकिन ये जरूर साफ है कि यहाँ पर मकसद इस वक्त एक तरह से तख्ता पलट का है। और ये बात ट्रंप ने सबसे पहले कही कि यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार है जिसको बदलेंगे और एक फ्रीडम के लिए बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया है, उससे वेस्ट एशिया का इलाका रीजनल वॉर क्षेत्र में बदल गया है। इजराइल ने चिंगारी भड़काई, अब ईरान ने पूरी आग ही लगा दी। जिस चिंगारी को महज ईरान और इजराइल के बीच की आग समझा जा रहा था, ईरान ने प्री प्लान तैयारी की और उसे रीजनल वॉर में बदल दिया। उसी की जीती जागती तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये हमले जो ईरान ने अमेरिकी बेस पर किए हैं, वो अमेरिकी बेस जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही बना रखे हैं, ईरान ने उन पर ड्रोन्स और मिसाइल के मुंह खोल दिए हैं। ईरान ने जिन अमेरिकी बेस पर हमला किया उनमें बहरीन, तेहरान, कुवैत, कतर, अबू धाबी और जॉर्डन शामिल हैं। इन बेस पर ईरान ने किस कदर अपना क्रोध बरपाया है, अब उसकी तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। जॉर्डन से लेकर बहरीन और दूसरी जगहों पर इसी तरह धमाकों से आसमान से लेकर जमीन तक सब कांप रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को पहले ही सावधान किया था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो उसके बेस को छोड़ेगा नहीं। मिडिल ईस्ट और आसपास अमेरिका के 18 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं। ऐसे में ईरान उन पर हमला करके अमेरिका को सीधा सख्त संदेश दे रहा है। एनडीटीवी पर आप समझ लीजिए कि वो कौन कौन से अमेरिकी बेस हैं जो ईरान के निशाने पर हैं। तैनाती अमेरिकी फोर्सेस की है, वहां पर टारगेट किया गया है। कुवैत, जहां पर कहा जाता है 10,000 के करीब अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं, वो जगह टारगेट की गई है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई को यहां पर टारगेट किया गया है। और यमन और इराक, ये बताया जा रहा है कि ये भी यहां पर निशाने पर है। रण भीषण दिख रहा है और इससे सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल प्रभावित नहीं होंगे, पूरी दुनिया परेशानी की जद में आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान आया है और कहा है कि तनाव कम करने के लिए तैयार हैं। अगर ये कहा है तो ये एक बहुत बड़ा बयान है। इस वक्त में ईरान के विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान है कि तनाव कम करने के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिकी हमले के बाद या जिस तरह से हमला इस वक्त चल रहा है उसके बाद क्या ईरान अब बैकफुट पे आ रहा है? तो एक बड़ा बयान इस वक्त ईरान की तरफ से आया है और मैं संजय मेस्टन के पास जाना चाहूंगी। संजय मेस्टन, आपकी क्या एनालिसिस है इसके ऊपर? ये बयान अगर दिया जाता है तो फिर क्या लग रहा है कि ये वॉर क्या बैकफुट पे है इस वक्त ईरान? देखिए, बहुत प्री मैच्योर है बोलना कि वो बैकफुट पे है। मेरे ख्याल थोड़ा रिकंसिलिएशन स्पीच तो जरूर है कि
हम अभी तैयार हैं। कहने का मतलब ये है, देखिए जिस प्रकार ये चल रहा है, मेरे को तो लगता है कि ये चलेगा अभी और, क्योंकि देखिए अमेरिकन इंटरेस्ट पे भी अब टारगेट किया गया है। जितने भी बेसेस हैं मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज पे टारगेट किया गया है, रिहायशी इलाकों में टारगेट किया गया है। तो आज रात को मेरे को लगता है अमेरिकन रिस्पांस काफ़ी सॉलिड होगा और मेरे को एक्सपेक्टेशंस है कि अमेरिकन के ये जो बॉम्बर्स वगैरह हैं B-2, B-52, B-22, 21, ये सारे जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं ये शायद आज रात को इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या क्लियर स्टेटमेंट दिया है। उनका बहुत क्लियर स्टेटमेंट था कि हम इनकी मिसाइल शक्ति को बर्बाद करेंगे। और रजीम चेंज की बात हो रही है, देखिए रजीम चेंज जब इफेक्ट होगी, जब उनके मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, जो उनकी पावर है, जो IRGC है, जो आर्मी है, जो नेवी है, जब इनको बर्बाद किया जाएगा और बाद में हो सकता है इकोनॉमिक टारगेटिंग भी हो, तो जब एक स्टेट बहुत अंदर से खोखला होने लगता है तो अपने आप वो रजीम चेंज की तरफ ही जाता है। अब रजीम चेंज कैसे होगी, वहाँ लोग सड़कों पे आएंगे। वो भी आप सुन लिया, प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच में था कि आपकी अभी फ्रीडम की लड़ाई शुरू है, लेकिन उन्होंने साथ में ये चेतावनी भी दी थी कि कुछ दिन के लिए आप हार मत आना। जी मेजर जनरल संजय मेस्टन, माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक रही हूँ, कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। तस्वीरें जो दुबई से आई हैं, आप रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, जाहिर है कि वही एक आखिरी मकसद लगता है रजीम चेंज यहाँ पर। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, जो दुबई है सबसे सुरक्षित अपने आप को कहता है और है भी। दुबई इस सेफ्टी और सिक्योरिटी में दुनिया का सबसे सुरक्षित मुल्क UAE माना जाता है, उसमें कई जगह हैं, लेकिन ये दुबई एयरपोर्ट का हाल है जो अपने आप को सबसे सुरक्षित बताता था। वहां से इस वक्त निकलने के लिए एक भीड़ लगी हुई है एयरपोर्ट से, क्योंकि अबू धाबी तक पर अगर वहां पे भी मिसाइल गिरती है या वहां पर भी खतरा बना हुआ है, अमेरिकी बेसिस जो इस क्षेत्र में जहां हैं वहां ईरान अगर हमले करेगा, तो ऐसे में लोगों में ये डर बना हुआ है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं दुबई के एयरपोर्ट से। यहां पर किस तरह से तस्वीर बदल गई है जब एयरपोर्ट पे भीड़ लगी हुई है लोगों की। एक तस्वीर दुबई एयरपोर्ट की है और दूसरी तस्वीर आसमान से ली गई है। युद्ध के बाद दुबई में हालात ऐसे हैं कि लोग वहां से भागना चाह रहे हैं। एयरपोर्ट पे भारी भीड़ जुट गई है, यात्रियों के फंसे होने की खबरें सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ दुबई में उठ रही आग की लपटें भी हैं, जिसे एक यात्री ने शूट किया है, जो दुबई के आसपास का ही वीडियो बताया जा रहा है। तो ये इस तरह के हालात इस वक्त यहाँ पर बने हुए हैं। ये जो तस्वीर हम दुबई की देख रहे हैं शैलेंद्र जी, ये उस पूरे इलाके की एक तरह से तस्वीर है जो आसपास का पूरा रीजन है और जो इस युद्ध में चाहे ना चाहे अब शामिल होता जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, दुबई की अगर हम बात करते हैं तो दुबई किसी एक पर्टिकुलर सिटी का बिलोंग नहीं करता है, पूरी दुनिया को बिलोंग करता है। वहाँ पर जो आवाजाही है इतनी ज़्यादा है, एक फ्री ट्रेवल का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक लेजरली पॉइंट ऑफ व्यू भी उसका देखा जाता है और सभी मायनों में एक काफ़ी ही एडवांस्ड, सेफ और स्टेबल सिटी माना जाता है। और जब ऐसी जगह पर किसी भी तरह की उथल पुथल अगर होती है तो आप पाएंगे कि सब लोग उस जगह को छोड़ना चाहते हैं और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये उसका सीधा परिणाम है। हालांकि शैलेंद्र जी ये भी बता दें कि वहां पर जो बेसिस है अमेरिकी, उसी को टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस को नहीं। लेकिन मैं उसी पर आ रहा हूं, अब आती है बात जो स्ट्राइक की, जो अब आप कह रही हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि अभी तक दुनिया, दुबई और सभी लोग लकी रहे हैं कि ये स्ट्राइक्स ईरान ने अभी तक सिर्फ US के बेसिस पर करी है। और मैं वहाँ पर एक बड़ा अच्छा आपको एनालिसिस करने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर ये वॉर एस्केलेट नहीं होनी चाहिए तो वो सिर्फ इसी बात पर नहीं होनी चाहिए कि वो लिमिट हो जाए US बेसिस के ऊपर। अगर जहाँ आप देखेंगे कि ये कंट्रीज़ 7 से 8 जगह स्ट्राइक हो चुकी है और अगर ये 8 कंट्रीज़ किसी भी तरह इन्वॉल्व होती हैं तो ये युद्ध का जो प्रारूप है वो आपका नरेटिव और आपका एस्केलेशन कंट्रोल आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। आपने एक और बात करी थी, एक मैं 10 सेकेंड और लूंगा। आपने डिफेंस मिनिस्टर के मरने की बात करी और आपने बात किया कि चलिए शायद रिजाइम चेंज हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर मरने से रिजाइम चेंज कब होने लगे? किसी देश का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कहीं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एक सेकंड, एक स्टेप आपको मैं और आगे लेकर चलता हूं। मैं आपको जरा सा रोकूं, एक हम लोग तस्वीर पहले देख रहे हैं और दूसरी बात ये भी बताना चाहते हैं कि रिजीम चेंज अमेरिका का मकसद लगता है, क्या हो पाएगा या नहीं, एक बड़ा सवाल है। ट्रंप का एक ऑर्डर और दुनिया में सबसे बड़ी तबाही। ट्रंप ने इस बार ऑर्डर दिया और इजरायल ने ईरान के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। अब तक सैकड़ों मिसाइलें चलाई गई हैं, जवाब ईरान की तरफ से भी दिया गया है। हाइफा से लेकर तेल अवीव तक इजरायल के शहरों पर ईरानी मिसाइलें दिखाई दी हैं। ईरान पर मिसाइलें गिरी, खामेनेई अंडरग्राउंड हो गए।
खामेनी के घर पर मिसाइलों का हमला। खलीफा का इंतकाम, नहीं झुकेगा ईरान। जैसे ही इजराइल की मिसाइलों ने ईरान को टारगेट किया, उसी के बाद खबरें आने लगी कि खामेनी का सिस्टम क्रैश होने लगा है। खामेनी के वफादारों की मौत की खबरें इजरायली मीडिया की सुर्खियां बनने लगी। सबसे पहला नाम था ईरान आर्मी चीफ आमिर हतामी का। दावा किया गया कि इजराइल और अमेरिकी हमले में हतामी की मौत हो चुकी है। खबर तो यह भी आई कि हवाई हमले में ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ और खामेनी के सलाहकार अली शामखानी की मौत हो गई। हालांकि इस बार भी इजराइल का टारगेट खामेनी था, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि इजरायली हमले से पहले ही खामेनी ने तेहरान छोड़ दिया। वो किसी सेफ लोकेशन की तरफ चले। इस बीच खामेनी के पुराने बयान फ्लोट होने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को भी कभी कभी ऐसा करारा झटका लग सकता है कि जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी ना रह पाए। वो बार बार कहते हैं कि हमने ईरान की ओर युद्धपोत भेजे हैं। ठीक है, बेशक युद्धपोत एक खतरनाक हथियार की तरह काम करता है, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उससे भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार हैं जो उस युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं कि खामेनी के ऑफिस के बेहद करीब धमाके हुए थे। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ये साफ नहीं है कि खामेनी किसी बड़ी अनहोनी से बच पाए या नहीं, लेकिन जहां तक ईरानी मीडिया का दावा है तो पता चला कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अभी सुरक्षित है, लेकिन खामेनी के बारे में सस्पेंस बढ़ा हुआ है। वैसे 2 दिन पहले ही पेजेश्कियान ने कहा था कि हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर समझौता कर रहे हैं। बात जब तक आगे बढ़ती, हमला हो गया था। अमेरिकी समझते हैं कि मैं एक राजनेता हूं और उनकी तरह झूठ बोलता हूं, लेकिन समाज का एक धार्मिक नेता झूठ नहीं बोल सकता। जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, मतलब हम नहीं बनाएंगे। हम बनाना भी चाहें तो हम नहीं बनाएंगे, हमें इसकी इजाजत भी नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर हथियार वाली बात नहीं की। हालांकि रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमला शुरू होते ही सर्वोच्च नेता को तेहरान से हटाकर किसी सेफ जगह पर भेज दिया गया। युद्ध की सिचुएशन में शीर्ष नेताओं को अक्सर तेहरान के बाहर बने अंडरग्राउंड बंकर्स या पहाड़ी इलाकों में ले जाया जाता है। अब सवाल है खामेनी कहाँ हो सकते हैं, तो इसे लेकर फिलहाल कोई क्लियर डिटेल नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है ईरान ने अमोल्ज यानी मध्य ईरान के दुर्गम पहाड़ों के नीचे विशाल मिसाइल सिटीज और बंकर बना रखे हैं। कोम में भी एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, लेकिन इजराइल की मिसाइलें यहाँ भी गिरी। कहा जाता है कि ईरान के पास परमाणु हमले को झेलने में सक्षम डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, जो सतह से सैकड़ों फीट नीचे और यहीं से हमला कर रही हैं। अगर अमेरिका अपने 12 युद्धपोत भी यहाँ तैनात कर दे तो भी वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अमेरिका को जरूर हराया जाएगा और फिर वो आक्रामक रुख अपना नहीं सकेगा। इसलिए अमेरिका को अपने अंदरूनी मामले में दखल देना चाहिए। अमेरिका को अपने सैनिकों के बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका के कनाडा और यूरोप से संबंध बिगड़ चुके हैं, उनके साथ युद्ध जैसी स्थिति है। अमेरिका खत्म हो चुका है। पिछली बार खबर आई थी कि खामेनी रूस भाग सकते हैं, लेकिन सवाल है क्या इस बार ऐसा मुमकिन है? क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, उससे लगता है कि अमेरिका अब खामेनी को सत्ता से हटाकर या फिर उनका खात्मा करके ही दम लेंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खामेनी के लिए देश छोड़कर भागने का मतलब इस्लामिक क्रांति का अंत होगा और जनता के सामने पूरी तरह सरेंडर वाली मुद्रा। इसलिए फिलहाल यही लगता है कि खामेनी ट्रंप के सामने झुकने वाले नहीं, और ईरान कह चुका है कि अगर खामेनी का खात्मा होता है तो उनकी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी तैयार है। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज एक और आ रही है। अब रशिया की तरफ से युद्ध के बीच पुतिन की आपात बैठक हुई है। ईरान में बिगड़े हुए हालात पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक्टिव हो गए हैं। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है, तो ईरान में बिगड़े हालात पर पुतिन भी एक्टिव हैं। और ऐसे में सवाल ये भी हो रहा है, मैं हुदा आपके पास आना चाहती हूँ, ये भी दिख रहा है कि किस तरह से दुनिया बटी हुई है, कौन किसके साथ है इस पूरे रीजन में, और जो यूरोपियन यूनियन हो चाहे ये रशिया हो, किस तरह से बंटवारा इस वक्त दिख रहा है दुनिया का। देखिए, जाहिर सी बात है, दुनिया फ़लस्तीन के जो जेनोसाइड है उसके बाद प्रो फ़लस्तीन और एंटी फ़लस्तीन सिर्फ 2 ही मॉडल पे चल रही है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है एज अ हिंदुस्तानी, मुझे बहुत अफसोस भी होता है कि मोदी जी कहीं ना कहीं प्रो इजराइल स्टैंड ही लेते हैं। खैर, दिस इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ टुडे। आज के दौर में जहाँ पे ईरान बिल्कुल डरेगा बेखौफ होके, बिल्कुल ऊपर वाले का नाम लेके, ये अली वाले लोग हैं, ये लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं,
यूएस हो गया, इजराइल हो गया, ईरान पे बार बार अटैक कर रहा है, बार बार उसका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बार बार कहीं ना कहीं ईरान पे सैंक्शंस लगाता है, कहता है न्यूक्लियर वेपन्स। अरे कहां है न्यूक्लियर वेपन्स? यूएस की तो आदत है हर फटे में टांग अड़ाने की। यूएस कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि किसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होगा या कहां वॉर होगी, कहां पीस होगा? वेनेजुएला के साथ क्या उसने हरकत करी है देखा ना हमने, किस तरह से आर्म ट्विस्ट करके वो दुनिया के तमाम मुल्कों से तेल लेना चाहता है और अपने अब बड़ा सवाल है कि जो वेनेजुएला के साथ क्या वो ईरान के साथ हो सकेगा? क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है। नहीं हो सकता, नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये अली वाले हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ रखते हैं। तो अब इसमें यहाँ पर जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अगर हम देखें, कौन मुल्क कहाँ है, किसके साथ है, इस पूरे खित्ते में किस तरह से ये युद्ध फैलेगी और कौन कौन से मुल्क इसमें घसीटे जाएंगे। एक और ब्रेकिंग खबर इस वक्त न्यूज आ रही है कि इराक में ईरान का बड़ा हमला हुआ है और इराक के इरबिल में यह हमला किया गया है, लेकिन इराक ने हमले को नाकाम किया है। तो जो मैं बार बार कह रही हूं कि इसमें दूसरे मुल्क जो हैं वो भी खींचे चले आएंगे। कौन कहां अमेरिकन बेसेस हैं वहां पर ईरान हमला करेगा, ईरान के ऊपर जो अमेरिका के एलाइज हैं वो हमला करेंगे, और यहाँ पे वेस्ट एशिया में मुल्क जो हैं मौजूद वो किस तरह से किसके साथ खड़े होंगे ये देखना है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमेरिकी एयर डिफेंस ने मिसाइल को ढेर किया है। इराक पर हमला किया था ईरान ने, लेकिन इरबिल में ये जो हमला हुआ उसे नाकाम किया गया है। इराक ने इस हमले को नाकाम किया है और अमेरिकी एयर डिफेंस ने इस मिसाइल को ढेर किया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मेजर जनरल संजय मेस्टन, तस्वीरें आप देख रहे हैं, इराक पर भी हमला हुआ ईरान की तरफ से। धीरे धीरे कई मुल्क जो हैं इसमें खींचे चले आ रहे हैं। उस पूरे इलाके में एक हड़कंप है। बिल्कुल, ये मल्टी फ्रंट तौर पे ये युद्ध चल चुका है, इसका विस्तार हो गया है, लेकिन वही सवाल उठता है कि अंत क्या होगा। वो तो कोई नहीं इसका अंत बता सकता है कि किस और किस दिशा में जाएगा, क्योंकि एक कमेंट में ये भी अंत क्या होगा, ये युद्ध कितना खिंचेगा, मैं आ रही हूँ आपके पास बेहुदा, लेकिन ये अभी पुतिन जो एक्टिव हुए हैं उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई है। रशिया का स्टैंड क्लियर है यहाँ पर, ये युद्ध और विस्तार होगा इस युद्ध का। बिल्कुल, आप रशिया ने बहुत क्लियरली कहा है कि इस युद्ध को इमीडिएटली रोका जाए। अमेरिका को ये बोल रहे हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट वो जरूर देंगे ईरान को। उनकी 20 साल की जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जनवरी 2025 में हुई थी, लेकिन साथ में ये कहूंगा जिस इंटेंसिटी से रशिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा है इस समय, 20,000 से 30,000 उसके सैनिक मारे जा रहे हैं एक महीने के अंदर, उतनी भर्ती नहीं हो रही जितने की सैनिक मारे जा रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक सपोर्ट, आर्म्स इक्विपमेंट, एयर डिफेंस मिसाइल, रूस के लिए भी एक मुसीबत है इस वक्त, क्योंकि एक युद्ध में वो पहले से एंगेज है, तो कितना कुछ कर सकता है। एक बड़ी खबर और आ रही है, यूएस मिलिट्री बेस पर ईरान का एक और हमला हुआ है। अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ईरान का एक और हमला, बहरीन में ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। तो ईरान इसका लगातार जवाब दे रहा है और जहां जहां पर वेस्ट एशिया में अमेरिकी बेसेस हैं वहां पर हमला हो रहा है। अब सवाल यह है कि इससे कितना नुकसान अमेरिका का हो रहा है। इन बेसेस पर हमला करने के बाद क्या अमेरिकी नुकसान का अंदाजा भी अभी लगाया जाएगा। हमले के बाद धुएं का गुबार वहां से उठा है। आम नागरिकों ने इस हमले के वीडियो को शूट किया है। ये वीडियो जो है वो बहरीन का है। बहरीन में यूएस मिलिट्री बेस पर यह हमला हुआ है। तो लगातार अपनी तरफ से हमला कर रहा है शैलेंद्र जी, ईरान भी एक एक करके अमेरिकी नेवल बेसिस पे। अमेरिका को इस वक्त आपको लग रहा है कि एक नुकसान ऐसा हुआ है जिससे अमेरिका भी कोई कदम पीछे खींच सकता है या शांति की ओर बढ़ेगा। मुझे लगता है कल सवेरे तक अगर आप रुक जाएंगे ना तो वी विल स्टार्ट काउंटिंग के कहां कहां हमला नहीं हुआ है, क्योंकि वो जगहें थोड़ी कम होंगी। ईरान वुड हैव कवर्ड नियरली एवरी प्लेस जहां पर भी यूएस के बेसेस हैं। जहां तक नेबरहुड में अमेरिका में क्या क्या बेसेस हैं? देयर आर 28 बेसेस, नॉट 1 or 2 बेसेस। सो उससे अबव बात चलेंगे। ये जो स्ट्रैटेजिक बेसेस हैं जैसे कतार बेस है, इट्स वन ऑफ द, और लास्ट टाइम अगर आपको याद है तब भी अटैक हुआ था। ये जो बहरीन का बेस है, दिस इज द नेवल बेस एंड दिस इज द नेवल बेस जहां से 5th फ्लीट की पूरी मेंटेनेंस इन्वॉल्व है, रिप्लेनिशमेंट इन्वॉल्व है। और इसीलिए आप देख रहे हैं वो जो काला धुआं और वो जो आग वहां दिख रही है,
that is of a particular, as per my assessment, I can only say there appears to be some fuel depot or something, जो कि oil depot, which would have gone up, क्योंकि वो काला धुआं जब उठ रहा है और ये नेवल बेस है जिस पर हमला हुआ है. It is actually a naval base and it is the largest naval base for the maintenance of 5th Fleet. आप समझने की कोशिश करिए, ईरान उन जगहों पर अटैक कर रहा है जो they will make news. Number one, they are strategically important for US और US को वो दिखा रहा है कि मैं आपको वहां हर्ट कर सकता हूं. ईरान की तरफ से ये कोशिश है दिखाने की भी कि वो कहां-कहां हमला कर सकता है और अमेरिका को कहां-कहां वो नुकसान पहुंचा सकता है. इजराइल के सेना प्रमुख ने चेतावनी दी है. एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक और ब्रेकिंग न्यूज. लगातार चीजें बदल रही हैं. इजराइल के सेना प्रमुख ने चेतावनी दी है कि जंग के लिए बिल्कुल अलग तरह की तैयारी है. खतरनाक चैलेंज के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं. तो ये इजराइल की तरफ से एक धमकी आई है या चेतावनी कह लें. चेतावनी आई है कि पूरी तरह से तैयार हैं और एक खतरनाक चैलेंज के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं. तो यहाँ पर आप में से कोई भी इस पर कमेंट करना चाहेंगे? हुदा, आप कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि ईरान अपनी सच्चाई पे डटा हुआ है. कहते हैं जा लक्कू व ज़हकुल बातिल, मतलब ट्रूथ हैज कम, फॉल्सहुड हैज पेरिश्ड. सच्चाई आ गई है, झूठ का खात्मा हो गया है. ईरान जो ये चुन चुन के अटैक कर रहा है यूएस बेसिस पे, वो एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है कि यूएस थम जा, इजराइल थम जा. गजा में तुम लोगों ने बच्चों के साथ जो जेनोसाइड किया है, जर्नलिस्ट के साथ, वहां की जो हेल्थ अथॉरिटीज है उनके साथ, हॉस्पिटल्स के बम्बार्डमेंट से लेके आपने पूरा मुल्क तहस नहस कर दिया. ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है. आप कह रहे हैं कि लाउड एंड क्लियर मैसेज है ईरान की तरफ से, लेकिन माफ कीजिएगा बीच में टोक रही हूं क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं. ईरान के जनरल सरदार जब्बारी का बड़ा बयान आया है. ईरान ने सिर्फ स्टॉक वाली मिसाइलें चलाई हैं. क्या मतलब है इसका? स्टॉक वाली मिसाइलें चलाई हैं. ये भी कहा है कि जल्द अनदेखे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे. यानी कि ईरान भी ये कह रहा है कि अभी हमने अपनी पूरी ताकत दिखाई नहीं है. देखिए, उनके पास बहुत एडवांस मिसाइल्स भी हैं, जैसे फाता की हाइपरसोनिक मिसाइल है या फिर खुरम शहर 4 जो कि मनूवरेबल मिसाइल है, 4th जनरेशन की मिसाइल और हैवी पेलोड कैरी करती है. और जिस इन दोनों मिसाइल को इंटरसेप्ट करना इतना आसान नहीं है. और साथ में उनके पास तालिया है जो कि एंटी शिपिंग मिसाइल 1000 किलोमीटर रेंज की है, वो भी है उनके पास. नूर है उनके पास एंटी शिपिंग मिसाइल. तो ऐसे कई एक और खबर है कि दुबई में भी बहुत बड़ा हमला हो गया है. दुबई के रिहायशी इलाके के करीब हमला हुआ है और दुबई में हमले के बाद अफरा तफरी है. ये बहुत ही चिंताजनक खबर है. तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको. ये दुबई के रिहायशी इलाके में, हम अब तक बार बार बात कर रहे थे कि ईरान टारगेट करेगा तो अमेरिकी बेसेस को टारगेट करेगा, लेकिन ये भी है कि चुन चुन के टारगेट करने में कई दफा ऐसी जगहों पर भी हमले हो जाते हैं जो शायद निशाने पे नहीं थे. हम आपको सुनवाते हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव. ये जो हमला हुआ है दुबई में. के करीब ये हमला हुआ है और एक बड़ी सड़क और चारों तरफ आप इमारतें देख रहे हैं. अब ये गैस करना इस वक्त सही नहीं है कि ये कौन सा इलाका है, लेकिन एक बड़ी मेन रोड नज़र आ रही है. दुबई के रिहायशी इलाके के करीब ये हमला हुआ है. दुबई जो कि पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित जगहों में एक माना जाता था और इस वजह से वहाँ पर तमाम मुल्कों के लोग आकर बसे हैं. बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर भारतीय हैं. लेकिन अब आप देखें कि यहाँ पर दुबई भी इससे अछूता नहीं रहा है और इस वक्त दुबई में भी हमले के बाद एक अफरा तफरी है. दुबई में आग की लपटें भी उठ रही हैं कई जगहों पर और कुछ यात्रियों ने इसको शूट किया है. हमले का वीडियो, दुबई के आसपास का वीडियो दिखाते हैं आपको. और हैरानी की बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति दूत बताते रहे, जो युद्ध रुकवाने की बात करते रहे, अब वही ट्रंप शांति के लिए खतरा बनते नजर आ रहे हैं. अलग अलग जगहों पर अमेरिका और इजराइल के साथ आ जाने से युद्ध का स्तर बहुत बड़ा हो गया है. उधर ईरान भी पीछे नहीं हटा है. ईरान ने मिडिल ईस्ट में तमाम अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है और वहां से भी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं. सवाल यह है कि क्या ऐसे ही ट्रंप शांति दूत बनना चाह रहे थे?
खुद को बताया शांति दूत, फिर छिड़ा महायुद्ध। पहले शांति का मैसेज, फिर सरप्राइज अटैक। ट्रंप का यू टर्न, दबाया वर्ल्ड वॉर का बटन। खुद को शांति का मसीहा बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को इस बार युद्ध की आग में झोंक दिया है। सत्ता में आने के बाद जो ट्रंप शांति का संदेश दे रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कई देशों के बीच युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे, उन्हीं ट्रंप ने दुनिया को विनाशकारी महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इजराइल ईरान के बीच युद्ध में कूदकर ट्रंप ने ऐसी जंग छेड़ दी जो दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखती है। ट्रंप ही हैं जिन्होंने कहा था कि मैं युद्ध रोकता हूं, शुरू नहीं करता, लेकिन आज ट्रंप के आदेश पर ही ईरान के आसमान में बारूद बरस रहा है। इजराइल के साथ मिलकर ट्रंप ईरान पर मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिया। जो ट्रंप कहते थे हेल्प इज ऑन द वे, अब वो तक कलाम वर्ल्ड वॉर ऑन द वे बन चुका है। ट्रंप ने इस महायुद्ध का ट्रिगर उसी दिन दबा दिया था जब उनका एक बयान सुर्खियों में आया था। जब ट्रंप से पूछा गया था कि क्या ईरान से उनकी जान को खतरा है, उसके बाद ट्रंप ने जो कुछ कहा, उसने ईरान और अमेरिका के बीच जंग का अलार्म ऑन होने का नया संकेत जारी कर दिया। It's Iran and their proxies who have threatened to retaliate against you and your team by killing you guys for taking out Soleimani. Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. जैसे ही ईरान को लेकर अमेरिका की पोजीशन क्लियर होने लगी थी, जैसे ही ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर देने के लिए मन बना रहे थे, जैसे ही ट्रंप ने ईरान के अंत की बात की, तो ईरान की सारी मशीनरी भी वॉर मोड में आ गई। महायुद्ध की आहट होते ही खामनेई बंकर के अंदर से ही अमेरिका को कड़ा जवाब देने के लिए इंस्ट्रक्शन देने लगे, क्योंकि अमेरिका के तेवरों से समझ चुके थे कि अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time, so let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it how. If we could get it settled for once and for all, that would be good. ट्रंप के इसी बयान के बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या ट्रंप खामनेई को मिटा के ही मानेंगे? क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग में कूद जाएंगे? और फिर क्या इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध फैल जाएगी? ट्रंप जानते थे कि उनका यह कदम पूरी दुनिया में आग लगा सकता है, जिसकी जद में कई देश आएंगे, विश्व युद्ध छिड़ने के हालात बन जाएंगे। ट्रंप दावा तो ईरान से बातचीत होने का कर रहे थे, ईरान को लगातार वार्निंग दे रहे थे। After midnight hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular nuclear weapons. Yet they continue starting it all over. We wiped it out and they want to start all over again, and are at this moment again pursuing their sinister ambitions. लेकिन सवाल है, खुद को शांतिदूत बताने वाले ट्रंप क्या दुनिया में हो रहे युद्ध के लिए खुद जिम्मेदार नहीं? क्या दुनिया को वर्ल्ड वॉर की आग में धक्का देने का काम ट्रंप ने ही किया है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप किसी देश में सत्ता परिवर्तन के लिए इतना आगे बढ़ गए। इससे पहले ट्रंप के एक कार्यकाल में ही 7 देशों पर हमला किया गया, इसमें वेनेजुएला, सीरिया, नाइजीरिया, ईरान, सोमालिया, यमन और इराक शामिल हैं। इन हमलों में कई लोग मारे गए थे। तो सवाल है, क्या ऐसा विनाशकारी रिकॉर्ड रखने वाले ट्रंप शांतिदूत हो सकते हैं? क्या किसी देश की सरकार को बमों के जरिए गिराना ट्रंप का पीस मैसेज है? अब ईरान और इजराइल के बीच की जंग का नतीजा तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि शांतिदूत ट्रंप की शांति का रास्ता बारूद और मिसाइलों से होकर ही गुजरता है, और दुनिया ने ये देख भी लिया, समझ भी लिया। अमेरिका और ईरान में किसकी सैन्य ताकत कितनी है? इन दोनों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज क्या हैं? आमने सामने हैं ईरान और अमेरिका। देखिए,
धमाका नंबर 1, धमाका नंबर 2, धमाका नंबर 3 और न जाने कितने धमाकों की दहशत से ईरान थर्रा रहा है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी भी एक्शन में दिखे और पलटवार कर अमेरिका को भी बता दिया कि ईरान को हल्के में लेना अमेरिका और इजराइल की भूल है। अमेरिका और ईरान की दूरी 11,000 किलोमीटर से लेकर 12,500 किलोमीटर तक है और अमेरिका के पास मिनटमैन, ट्राइडेंट जैसी लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, जिनका इस्तेमाल कर यूएस ने ईरान को दहला दिया। जबकि ईरान के पास भी खुर्रम, शहर 4, फतेह 2 और सज्जील 2 जैसी खतरनाक मिसाइलें हैं, जिसकी मदद से ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को तबाह किया है। ईरान की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है खुर्रम शहर 4। ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 8 की रफ्तार से उड़ती है। इसके बाद फतेह 2 है, जिसे ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। 1400 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल इतनी तेज है कि मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम माने जाते हैं। सज्जील 2 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके अलावा शहाब 3 ईरान की सबसे पुरानी लेकिन सबसे भरोसेमंद मिसाइल मानी जाती है। इसकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर के बीच है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अब जरा समझिए कि ईरान ने अमेरिका के किस किस बेस को निशाना बनाया। कतर में अल उदैद एयरबेस है, जहां 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। बहरीन में अमेरिका की नौसेना के जवान मौजूद हैं, जो अमेरिका की 5वीं फ्लीट का हिस्सा है। कुवैत में अमेरिका ने कैंप अफ्रीजान और अली अल सलेम एयरबेस बनाए हुए हैं। यूएई में अमेरिका का अल दाफरा एयरबेस एक्टिव है। इसके अलावा इराक में आइन अल असद और अरबिल एयरबेस हैं, जबकि सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस के जरिए अमेरिका ऑपरेट करता है। जॉर्डन में भी अमेरिका के मुवफ्फाक अल साल्तिर एयरबेस है। अमेरिका और ईरान दोनों में से कोई देश कम नहीं पड़ना चाहता। अमेरिका ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहता, तो ईरान भी अमेरिका की दादागिरी का मिसाइल अटैक से जवाब दे रहा है। जो भी हो, इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में मंजर अब और खतरनाक हो सकते हैं, जो दुनिया को डराने वाला बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है ईरान के युद्ध पर। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का बयान आया है और कहा है कि मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव जो है वो निंदनीय है। ईरान युद्ध पर यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान है। इस तनाव की निंदा की है। ईरान युद्ध से विश्व शांति को खतरा है। सभी पक्ष इंटरनेशनल कानून का सम्मान करें, देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाए, तत्काल सैन्य तनाव को खत्म किया जाए और सभी पक्ष बातचीत पर लौटें। यानी कि साफ संदेश अमेरिका को कौन सुनेगा? बड़ा सवाल ये है कि कौन जो है ये बात मानेगा। ये हम आपको ताजा तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त। ये जो तस्वीरें हैं वो दुबई की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुबई की स्काईलाइन जो है वो इस वक्त गुबार से भरी हुई है। जगह जगह पर जो हमले हुए हैं, धुआं उठ रहा है। आपको हमने तस्वीर दिखाई कि रिहायशी इलाके करीब भी हमला हुआ है। ये दुबई की बात है और यहाँ पर दुबई की स्काईलाइन, दुबई का जो आसमान है इस वक्त गर्द से भरा हुआ है, धुएं से भरा हुआ है। तो एनडीटीवी पे लगातार ये कवरेज जारी है और आगे अब भारत की बात बताता हूं आशुतोष के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। भारत की बात बताता हूं मैं आज आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं। देखिए, बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले से।
आगे आपको बताएंगे ईरान में कहां इजराइल और अमेरिका ने मार दी है मिसाइल्स और कौन है वो 7 मुल्क जहां ईरान ने बरसा दिए बम। साथ ही आपको दिखाएंगे ईरान में बरसती मिसाइल्स ने खामनेई के दफ्तर को भी टारगेट किया है, निशाना बनाया है। इजरायली अटैक में इसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर अब जिंदा है या मुर्दा, ईरान में क्या चल रहा है, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे और बताएंगे। फिर आगे बात करेंगे इजराइल ईरान में शुरू हुई जंग को लेकर कैसे बढ़ गई है दुनिया। 2 धड़ों में अमेरिका इजराइल के सामने ईरान के साथ खड़े हो गए कौन कौन से मुल्क, और अगर यह युद्ध हुआ लंबा तो भारत पर क्या असर होगा, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। साथ ही आगे आपको दिखाएंगे ईरान तो पाकिस्तान पर कैसे तालिबान ने कर दी चढ़ाई और कौन से 3 मोर्चों पर पाकिस्तान की हुई है जबरदस्त पिटाई और तालिबानी शिकस्त से थर्रा गया पाकिस्तान, फिर क्यों करने लगा भारत। और आखिर में बात होगी देश में छाई होली की खुमारी की तस्वीरें आपको पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। और काशी में क्यों नरमुंड की माला पहनकर निकल गए महाराज, क्यों जलती चिताओं के बीच उड़ने लगा गुलाल, रहेगी इन खबरों पर नजर। लेकिन आज की जो हेडलाइंस हैं, सुर्खियां हैं, वो भारत समेत दुनिया से कौन कौन सी हैं, अब उसको रखते हैं। देखिए हेडलाइंस। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का बहुत बड़ा अटैक, तेहरान में खामनेई के दफ्तर समेत कई शहरों में बमबारी, ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी की मौत का भी दावा। स्थिति देखते हुए ईरान में इमरजेंसी घोषित। ईरान में भी इजराइल पर की मिसाइलों की बौछार, ईरान ने कहा युद्ध शुरू किसी और ने किया, खत्म हम करेंगे, इजरायली लोगों को बंकरों में जाने की सलाह। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग में अब तक 400 से ज्यादा मौत, तालिबान ने कहा हमने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स मार गिराया, पायलट हमारे कब्जे में। गुजरात और राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अहमदाबाद में भव्य रोड शो का आयोजन, अजमेर में गर्भाशय कैंसर के खिलाफ मुफ्त टीका अभियान की शुरुआत की, जागरूकता फैलाना मकसद है। लखनऊ के ब्राह्मण सम्मेलन में भारी बवाल, यूजीसी के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी, मंच से वापस लौटे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, समारोह में एक साथ शामिल हुए थे पक्ष और विपक्ष के नेता। जबकि पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ किसान मजदूर रैली में हुए शामिल, कांग्रेस नेताओं को दी चेतावनी, कहा जो साथ नहीं चलेगा बाहर बैठेगा। उधर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हजारों लोगों ने खेली मसाने की होली, भस्म और राख में लिपटे दिखे लोग। हर साल रंग भरी एकादशी के अगले दिन होता है आयोजन। जबकि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 9 और चीते लाए गए हैं, देश में चीतों की संख्या बढ़कर पहुंची 48। प्रोजेक्ट चीता के तहत वन्यजीव संरक्षण की यह पहल। और आज T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मुकाबला है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान को 64 रनों से जीत दर्ज करनी होगी। वहीं वर्ल्ड कप में भारत और वेस्टइंडीज की भिड़ंत है। मैच से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की। सेमीफाइनल में जाने के लिए दोनों टीमों के लिए जीत बेहद जरूरी है। चलिए शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका इजराइल के हमले का प्लान साफ है, उन्हें खामेनेई जिंदा या मुर्दा चाहिए। देखिए अब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार खामेनेई को सीधी धमकी दे दी है, चुनौती दे दी है। तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लगातार आगे भी पहुंचाएंगे। ददाकुटा अमेरिकी बेस सऊदी अरब की ये तस्वीरें हैं। देखिए आग का दायरा कितना बड़ा है, कितने बड़े एरिया में है। और अब बढ़ते हैं आगे। देखिए पूरा मिडिल ईस्ट इस जंग की चपेट में आगोश में है। इजराइल अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने हमले काफी तेज कर दिए हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी बेस धधक उठा है, उसकी भी तस्वीरें। तो इससे पहले अमेरिका ने खतरनाक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से हमला किया। इसके बाद ईरान ने मिसाइल्स की बौछार कर दी, बारिश कर दी। टॉमहॉक
क्रूज मिसाइल है, इससे अटैक हुआ। और अब ये बहरीन का अमेरिकी एयरबेस है जहां ईरान ने अटैक कर दिया। 7 देशों में अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है दुनिया में। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या। और अब बहरीन में अमेरिका के 5वें एयरबेस पर हमला कर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं रहने वाला। यह भी कहा गया है कि शुरू उन्होंने किया है, खत्म हम करेंगे। और उधर देखिए कतर में भी अमेरिकी बेस पर ईरान ने सटीक निशाना लगा दिया है। तस्वीरें साइड पे हो जाओ, साइड पे भागो। और देखिए दुबई में भी ईरान ने हमला किया और यहां भारतीय काफी संख्या में रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में। ईरान, इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के देशों में भारतीयों की संख्या लाखों में है, कई लाख भारतीय हैं। ये ईरान ने जहां अटैक किया उसकी तस्वीरें दुबई की। और अब अगली तस्वीर, हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट से आवाजाही बंद कर दी गई, इसलिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए दुबई एयरपोर्ट है, भारी भीड़ है, लोग परेशान हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे, देखिए दुबई में फिर से बड़ा हमला हुआ है जहां एक होटल में रॉकेट से अटैक किया गया है। फेयरमाउंट पाम होटल में यह अटैक हुआ है, कुछ लोगों के हताहत होने की भी सूचना मिल रही है। तो दुबई में एक फिर से अटैक, एक होटल में रॉकेट से यह हमला हुआ है। यह बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। फेयरमाउंट पाम होटल में यह अटैक हुआ है, मतलब ईरानी मिसाइल गिरा है, कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर मिल रही है। और इससे पहले आपको बता दें, इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, कई शहरों के साथ। खामेनेई और ईरान के राष्ट्रपति तक उसके टारगेट पर थे। तस्वीर दिखाएंगे। गिनते जाइए इजराइल का मिसाइल अटैक। और अब देखिए खामेनेई के ऑफिस पर इजराइल ने ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया, इससे ऑफिस को भारी नुकसान भी पहुंचा। ये तस्वीर देखिए, सैटेलाइट इमेज है खामेनेई के घर पर यह हमला, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ कि खामेनेई वहां पर थे या नहीं थे। और ये देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एआई वीडियो है, दरअसल ये इस तरह से हुआ है, एआई जनरेटेड वीडियो है ये खामेनेई का आवाज है और वहां पर ये मिसाइल से अटैक हुआ, इजराइल ने किया। और कहानी देखिए जरा क्या हुई होगी, भारी तबाही, भारी नुकसान, काफी नुकसान, लेकिन खामेनेई कहां थे ये अभी तक अज्ञात है। और थोड़ी देर में जानकारी मिल रही है, जो बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, थोड़ी देर में खामेनेई का संबोधन हो सकता है। युद्ध के बीच खामेनेई का यह संबोधन होगा, इसके मायने बड़े हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई और देश को संबोधित करेंगे अब से थोड़ी देर के बाद, यह जानकारी मिल रही है। भीषण युद्ध जारी है, लेकिन यह इंफॉर्मेशन, यह बिग ब्रेकिंग कि ईरान के सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च जो लीडर है, नेता खामेनेई, वो अपनी जनता को संबोधित करेंगे, ईरान को संबोधित करेंगे। चलिए रहेगी इस पर नजर। लेकिन देखिए ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद के घर को भी टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। यहां जोरदार भीषण ब्लास्ट हुआ और आग लग गई चारों तरफ। अफरा तफरी का माहौल, चीखें, पुकार, मातम, यही सुनाई दी। देखिए
ये तस्वीरें हैं, पूर्व राष्ट्रपति के घर पर भी धमाका हुआ है, सटीक निशाना लगा रहा है इजराइल। देखिए, इजराइल के धमाकों से ईरान दहल उठा है। राजधानी तेहरान सहित कई जगहों पर धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ आसमान में नजर आया है। ये देखिए, उनमें से एक तस्वीर। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहां पर यह धमाका। एक और बड़ी खबर, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है। अमेरिकी समय अनुसार शाम 4 बजे यूएनएससी की बैठक और फ्रांस की अपील पर यूएनएससी की यह बैठक होने जा रही है। तो यह बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज, युद्ध से जुड़ा अपडेट। अमेरिकी समय अनुसार शाम 4 बजे यूएनएससी की बैठक होनी है और ये फ्रांस की अपील पर यूएनएससी की बैठक बुलाई गई है, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की बैठक। लगातार बड़ी खबरों को और हर एक तस्वीर को आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ। देखिए, इजराइल के हमलों में ईरान में स्कूल भी तबाह हो गया। करीब 50 से ज्यादा छात्राओं के मारे जाने की वहां से खबर सामने निकल कर आई है। ये देखिए, हमले में स्कूल तबाह। और अब देखिए, ईरान के सरकारी चैनल ने तबाही की तस्वीरें दिखाई हैं। ईरान में हमलों के बाद की ये तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व युद्ध का बिगुल फूंक दिया है या बजा दिया है? क्या खामनेई सरेंडर करेंगे? सवाल ये भी है। एक रिपोर्ट हमने आप सभी दर्शकों के लिए तैयार की है, पहले रिपोर्ट देख लीजिए। ट्रंप ने खामेनेई को आखिरी चेतावनी दे डाली है कि सरेंडर कर दो, लेकिन खामेनेई ने भी साफ कर दिया है कि युद्ध भले किसी और ने शुरू किया हो, लेकिन खत्म ईरान ही करेगा। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 7 देशों पर हमला कर दिया है। हर एक जगह अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब, बहरीन से लेकर कुवैत तक खामेनेई ने अमेरिकी बेस पर चुन चुन कर बमबारी की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल अपने मिशन में सफल होंगे या ईरान पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल देगा? और अब जल्दी से आपको बता देते हैं, अपडेट कर देते हैं कौन कौन से वो हिस्से हैं, कौन कौन सी जगह है, प्रमुख प्रतिष्ठान जहां पर ईरान पर अटैक किया इजराइल ने। देखिए, सुप्रीम लीडर खामेनेई का ये ऑफिस है जो आपको हम पीछे दिखा रहे हैं। ये हो गया धमाका, यहां हुआ ब्लास्ट। और ईरान का जो परमाणु ऊर्जा संगठन है वो ये जगह है जहां पर हो गया ब्लास्ट मिसाइल अटैक। और ईरान का रक्षा मंत्रालय, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से डिफेंस की पूरी चीजें डील होती हैं या तय होती हैं, उसको भी ध्वस्त कर दिया इजरायली मिसाइल ने। वो जगह है। और ईरान का खुफिया विभाग, जी हां, इंटेलिजेंस, ये भी हो गया ध्वस्त। ईरान को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। अभी आगे और भी आपको अपडेट करेंगे। परचिन जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो भी तबाह हो गया, उसकी ये तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ ईरान के जो कई शहर हैं वहां पर अटैक किया गया, मिसाइल्स गिरी हैं, लोग मारे गए हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो जमींदोज हुई हैं और कुछ और भी टॉप लीडर्स के भी मारे जाने की खबर आ रही है। उस पर आगे आपको अपडेट हम करेंगे। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं ईरान के, वो क्या कह रहे हैं, जरा उनको हम सुनवा देते हैं सीधा। सुनिए जरा। हम लोग को थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही है, लाइक जो सुन पा रहे हैं आसपास से कि इंटरसेप्ट कर दी गई है जो भी मिसाइल थी। और राइट नाउ वी आर इन अ बिल्डिंग, तो उसमें थोड़ा शेकनेस भी लग रही है कि बिल्डिंग थोड़ी शेक हो रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट कंफर्मेशन दैट थिंग्स आर इन अंडर कंट्रोल। सुबह 8:30 बजे पहला सायरन के बाद 1 घंटे के बाद ईरान की ओर से इजराइल के जो भी शहर है, तेल अवीव है, जेरूसलम, हाइफा, बरसेबा, वो सब शहरों में मिसाइल अटैक चालू हो गया। कंटिन्यूस लोगों को घर के अंदर और जो बंकर है या शटलर रूम है डिफेंस के लिए, उसमें रहने को किया गया है। और जब ये खबर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को हम सुनवा रहे हैं, कुवैत से अभी की बहुत बड़ी खबर आ गई है, वो आपको पहुंचा दें, अपडेट कर दें। देखिए, कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ है। धमाके से एयरपोर्ट बिल्डिंग को भारी नुकसान की खबर है। कुवैत से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, जहां कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है। ये तस्वीरें भी आ गई हैं, देखिए जरा, पहुंचा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल, हर तरफ धूल, मिट्टी, गुब्बार, काला धुआं और आगजनी।
कुवैत से इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज, कितना नुकसान पहुंचा है ये भी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। देखिए जरा की तस्वीरें इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। इजराइल अमेरिका के हमले के बाद ईरान में कुछ इस तरह से जंग का ऐलान हुआ। जरा नजर डालिए, ये तस्वीरें गवाह दे रही है। ऐलान तो हो गया, लेकिन देखिए अबू धाबी से यह खबर है, क्योंकि अबू धाबी में ईरान ने अटैक किया और ईरान के हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। कैसे सड़कों पर लोग भागने लगे, ये देखिए। इसमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब शामिल हैं। ये देखिए लोग भागते हुए नजर आए सड़कों पर। ये तो अबू धाबी की तस्वीर हमने दिखाई। आगे बढ़ते हैं, बहरीन की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि बहरीन में भी ईरान ने जोरदार अटैक कर दिया। उसके बाद क्या तस्वीरें कहती हैं, ये देखिए। भीषण ब्लास्ट। ईरान का जोरदार अटैक है, बहरीन की वो तस्वीर। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब जॉर्डन की तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि जॉर्डन ने ईरानी मिसाइल को मार गिराया है। ईरान ने जॉर्डन पर हमला बोला था, वहां पर जो यूएस मिलिट्री बेस है, लेकिन वहां जॉर्डन ने ईरानी मिसाइल को मार गिराया। ये देखिए। और देखिए ईरान लगातार जवाबी पलटवार कर रहा है। ईरान के हमले के बाद दोहा में भी, दोहा की बिल्डिंग में जोरदार अटैक हुआ, धमाका हुआ, ये ब्लास्ट और ये तस्वीर। तो जॉर्डन में तो ईरानी मिसाइल को मार गिराया ही गया, लेकिन कुवैत में भी ईरानी मिसाइल को मार गिराया गया है। उसकी भी तस्वीरें आ गई हैं, आपके सामने रख देते हैं। तो ईरान ने कहां-कहां जवाबी यानी जोरदार पलटवार किया है, चलिए आपको बता देते हैं। देखिए ये हिस्सा देखिए, सऊदी अरब रियाद में अमेरिकी बेस पर अटैक किया है ईरान ने, जो ये पलटवार किया। जॉर्डन पहुंचिए, वहां पर मुआफाक साल्टी एयरबेस 2 मिसाइलों को मार गिराने का दावा हुआ। ये तो जॉर्डन की बात हो गई, सऊदी अरब की बात हो गई। और बहरीन लिए चलते हैं, 5वां अमेरिकी अड्डा अल जुफैर है, यहां पर अमेरिकी बेस है, यहां पर इस पर अटैक किया। आपको बता दें मिसाइल्स अटैक हुए ईरान की तरफ से, ये जवाबी पलटवार था। जॉर्डन में हमने आपको बताया यहां 2 मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी हुआ। बहरीन में 5वां अमेरिकी अड्डा है अल जुफैर, ये अमेरिकी बेस है, वहां पर भी अटैक किया ईरान ने। कुवैत में अगर बात कर ले तो अल सलेम वायु अड्डा है, वहां पर मुबारक अमेरिकी एयरबेस है और वहां पर मिसाइल्स गिरे हैं। जबकि आपको बता दें कतर में भी अल उदैद वायु अड्डा है, उस पर भी मिसाइल गिरे हैं, वहां अटैक हुआ। यूएई में अल धाफरा वायु अड्डा है, वहां पर भी ईरान ने टारगेट किया है, धावा बोला है। अबू धाबी में भी अमेरिकी बेस है, दुबई में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। इराक इरबिल में अमेरिकी बेस मौजूद है, वहां पर भी अटैक हुआ है। यह हर जगह आपको ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब इसको विस्तार से देखिए, ईरान का जो जोरदार जवाबी पलटवार है। जॉर्डन, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 देश इसकी जद में आ गए हैं। लेकिन ईरानी जनरल वो क्या कह रहे हैं इस अटैक को लेकर, हमले को लेकर, तनातनी को लेकर, जरा सुनते हैं ईरानी जनरल को, सुनिए। ट्रंप को ये बात बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि हमने अभी सिर्फ स्टॉक वाली मिसाइल फायर की है। अभी तो हम ऐसे हथियार का दम दिखाएंगे जिसको उन्होंने पहले देखा भी नहीं है। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है, नहीं थमेगा ईरान का जवाबी हमला। कमांडर खातम अल अबानिया का यह बयान सामने आ गया है। ईरान के सीनियर कमांडर का यह बयान है जो दर्शाता है कि नहीं थमेगा ईरान का जवाबी हमला। यह इस वक्त की अभी की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। कह रहे हैं साफ साफ, नहीं थमेगा ईरान का जवाबी हमला।
कमांडर हैं खातम अल अनबिया और ये सीनियर कमांडर हैं, उनका ये स्टेटमेंट दर्शाता है कि अभी तो युद्ध थमने के कोई आसार नहीं है। तो इधर इजराइल अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको दिखाते हैं वहां की जो तस्वीर आ रही है, देखिए। तो ईरान में तो सायरन थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन वहीं इजराइल में भी लगातार ईरानी हमलों को लेकर सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव की तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। अलर्ट तो जारी है, लेकिन सायरन का शोर भी थमने का नाम नहीं ले रहा। सुनिए। तो यरूशलेम में भी लगातार हमले के सायरन बज रहे हैं। ये यरूशलेम है, वहां पर हाई अलर्ट है। ईरान लगातार जोरदार जवाबी पलटवार कर रहा है। ऐसे में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, इजराइल ने यह इंश्योर किया है। सायरन सुनिए। अब इजराइल में सायरन तो बज रहा है और सायरन बजने के बाद लोग तुरंत शेल्टर होम में जा रहे हैं। इजरायली शहर हाइफा की तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, विस्तार से देखिए। इजराइल में बड़ी अच्छी बात यह है कि हर एक बिल्डिंग में आपको ये शेल्टर मिलेंगे। नीचे बेसमेंट में पूरी तैयारी रहती है कि कब अटैक हो जाए नहीं पता, इसलिए सुरक्षा और तैयारी पूरी। देखिए जरा, देखिए इजराइल के कई शहरों में अफरा तफरी के हालात हैं इस वक्त। अस्पताल ईरानी हमलों को लेकर हाई अलर्ट मोड पर है इस वक्त। देखिए ईरानी मिसाइल भी इजराइल में लगातार तबाही मचा रही हैं। ईरानी हमले में बर्बाद एक घर की तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं। हमले के बाद घर में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। विस्तार से देखिए। सिस्टम काफी मजबूत है। इजराइल अपनी इससे रक्षा करता है, लेकिन जब सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या में एक साथ रॉकेट बल्क में आते हैं तो उनमें से 2-4 तो गिरते ही हैं। और ये एक तरह से दर्शाता है कि नुकसान तो हर जगह होती है जहां पर जंग होती है। फ्रेश सायरन जो है यहाँ पर आ गया है। तेल अवीव में ये 5वीं बार है जो यहाँ पर सायरन आ रहा है। और तेल अवीव में यहाँ पर लोग तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, लेकिन मैं अब बॉम्ब शेल्टर की तरफ कदम कर रहा हूँ। आप पीछे देख सकते हैं पूरी तरीके से सायरन है। ये 5वीं बार है सुबह से कि सायरन आ रहा है। इसका मतलब है कि ईरान की तरफ से 5वीं बार मिसाइलें जो है दागी जा रही हैं। अभी हमने देखा कि कई मिसाइलें यहाँ पर आई इजराइल की तरफ और उनको इंटरसेप्ट किया गया। और कई ऐसे देशों में, मिडिल ईस्ट में, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो और कतर हो, वहां पर भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला। अब आपको जल्दी से हम बता देते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन लायन रोर शुरू किया और ईरान ने इसका मुंहतोड़ जवाबी पलटवार कर दिया। नजर डालिए, ईरान ने इसका जवाब तो दिया। ईरान के खिलाफ अमेरिका और ईरान का जोरदार हमला हुआ। सर्वोच्च नेता खामेनेई के दफ्तर को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। ईरान के राष्ट्रपति भवन को भी निशाना बनाया गया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमों की बारिश हो गई। ईरान के रक्षा मंत्रालय सहित कई विभागों पर हमला हुआ। तेहरान जो राजधानी है, तो तेहरान समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ अटैक किए गए। हमला सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास शुरू हुआ। इजराइल ने अभियान का नाम लियोनस रोअर रखा है और इसका मतलब है शेर की दहाड़। ईरान के एक स्कूल पर भी मिसाइल अटैक हुआ। इस हमले में करीब 50 से ज्यादा छात्राओं की मौत का दावा हो रहा है। ईरान पर हमले में करीब 45 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर इस हमले की पुष्टि की है और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के खिलाफ हमले की बात कही। इस हमले में ईरानी सेना के कई कमांडर के मारे जाने का दावा है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिकी ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है और इसका मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के हमले के बाद ईरान का भी पलटवार हुआ जोरदार। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। ईरान ने मिडिल ईस्ट पर
अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया। कतर, बहरीन और यूएई में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक किया ईरान ने। हमले के बाद इजराइल ईरान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। यूएई में दुबई में ईरान हमले के बाद एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। ईरान में तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए हैं, जोरदार भीषण हवाई हमलों के सायरन लगातार बज रहे हैं, जो कि आपको हम सुनवा भी रहे। लेकिन अब इजराइल के लीडर बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, आपको हम सुनवाते हैं, सीधा सुनिए। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में आतंकवादी शासन को खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया है। मैं अपने दोस्त ट्रंप को उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए धन्यवाद देता हूं। 47 सालों में खामेनेई का शासन इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाता आया है। इसने हमारा खून बहाया है, कई अमेरिकियों का नरसंहार किया है। ईरान के आतंकवादी नेतृत्व को परमाणु हथियार जमा करने नहीं दिया जाना चाहिए। ये पूरे मानवता के लिए खतरा बन जाएगा। ईरान में अब स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण मूल्यों को वापस लाने का समय आ गया है। आने वाले दिनों में लायंस रोर अभियान जारी रहेगा। मैं अपने देशवासियों से सभी निर्देशों का पालन करने की अपील करता हूं। हम सब मिलकर डटे रहेंगे। और अभी जब आपको ये खबर पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। जी हां, युद्ध के ताजा हालात पर यह वार्ता हुई है। ईरान हमले के बाद पहली बातचीत हुई है। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच दोनों की फोन पर बातचीत हुई है। युद्ध को लेकर अपडेट किया गया है। तो युद्ध के ताजा हालात पर यह बातचीत हुई है। इस वक्त दुनिया की निगाहें हैं। लेकिन ये इस वक्त जो बड़ी खबर है, पहली बार जो अब तक सुबह से अटैक हुआ है, नेतन्याहू ने ट्रंप से बातचीत की है। दोनों के बीच फोन पर यह वार्ता हुई है विस्तार से, और अटैक के बाद यह पहली बार बातचीत हुई है। ये वही तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए फोन पर, ये वही तस्वीर है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बेंजामिन नेतन्याहू ने बातचीत की है। ये तस्वीरें आ गई हैं। तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर उन्होंने अभी बात की है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। ये तस्वीर उसी की दिखा रहे हैं जब बातचीत हुई है दोनों के बीच युद्ध को लेकर। ब्रेकिंग, बड़ी खबर। और ईरान को तब और बड़ा झटका लगा जब ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी मारे गए। उन्हीं की तस्वीर दिखा रहे हैं, वही आर्मी चीफ। इजराइल ने ईरान के कई कमांडर्स के भी मारे जाने का दावा किया है। यह तस्वीर देखिए, ये कमांडर इन चीफ ईरान के अमीर हातमी मारे गए इस अटैक में। और इस हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बार खामनेई का खेल खत्म करके ही मानेंगे? यह बड़ा सवाल है। हम सेना में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझते हुए कहते हैं कि ईरान की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और इस्लामी गणराज्य की रक्षा अंतिम सांस तक करेंगे। दुश्मन का दावा कि वो अजय है, यह सिर्फ एक झूठ और बेकार प्रचार है। ये वही दुश्मन है जिसने वियतनाम और अफगानिस्तान में 20 साल तक युद्ध लड़ा और आखिरकार शर्मिंदगी के साथ बाहर निकल गया। इराक और दूसरे देशों में भी यही हाल हुआ। ये वही आर्मी चीफ थे जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, पहले संबोधित कर रहे थे, लेकिन बाद में खबर आई कि इनका खात्मा कर दिया गया है इस युद्ध में, इस मिसाइल अटैक में, और आर्मी चीफ ढेर हो गए। अब अगली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये खामेनेई की घर की तस्वीरें हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट इमेज हैं। अमेरिका ने पिछले साल ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमला किया था, लेकिन अभी की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, खामेनेई के घर पर यह अटैक हुआ। एरो मार्क देखिए, ये तस्वीर जो है सैटेलाइट इमेज। लेकिन सवाल यही था कि खामेनेई वहां पर थे या नहीं। और अब आपको बता दें, अमेरिका ने पिछले साल ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर अटैक किया था। बंकर बस्टर से हमला करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम खत्म करने का दावा किया था अमेरिका ने। अब सवाल है कि इस बार नंबर क्या खामेनेई का है? तो अब सवाल यह है कि इजराइल ने सीधे खामेनेई के दफ्तर को टारगेट किया, निशाना बनाया। अमेरिका इजराइल के निशाने पर सीधे खामेनेई है, तो ईरान के सर्वोच्च नेता सीधे सीधे दोनों के टारगेट पर हैं। ईरान अपने परमाणु हथियार की जिद से पीछे नहीं हट रहा है, और इस जिद के पीछे की मुख्य वजह अमेरिका खामेनेई को मानता है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को टारगेट किया। फोर्डो परमाणु ठिकाने पर बंकर बस्टर बम से हमला बोला गया था। अमेरिका के B-2 स्टील्थ फाइटर जेट्स बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। यहां पर अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो गया।
अब एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर धावा बोल दिया है, अटैक कर दिया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के निशाने पर सीधे खामनेई हैं, सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च नेता। नेतन्याहू ने तेहरान में सत्ता परिवर्तन की अपील की है। ईरान के लोगों से अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने को कहा गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने खामनेई को हत्यारा, आतंकवादी करार दिया है। इस शासन को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक हमले के वक्त खामनेई तेहरान में नहीं थे। हमले के बाद खामनेई को सुरक्षित जगह पर यानी सेफ हाउस शिफ्ट किया गया। जून में हमले के दौरान भी खामनेई को बंकर में छुपाया गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सीधे खामनेई को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि हथियार डाल दो नहीं तो मौत निश्चित है। ट्रंप ने ईरान के लोगों से सीधे अपील की कि जब हमारा काम पूरा हो जाए तो अपनी सरकार पर कब्जा कर लें। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी प्रेसिडेंट, वो क्या कह रहे हैं, अब उनको सुनवाते हैं, सुनिए। I built and rebuilt. ईरान की थल सेना, IRG सेना और पुलिस कर्मियों को मैं चेतावनी देता हूं कि आज रात आप अपने सारे हथियार डाल दें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी, लेकिन अगर हथियार नहीं डाला जाएगा तो आपको मौत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हथियार डाल दें, आपके साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा, साथ ही पूरी सुरक्षा दी जाएगी। Do not make this statement lightly. People of Iran. ईरान के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अब आप लोगों की आजादी करीब है। आप सब सुरक्षित रहें, अपने घर से बाहर ना निकले। बाहर बहुत खतरा है, हर जगह बम बरस रहे हैं। जब हमारा काम पूरा हो जाए तो अपनी सरकार पर कब्जा कर ले। कई वर्षों से आपने अमेरिका से मदद मांगी है, लेकिन आपको कभी नहीं मिली। कोई भी राष्ट्रपति वो करने को तैयार नहीं था जो मैं आज रात करने को तैयार हूँ। अब आपके पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो आपको वो दे रहा है जो आप चाहते हैं। तो देखते हैं आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। Now you have a president who is giving you what you want. और हमलों के बाद इजराइल और ईरान ने अपने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। सैटेलाइट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। इसके बाद इस तरह की इमेज सामने आई है। देखिए जरा, ये ईरान है, इस तरफ का पूरा हिस्सा, पूरा एयर स्पेस इस वक्त बंद है, आप देख सकते हैं, नजर आ रहे हैं। और थोड़ी उसके पहले वाली वो तस्वीर है जहां पर आप थोड़ी बहुत चहल पहल देख रहे हैं। स्पेस में आप एंट्री देख पा रहे हैं, हवाई जहाज उड़ते हुए, लेकिन इस तरफ सब खाली है। लेकिन ईरान के ऊपर आप देख पा रहे हैं सैटेलाइट इमेज के जरिए कि कोई भी हवाई उड़ान नजर आपको नहीं आएगी। सब कुछ अपनी यथास्थिति नीचे है। अब ईरानी मिसाइल हमलों से पूरे इजराइल में खलबली मची हुई है। इजरायली एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपके सामने रख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट है इजरायली, इजराइल का एयरपोर्ट, वहाँ अपना तफरी के हालात हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं, कई सारी फ्लाइट्स भी चूंकि कैंसिल हैं। आपको दिखाया कि एयर स्पेस बंद है, लोग काफ़ी इंतजार में और परेशान। मायूस होकर लोग बैठे हुए हैं, इंतजार करते हुए, समय काटते हुए। उनको कोई भी अभी स्थिति का अंदाजा नहीं है कि कब एयरफेयर शुरू होगा, कितना टाइम लगेगा, ये युद्ध कितना खींचेगा, क्या होगा आगे। इजराइल ने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है लियोनस रोअर, यानी इसका मतलब है शेर की दहाड़। अब आपको दिखाते हैं दोनों देशों की जरा ताकत पर नजर डालते हैं। चलिए अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं ईरान और इजराइल की कितनी ताकत है। दोनों की अगर हम तुलना करें, किसके पास कितनी मारक क्षमता मौजूद है, नजर डालिए। देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं इजराइल और ईरान, रैंक क्या है ये सब कुछ आपको हम बताएंगे। देखिए अब रैंक की जहां तक बात है तो ईरान का रैंक है 15, 16 सक्रिय सैनिक कितने हैं, ये रैंकिंग की अगर बात करें तो इजराइल पहले है क्योंकि अत्याधुनिक है, 15 उनका रैंक है, 16 रैंकिंग किसकी है, ईरान की। और सक्रिय सैनिकों की संख्या अगर हम बात कर लें 1.7 लाख सैनिक हैं इजराइल के पास, जबकि 6.1 लाख रिजर्व सैनिक हैं किसके पास, ईरान के पास। और 4.65 लाख जो इजराइल के पास रिजर्व सैनिकों की हम बात कर रहे हैं अभी, और 3.5 लाख तकरीबन ईरान के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या है। अगर हम सैनिकों की फील्ड की अगर बात करें तो इस मामले में तो काफी आगे हैं ईरान, लेकिन अभी आगे गौर करिएगा। बख्तरबंद गाड़ियां 36,000 मौजूद हैं इजराइल के पास, जबकि 66,000 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं ईरान के पास।
टैंक्स की स्थिति कितनी है? 1300 टैंक्स मौजूद हैं इजराइल के पास और 1700 टैंक्स मौजूद हैं ईरान के पास। एयरक्राफ्ट, यहां पर आएगा हवाई मारक क्षमता। एयरक्राफ्ट में इजराइल काफी आगे है, 611 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं फाइटर जेट्स इजराइल के पास, जबकि 551 मौजूदगी है ईरान के पास। फाइटर जेट्स 240 मौजूद हैं इजराइल के पास, 188 फाइटर जेट्स मौजूद हैं ईरान के पास। अटैक हेलीकॉप्टर्स कितने हैं? 48 हैं इजराइल के पास, जबकि 13 हैं ईरान के पास। पनडुब्बी किसके पास कितनी है? 5 पनडुब्बी है इजराइल के पास, जबकि ईरान के पास 25 पनडुब्बियों की उपस्थिति है, मौजूदगी है। अब इजराइल हो या फिर ईरान, दोनों तरफ से जबरदस्त अटैक किए जा रहे हैं और ऐसे में आपको यह जरूर जानना चाहिए कि इजराइल और ईरान की सैन्य ताकत कितनी है, कौन किस पर भारी है। इस बीच आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक पर्सन यानी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। उनकी बाइट आ रही है, सुनिए। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के आतंकी शासन को खत्म करने के लक्ष्य से एक बेहद खास, संयुक्त और व्यापक अभियान शुरू किया है। ईरान सिर्फ इजराइल और मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस समय इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ आईडीएफ कमांडर्स के साथ बैठक कर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। हमारी सेना पूरी तरह तैनात है और सीमाओं पर एक्टिव है। आईडीएफ के प्रवक्ता को भी आप सुन रहे थे, लेकिन बड़ी खबर आ गई है। ईरान के स्कूल में हुए हमले पर इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में अब तक 85 छात्राओं के मारे जाने की खबर है, छात्राओं की। जी हां, हमले में भारी संख्या में छात्राएं घायल भी बताई जा रही हैं और आंकड़ा मौत का जो है और घायलों की तादाद वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि और समय इंतजार करिए, ये जानकारी धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। कैजुअल्टीज ये बढ़ती जा रही हैं, डेथ टोल्स, क्योंकि शुरुआत में आपको याद होगा 24 छात्राओं के मारे जाने की खबर आई, फिर संख्या बढ़कर 50 से ऊपर पहुंची है और अब जो जानकारी आ रही है वो और चिंताजनक, 85 छात्राओं के मारे जाने की खबर आ गई है। ये अटैक देखिए, वही ये स्कूल है ईरान स्थित, यहां पर इजराइल ने अटैक किया और यहां पर 85 छात्राएं मारी गई हैं, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है। ये चीख पुकार मातम आपने सुना। उधर दूसरी तरफ ईरान के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स F-15 भी नजर आया। ईरान की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा फाइटर जेट, इसकी गरज से आसमान ईरान का है, लेकिन फाइटर जेट्स F-15 ईरान का नहीं, अमेरिकी फाइटर जेट है ये। तो ईरान और इजराइल में चल रही हमलों के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना हाई अलर्ट मोड पर है। अमेरिका ने पहले ही ईरान के आसपास घेराबंदी मजबूत कर दी थी। ये तस्वीर अब जरा मैप आपको हम दिखाने जा रहे हैं, इसके जरिए आप समझिए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की घेराबंदी किस तरह से है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने जो घेराबंदी की है, इस पर नजर डालिए। एक तरफ मिस्र, सीरिया, इराक, यहां पर है ईरान, ड्रोन कैरियर, शहीद बागेरी, ओमान, यमन, सऊदी अरब और उधर है ईरान। यानी चारों तरफ से, इस तरफ से घेरने की पूरी कोशिश है अमेरिका की तरफ से। देखिए, फिर से नजर डाल लीजिए, सीरिया आपको दिख रहा है, मिस्र दिख रहा है, ओमान दिख रहा है, यमन है, इराक और ईरान तो घिरा ही हुआ है। ड्रोन कैरियर शाहिद बागेरी भी है। सऊदी अरब अल खर्ज एयरबेस जो है, वहां पर अमेरिकी फौज, वहां एयरबेस आप समझिए, वहां से पूरी तैयारी है। E-11 एयरक्राफ्ट वहां पर तैनात है। अल उदी एयरबेस, नया एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पर। खलीफा बिन सलमान पोर्ट है। डेस्ट्रॉयर्स और कॉम्बैट जहाज की मौजूदगी है। USS मैकफॉल वॉरशिप है, उसकी तैनाती है। जॉर्डन में उधर क्या है, मुआफक एयरबेस, फाइटर जेट्स वहां पर तैनात हैं। इजराइल में USS डेल्बर्ट डी ब्लैक तैनात, मिसाइल डेस्ट्रॉयर है। ओमान में टुक्म एयरबेस है, एयरक्राफ्ट स्टेशन है। USS अब्राहम लिंकन की मौजूदगी, ये इंपॉर्टेंट है और इजराइल ने भी पूरी अपनी शक्ति लगाई हुई है। लेकिन साथ साथ ये भी आपको बता दें कि कहां कितने सैनिकों की तैनाती की गई है। कतर में तैनाती कितनी है, 10,000 अमेरिकी सैनिक वहां पर मौजूद हैं। कुवैत में कितनी तैनाती है, 13,000 अमेरिकी सैनिक वहां पर मौजूद हैं। जॉर्डन में तैनाती है 3800 अमेरिकी सैनिकों की। UAE में तैनाती है 3500 अमेरिकी सैनिकों की। इराक में तैनाती है 2500 अमेरिकी सैनिकों की। सीरिया में तैनाती है 2000 अमेरिकी सैनिकों की। यह है तैयारी, यह है घेरेबंदी। इस बीच ईरान के जो क्राउन प्रिंस हैं
वो क्या कह रहे हैं, क्या चिंता प्रकट कर रहे हैं, जरा सुनते हैं, उनको सुनाइए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के लोगों की मदद कर अपना वादा पूरा किया है, लेकिन इस सहायता के बावजूद आखिरी जीत हमारे हाथों में है। हम ईरान के लोग ही इस आखिरी युद्ध को पूरा करेंगे। सड़कों पर लौटने का समय नजदीक है। ईरान की जनता जिस तरह इस क्रूर शासन के खिलाफ 2 महीने से डटी हुई है, अब मैं आप सभी से सावधानी बरतने की अपील करता हूँ। हम अंतिम विजय के बेहद करीब हैं। मैं जल्द से जल्द आपके साथ होना चाहता हूँ ताकि हम मिलकर दोबारा ईरान का पूर्ण निर्माण कर सके। اما با وجود رسیدن این کمک और चलिए अब आपको जरा हम बता देते हैं ये पूरी दुनिया की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कौन किसके साथ खड़ा है, ये सब कुछ जानने का वक्त है। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ इजराइल है। अब जरा शुरुआत करते हैं। एक तरफ ईरान के साथ ओमान है, चीन है, रूस है, अभी खुलकर नहीं आए हैं। दूसरी तरफ है इजराइल, और इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया खड़ा है और ब्रिटेन खड़ा हुआ है। ये सबकी एक दूसरे की ताकत है, लेकिन रूस ने इंटरफेयर किया है अभी पूरी तरह से, जिसके कहते हैं खुलकर एंट्री नहीं हुई है। चीन की भी एंट्री नहीं हुई है, सब अभी तटस्थ बने हुए देख रहे हैं। ओमान की भी अभी भूमिका अभी इंतजार करना होगा, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन आईडीएफ की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, खासकर महिला कमांडर, वो क्या कह रही हैं, सुनते हैं। जो लोग सोचते हैं कि हमारे सब्र की कोई लिमिट है, उन्हें अब तेहरान के दिल में शेर की दहाड़ सुननी चाहिए। चेतावनी का समय खत्म हो गया है और हिसाब किताब का समय शुरू हो गया है। किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए लगातार हमला, जिसमें हमारी सेना सबसे ज्यादा अलर्ट पर है। तो आपको हमने सुनवा दिया कि आईडीएफ की जो महिला कमांडर हैं, उन्होंने कुछ क्या कहा है। कुछ और आपको जानकारी और तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए देखना और समझनी है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका भी इस मैदान में तो उतर ही चुका है। अमेरिकी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का हमला इस्तेमाल हुआ है हमले में। नजर डालिए, ये देखिए तस्वीर। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल बहुत खतरनाक माना जाता है, यही उड़ान भरता हुआ देखिए। इसकी गति को और इसके व्यू को पकड़ना आसान नहीं होता है। वहीं देखिए ईरान भी लगातार अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है। ये बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी ठिकानों और इजरायली शहरों में अटैक के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको बता देते हैं जंग में किस किस हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पहले ये तस्वीर में अब जरा समझिए, क्योंकि आपको बताते हैं इजराइल ईरान के हमलों में किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। आप भी उत्सुक होंगे। देखिए टॉम हॉक क्रूज मिसाइल 1000 मील से ज्यादा की रेंज इसकी होती है। मारक क्षमता, रडार, एयर डिफेंस से भेद पाना बहुत मुश्किल है। सटीक निशाने के लिए यह जानी जाती है। और F-35I अदीर स्टेल्थ फाइटर जेट बिना रिफ्यूलिंग ईरान पर हमला करके लौट सकता है। ये रडार पर बहुत छोटा दिखता है, पकड़ना बहुत पेचीदा, बहुत मुश्किल होता है। सटीक और तेज हमले के लिए यह जाना जाता है। मारक क्षमता बहुत ही सटीक और ज्यादा है। ईरान सीरिया, गाजा में कई मिशन करके ये लौट चुका है, यानी अंजाम दे चुका है। F-15I रैन स्ट्राइक फाइटर जेट भारी हथियार दूर तक ले जाने की क्षमता, 11,000 किलो तक का बारूद ले जा सकता अपने साथ। एक साथ कई ठिकानों को यह टारगेट कर सकता है। एयर लॉन्च स्टैंड क्रूज मिसाइल फाइटर जेट से लॉन्च की जाने वाली घातक मिसाइल है। ये टारगेट का लोकेशन चेंज होने पर भी सटीक हमला कर देती है। दिन रात खराब मौसम में भी सटीक ही काम करती है, कुछ भी हो। स्पाइक गाइडेड बम है, इजराइल का बनाया हुआ यह बहुत विध्वंसक बम माना जाता है, दुनिया जानती है। फाइटर जेट से गिराने के बाद लोकेशन मैच करता है, लोकेशन की तस्वीर मैच हो तभी यह हमला करता है और सटीक करता है। जीपीएस जाम होने पर भी सटीक काम करने को यह सक्षम है, अंजाम दे देता है। और जेट डैम बम जो है, इजराइल फोर्स ने कई बार इसका इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। सटीक होता है, टारगेट से 10 मीटर की दूरी तक गिरता है। बंकर या मजबूत इमारत को बहुत नुकसान यह पहुंचा देता है। हेरोन ड्रोन इजराइल के बेहद खास मॉनिटरिंग हथियार है। हेरोन ड्रोन यह हवा में लंबे समय तक उड़कर मॉनिटर करता है, दुश्मनों के ठिकानों की तस्वीरें, वीडियो लेता है और रिमोट के जरिए आसानी से कंट्रोल हो सकता है। अब ईरान ने क्या किया है, क्या क्या हथियार इस्तेमाल किए हैं। शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरान की सबसे पुरानी और मुख्य बैलिस्टिक मिसाइल्स में से एक है। ये ईरान से सीधे इजराइल को टारगेट कर सकती है।
1 टन से ज्यादा वॉरहेड यानी बारूद ले जाने की इसमें क्षमता है। एमाद बैलिस्टिक मिसाइल है, एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर माना जाता है। 1800 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है यानी रेंज है। एक और मिसाइल है गदर मिसाइल, इसका नाम है गदर। गदर मिसाइल, ईरान के पास सैकड़ों गदर मिसाइलें मौजूद हैं और इसकी मारक क्षमता भी 2000 किलोमीटर के आसपास है। ईरान ने इसे 2005-2007 के आसपास तैयार किया यानी बनाया और अब उनके मुख्य हथियारों में से एक है। और अब इस हमले को लेकर, इस युद्ध को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, जरा अब उनको सुनवाते हैं, सुनिए। मैं अनुमान लगाता हूं कि अगर मुद्दा यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का है रेजिम चेंज, यानी कि वहां की सरकार को हटाना, तो इस तरह से सिर्फ मिसाइल मारकर, रॉकेटरी मारकर इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं कि जो सदर ट्रंप इस वक्त कोशिश कर रहे हैं वो है एक सिग्नलिंग करना और उनको बताना ईरान को कि अगर वो डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं माने और अपनी उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिसाइल्स को कम नहीं किया, अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को रोका नहीं और अत्याचार जो हो रहा है उनका अपनी जनता पर, उनकी पब्लिक पर, वो नहीं रुका, तो इसके अलावा और कुछ भी बहुत हो सकता है। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, भारत में खामनेई के प्रतिनिधि का बयान सामने आया है। खामनेई बिल्कुल ठीक हैं, अमेरिका या किसी और से नहीं डरते हैं। खामनेई ये कहना है, वो अपनी गरिमा और बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ते रहेंगे, हम इस युद्ध में जीत हासिल करेंगे। ये कहना है भारत में खामनेई के प्रतिनिधि का। इनका बयान आया है, फिर से आपको दोहरा दें, ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। भारत में खामनेई के प्रतिनिधि का बयान, खामनेई बिल्कुल ठीक हैं, अमेरिका या किसी और से हम नहीं डरते। Leaders is in the good health and never has a fear of America or any other people, although he's an old man, but doesn't have any fear from them and he will continue. और अब बात रूस की एंट्री की करेंगे, क्योंकि इजराइल और ईरान में जंग चल रही है तो पुतिन खुलकर ईरान के समर्थन में है। चीन और ईरान की एक बड़ी डील होने वाली है, तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है? बड़ा सवाल है। कुछ डिटेल्स आपके बीच हम रखेंगे और जरा आप समझ लीजिए इसके पूरे मायने, क्योंकि दुनिया के जो देश हैं क्या कह रहे हैं इस जंग पर, आपको दिखाएंगे। अब आपको हम बता देते हैं कि ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमलों को लेकर दुनिया के जो बाकी मुल्क हैं वो क्या कह रहे हैं। जैसे रूस, पुतिन क्या कह रहे हैं, ईरान पर यह हमला गैर जिम्मेदाराना है, यह कार्रवाई गलत है, राजनीतिक कूटनीतिक समाधान की राह पर लौटें। ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी एल्बनीज़ कह रहे हैं कि हम अमेरिका का समर्थन करते हैं ताकि ईरान परमाणु ना बना सके। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सहयोगियों की रक्षा के लिए आवश्यक संसाधन तैनात करेंगे, मौजूदा तनाव सभी के लिए खतरनाक है, इसे रोकना होगा। ब्रिटेन के स्टारमर कह रहे हैं ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, हम अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ओमान क्या कह रहा है, ओमान के जो सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक वो कह रहे हैं यह जंग अमेरिका की नहीं, उसे इसमें उलझना नहीं चाहिए, इससे ना अमेरिकी हित सुरक्षित होंगे और ना वैश्विक शांति। स्पेन, हिंसा केवल अराजकता लाती है, तनाव कम करना होगा, हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान की मांग करते हैं। नॉर्वे कह रहा है कि इजराइल के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं, संकट का समाधान कूटनीतिक तरीके से होना चाहिए। मलेशिया कह रहा है ये हमले मिडिल ईस्ट को संकट की कगार पर ला रहे हैं, अमेरिका और ईरान को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। लेबनान कह रहा है किसी को भी हमें ऐसे एडवेंचर में घसीटने की इजाजत नहीं देंगे जिससे हमारी सुरक्षा और एकता को खतरा हो। कतर क्या कह रहा है, कतर कह रहा है ईरान ने हम पर हमला किया, हमें भी जवाब देने का अधिकार है। जबकि यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान कह रहे हैं हम पर ईरानी हमला हुआ लेकिन डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल रोक ली, ये देश के सुरक्षा कानून का उल्लंघन है, हमें जवाब देने का अधिकार है। जबकि यूरोपीय संघ क्या कह रहा है, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स परमाणु कार्यक्रम वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरनाक है, खतरा है। लेकिन भारतीय सियासतदान इस युद्ध को लेकर क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है, यह भी सुनना चाहिए, सुनिए सर। वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना
इजराइल का दौरा खत्म करके देश को वापस आते। भारत के संबंध कैसे हैं ये आप अलग सवाल है। मोदी जी के संबंध इजराइल से अच्छे हैं। पेगासस वो इजराइल से लेते हैं, हम सबके फोनों में डालते हैं। मेडल वो इजराइल से लेते हैं, ऐसा मेडल जो इजराइल में पहले कभी था नहीं, मोदी जी के लिए खास तौर पे बनाया गया, और बड़े इखलाते इतराते हुए लौट कर आते हैं। भारत के हितों के साथ जो समझौता करके आते हैं मोदी जी, उसका खामियाजा आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईरान हमारा एक बहुत पुराना साथी है। वो जो कहते हैं ना कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ये न्यू नॉर्मल है, ये नए तरह की चीज है कि लड़ाई भी चलती रहेगी, देश भी चलता रहेगा, समाज भी चलता रहेगा, लेकिन दुनिया में वॉर नहीं होना चाहिए। हम समाजवादी लोग हमेशा वॉर के खिलाफ रहे हैं। हमारा जो ये जो यात्रा थी, इसकी टाइमिंग मैं समझता सही नहीं थी, और जो भाषण भी दिया उससे कहीं ना कहीं भारत की जो एक निष्पक्षता है उस पर संदेह हो जाता है। हमने हमेशा एक टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया है हमेशा, और इस बार हम लोग जाके अपनी विदेश नीति को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। विदेश नीति बनती है राष्ट्र हितों को देखकर, वो व्यक्तिगत छवि बनाने का माध्यम नहीं होता। दुर्भाग्यवश पिछले 11 साल से जो विदेश नीति बनी है वो व्यक्ति आधारित हो गई है। बहुत गंभीरता पूर्वक नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मुझको लग रहा है पूरा का पूरा पैराडाइम एक अनसर्टेनिटी झेल रहा है, और मैं इंतजार करूंगा कि हमारे एमईए का हमारे कंसर्न अथॉरिटीज का इस पर क्या पोजीशन आता है। लेकिन ये अभी के हालात में मुझको लगता है कि इजराइल इसको प्रीएम्प्टिव कहता है। आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दुबई से। दुबई के होटल पर ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक की पहली तस्वीर हमारे पास आ चुकी है, एनडीटीवी पर मौजूद है। दुबई में होटल के पास ये ड्रोन गिरा है। ड्रोन के गिरते ही भीषण धमाका हुआ। ईरान का दुबई पर ये ड्रोन अटैक है। तस्वीर जो आई है ये देखिए। फर्स्ट ऑन एनडीटीवी एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है दुबई से, जहां दुबई में मौजूद होटल पर ये ड्रोन अटैक, जोरदार भीषण धमाका। सुनवाएंगे। Oh my God. Oh my God. और किसी ने इसको रिकॉर्ड किया है और आप सुन सकते हैं। ओ माय गॉड, ये देखिए ऊंची ऊंची इमारतें दुबई, और वहां होटल के पास ये ड्रोन अटैक, जोरदार भीषण होता है धमाका, ब्लास्ट। एक बार फिर से सुनिए। Oh my God. Oh my God. Oh my God. वहीं जंग के इस हालात में मिडिल ईस्ट में भारतीय भी फंसे हुए हैं। ईरान में भी फंसे भारतीय निकालने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों को सुनाएं। and clear evacuation as soon as possible. हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारी भारत सरकार से, जो हमारे वहाँ इंडियन सिटीजन है ईरान में, उन्हें जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए। अब जल्दी से अगली तस्वीर। इजराइल में फंसे भारतीय, जहां हमले के बाद इजराइल में भारतीयों ने शेल्टर हाउस में शरण ली है। वहां से लगातार सायरन की आवाजें आ रही हैं, सुनिए। ईरान और इजराइल में हमले भीषण जंग में तब्दील हो रहे हैं, और यह जंग भारत समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रही है। अगर हालात बिगड़े तो कच्चे तेल पर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। इस युद्ध से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, ऐसे आसार हैं। क्योंकि देखिए, साथ ही कच्चे तेल की सप्लाई चेन में भी बाधा खड़ी हो सकती है, क्योंकि दुनिया का 40% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हार्म्यूज जलमार्ग से आता है। अगर इसे ईरान बंद कर देता है तो दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल और 50% गैस आयात करता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज रोका तो भारत की तेल सप्लाई बाधित होगी, और इससे देश में पेट्रोल डीजल महंगा होगा और महंगाई में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा इस युद्ध से ईरान इजराइल में रह रहे भारतीयों को खतरा भी होगा। ईरान में 10,765 जबकि इजराइल में 18,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। इजराइल में ज्यादातर भारतीय बुजुर्गों की देखभाल का काम करते हैं। साथ ही भारतीय हीरे के कारोबार, IT नौकरी और पढ़ाई के लिए इजराइल में मौजूद हैं।
जंग मिडिल ईस्ट के कई देशों तक फैल चुका है और जहां भारतीय अच्छी खासी तादाद में रहते हैं, लाखों की संख्या में। इजराइल, ईरान दोनों जगह भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इजराइल में भारतीयों को सतर्क रहने यानी अलर्ट रहने, गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है, जबकि ईरान में रह रहे भारतीयों को तुरंत देश छोड़ने के निर्देश जारी किए जा चुका है। लेकिन ईरान में जो भारतीय फंसे हुए हैं, चाहे छात्र हो या आम नागरिक, वो क्या कह रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, सुनिए उनकी जुबानी। Hi everyone, I'm an Indian student and currently I'm in Tehran. The situation here feels really worst and uncertain. We really don't know what's gonna happen next. We're really grateful that the Government of India and the Ministry of External Affairs are in discussion for our safety. But in the times like these, speed matters a lot. I'm not even able to say these things because the airstrikes are happening and it's getting really worse for us. We just request for the quicker and clear evacuation as soon as possible. Please do not wait for the situation to get worse. Just help us. Just get us out of here as soon as possible. काफी ज्यादा एंजाइटी और पैनिक क्रिएट हुआ है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच। हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारी भारत सरकार से, जो हमारे वहाँ इंडियन सिटीजन है ईरान में, उन्हें जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए। और कुछ स्टूडेंट्स के वहाँ पासपोर्ट उन्होंने सबमिट किए थे रेजिडेंसी को एक्सटेंड करवाने के लिए, उन्हें जो ये पासपोर्ट है वो जल्द से जल्द रिटर्न किया जाए। अभी इवॉल्विंग सिचुएशन है, अभी प्रिवेलिंग सिचुएशन है ईरान में, उसमें भी हमारे बच्चों के लिए जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी के पूरे इकदाम उठाए जाएंगे। देखिए, थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया था कि ईरान के स्कूल पर हमला हुआ और इसमें बड़ी खबर यह है कि हमले में 85 छात्राओं के मारे जाने की खबर है। इस हमले में भारी संख्या में छात्राएं घायल भी हुई हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर आई है, जरा देखिए अफरा तफरी का माहौल। ये देखिए, थोड़ा शोर भी सुनाइए क्योंकि वहां पर चीख पुकार मातम ही सिर्फ सुनाई दे रही है। ये दो तस्वीरें, एक तरफ 85 छात्राओं की मौत हो गई, दूसरी तरफ खून से सना छात्राओं का ये बैग जंग की चपेट में 85 छात्राओं की भी मौत हो गई। देखिए, जब दो देशों के बीच जंग होती है, वहां के जो लीडर्स तय करते हैं अपने रिश्तों के आधार पर जंग, लेकिन इसमें खामियाजा कौन उठाता है, कौन भुगतता है? आम नागरिक, सिविलियंस, छात्र, निर्दोष, और वही कुछ कहानी यहां भी नजर आती है। चलिए, तो बात हो गई भीषण जंग की, इजराइल और ईरान की। हर एक बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी? जरा पढ़िए। 3 तरफ से पाक को ठोका। क्या है ये पूरी खबर? कैसे? इनसाइड स्टोरी अब समझिए। ये बात हम कर रहे हैं बड़ी जंग की, जिसमें 3 तरफ से पाकिस्तान को ठोका जा रहा है लगातार। ये तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, अब जरा समझिए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ आग उगल दी है, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, सुनवाएंगे, सुनिए जरा, देखिए। हम इस खबर को पहुंचाएंगे विस्तार से, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज दुबई से, क्योंकि दुबई की अभी की बड़ी खबर यह है कि दुबई में लगातार धमाके हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपको हमने धमाके की आवाज सुनवाई थी और फिर से ब्लास्ट की खबर आई है। दुबई में हुए हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाम जुमेराह इलाके में यह ब्लास्ट हुआ है। दुबई में पूरे दिन गूंजते रहे धमाके। यूएई में तीसरे दौर का मिसाइल भी हमला हुआ और तीसरे राउंड का हमला इंटरसेप्ट हुआ है। लेकिन ये दुबई की तस्वीर, ऊंची ऊंची इमारतें, ये देखिए ब्लास्ट। दुबई से अभी की बहुत बड़ी खबर, दुबई में लगातार धमाके जारी हैं। दुबई में हुए हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। जो अटैक आप देख रहे हैं, ये इलाका जहां हुआ है, ये है पाम जुमेराह और यहां ये धमाका हुआ। और दुबई में पूरे दिन गूंजते रहे हैं धमाके, ब्लास्ट होते रहे बीच बीच में। यूएई में तीसरे दौर का मिसाइल हमला भी हो गया, उधर तीसरे राउंड का हमला इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन ये तस्वीर दुबई की, दुबई में आलीशान ये इमारत, होटल्स आसपास मौजूद हैं। ये कमर्शियल पूरा इलाका पाम जुमेराह, और वहां पर ये होटल के बगल में ड्रोन आकर ब्लास्ट करता है, जोरदार विस्फोट होता है। इसमें कई लोग जख्मी हो गए। इसका दायरा देखिए ना, ये दायरा देखिए, काफी बड़े हिस्से में ये अटैक।
चलिए अपडेट आपको करते रहेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान अफगानिस्तान जिसकी बात हम कर रहे थे कि 3 तरफ से ठोके जा रहे हैं पाकिस्तानी, कैसे, लेकिन उधर पाकिस्तानी सेना भी पलटवार कर रही है। तस्वीरें पाकिस्तान की बौजौर से गोली दागने की है, सुनिए जरा, देखिए। दुनिया के कई मुहाने पर जंग चल रही है इस वक्त। एक तरफ उधर रूस यूक्रेन, इधर फिर से इजराइल और ईरान में शुरू हो गया, और इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग। तो अफगानिस्तान के रॉकेट लॉन्चर से हो रहे हमले पाकिस्तान सेना पर कयामत बनकर टूट रहे हैं। वैसी कुछ तस्वीरें आई हैं, दिखाएंगे। और बदले में पाकिस्तान भी अफगान फोर्सेस की पोस्ट तबाह करने में लगातार जुटा हुआ है, डटा हुआ है। ये देखिए तस्वीर। और अब अगली तस्वीर। कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का फाइटर जेट गिरा दिया गया है, और अब अफगानिस्तान फौज ने भी कंफर्म कर दिया है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये एआई वीडियो है। कुछ इसी तरह पाकिस्तान का जेट गिरा होगा, देखिए। एआई जनरेटेड वीडियो। अब जरा देखिए, पाकिस्तान के विमान गिराने की खुशी में जलालाबाद में हजारों अफगानी सड़कों पर निकल आए और पाकिस्तानी जेट को मार गिराने का जश्न मना रहे हैं। सुनिए, देखिए। जलालाबाद ही नहीं, अफगानिस्तान के नंगरहार में भी लोग सड़कों पर उतर गए, खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराने की खुशी में। देखिए, पाकिस्तान का जेट गिराने की खूब चर्चाएं हो रही हैं। अब जरा क्या रिएक्शंस हैं, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये भी तो सुनवाते हैं, सुनिए। 2 जेट मार गिराए हैं, एकदम कबाड़ वाले जेट जो कबाड़ खाने से उड़ के अफगानिस्तान की सरजमीन पे घुसने की कोशिश की, जिसे अफगानिस्तान के फोर्सेस ने नीचे गिरा दिया है। और पायलट अभी हमारे पास है पाकिस्तानियों। तालिबान ने उस पायलट को कहां छुपा दिया है हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता कि उस पायलट की पतलून और उस पायलट के कपड़े उसी टाइम उतार दिए गए थे। यह कंफर्म नहीं हो रहा कि ये कपड़े उस पायलट ने खुद उतारे या वहां पर अवाम ने उसके कपड़े उतारे, लेकिन बाद में उसे नॉर्मल शलवार कमीज पहनाई गई। जश्न का माहौल है। पाकिस्तान का पायलट यजीद पकड़ा गया है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की अवाम में बेहद खुशी है। देखिए, इसलिए कहते हैं सब अभिनंदन नहीं होते। देखिए, अफगानी लोग अपने सुरक्षा बलों का पूरे मजबूती से समर्थन कर रहे हैं, सड़कों पर आकर उनके साथ डट गए हैं, खड़े हो गए हैं, जश्न मना रहे हैं। ये देखिए। और एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई। इजराइल के तेल अवीव पर हमले जारी हो गए। कई ड्रोन से हमले कर दिए गए हैं ईरान की तरफ से। एयर डिफेंस ने मार गिराए, हालांकि कई ड्रोन हमले का वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए, कई ड्रोन से अटैक ये जारी। ईरान ने लगातार ये सिलसिला जारी रखा है, बीच बीच में तुरंत अटैक किया जा रहा है। एयर डिफेंस ने लेकिन मार गिराए हैं कई मिसाइल्स को, कई ड्रोन्स को। हमले का वीडियो भी सामने आया हुआ है। ये तस्वीर सुनवाइए। अगर ये आपको आसमान में नजर आ रहे होंगे, देखिए ये आयरन डोम है, सीधा हवा में ही नष्ट इन मिसाइल्स को और ड्रोन्स को। इसीलिए कहा जाता है आयरन डोम सबसे दुनिया में मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल की ये ताकत है, ये खूबी है। अब वापस आते हैं, बड़ी खबर आएगी तो फिर उस खबर को आप सभी तक पहुंचाएंगे। लेकिन इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग में बीएलए के भी कूदने की खबर है। जी हां, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए, रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को टारगेट किया, निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि एक पुल पर लगाए गए आईईडी में विस्फोट कर दिया गया। ये देखिए, ये वायरल वीडियो है।
पाकिस्तान को 1-2 नहीं 3 तरफ से ठोका जा रहा है। एक तरफ अफगानी फोर्स ने ड्यूरेंट लाइन पर लाशें बिछा दी, दूसरी ओर बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना की बस को उड़ा दिया और तीसरे मोर्चे पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने धावा बोल दिया। एक साथ पाकिस्तान के कई शहरों में पुलिस थानों और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 7 पुलिस वाले भी शामिल हैं। यानी मुनीर सेना हर तरफ से पिट रही है। तो ये पूरा मामला क्या है जो जट गिरा? तालिबान से भिड़ना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है। जी हां, आप देखिए जरा, तालिबान से भिड़ना अब क्योंकि पाकिस्तान को मैदान जंग में बहुत बड़ा झटका लग रहा है और लगातार अफगानिस्तान ने जो दावा कर दिया है उससे पाकिस्तान की पोल यानी कलई खुल गई है। दावा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का फाइटर जेट मार गिराया, ढेर कर दिया। अफगानिस्तान के जलालाबाद में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को ढेर कर दिया गया। फिर अफगानियों ने पाकिस्तानी पायलट को जिंदा पकड़ लिया। यह दावा है। स्थानीय अफगानी लोगों ने बताया कि विमान गिरने से पहले पाकिस्तानी पायलट पैराशूट की मदद से बाहर कूद गया था। कहा जा रहा कि पायलट ही पाकिस्तान के उस विमान को उड़ा रहा था, जिसे अफगानी फोर्स ने आसमान में जवाबी हमले में मार गिराया। ये दावे अफगानी सुरक्षा बलों के बयान पर मीडिया रिपोर्ट्स में हुए हैं। जलालाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने पाकिस्तानी विमान गिराने का दावा किया है। साथ ही अफगानी फोर्सेस के प्रवक्ता ने भी यही बात दोहराई है। टोलो न्यूज के मुताबिक खालिद बिन वलीद कोर के प्रवक्ता ने कहा है कि गिराए गए पाकिस्तानी विमान को जिंदा पायलट हमारे कब्जे में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी विमान ने गिरने से पहले हमले किए थे। जलालाबाद के सिटी एयरपोर्ट के पास इसने 2 धमाके किए थे। उसके बाद ही अफगानी फोर्सेस ने विमान को मार गिराया। हालांकि अब तक यह पुष्टि नहीं हुई कि विमान F-16 था या J-17। F-16 जेट अमेरिकन है और J-17 विमान चीन से पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान तो यह कबूल नहीं कर रहा है कि उसका विमान मार गिराया जा चुका है। कबूल करे भी कैसे? देखिए, अब सुनिए यूट्यूबर पठाई और अफगान फोर्स क्या कह रही है इसको लेकर। पठान जो है यूट्यूबर, शहबाज शरीफ के घर से बिल्कुल 100 किलोमीटर के आसपास जो है अफगानिस्तान तालिबान ने वहां पर स्ट्राइक किया है। शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ के घर से सिर्फ 100 मीटर दूर जो है वहां पर भी जाकर गोले लगे हैं। आप यकीन करें, पाकिस्तान इस टाइम इतना घबराया हुआ है और ये फाइट अभी रुकी नहीं है। हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया है और उसके पायलट को जिंदा पकड़ लिया है। अब वो हमारे कब्जे में है। तो ये अटैक आपको हम दिखा रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं और कुछ जानकारी भी आ रही है। उसको भी आप सभी दर्शकों के सामने हम रख देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ने तो थर्रा कर रख दिया है, डरा कर रख दिया है। गोलियों की बारिश शुरू कर दी गई है। कुछ तस्वीर आ रही है, उनको भी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, लगातार एक तरफ से गोलियां आ रही हैं, लेकिन एक तरफ से ज्यादा गोलियां जा रही हैं। ये भी आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। दी पाकिस्तान के कई मिलिट्री पोस्ट उड़ा दी गई हैं। अब आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं अफगानिस्तान की ओर से जारी किया गया। ये देखिए, जोरदार ब्लास्ट, भीषण। तो अफगानिस्तान की जो आर्मी है लगातार फायरिंग कर रही है। एक के बाद एक जो तस्वीरें आ रही हैं, एक बार सुनिए, ये देखिए। तो पाकिस्तान को अफगान ठोक रहा है, यानी लगातार मार रहा है। लेकिन अब मुनीर की सेना भारत पाकिस्तान चिल्ला रही है। क्यों, समझाते हैं, जरा समझ लीजिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में करीब 400 मौतें हो चुकी हैं और इसका दावा दोनों देशों की ओर से किया जा रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि हमारे एक्शन 330 से ज्यादा तालिबान लड़ाके मारे गए हमारे एक्शन में। पाकिस्तान ने तालिबान को भारी नुकसान होने का दावा किया है। इतना ही नहीं, तालिबान ने भी पाकिस्तान में तबाही मचाई है। 75 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। दोनों ओर से मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऑपरेशन जारी है अभी। लेकिन अफगानिस्तान से पिटता पाकिस्तान फिर वही राग अलाप रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर से इस जंग में भारत को घसीटने की कोशिश की है। पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी, नाम शरीफ चौधरी है नहीं,
तो इन्होंने आरोप लगाया है कि कहा कि देश में होने वाले आतंकी हमलों के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान ने झूठा आरोप, प्रोपेगेंडा होता है, ये जो झूठा आरोप लगाया है उनकी जमीन पर हो रहे आतंकी हमले के पीछे भारत की फंडिंग, मदद और डिजाइन है। इन गतिविधियों के लिए अफगानी क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी प्रवक्ता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले भारत में इस तरह हमला करने की आदत देखी गई और अब अफगान तालिबान में भी यही आदत आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटा पाकिस्तान यहां भी भद पिटवा रहा है। कहता है भारत को जवाब दिया, अब अफगानिस्तान में कार्रवाई कर रहे हैं। भारत पर कुछ ऐसे ही आरोप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी लगाए हैं। अपनी रक्षा नहीं कर पाते लेकिन हैं वो रक्षा मंत्री। तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के झूठे दावों को बेनकाब कर दिया है। कहा है कि भारत से हमारे अच्छे रिश्ते पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं। भारत सरकार भी पाकिस्तान के दावों को झूठा बताता है। अब जो अफगानिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय क्या है, क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा, सुनिए। भारत के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं किया जाता। झूठ की प्रचालितों का बांधी औबिया पदे बांधी, लोग सुकून से रह ही नहीं पा रहे। दुर्दाना ये चक्कर किया है, मतलब कभी भारत के साथ हमारा कुछ टाकरा चल रहा होता है और जब हम आराम से बैठे थे तो अब अचानक से अफगानिस्तान। मतलब ये क्या मुल्क है कि जो जब पिटाई होती है तो कहते हैं हम बात करना चाहते हैं। अभी अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने भी कहा है कि वो डायलॉग चाहते हैं टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबरिंग पाकिस्तान। क्यों डायलॉग चाहते हैं? तो युद्ध को लेकर लगातार आप सभी को अपडेट कर रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया पर यह महा कवरेज जारी है, चाहे इजराइल और ईरान के बीच जंग की बात हो या चाहे पाकिस्तान और अफगानियों की। लेकिन आगे बढ़े खबरों में इस वक्त सीधा नजर डाले थे हेडलाइंस पर, देखिए जरा। मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध से पूरी दुनिया में हड़कंप। इजराइल और अमेरिकी हमले में ईरान के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के मारे जाने की खबर। ईरान ने कहा नहीं थमेंगे जवाबी हमले। रात 2:30 बजे संयुक्त राष्ट्र परिषद की आपात बैठक। ईरान के हमलों से थर्रा गया दुबई। पूरे दिन गूंजते रहे धमाके। दुबई के एक होटल पर गिरी मिसाइल। शहर से निकलने के लिए एयरपोर्ट पर जबरदस्त भीड़। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मचाया हाहाकार। इजराइल के साथ साथ कुवैत, यूएई, बहरीन और सऊदी समेत कई देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को टारगेट बनाया गया। ईरानी जनरल सरदार जब्बारी की बड़ी धमकी, कहा जल्द अनदेखे हथियारों का करेंगे इस्तेमाल। इजराइल ने ईरान के मिनाब में एक गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाया है। हमले में 85 छात्राओं के मारे जाने की खबर है। बड़ी संख्या में छात्राएं घायल हैं। जी तो युद्ध जारी है। नमस्कार, मैं इस वक्त आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। दुनिया की हर बड़ी खबर, यानी सबसे बड़ी खबर कह लीजिए, उसको लेकर हाजिर हूं। अभी 10 बज रहे हैं, लेकिन 14 घंटे पहले आपको बता दें, सुबह ठीक 8 बजे ईरान की राजधानी तेहरान पर अमेरिका ने धावा बोल दिया, अटैक कर दिया। सैन्य इतिहास में पहली बार है जब किसी देश पर दिन के उजाले में हमला हुआ हो। ईरान पर हुए हमले पर यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी बैठक बुला ली गई है। जी, युद्ध को यूनाइटेड नेशन ने विश्व शांति के लिए खतरा बताया है। पिछले 50 दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ती जा रही थी, या बढ़ गया है एकदम फुल फॉर्म में, और आज ये टकराव मिसाइल की शक्ल में सामने आ गई है, जो हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने पिछली बार की तरह रिटेलिएशन में वक्त नहीं लगाया। उसकी मिसाइल्स तैयार खड़ी थी, टॉप लीडरशिप ने ऑर्डर दे दिया और मिसाइल्स इजराइल से लेकर अमेरिकी बेस तक को तबाह करने लगी, निशाना बनाने लगी। किसके हमले में कितनी मौत हुई, इसके क्लियर आंकड़े सामने अभी तक नहीं आए, लेकिन इतना जरूर है कि लहू तो बहा है, लाशें तो बिछी हैं, और अब यह युद्ध क्षेत्रीय युद्ध से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि रूस और चीन ने ईरान के सपोर्ट में बयान देना शुरू कर दिया, और आज बयान आया कल हथियार आ सकते हैं। तो क्या यह महाजंग की शुरुआत है? क्या यही
विश्व युद्ध है। जिसका डर था वो हो गया। इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने इजराइल समेत 8 देशों पर हमला कर दिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों वाले देशों पर मिसाइलें गिरा दी। अब ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं तो भला और क्या है? कतर में यूएई बेस पर हमला। बहरीन में अमेरिकी बेस धुआं। सऊदी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई। दुबई तक ईरानी मिसाइलों की बौछार हुई। जॉर्डन, इराक और कुवैत में भी ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। अगर ये महायुद्ध नहीं, ये बड़ी जंग नहीं, ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज नहीं तो भला और क्या? आगे कुछ भी सुनने और समझने से पहले ये धमकी सुन लीजिए, क्योंकि दुनिया ने अभी जो कुछ देखा, ईरान के मुताबिक वो सिर्फ एक ट्रेलर है। यानी युद्ध का दायरा और बढ़ने वाला है। ये युद्ध और भीषण होने वाला है। ट्रंप को समझ लेना चाहिए कि आज जो हमने मिसाइलें दागी हैं वो सिर्फ हमारी पुरानी मिसाइलों का जखीरा है। जल्द ही हम ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो दुनिया ने कभी देखी भी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि ईरान चुन चुन कर बदला ले रहा है और उसकी तैयारी पहले से थी। जैसे ही जिनेवा में तीसरे दौर की बात बेनतीजा रही, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमले शुरू कर दिए। फौरन ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह अमेरिकी एयरबेसों की तरफ खोल दिया। वो ये जानता है कि उसकी मिसाइलें अमेरिकी मेनलैंड यानी अमेरिकी शहरों तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए उसने उन बेसों को ही टारगेट किया जहां अमेरिकी सैन्य जमावड़ा मौजूद है। वो भी तब जब अमेरिका बार बार ये कह रहा था कि अब ईरान को हथियार डाल देना चाहिए, खामनेई को बात मानकर सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन ईरान का प्लान अलग है। वो इस जंग को कहीं आगे, बहुत दूर तक ले जाना चाहता है। कैसे ये दायरा बढ़ता जा रहा है इसको यहां पर देखिए। ईरान के इर्द गिर्द जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं उसमें कतर को निशाना बना दिया गया है, सऊदी अरब को निशाना बनाया गया है, बहरीन बिल्कुल जो कतर के बराबर है जहां पर बड़ी तैनाती अमेरिकी फोर्सेस की है वहां पर टारगेट किया गया है। कुवैत जहां पर कहा जाता है 10,000 के करीब अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं, वो जगह टारगेट की गई है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई को यहां पर टारगेट किया गया है और यमन और इराक ये बताया जा रहा है कि ये भी यहां पर निशाने पर है। यहां पर भी अटैक ईरान की तरफ से किए जा सकते हैं। मतलब साफ, ईरान का हमला हुआ तो वार पलटवार का सिस्टम ऐसा हुआ जिससे पूरा इलाका दहल उठा। लोगों में चीख पुकार मच गई। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दुबई एयरपोर्ट की है, जहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मिसाइलों की बौछार दुबई तक पहुंचती दिखाई दी। इस बीच खामनेई के पुराने वीडियो और उनकी पुरानी स्पीच एक बार फिर फ्लोट होने लगी, जिसमें वो ट्रंप को लगातार नरसंहार का दोषी बता रहे थे, शांति का दुश्मन बता रहे थे। जिस तरह की बातें वो कर रहा है वो ना सिर्फ खुद उसके लिए शर्मनाक है बल्कि अमेरिकी लोगों के लिए शर्मिंदगी का सबक बन गया है। मैं उसकी कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। ट्रंप कहता है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल शांति के लिए करना चाहता है। वो झूठ बोल रहा है। ट्रंप ने अपनी ताकत का इस्तेमाल गाजा में नरसंहार के लिए किया। इन बयानों के साथ ईरानी मीडिया में मिसाइल अटैक के वीडियो जारी किए जाने लगे। यह बताया जाने लगा कि ईरान अब किसी कीमत रुकने वाला नहीं है। खामनेई की टीम यह मैसेज दे रही थी कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके बड़ी गलती कर दी। ईरान ने कहा कि उसकी आर्म्ड फोर्स हमलावरों को उनके किए पर पछतावे के लिए मजबूर करने को पूरी तरह तैयार है।
ईरानी सेना की तरफ से कहा गया कि इस लड़ाई को अब वो अंजाम तक पहुंचाएंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, इजरायली हमलों ने देश की एकता और राष्ट्रीय संप्रभुता को निशाना बनाया, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को उनका भी कहना था कि उनका मिलिट्री ऑपरेशन दुश्मन को पूरी तरह हराने तक जारी रहेगा। IRGC का तो यह तक दावा है कि मिडिल ईस्ट में इजरायली और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर शक्तिशाली हमला किया गया और ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। अब्राहम लिंकन, ये एक बड़ा यहाँ पर इनका करियर है, यहाँ पर मौजूदगी है इसकी। यूएस मैकफॉल वॉरशिप इनकी यहाँ पर मौजूद है और ये बड़े 2 वॉरशिप जिससे अमेरिका टारगेट ईरान को कर रहा था, ये नहीं कोशिश कर रहा था, उसका जवाब ईरान कैसे दे रहा है। यहाँ पर एक बड़ा जो पोर्ट है, बड़ा जो बेस है अमेरिका का, यहाँ पर बहरीन के अंदर डिस्ट्रॉयर और कॉम्बैट जहाज यहाँ पर तैनात रहते हैं अमेरिका के। खलीफा बिन सलमान पोर्ट इसको कहते हैं, वो इसका नाम है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए जो कतर है, वहां पर किस तरह की तैनाती रहती है। नया एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर लगाया गया है, अल उदीद एयरबेस अमेरिका का है, लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम कितना काम कर रहा है ये यहां पर देखना होगा, क्योंकि मिसाइल गिरने की खबर है यहां पर ईरान के। इसके अलावा आप ओमान में देखिए, वहां पर भी तैनाती अमेरिका की है, यहां पर एयरक्राफ्ट स्टेशन है उनका बनाया हुआ। इसके ऊपर आप आइए तो जॉर्डन के अंदर फाइटर जेट तैनात उनके रहते हैं। हालांकि जॉर्डन भी टारगेट पर हो सकता है ईरान के, अभी फिलहाल जानकारी नहीं है कि वहां पर अटैक किया गया नहीं किया गया है। और यमन जहां पर अमेरिका का फोकस रहता है, ये भी टारगेट किया जा सकता है। ऊपर मौजूदगी इराक, तो आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में पड़ने वाला मुल्क है, यहां से ऊपर से गुजरती हुई मिसाइल ले जाती हैं अगर इजराइल जो है वो अटैक करता है ईरान के ऊपर। तो ये क्षेत्र है पूरा का पूरा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस लड़ाई का विस्तार हुआ तो बड़े जो इंपॉर्टेंट टेल के रूट हैं, एक ये रास्ता जिसका इस्तेमाल होता है और एक ये रास्ता जहां पे अगर लड़ाई फैलती है तो उसका खास तौर पर क्रूड ऑयल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता। इन्हीं हथियारों का दम पर जंग का दायरा बढ़ चुका है। अब सवाल है कि एक तरफ अमेरिका के हजारों जवान हैं, इजराइल की तकनीक है, फाइटर प्लेन्स है, अमेरिका के 2 बड़े युद्धपोत हैं और दूसरी तरफ ईरान है। सवाल है, क्या ईरान अकेला लड़ेगा? क्या कोई साथ नहीं आएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार फिर ईरान के साथ रूस खड़ा दिखाई दिया। रूस ने ईरान पर हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि वो इस मसले को समाधान के लिए आगे ले जाएगा। हम एक महान राष्ट्र हैं और हमारी महान सभ्यता है। हम कई सालों से इसी तरह आगे बढ़ते आए हैं। हम जानते हैं कि खुद को कैसे डिफेंस करना है, किस तरह अपनी रक्षा करनी है और किस तरह बचना है। अब सवाल तो यह भी है कि अगर जंग को आगे खींचना है तो ईरान के पास अगला ऑप्शन क्या है, वो किन हथियारों की बात कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपने शाहिद 136 ड्रोन को एक बार फिर री इन्वेंट किया है। रिपोर्ट्स में दावे हैं कि ईरान का यह ड्रोन अब रडार को चकमा दे सकता है। तो क्या इसी तरह के हथियारों के दम पर विनाश की रेखा खींची जाएगी? इस्लामिक क्रांति की सालगिरह पर आपने ईरान का सिर फक्र से ऊंचा किया है। आपने ईरान की ताकत में और इजाफा कर दिया है। वो दुश्मन जो ईरान को घुटनों के बल लाना चाहता है, अब वो हताश हो चुका है। आज के दौर को देखते हुए हमें ईरान की एकता कायम रखनी है और अपनी पहचान और चरित्र दुश्मन को दिखाना है। इस बीच चीन ने भी ईरान पर हमले की निंदा की है। यानी एक तरह से अमेरिका के खिलाफ पुतिन और जिनपिंग सामने आ चुके हैं। सवाल है, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट वाली जंग का आगाज हुआ, इसका अंजाम कैसा होगा? क्योंकि अमेरिका हो, चीन हो या फिर रूस, तीनों ही न्यूक्लियर महाशक्तियां हैं और अगर एक बार ईरान के नाम पर महाशक्तियों का टकराव हुआ तो बात रीजनल वॉर से निकलकर परमाणु युद्ध तक जा सकती है और फिर यही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज बन सकता है। और अभी जब आपको ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं तभी एक बड़ी खबर आ गई और इसको जानने के लिए सीधा हम लिए चलेंगे अपने सहयोगी नगमा के पास। आपको जी नगमा, ओवर टू यू। आशुतोष, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि दुबई में बहुत बड़ा धमाका हुआ है और पूरी दुनिया की निगाहें दुबई पे लगी है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत के पास धमाका हुआ है। बुर्ज खलीफा के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। बुर्ज खलीफा के ठीक सामने ये धमाका हुआ और धमाके के बाद उठाए धुएं का भारी गुबार। और दुबई से ये खबरें आ रही हैं कि लोग काफी परेशान हैं। रिहायशी इलाकों में घरों की खिड़कियां और दरवाजे जो हैं वो हिल रही हैं। लोग मस्जिदों तक नहीं जा पा रहे हैं नमाज के लिए। बहुत लोग पासपोर्ट्स और बैग तैयार करके रखे हुए हैं कि कैसे भारत सरकार उन्हें इवैक्यूएट करेगी और प्रधानमंत्री की ओर निगाहें लगी हुई हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक सेन गुप्ता दुबई से और हमारे साथ इस वक्त राहुल कुलश्रेष्ठ भी जुड़ गए हैं। और वहां का हाल इस वक्त बताइएगा कि क्या हाल है। जो खबरें आ रही हैं दुबई से, बहुत बड़ी तादाद में वहां पर भारतीय रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा बड़ा है। किस तरह का इस वक्त दुबई में क्या हालात हैं? नगमा, अभी मैं
बुर्ज खलीफा पे ही था 5 बजे से लेके करीब 7 बजे तक। और उस समय ऊपर एक बार कुछ धमाके की आवाज आई थी। नीचे आने के बाद देखा अभी तक तो मॉल में सब बिल्कुल शांति से चल रहा है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। वहां से मैं वापस आया हूं, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ पाम पे एटलांटिस में। तो एटलांटिस के पास है फेयरमॉन्ट। वहां पर अभी जब मैंने क्रॉस किया तो ऊपर जो सिक्योरिटी ड्रोन्स हैं वो उड़ रहे थे, थोड़ी इमरजेंसी की गाड़ियां थी, लेकिन सड़क पे अगर आप देखिए तो जनरली मतलब सब कुछ काफी नॉर्मल सा चल रहा है, कोई इतनी भगदड़ और परेशानी टाइप नहीं लग रही है। जी राहुल, ये भी खबर आई थी पाम जुमेरा के पास जो एक हमला हुआ, बहुत ही एक पॉश इलाका है वहां का, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। नहीं तो मैं उसको क्रॉस किया था, जब क्रॉस किया था तो जो मैंने वीडियो देखी थी जिसमें आग लगी हुई है, उस साइड से कोई आग तो नहीं लगी है। वहां सिक्योरिटी की गाड़ियां खड़ी थी, इमरजेंसी की गाड़ियां खड़ी थी और ऊपर ड्रोन उड़ रहे थे, इनकी सिक्योरिटी ड्रोन। बुर्ज खलीफा के सामने धमाका हुआ, यानी कि बिल्कुल शहर के बीचों बीच। जी दिखाइए। अगर आप मेरे पीछे देखें तो वो जहां लाइट्स दिख रही हैं वो है फेयरमॉन्ट का इलाका। जी ये तस्वीर बिल्कुल आपके पीछे में दिखाई दे रहा है, ये फेयरमॉन्ट होटल की बात कर रहे हैं आप, जहां पर ये आपको जब तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और ये भी खबर आई है, राहुल धन्यवाद आपका, ये भी खबर आ रही थी कि वहां पर जो बुर्ज खलीफा है उसके सामने भी धमाका हुआ है। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं राहुल, आप हमारे साथ रहे हैं, अभिषेक सेन गुप्ता भी दुबई से जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरह का वहां पे हाल है ये भी जानेंगे। अभिषेक इस वक्त नहीं है, पर राहुल मैं आपसे और इसके बाद भी बातचीत जारी रखना चाहती हूं कि क्या सिचुएशन दुबई की है। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है उसके ऊपर अब ये लग रहा है कि बिल्कुल हालात जो है उस पूरे इलाके में फैल गए हैं। और दुबई वो जगह जहां से दुनिया भर की फ्लाइट्स जाती हैं, एक अफरा तफरी है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर से निकलना चाह रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दुबई की दिखा रहे हैं और राहुल आप भी तस्वीरें देखेंगे। ये जो तस्वीर आ रही है इसके बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे क्या इलाका है यहाँ पर जो आप हमें दिखा रहे हैं इस वक्त? एयरबेस कितना दूर है शहर ये जो रोड है, ये रोड है जो जुमेरा से, जो दुबई से पाम की तरफ आती है और इसी के राइट साइड पे है फेयरमॉन्ट होटल। जी ये रफली यहाँ पर फेयरमॉन्ट होटल है। जी बताइए, और यहाँ पे क्या हुआ, क्या देखा आपने, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा। और दुबई शहर का क्या हाल है इस वक्त? नगमा, हमने ऐसे कुछ देखा नहीं है, लेकिन जब हम होटल के कमरे में पहुंचे हैं तो 3 धमाके हुए थे, उसकी आवाज आई थी, देखने को कुछ नहीं मिला था। अब वो धमाके कहाँ हुए हैं, क्या हुआ है, वो एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तो हम अब ये तस्वीरें देख रहे हैं, हम हमारे साथ बने रहे। मैं एक बार अपने दर्शकों को ये in parts of the United Arab Emirates, in Qatar as well, in Kuwait as well, indicate that there has been an element of effectiveness of these Iranian counterattacks, but the death toll fortunately has been low. Where the death toll has not been low is an attack on a school of children in Iran, where between 80 and 100 children have lost their lives. Now that is very, very sad. News that has come in and it's now more or less been confirmed. The numbers go between 80 to 100 is what we are being told right now. In the evening, just in the last little while, Reuters and now several agencies are saying that the Iranians are cutting off the Straits of Hormuz. This is a worst case scenario because 20% of the world's oil flows through the Straits of Hormuz. At some stage, we'll try and bring up a map of the Straits of Hormuz because it is a geographical choke point, and if Iran, which lies to the east of the Straits of Hormuz, uses its maritime drones or other drones to try and shut it down, there would be an immediate impact on oil markets. So that is a cause of serious concern. Remember, everything that the United States and Israel has been doing so far has been by using air power, as it were, but to physically get the Straits of Hormuz open, should that be required, might require boots on the ground. I'm just speculating, but this is a frightening reality. The other key point, as a result of this, air travel globally has been impacted. India has stopped all flights of all airlines to the Middle East, to all destinations.
Dubai International Airport has been shut, along with other airports in that area. Emirates, one of the world's largest carriers, has been shut. Flights from India to Europe are taking a much longer route through Saudi Arabia and then north across the Mediterranean. They used to fly across Iranian airspace in the past, so those routes are now impacted. No flights to the Middle East, back and forth. Ultra long haul flights to the west coast of the United States and Canada, those are likely impacted quite badly as well. So that is the situation that we see. We do not have accurate casualty counts in terms of what has happened in Israel, where the missile shield, from all accounts, appears to be working quite well. So lots of developments in the last several hours as we see this footage. And this is what I was talking about, of a property in Dubai which was actually struck, and a drone possibly struck a part of the Burj Al Khalifa, one of the most iconic buildings anywhere in the world. So that is the situation today. If you're asking how long is this going to last, there are various ways of looking at it. Number one, it could last for perhaps no more than 4 to 5 days, because both sides have a limited amount of munition. Iran cannot be firing ballistic missiles endlessly, or hypersonics endlessly, and surface-to-air missiles. Israel doesn't have an infinite supply, nor does America. So it is at one level a battle of attrition. Shiv? Very, very true, Vishnu. Before I just get into that hugely serious point, I want to tell all of our viewers, and this is a very important disclaimer to make right now, and I'm going to have it written across different parts of our screen, that there is an absolute unstopping stream of visual information, claims and counterclaims coming in from Israel, Iran and elsewhere right now. Old videos, new videos, a lot of AI coming in as well. So I want you to be cognizant of the fact that NDTV is doing everything it can to make sure that we're getting you only accurate pictures. There may be a couple of slips, but we will correct them as quickly as we possibly can, because we're doing this in real time and it is extremely difficult, but we will and are doing our absolute best to bring you accurate information. Vishnu, you wanted to comment on that? We've got some breaking news coming in. Massive disruptions on Air India's fleet. AI-1, and this is tomorrow, AI-161, 162, AI-111, which is the flagship flight. Delhi to London impacted, Mumbai to London impacted, Amritsar to London impacted. By impacted I mean cancelled. London to Amritsar cancelled, Delhi New York cancelled, New York Delhi cancelled, Mumbai New York cancelled, New York Mumbai cancelled, Mumbai Newark, and New York Mumbai cancelled, Delhi Chicago cancelled, Chicago Delhi cancelled, right? Delhi Toronto and Toronto Delhi cancelled, Delhi Frankfurt, Frankfurt Delhi cancelled, Delhi Paris, Paris Delhi cancelled as well. These are all cancelled flights. So what I reported just a few minutes back, and this was based on information from Air India, that they were taking a longer route and they were getting to Europe. They are not doing that right now, because as we've seen in the Indigo crisis a few months back here in India, a few weeks back here in India, there is a cascading impact on civil aviation, and it doesn't impact one Indigo, it impacts airlines across the world and across the region. There are any number of flights which are unable to operate or have been unable to operate over the Middle East, which have made landings in other airports across Europe and other places. There would be a capacity crunch in those airports as well. So this is an absolute meltdown. If you are planning to travel outside India, you had best check with your airline on the status of those flights. Now, more pictures coming in of Dubai as well. I'm just seeing another picture of of this missile or drone striking the base of this hotel that we've been talking about. One final point before I go back to Shiv is hypersonics are now in use. Hypersonics are the most powerful weapons Iran presently has. They travel at great speeds. There is a distinctive they look very distinctive when they fly. You can actually see this aura, in a sense, around them. We've got pictures of that. We'll try and get more details of that in a little while from now. The loss of lives is the most critical aspect in all of this. There has been a tragic loss of lives in Iran among school children. We do not have
a confirmed loss of life in any of the other areas. But I think the larger point, and Shiv come in on this, is that the way Iran is responding to the attacks on its soil is that it sees this as an existential battle. They are not holding back, as they did in the last couple of years, on their military firepower. They have attacked all of these countries. It's the most widespread series of attacks in the Middle East since, I would suggest, the Second World War, right? And they're calling it Operation Truthful Promise 4, Vishnu. Truthful Promise 4 is the code name of the retaliation by Iran, which is a carefully chosen name. Truthful Promise 4. So the 3 times before this, Iran is basically saying that their existence has been under threat and that they have promised their people that what the West wants and what the hegemonic Israelis and the West wants will never be allowed to become a reality, and that's why they've called it Truthful Promise 4. You're absolutely right. You're absolutely right. The fact that Iran has chosen the targets that it has, whether it is the Kuwait International Airport, images of which are going to be landing in just a moment, Vishnu, Dubai, Qatar, Bahrain, Abu Dhabi as well, all suggest that Iran has been primed and ready for Truthful Promise 4 for many weeks, perhaps months now. So as we look at all these pictures of various weapons, streaking across the night sky towards different targets, including in Israel, Vishnu is absolutely right. Iran has been in a kind of geopolitical pressure cooker for a very long time. They've been struggling to make that supply chain work to get their weaponry and arsenals up to scratch for this kind of offensive operation, and that's what we're actually seeing play out now. Vishnu, I just wanted to point out that in video after video, we're looking at it's just all pouring in now, Shiv. It's just it's pouring in. Okay, now we've got an update from Reuters coming in. The US and Israel attack. Okay, Trump confirms a major. Sorry, so this is a bit older. This is known. I beg your pardon. There's all sorts of news coming in now. No, I think the point I wanted to make and talk to you about was to the question on how much longer this is going to last. At this stage, it's anyone's guess. And I think the larger question is, if this was a decapitation attempt, if it was a regime change attempt, what guarantee is there, and I've been asking this all day, that people in Iran who may hate the regime of the Ayatollah Khamenei would necessarily be okay with what America is doing to their soil? There doesn't appear to be any guarantee of that. So will air power alone be able to change the minds of people over there? Why would Iran not have a succession plan? And given the extent of the videos that we are seeing from Iran, the strikes have been much more successful than in the past. There has not been 100% interception of all incoming ballistic or hypersonic missiles. Therefore, the loss of lives in this region, one of the most prosperous in the world, for so many reasons, is something that we really need to get into. How long is this going to last? This is the world. I mean, you read about this, Shiv. We would have read books about this, right? Yeah. Novels about this, about some crazy scenario developing, the Straits of Hormuz cut off, it results in a disaster and a war and somebody wins. It's happening in front of our eyes. It's happening in front of our eyes, and Vishnu, I've just gotten information that many of the videos that we've looked at, including the bombing of the 5th Fleet Naval Headquarters in Bahrain, to the drone that has struck downtown Dubai, those are all Shahid drones. Vishnu, this is actually a very interesting little nugget that I want to bring up, and I want your views on that, because the Shahid drone are these small kind of loitering unmanned combat vehicles, kind of suicide drones that the Iranians have developed, which are being used to devastating effect if they've been able to penetrate fairly sophisticated air defenses in some of these big cities. And these are slow moving drones. These are not even fast moving missiles or projectiles, Vishnu. I can count 3 videos where these Shahid drones have apparently hit their targets.
I've got a bit of a write-up, just one sentence or two sentences on the Shahid drones, and I think it answers your question. As of early 2026, these drones have evolved from simple flying mopeds into sophisticated ecosystems of jet-powered variants, mesh network swarms, and even Western-produced clones. That's how sophisticated these are. This weapon system, and remember, it costs a fraction of the price of a single missile which can intercept it, deployed in this variant, in this avatar, over significant ranges, causes massive damage, as you can see. It's quite something. They've got ranges up to 900 kilometers plus. I beg your pardon, some of them, for example, the Shahid 136 can go up to 2,500 kilometers, right? 2,500 kilometers. That's what these can do. They've got airburst warheads as well, right? They've got mesh networking, right? They utilize relay drones and airborne modems to form an airborne mesh network. Swarms of these can fly together, and Iran has got any number of these. And they've been used in the war in Russia, Ukraine as well. And this is going to be a real headache. I'd also like to make one more point. In as much as all of these countries, the United Arab Emirates, Qatar, they've got formidable air defenses. It's not in the same league as what Israel operates, even though the Americans have deployed their THAAD, Theater Air Defense Missile System, to take on ballistic missiles. Israel itself is much better armed, and in the numbers that they seek. The number of attacks that you're seeing in a place like Dubai and elsewhere, it just indicates the sophistication of the Iranian attacks has gone up. People will not be talking about this. They will be talking about the great defenses which have taken place. But I think we need to pause and understand the significance of what is happening at this time. These are significant attacks. Attacks on Iran, attacks across a host of countries. It's all happened in the last couple of hours. This situation looking to get far worse before it gets any better. Shiv? Vishnu, I'm going to bring on our experts onto our coverage tonight because this is a situation that appears to be escalating with the pictures coming in. Again, a small disclaimer. Some of these pictures, some of these drone hits are not from precisely this moment. They are from minutes, even hours ago. We're depicting them. We'll try and get you accurate time information as well, so you have an accurate sense of when this is taking place, and not as if it is a runaway kind of situation. Things are, we are told, calm in many of these cities, but there are developments which we are reporting. Welcoming onto our coverage tonight, Ryan Ball is a senior Middle East and North Africa analyst at RANE. Daniel Carman is former Israeli ambassador to India. Natasha Hausdorff is a British barrister and lawyer. Brigadier General